It's going to all culminate here. Many legends have made their name and found their fame in Paris. The game's going to be sick, I have no doubt about it. We welcome more rosters to the mix to find out who is ready for the Accor Arena. It would be an understatement to say we are excited to get the show on the road. Heroic is a journey of a long, lengthy progression and improvement. Just when you thought Apeks had it, Cadian crushes them. Heroic are going to the playoffs here in Paris. If you're a Vitality fan, why would you not be allowed to dream right now? Oh my god! World-class clutch coming in from Saiwoo! Vitality, they're at the champion stage. 9 eliminated in a 2-0 no less. The hopes of Brazil, gone. Today, 3 teams will safely reach the champion stage. My heart's pounding. Monte are very much the real deal. Grinding their way to victory, securing the champion stage. This is the first real test. What level can Liquid play at? Securing the playoffs for the first time since 2019. I have relatively little confidence in their ability to punch through the top 10. GamerLegion have managed the impossible! Ends falls at the final hurdle. For Bad News Eagles, it is an absolutely heartbreaking loss. Unfortunately for G2, it's over. The final day of the Legend stage at the Blast TV Paris Major. We are not lying when we are saying emotions are running high here. I want to see FaZe bounce back as well. FaZe, they made the comeback into overtime, into double overtime, and they have done it. Heads will roll as ITB pull up in Paris. Into the breach, have done what no UK team has done before. We've got a team here who have a moment to just peak right here, right now. The most triumphant arc in Paris is that of Apeks. Unfortunately, it does end in heartbreak for the side of Navi. Fnatic, we say goodbye to them. This game is one of heartbreak for NIP. This is it. All to play for, one last trophy to lift. Anything can happen. Bonjour l'Accor Arena! What's going on, guys? Bonjour les Golden Hornets! To all of you watching us around the world, to you, James, welcome in France, welcome in Paris, welcome for the first ever CSGO Major in France! And it is going to be a special one. This is what we've been waiting for. We've already seen it across the previous stages. We've seen the emotions. We've seen teams fall who you expected to see on this stage. We saw other teams rise up and conquer. And it all comes down to this and our final 8 teams. James, les gars, dans le monde entier, on pense que Counter-Strike est mort en France pendant 4 jours. Pendant 4 jours, vous allez montrer, on va leur montrer que Counter-Strike en France, c'est l'avenir, que c'est aujourd'hui que ça joue et que le futur se construit maintenant avec vous. We're starting with our quarterfinals today, and the 8 teams we have battled fiercely. Starting with FaZe Clan. In the last chance qualifier, they almost didn't make it to the major. Then, 1 round from elimination, not once, but twice, and winning it out in overtime to secure their spot here, to have a chance to lift a trophy again. Maybe. Into the breach. The story is starting
Okay. The story starts in February in the first qualifier. Since they are doing amazing, they are the underdogs. And for the first time in the major history, a British core is making it through the playoff. And you know what? They still believe it's coming home. We always believe it's coming home, that's for sure, when it comes to a British side. But Monte, a team that was rising up in the face of adversity. They came to this event without their coach. They changed IGL and they conquered serious opposition, including Na'Vi, who they demolished in that Ukrainian derby. The next one is Apeks. From the close qualifier to the legend, it has been a difficult path for them to go through the playoff. Their strength, they punish every mistake. They certainly do. Now for Team Liquid, North America's finest. They believe that they can do it, and this is their chance. They went from 0-2 and near elimination to dominating in the Legend stage to make it for the first time since 2019 to a major playoff. They've got America on their backs, and they've got America's hopes and dreams as well as their own to try and make a reality. A special one, GamerLegion, led by a future crack of Counter-Strike. They were close to be eliminated in the Challenger, and they are now dreaming about the trophy. L'Accor, ça sera un moment un peu spécial pour l'un des joueurs. Il est belge, il a été formé dans le CS français, il brille aujourd'hui avec une équipe internationale, il va jouer devant sa famille. On compte sur vous pour les encourager. Guillaume certainly has some fans in there to support him and the GamerLegion team. We also have Heroic. Right now they sit there with silverware still on their minds. The last major is still sitting there, eating away at their insides as they want to lift a major trophy. They want to make that dream happen. They have been consistent. They have been delivering time and time again. Is it finally their time? And the last one. Vitality! A Parisian club fighting to lift their first trophy, their first major trophy in Paris. Ils sont emmenés par des légendes danoises, par la puissance de feu israélienne et par un capitaine, le dernier escapé de la golden génération du CS français. Et bien sûr, James. These teams have given their blood, sweat and tears to this game to make it this far. But glory is only obtainable for one team. It's time for the last CSGO major. The pinnacle of competition. The gateway for legends. Its trophy, a maker of kings. Counter-Strike in my life for 15 years. I've been playing this game for 2/3 of my life. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike. I live and breathe it. CS will be in my life forever. I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's
what I've always done. It's my whole life. And I wouldn't have most of the things that I have in my life right now if I didn't have CSGO. 10 years of Counter-Strike majors, 10 years of legendary plays. Paris, the last chance, the last moment, the last time to crown a major winner in our beloved game. Are you ready for Counter-Strike?
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का पेरिस मेजर 2023 में। मेरा नाम है रंजीत मामा सीनियर पटेल और मेरे साथ अभी जुड़ने वाले यूफोरिया, और हम आपके लिए कवरेज लेके आने वाले पेरिस मेजर की पूरी कवरेज इन हिंदी ऑफ कोर्स। और यूफो, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कैसे हैं आप? I'm really excited, Abhi. Okay. Yep. So thank you so much, Mamba, for the warm welcome. And I'm really excited. CSGO is a legendary event and apparently ये last CSGO का major है. तो बहुत excited भी हूँ, दुखी भी हूँ. पता नहीं कैसे बताऊँ आपको. जी हाँ, लॉन्ग डे खड़े हो जाते हैं जब आप सोचते हैं कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का लास्ट मेजर होने वाला, अगला मेजर अगले साल जनवरी 2024 में होने वाला है, which has been announced that will happen on Counter Strike 2. लेकिन ऑफ कोर्स आज की जो मैच होने वाली है, फेज वर्सेस हीरोइक क्वार्टर फाइनल्स विद अ गेम विद एन ऑरा ऑफ द फाइनल्स, यहाँ पे ये दोनों टीम है बहुत शानदार टीम्स हैं एंड बहुत मुश्किल होने वाले हमारे लिए भी प्रेडिक्ट करना कौन सी टीम यहाँ पे जीत के आएगी। लेकिन रेटिंग की अगर बात करें, कैडियन ऑफ कोर्स अपनी टीम को आगे से लीड कर रहे हैं, उनके सामने कैरिगन, दोनों डेनिश प्लेयर्स अपनी टीम्स को आगे लीड करने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ कोर्स उनको जाना है आगे। आई एम नॉट श्योर अगर आपने फॉलो किया कि नहीं किया, लेकिन केडियन ने एक बहुत इमोशनल स्पीच दी थी जो 2 या 3 दिन पहले काफी वायरल हो गई थी। रो रहे थे बताते ट्विटर पे। और ऑफ कोर्स उस तरीके की पैशन देखने में जो मजा आता है वो आपको कहीं और देखने नहीं मिलता। नहीं, आई थिंक मतलब जो डैनिश प्लेयर्स हैं ना इन जनरल, वो एस्ट्रालिस के टाइम से जो लोग कनेक्टेड हैं उनके वहाँ के सीन के प्लेयर्स के साथ, दे नो हाउ पैशनेट एंड यू नो सीरियसली दे टेक द गेम एंड वो कितना मतलब अपना लाइफ का पार्ट बना लेते हैं इसको। आई डिड सी अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम दैट क्लिप यू आर टॉकिंग अबाउट एंड मैं तो लाइक आई हैव बीन नॉट इन एक्सट्रीम टच विद द गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ मैं फॉलो अप करता हूँ क्योंकि ये लोग लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, ये लोग एकदम शुरुआत से मतलब वही सोच के भी अजीब सा लगता है यार, कहाँ 2013 में जब ये गेम आया था तब से ये लोग खेल रहे हैं एंड अब ये 2023 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गया एंड है मतलब ये इस गेम का। जी हाँ, 10 साल से ज्यादा हो चुका है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलमोस्ट 11 साल होना है। ये आई थिंक जुलाई 2012 में रिलीज हुई थी। बट ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स की हम बात करें, शुश रेटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इनका। इज बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी टीम में सैवन और केडियन की रेटिंग इनसे ज्यादा है, या भी एंटेसिस उनके नीचे है। सो ओवरऑल जब भी जरूरत पड़ी है टीम को इनकी, उन्होंने स्टेप अप किया है। लेकिन अगर मैं प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करूं तो फेस की तरफ से ब्रोकी की चर्चा करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जब भी जरूरत पड़ी है उनको उन्होंने स्टेप अप किया। इस इवेंट में खास तौर पे उनके अगर आप पिछले 3 महीने के स्टैट्स को कंपेयर करें, he's been doing phenomenal। 1.26 की रेटिंग है उनकी। सामने 7 की बात करें तो 7 has been playing really well as well। Yes, ये मतलब एक अच्छा टफ कंपटीशन देने वाले लगता है एक दूसरे को, मजा आएगा। एंड एक चीज और है सरप्राइजिंग, फेस की टीम लाइनअप में 5 अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स हैं, तो यू नो इतना वैरायटी एक लाइनअप में मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम ही देखने को मिलता है। यू नो कैरिगन, रॉक्स, ट्विस्ट, रेन, फिर ब्रॉकी, मतलब इट्स रियली गोना बी अमेजिंग। बट आपको एक जन को तो चूज करना पड़ेगा यार। मामा आप बताओ क्या लगता है आपको, कौन है जो निकालने वाला है ये गेम को? मैं अगर दिल से बताऊं आपको तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे प्रेडिक्ट करना कौन सी टीम जीत सकती है। बिकॉज अब बात करें हीरोइक के बारे में, काफी ज्यादा एग्रेसिव इनकी प्ले स्टाइल रही है, खासतौर पे जब वो सिटी साइड में खेले। इनके अगर लास्ट मैच देखे फेज वर्सेस हीरोइक, जब इन्फर्नो पे खेला गया था, 16-7 का स्कोर लाइन था हीरोइक के लिए। एंड जिस तरीके से डोमिनेट किया था सिटी साइड को हीरोइक ने, वो काफी ज्यादा सराहनीय था। और वो एक ऐसी ब्रांड है काउंटर स्ट्राइक की जो मुझे पर्सनली देखने में ज्यादा मजा आता है। बट एट द सेम टाइम फेज इज नॉट एनी ऑफ दोस टीम्स जो आप उनको बाहर गिन सकते हो। इफ आई हैड टू रियली चूज वन, अगर एक ही टीम मुझे चूज करनी होती तो मेरा ये मानना है हीरोइक माइट जस्ट इंच इट आउट। मैं अगर दिल से बोलूं तो मुझे लगता है ये 3 मैप पर आराम से होने वाला है। बट इन्फर्नो मैप का जो आपने बात किया, कहीं कुछ महीनों पहले फेज ने निकाला भी था हीरोइक के अगेंस्ट वो मैप जो लास्ट प्रीमियर फॉल फाइनल 2022 था। तो क्या पता अभी वापस से उसी जोन में वो लोग चले जाएं एंड हीरोइक को निकाल दें, क्योंकि ऑन पेपर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो या हीरोइक का थोड़ा बल्ला भारी तो है, बट क्या पता फेज आज कुछ अलग लेके आए, क्योंकि यू नो दिस इज वन स्टेज जहाँ पे सबको अपना ऑल इन डालना है, देयर इज नो गोइंग बैक। ये
मतलब किताब का लास्ट पन्ना है, कंक्लूजन है, तो क्या पता फेज हेरोइक को कुछ अलग ही कर दे, क्या पता इट्स जस्ट 2-0। इसके बारे में बहुत समय से चर्चा हो रही है कि दोनों टीम्स, दोनों कैप्टन, दोनों आईजीएल एक दूसरे को, आप कहते हैं लेयर्स में काउंटर प्ले होते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि नहीं हम ये करेंगे तो सामने वाली टीम ये करेगी, उसके रिस्पॉन्स में हम ये करेंगे और सामने वाली टीम उसके रिस्पॉन्स में ये करेगी। सो ये लेयर्स जो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस की जा चुकी है और दोनों टीम्स अगर आप देखें, फेज ऑफ कोर्स आई स्टिल बिलीव उनके पास वो काबिलियत है कि वो हीरोइक को हरा पाए, बट हीरोइक इन दिस टूर्नामेंट स्पेशली वो फेवरेट्स बन के आए। एंड केडियन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको और उनकी टीम को फेवरेट्स कहा जा रहा है, बट दे हैव टू टेक इट वन मैच एट अ टाइम। वो दे कांट गेट अहेड ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज़ दिक्कत ये होगी अगर वो ज्यादा दूर की सोच रहे, दे वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द मैच एट हैंड। तो आई डू बिलीव हीरोइक का जो लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस था इन्फर्नो में खास तौर पे, वो देखने के बाद मुझे लगता है कि फेज को थोड़ी मुश्किल जरूर होने वाली, बिकॉज हीरोइक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खेल रहा था। अब कई रोटेशन ऐसे थे जहां पे आपको लग रहा था कि हीरोइक गैम्बल कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो वाज पेइंग ऑफ। और जो माइंड गेम्स की हम बात कर रहे हैं, अगेन लास्ट मैप की बात करेंगे बिकॉज वो सबसे अच्छा सैंपल साइज है हमारे पास। यहाँ पे बात करें वीडियो चालू हो चुका है, वर्टिगो बीइंग बैन्ड बाय फेज। आप जल्दी बताओ आपको क्या लग रहा है तीनों मैप होने वाले हैं, जल्दी रिवील होने से पहले। नहीं ऐसे नहीं, सबसे पहले ऑब्वियसली न्यूक, नो डाउट अबाउट ऑब्वियसली, बट नहीं, मैं इसके पहले जो पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हीरोइक हैज बीन इनक्रेडिबल विद द माइंड गेम्स। वो बनाना कंट्रोल ले रहे थे और फिर कंप्लीटली गिव अप करके एक पे स्टैक कर दे 5 लोग को। सो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा और माइंड गेम्स हो सकते हैं, लेकिन इन्फर्नो बैन कर दिया गया। फेज रियलाइज्ड कि इन्फर्नो उनके साथ खेलने से मतलब नहीं था, सो इट्स न्यूक, ओवरपास एंड मिराज। ओह माय गॉड, ये तो मतलब सारे क्लासिक मैप्स आ गए हैं। आई थिंक अभी नए मैप्स की किसी ने उतना रिस्क नहीं लिया, एंड दे हैव ऑल गॉन ऑन द क्लासिक मैप्स। न्यूक, ओवरपास और फेयरली ओवरपास तो बहुत ही मतलब दोनों टीम्स के अच्छी मैप्स है। तो न्यूक और ये जो हमारा लास्ट मिराज होगा, आई थिंक वो बैटल होने वाला है बहुत भयंकर। बट मिराज में आई थिंक हीरोइक का थोड़ा बल्ला भारी है, तो अगर फेस को निकालना है तो जैसे मैंने कहा था कि 2-0 ही निकालना चाहिए। अगर थर्ड मैप तक गया ये गेम, मेरी एंटिसिपेशन ये है कि हीरोइक विल क्लोज इट। आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू द करंट वीटो देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्लोज मैच होने वाला है। अब आई डोंट थिंक ये थर्ड मैच में भी इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज देखिए आप अगर नंबर्स कंपेयर कर रहे हैं, पिछले 3 महीने में मिराज की बात करें, फेज उसको 8 बार खेला है, हीरोइक उसको 6 बार खेला है। हीरोइक हैज एन 83% विन रेट, बट जब सैंपल साइज इतनी छोटी होती है आपकी, तो फिर वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम आप बात करें न्यूक और ओवरपास के बारे में, न्यूक भी हीरोइक 3 बार खेला है, ओवरपास 6 बार खेला है। सो इट डिपेंड्स, अब सैंपल साइज इतनी छोटी हो, यू कांट रियली कमेंट। एंड एट द सेम टाइम ये दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके आई है। दोनों जो कप्तान है टीम के, वो एक दूसरे के खिलाफ इतने सालों से खेल रहे हैं और एक दशक से ऊपर से खेल रहे हैं एक दूसरे के सामने। आई फील लाइक जो प्रेडिक्शन की बात करें, जो डेटा की बात करें, यहाँ पे इतना ज्यादा मायने नहीं रखने वाला है। डिपेंड ये करता है कि दोनों टीम्स कितना कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है एंड कितना ज्यादा एक दूसरे को आउटप्ले करने की कोशिश करती है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि अब ज्यादा सोच के आते हैं, ज्यादा अब लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं, you forget to get your basics right, but then again ये मेजर चल रहा है यहाँ पे, the best teams in the world and heroic of course favorites है, तो I don't think that's going to be a problem at all, but ये तो समय ही बताएगा कि कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी। अपने यू नो बेस को जो होल्ड करके अपने फंडामेंटल्स पे जो खेले, आई थिंक वही होगा। 19-20 का ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों वर्ल्ड की सेकंड थर्ड मतलब टॉप 5 टीम्स में से आती हैं। एंड मतलब आई थिंक अभी आप एक्सपीरियंस की भी अगर बात करते हो तो हीरोइक में जस्ट यू नो ही इज समबडी वी नो फ्रॉम एजेस, जो मतलब सदियों से इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं अभी। एंड इट इज़ गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। अभी मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी ये वाला मैचअप क्यों हो गया क्वार्टर फाइनल में, लाइक गिवन द स्टैट्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट यू नो मेनी ह्यूज नेम्स जो इस सीरीज का पार्ट है वो लोग अभी है भी नहीं यार, यू नो दे आर नॉट इवन प्लेइंग द प्लेऑफ्स, लाइक यू नो नावी, फ्नाटिक, नेप। तो उस पे आपका क्या कहना है? मेरे को आपका व्यू जानना है, क्योंकि आप, मेरे को पता है कि आप इस गेम से बहुत जुड़े हुए हो, आप क्लोजली फॉलो करते हो, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? was the last question, क्या आप रिपीट कर पाएंगे? मतलब यही कि यू नो अपने ये प्लेऑफ्स में जो टीम्स हैं और यू नो जो बाहर हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं, उन लोगों के बारे में, यू नो कि उनमें से कोई आया नहीं, लाइक बड़े बड़े नाम जैसे नावी, फ्नाटिक, निप,
एंस ये लोग नहीं आ पाए, G2 फ्यूरिया, तो डिसअपॉइंट हो कि इनमें से कोई नहीं दिख रहा आपको प्लेऑफ्स में एंड ऑल ऑफ दिस? I'll be honest, इसके ऊपर काफी चर्चा की गई। जो पिकम होते, पिकम चैलेंज होता है, तो उसमें आपको डायमंड कॉइन मिल सकता है, लेकिन दिस मेजर हैज बीन फुल ऑफ अपसेट्स, राइट? इज कोट एंड कोट अपसेट मैं कहूंगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो दैट्स आल्सो द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, राइट? जो काउंटर स्ट्राइक एक इमोशन है, जिस तरीके का गेम है, ये भी दर्शाता है कि डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट डजंट मैटर हु यू आर। अगर आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाए देन यू माइट नॉट क्वालिफाई। और लेकिन बात करी थी, आई बिलीव नावी आपकी एक काफी चहीती टीम है, यू रियली लाइक नावी। तो फेज और नावी का मैचअप हुआ था जहां पे अनुबिस, वन ऑफ द मोस्ट टी साइडेड मैप्स इन द गेम, वहां पे फेज सीटी साइड पे था 9-15 डाउन। What? Navi decided a map पे, all they had to do was win that one round, and Navi वो नहीं कर पाई। FaZe came back from 9-15 to go to overtime in 22-19 से वो मैच उन्होंने जीती, and अपना जो जगह थी, अपनी जगह थी वो बनाई, and Navi को they kicked them out. So I do believe FaZe और any other team as a matter of fact जो यहाँ पे है, जो अभी स्टेज पे खेलने वाले, they absolutely deserve to be here, and not to say कि जो टीम्स बाहर जा चुके they didn't deserve to be there, but at the same time जिस तरीके का रेजिलियंस दिखाया, जिस तरीके की धीरज इन्होंने दिखाई थी, वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। यार मेरे को लेकिन अच्छा लगता है कि नावी जैसी टीम खेले, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या फ्यूचर होल्ड करता है, बिकॉज वाइटैलिटी इज हियर, फिर लिक्विड भी आ चुकी है, तो इट्स रियली गोना बी इंटरेस्टिंग। अभी उन लोग का वार्म अप टाइम भी चल रहा है, आई थिंक देयर इज अराउंड 25 मिनट्स, और ये अभी लगता है कोच साहब, एनालिस्ट साहब अपना सबको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग अराउंड इन देयर हेड राइट नाउ? क्योंकि इतने सारे मैप इनको वीटो मिल चुका है, तो आई थिंक सिंस आई मैनेज अ टीम आई कैन प्रीटी मच अज्यूम दीज डॉक्यूमेंट्स दे आर हैंडलिंग राइट नाउ इज प्रॉब्ली मैप टू मैप उन लोग के स्टैट्स एंड ऑल रिवीजन का, ताकि यू नो दे डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि बहुत कुछ नया किया होगा इन लोगों ने डेफिनेटली प्रे। एंड हाई लेवल पे खेलने का यही एक प्रॉब्लम है, पता है क्या मामा, कि एक बार जीतना फिर भी मेरे ख्याल से आसान है, बट टॉप में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि सबकी आंखें आपके ऊपर होती हैं, सबकी नज़रें आप पे गड़ी हुई रहती हैं, वो सब आपसे सीखते हैं, आपकी गलतियों को अच्छे से जानते हैं। एंड अभी हीरोइक और इन लोगों को वही है कि अपने खुद का स्टैंड लेना इनको, एंड देयर इज़ नो वे यू नो ये फॉल करे, क्योंकि ये बहुत नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है। अभी बेस्ट देना है, प्रेशर में आ गए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, गड़बड़ जरूर हो सकता है, और ये प्रेशर आपको ऑब्वियसली एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है इफ यू गोइंग टू बी प्लेइंग एट द टॉप लेवल। अब कोई भी स्पोर्ट, कोई भी ई स्पोर्ट की बात करें तो ये हमेशा एक बात रहती है, आई एम श्योर आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे इस चीज़ से, आपने भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखी है, बट एट द सेम टाइम I'm really excited for the match that we have right now, and इसके बाद जो होने Vitality versus Into the Breach, वो मैच भी काफी ज्यादा शानदार होने वाले, which I believe उसके लिए शायद आप हमारे साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। From what I know, Sam हमारे साथ जुड़ने वाले, but I'm sure जितनी ज्यादा entertaining मैच होने वाले आप देखना क्या करें, मतलब अनफॉर्चुनेटली यू नो थोड़ा सा हेक्टिक वाला शेड्यूल रहा है मेरा लास्ट 2-3 दिनों में, बट मैं देखूंगा ज़रूर। मेरे को ये वाला मैच मिस नहीं करना था, एंड ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई रिमेंबर आई स्टार्टेड दिस थिंग कास्टिंग एंड ऑल विथ यू, सो वापस तो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि नहीं यार, मैं मेरे अंदर जितनी भी बची कुछ एनर्जी है मैं वो सब डालने वाला हूँ हीरोइक और फेज वाले गेम में, बाद में मैं शांति से बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करूँगा और देखूँगा। और आई थिंक दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। बट ये आने वाले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे CSGO के फैंस के लिए। आपने अपना पिकअप किया क्या बाय द वे, लाइक हैव यू डन एनीथिंग? नहीं, मैं उस चीज़ के एकदम मैं कहते हैं ना कि उम्मीद छोड़ दिया, मतलब करके मतलब ही नहीं है उस चीज़ को, तो मैंने तो किया नहीं है। और ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है उस चीज़ का। आई हैव नेवर बीन इनटू कॉस्मेटिक्स उस हिसाब से, बट ऑब्वियसली जब मैंने लास्ट टाइम एक बार किया था, वो क्लूज नपोका में किया था मैंने, 2015 में या 2016 में हुआ था वो। बाप रे बाप। और वो मेजर ऐसा था कि अगेन इट वाज वेरी सिमिलर टू दिस बाय द वे। जो चीज पेरिस मेजर में हुई है, इट्स कॉल्ड द मेजर ऑफ अपसेट्स, वो चीज सेम चीज क्लूज नपोका में हुई थी 2015 में, एंड वहां पे आई केम आउट ऑन टॉप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी वीडियो एक देख रहा था बिफोर वी केम लाइव, पिम्प करके वहां पे एनालिस्ट है, फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर, और वो कह रहे थे कि अगर अभी भी किसी के पास डायमंड कॉइन है या कोई कंटेंशन में है डायमंड कॉइन के, तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, या फिर आपको काउंटर स्ट्राइक के बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है।
क्योंकि there is no way, absolutely no way कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता था जिस तरीके से टीम्स यहाँ पे एलिमिनेट हुई, आपने खुद बताया था नहीं मैं कि तो वो एलिमिनेट होंगी। इम्पॉसिबल था। लाइक ये जो नाम्स हैं, मतलब इन नाम में मैं एक दो जन को एक्सपेक्ट करता था कि ठीक है शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो मैचअप हुए हैं दे माइट नॉट मेक इट, बट कुछ नाम्स तो मेरे लिए एक शॉकिंग टर्न लिए। बट वही है कि अच्छी चीज़ है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ अपसेट्स आर गुड, क्योंकि उससे बहुत लोगों को सीखने को मिलता है, बहुत लोग आगे जाते हैं। बस मेरे को सिंपल को देखना था खेलने के लिए कहीं ना कहीं, सच बताऊँ तो, बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है वो, एंड अब वो नहीं खेल पाएगा, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है मेरे लिए एज अ फैन एंड अ व्यूअर। आपके लिए कुछ ऐसा है, लाइक एनी प्लेयर यू लुक आउट फॉर? I obviously wanted to see Nico be here because Nico is one of those players जिन्होंने इस game में is probably one of the greatest ever to touch the game, right? One of the best riflers, arguably of all time. लेकिन उनके पास एक भी major victory नहीं है, तो obviously वो खुद बहुत ज़्यादा उदास थे, मैं भी बहुत ज़्यादा उदास था वो देखने के बाद। सिंबल की बात करें, ये मेजर खास तौर पे उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। लास्ट मैच जो उन्होंने फेस के खिलाफ खेला था वहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रगल किया था, एंड ऑब्वियसली ही इज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज आल्सो स्टिल द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो अगर आप विश्व के सबसे बेहतरीन प्लेयर हो तो आपको स्टेप अप करना होता है जब भी जरूरत पड़ती है टीम को। But unfortunately he's been in a rough rough patch चल रहा था उनके लिए। But अगर एक प्लेयर मुझे सिलेक्ट करना होगा, absolutely would be Nico, hands down, because he's one of those players जिनके पीछे जिनको देख के मैं खुद गेम सीखा था। अरे यार, आपने वो बात याद दिला दी गेम सीखने से। कैश मैप याद है आपको? पहले उसमें बी साइड पे जो उन्होंने दिखाया था, अपना स्किल्स का प्रदर्शन किया था, ओ माय गॉड, लैंडिंग दोज हेडशॉट्स, नॉट लेटिंग इन एनीवन, मतलब इट वाज लाइक अ लॉकडाउन। डीगल एंड निको इज इक्वल टू अ लॉकडाउन। नो वे यू आर एंटरिंग द साइट, ही इज गोना टेक डाउन 2-3 गाइस, प्लेड लाइक अ मॉन्स्टर। मतलब वो कोई कर सकता है, कोई दूसरा कोई रिप्लिकेट कर सकता है, ऐसा बहुत मुश्किल है मेरे को लगता है। मुश्किल तो है, बिल्कुल सही कहा आपने, बट एक बहुत पुराने प्लेयर होते हैं, एक लेजेंडरी मोमेंट है काउंटर स्ट्राइक की, इफ यू रिमेंबर, हैप्पी ऑन इन्फर्नो। बाप रे, हैप्पी ऑन इन्फर्नो, देयर वाज डेनिस ऑन द बी साइड ऑफ कैश। निको ने वहां एक साइड पे भी एक बार निकाला था जो ए मेन और ए शॉट था, वहां से जो मिड कनेक्टर होता है वहां पे उन्होंने काफी अच्छे फ्लैश दिखाए। ऑब्वियसली देयर सो मेनी लेजेंडरी मोमेंट्स। जब शो शुरू हो रहा था वहां पे हमने ऑल ऑफ का डिफ्यूज देखा था, ओवरपास पे सिंपल का जो नीचे कैश पे नीचे कूद के उन्होंने क्लिक किया था, जो बाप रे, नो स्कोप निकाला था। एंड आई बिलीव जेम्स बार्डोल थे जिन्होंने कहा था, सिंपल दिस इज नॉट एफपीएल, दिस इज अ मेजर। आइकॉनिक मोमेंट्स है ये। आई स्टिल रिमेंबर वेरी अर्ली डेज ऑफ काउंटर स्ट्राइक जब हीको डबल डोर से निकल रहे थे, गेट राइट उनके पीछे खड़े थे, उन्होंने 180 डबल डोर्स के पीछे मारा था, एंड एंडर्स ने कहा था इनह्यूमन रिएक्शन। सो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी मोमेंट्स, देयर सो मेनी मेमोरीज जो हमारी गेम के साथ जुड़ी हुई है। एंड कितना गेम ने इवॉल्व किया है, ये सोचो यार मांबा, लाइक कहाँ क्या मैप पूल हुआ करता था, मैप्स कितने चेंज हुए, कितना अपडेट हुए, कितना गन्स को नर्फ किया गया कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। लाइक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द फैक्ट केनियस, जिसके लिए अपेरेंटली एक गन को ही नर्फ कर दिया। मतलब आई थिंक इट इज प्रीटी मच ट्रू। बहुत लोग बोलते कि उसके वजह से ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या ही किया था, मतलब वो इनसेन हो गया था। मतलब आई थिंक फ्रेंच CSGO सीन उस टाइम पे जिस लेवल पे थी कभी टच नहीं किया है। आई थिंक एट दैट टाइम जब स्क्रीम, शॉक्सी, RPK एंड यू नो केनियस वर डूइंग ऑल इन, एंड क्या ही चलता था यार। मतलब ओह माय गॉड, नॉस्टैल्जिया हो रहा है अब तो मेरे को। बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे, अब हम फ्रेंच टीम की बात करें, ऑब्वियसली पेरिस में मेजर हो रहा है, फ्रेंच टीम है यहाँ पे, वाइटैलिटी, होम सॉइल पे अगर मेजर विक्ट्री मिल जाए, दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स फॉर द एंटायर फ्रेंच सीन, एंड ऑफ कोर्स वाइटैलिटी के लिए भी। बट आई नो व्हाट यू मीन, जब एक प्लेयर एक गन को इतना अच्छे से इस्तेमाल कर दे, पूरी गन नर्व कर दी जाए, JW विद द CZ75, we've seen moments like these. But of course home टीम की अगर हम बात करें, उनकी आज दूसरी मैच होने वाली है वाइटैलिटी, जो खेलेंगी इनटू द ब्रीच के सामने, एंड देखना जरूर बनता है who's going to come out on top. बट उसमें भी 2 ही प्लेयर फ्रांस के हैं, बाकी तो डेनमार्क से हैं। तो चलो देखते, फिर भी जाइवू है। जाइवू इज यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट्स आई थिंक जो इन लेजेंड्स के एग्जिस्ट करते हुए जिसने पॉप ऑफ किया था। आई बिलीव आई कैन नॉट रिकॉल ऑफ एनी सेकंड नेम एज सच जिसने आके ऐसे तहलका मचा दिया था कि भाई सिंगल हैंडेडली आके यू नो पूरी
काया पलट कर दी सीन की. I think Zaivu is one of those guys. I think you will also agree कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ तो है, कुछ तो अलग है इस बंदे में. Absolutely. Zaivu जब सीन में ब्रेकआउट करके आए थे वो काफी कैची थे, काफी ज्यादा लोगों ने उनको नोटिस किया था और कहा था कि ही इज अ फ्रीक, ही इज एन एब्सोल्यूट फ्रीक. बट एक और प्लेयर है वैसे जिन्होंने वो चीज करके दिखाई थी, रॉब्स, जो आज खेलने वाले हैं. रॉब्स हु इज प्लेइंग फॉर फेज. ये प्लेयर मैं कहता हूँ जब द मोमेंट व्हेन ही ब्रोक आउट ऑफ द सीन, इतनी ज्यादा कंटेंशियस टॉपिक थी ये कि उनको लंदन बुलाया गया था एक ईओ के द्वारा कि नहीं आप हमारे लैंड सेटअप पे आके खेलेंगे बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर कि आप चीट नहीं करें गेम के अंदर. तो रॉब्स की भी काफी अच्छी बैक स्टोरी है. उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल भी देखा है जिंदगी में, एंड फॉर हिम टू बी हियर इन नॉट द ग्रैंड फाइनल, सॉरी, द क्वार्टर फाइनल ऑफ अ मेजर, एंड पोटेंशियली वो ट्रॉफी लिफ्ट करने का अगर उनको मौका मिले तो उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है. बट लाइक रॉब्स तो डेफिनेटली आपने बहुत सही नाम बताया. ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिन्होंने एक इनसेन गेम भी दिखाया है. बट माउस ई स्पोर्ट्स में भी वो जब थे ना, लाइक बैक इन द डेज 2015 मतलब 16-17 के बाद की बात है. आई थिंक 2020 तक तो मैंने फॉलो किया था. तब वो 3-4 साल तो उस टीम के लिए लॉयल थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जंप नहीं किया था. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ही वाज अमेजिंग. एंड आई रिमेंबर कि उनके साथ एक और प्लेयर खेलते थे, वो वाज जे, ऑनलाइन जे भी बोलते. तो वो मेरे को याद आ गया कि कुछ प्लेयर्स थे जो इतना तहलका मनाते थे कि लोगों को, टीम को भी लगता था कि भाई इज ही रियल, इनको देखना पड़ेगा, हमारे सामने खेलो भाई, आंखों के सामने. No, come on guys, I heard Paris was good. How we feeling? Alright, that's not bad. Now, it's an intense game, it's an exciting game, and it's one to start off only in the quarterfinals. And we got some heroic fans. Okay. And what about FaZe Clan? Now guys, you know I like to bring the hype, and I want you guys to be doing that all weekend long. For the next 4 days, I want all your energy, all your passion for our last ever CSGO major. So come together and make some noise for me. We're going into our first quarterfinal. It's time to bring the hype! This is FaZe Clan. Brokey, the Latvian laser, pulling off the most insane clutches and doing it while showing no emotion. You can never count him out. Rain, they call him the architect. He's been the pillar of the team since 2016. The core component and key player that they can always rely on. Kerrigan, the Batman, one of the greatest in-game leaders the game has ever seen. The comeback king and master of the pieces he is given, always believing in his own talent. Twist, Canada's finest, two-time Grand Slam winner, North America's most decorated player. And Robs, Mr. Cool, calm and collected, playing the numbers and percentages to his advantage, the smartest on the server. Make some noise for FaZe Clan!
Navi finding his home, finding his form, and bringing his team the extra razor-sharp edge they needed. Shush, silent but deadly, and he will do it with a smile on his face. The ever-reliable teammate. Cadian, his journey has been like no other. He's never stopped believing. A man of focus, commitment, and sheer will. Stown, from the fragsters to the fragstar, he's been a beast on the server time and time again for his Danish side. And Tesses, the big brain on and off the server, doing whatever the team needs, whatever is required. They can always count on him. Let me hear it for Heroic! They're taking their seats. The nerves are setting in. This is the all-important game. This could be a grand final when it comes to Heroic taking on FaZe Clan. Carrigan and Cadian joining me on the stage. It's time for us to see how this duel is going to go down. Now, when we talk about great Danish IGLs, they speak a lot about Carrigan. They speak a lot about Glaive. How does that make you feel, Cadian? Yeah, they're good. They're good, but who's better? We'll find out. We'll find out. Now, Carrigan, your legacy. It's been at risk the whole time, from the last chance qualifier to the game against B&E to the game against Navi, but you've done it. This must be very tense and stressful for you. Yeah, I mean, nobody has put us completely down. Some people put us down in lower brackets and stuff like that. But we are still alive, and I feel like a wounded animal like us in the group stage, you need to put them down when you have the chance. And how much does this crowd, this arena, help you? What extra strength does that give you? I mean, this crowd reminds me a lot about Antwerpen. The Golden Hornets went full ham for us, so obviously I'm going to try to make them proud, but I just want to play this game. This is going to be good, this is going to be tight. Heroic is playing fantastic the last 6 months, so huge respect what they're doing, and I'm just looking forward to get into the server. And Caden, he just said it himself. You guys have been playing fantastic. You've been so close over and over again. If we think back to Copenhagen, that trophy, it meant so much to you. But now you must be fed up with the second places afterwards. It's part of playing, you know, it's part of competitiveness, you know, there's a lot of great competitors out there, and obviously we try to live, we try to learn from every game we play, and I think the stage is amazing, it looks crazily good. I'm very positively surprised. I think FaZe is a worthy opponent. I think that, you know, looking back at Major 1-2 weeks ago, this is the kind of quarterfinal matchup that people were hoping for. Maybe now with the bracket, people are meh, but that is what it is, you know. So yeah, we're ready to play. It's going to be a good game. We've been preparing hard, and we are going to leave it all out here on the server today. And do you think the past games that we've seen from FaZe, where they are wounded, as Carrigan said, matters, or is it all changed, is it all reset now? You know, I'm sure that they feel like they are definitely riding on some high. You know, they had some good wins, and they should feel that way as well. Just the way that we should feel that we are 3-0 in the Amar, 3-0 here, and the final in Rio. So we're feeling good, and to be honest, we, you know, didn't look too much about who we were playing, who we were not playing. You know, you can't use that for anything. All right, well, guys, shake hands, take your seat. This game is going to be of epic proportion. This game is going to be phenomenal. This is exactly what we want for the last CSGO Major. Let's hear it for FaZe Clan taking on Heroic!
Emotional moments, incredible moments. दोनों टीम यहाँ पे कोशिश करेगी जीतने की. Of course, there's no doubt about that. लेकिन दोनों टीमें, one is an unstoppable force, the second an immovable object. Euphoria, what do you think about it? यार बहुत ज़्यादा इमोशनल एक मोमेंट था ये अभी जो हाइप अप ये लोग कर रहे हैं. एंड आई कांट इवन इमेजिन इन लोगों ने अपने लाइफ का इतना टाइम इन्वेस्ट किया इस गेम के ऊपर, एंड उसके बाद एक ऐसे सिचुएशन पे आए जहाँ पे इनको परफॉर्म करना है और वगैरह सब कुछ अपने लिए भी करना है, अपने फैंस के लिए करना है, अपने देयर इज सो मच ऑन स्टेक राइट नाउ. एंड मतलब दीज गाइज आर डूइंग, मतलब इनके मेंटल क्या जा रहा होगा अभी मैं सोच भी नहीं सकता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इतना इमोशनल मोमेंट भी है ये कि दिल और दिमाग सब कुछ आपको काबू में रख के स्टेज पे परफॉर्म करना है इतने बड़े ऑडियंस के सामने, वो भी पेरिस में, जहाँ पे मतलब लगता है सबके अंदर सीएस का डीएनए घूमता है रगों में. जी हाँ, सबके अंदर सीएस का जो खून है वो दौड़ता है. लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, केरियन इज स्टिल सर्चिंग फॉर हिज फर्स्ट मेजर. कैरिगन एक मेजर ऑलरेडी जीत चुके हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली जो प्रेशर है हीरोइक के ऊपर होने वाला है, लेकिन दे हैव कम इन एज हॉट फेवरेट्स, दे हैव कम इन विद ऑल गन्स ब्लेजिंग. और रही बात कैरिगन की, तो उनका जो अनुभव है मेजर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है इनको. एंड ये देखिए क्राउड वर्क कर दो थोड़ा कैरिगन. ओह शानदार, बेहतरीन क्राउड वर्क वहां पे. नाम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैचअप. उम्मीद जो प्लेयर्स है वो उसी मैच डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन कैरियन अब बात करें ये दो जीएल लेयर पे लेयर लगाने वाले हैं. बट क्या यहाँ पे ऑफ कोर्स to be Carrigan, a major winner. Who top? Is it going to be Carrigan who's for his first ever major victory? I think मतलब बहुत ही क्लोज होने वाला है. एंड जैसे मेरा ना कि दिस इज जस्ट माय इंट्यूशन कि फेस को गेम निकालना है ना बाय एनी, तो वो इन लोगों को मैप में ही निकालना पड़ेगा. थक गया तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आई बिलीव कि हीरोइक के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पावर वाले हैं, बहुत ज़्यादा, आपने भी बोला था. एंड ये सारी मैप्स है, मतलब न्यूक और मिराज, इनमें एक्सपीरियंस और कितनी अच्छी टाइमिंग पकड़ता है ये बहुत पता चलता है, क्योंकि बहुत बेसिक मैप्स है. और न्यूक तो हमें पता ही मैप है एक हमारा, बट मिराज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मिराज पे अगर आ जाएगा तो मेरे को लग रहा है फेस को बीट करना. एंड डैनिश प्लेयर्स क्या करते हैं अभी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे को ये मिक्स लाइनअप, मिक्स कंट्रीज वाला तो अभी बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अभी एक्स किया है, तो 5 डिफरेंट सिटीजन्स एक साथ खेल रहे हैं फेस के में, एंड दे आर द टॉप 5 टीम्स. इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग. आज तो ग्रुप स्टेजेस का फाइनल, मतलब प्लेऑफ्स का जो ये क्वार्टर फाइनल का चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत Absolutely no doubt about that. लेकिन देखिए स्टोरी लाइन्स की बात करा तो फोकस बहुत ज्यादा है कैप्टन्स के. अब मैं प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ. ब्रोकी वर्सेस स्टैन. ब्रोकी हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, काफी शानदार खेल रहा है ये इस टूर्नामेंट में. ऑफ कोर्स शुरुआत में थोड़ा सा लगा था शेक, बट इवेंचुअली स्टेप्ड अप. स्टैन की बात करें इस इवेंट में 1.4 की रेटिंग है, एंड जो उनकी एवरेज है 119 की पिछले 3 महीने में, उसकी कंपैरिजन में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा. पे कैरिगन ने लास्ट मैच में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था हीरोइक के खिलाफ, अच्छा नहीं खेल पाएंगे. तो आई डू बिलीव कैरिगन एंड ट्विस्ट, अगर ये 2 प्लेयर स्टेप अप करते, बाकी ऑब्वियसली जो 3 प्लेयर्स उनके लिए सारी चीजें एक साथ पकड़ के बैठे हैं. इफ ट्विस्ट एंड कैरिगन शो अप, हीरोइक के लिए मुश्किल में दूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम केरियन जिस तरीके से अपने ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं, शुश की बात करने की बात करें, टेसिस की बात करें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखाई, जिस तरीके की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उन्होंने दिखाया, वो सारा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो. राउंड नंबर 1 इन दिस फर्स्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ द मेजर. फेज वर्सेस हीरोइक न्यूक में होने वाला है, और देखेंगे जरूर यहाँ पे क्या होता है. बट स्मोक लाइनअप हो चुका है हेवन की तरफ. पिस्टल राउंड चालू. ओहो काफी एग्रेसिव मेरे को लग रहा है इन लोगों का अप्रोच रहने वाला है. कॉन्टैक्ट प्ले करेंगे, एंड जैसे ही पीक मिलेगा आई थिंक दैट जस्ट गोना सिंपली बस्ट ऑन दीस गाइज. अब यही है कि ये एक पिक लेके भागने की कोशिश कर ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ही डिफॉल्टिश अभी तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया नहीं. आई थिंक दे आर ऑल जस्ट गोइंग फॉर कॉन्टैक्ट प्लेस. व्हाट डू यू थिंक, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? आई थिंक फिलहाल के लिए वो सिर्फ
एक रिएक्शन बेट करना चाहते थे, सो मोर देन कॉन्टैक्ट टुवर्ड्स देम, ट्राइंग टू मेक श्योर अगर कोई रिएक्शन बेट आउट कर पाते तो करे, लेकिन अब रैम की तरफ धीरे-धीरे एसएस नीड टू स्टेप अप, बट ओह माय लॉर्ड, शॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अलाउड टू फॉल बैक। आप रोटेशन देखिए कितनी जल्दी जा रहे हैं लोअर की तरफ, एंड उनको पता चल गया ये लोअर हिट होने वाला है, बट सबसे पहले हुए अपर की तरफ रेन वंस अगेन, कोशिश काफी ज्यादा करी, बट रोटेशन जल्द से जल्द आना शुरू हो जाएगा। टेस्ट की एज भी उतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल के लिए, बहुत मुश्किल होने वाला, लेकिन कैरिकन पिक निकालते हुए क्या ही शानदार पिक लिया। एंड इनकी रोटेशन देखिए कितनी अच्छी रही है, मतलब आई वोंट बी शॉक्ड अगर ये इस तरीके से राउंड निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट अप हो गया एंड काफ़ी सारे लूज एंड्स रह गए थे मेरे ख्याल से साइड एग्जीक्यूशन में, क्योंकि उनकी अप्रोच बढ़िया थी। ए साइड पे स्टैंड्स जिस तरीके से वेंट्स में खेल रहे थे बार बार, बट आई थिंक द बॉम्ब इज गोना गेट प्लांटेड। 2v3 है, इट्स अ डुएबल, एंड स्टॉन काफी लो भी हैं, तो अभी देखते हैं ये राउंड निकल पाएगा कि नहीं। इट्स रियली गोना बी अमेजिंग अगर ट्विस्ट और ये लोग कर सकते हैं, बट इफ समबडी इज गोना मेक इट हैपन, दीज आर द ओनली पीपल हु कैन मेक इट हैपन ऑल्सो। और ये शानदार, ओह माय गॉड, ट्विस्ट ने क्या प्यारा एंगल निकाला साइलो के पीछे से, एंड ही न्यू दैट काफ़ी डैमेज दे चुकी है उनकी टीम, एंड फटाफट उन लोगों ने पिक्स निकाले और ये राउंड सिक्योर किया। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है फेज के लिए। आई थिंक पिस्टल राउंड अटैक साइड में मिल गया उनको, नथिंग बेटर देन दिस। यहाँ टेरिस साइड पे पहला पिस्टल राउंड जब निकालते हैं तो काफी अच्छी शुरुआत मिलती है, लेकिन गलील लेके डैमेज तो दिया है, लेकिन नॉट इनफ, नियरली नॉट इनफ। लेकिन सबसे पहला बहुत क्रूशल होने वाले इनके लिए निकालना, एंड ट्रेड नहीं निकालने दिया। ब्रोकी ने काफी अच्छा बैकअप दिया, ऊपर से ड्रॉप्स मदद करते हुए। सो हीरोइक के लिए ऑफ कोर्स देखिए इन गन्स के खिलाफ जब प्रॉपर बाय होता है गलील एंड एन AK, उसके खिलाफ खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन टेसिस धीरे धीरे पीछे से क्रीप अप जरूर कर रहे हैं, क्या उनको पता है ऊपर प्लेयर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए? आई डोंट थिंक सो। ट्विस्ट वंस अगेन जस्ट मार्किंग द फ्लैंक, इजी किल होना चाहिए उनके लिए, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है। ओह पर सेकंड मुझे लगा था वहाँ पे कि टेसिस शायद थोड़ा डैमेज डिश आउट कर पाएंगे, बट जी नहीं। जोश 165 ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। आई फील लाइक हीरोइक फिलहाल के लिए इसके बाद फुल इनका इको होने वाला है। सो अगेन बहुत आसान राउंड होना चाहिए अगर स्पीड अप करने के लिए फेस के पास। बट आई थिंक उन लोगों ने अपना मतलब वो बैकफुट में खेलने की मेंटालिटी से आए ही नहीं आज लगता है हीरोइक, क्योंकि उन लोगों ने अभी इन्वेस्ट भी किया इतना, इवन दो आफ्टर लूजिंग द पिस्टल राउंड। तो ये हमें दिखाता है कि ये आज अपना वो पैसिव नहीं होना चाहते, उन लोगों ने जो एग्रेशन से ये मकाम तक पहुंचे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। इवन पिस्टल राउंड गया, कोई बात नहीं, दे आर टेकिंग देयर चांसेस। अभी उनका रीसेट होने वाला इकोनॉमी, कोई बात नहीं है। प्रॉपर बाइक के साथ आई थिंक सीटी साइड में वो लोग राउंड्स निकाल लेंगे। क्या लगता है कितने राउंड्स हीरोइक निकाल लेता है अगर डिफेंस साइड में, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका एग्रेशन उनको अटैक साइड में डेफिनेटली हेल्प भी करेगा। जी हाँ, लेकिन ये ज़ूस लेके बैठे हो यहाँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी। मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, बिकॉज आई थिंक ये से किल निकाल बहुत ज़्यादा क्लोज अगर किल निकाल पाते तो गन भी मिलती और राउंड भी निकल सकता था, पॉसिबली राउंड निकल सकता था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा था, शुश भी टेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन मेकिंग इजी वर्क ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स। यहाँ पे हीरोइक के लिए कुछ करने के लिए है नहीं। हीरोइक इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहते वो यहाँ पे। ये अपने टीममेट को ही वो दे रहे हैं डिंक, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ये बैकफुट की मेंटालिटी लेके आए ही नहीं है खेलने के लिए आज हीरोइक। मतलब बेशक फेज एम ड्यूल्स जीत रही है, अभी पिस्टल राउंड निकाला है, अभी उनके पास प्रॉपर गन्स भी थे, बट हीरोइक इको राउंड्स पे भी एकदम मतलब सीना तान के पिक्स ले रही है। और ये यूज अगर कनेक्ट हो जाता ना तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं राउंड घूम सकता था, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा अटेम्प्ट था इन सबके द्वारा। अभी देखते हैं, ये बाई राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडियन ने ऑफ भी निकाल लिया, अभी वो किधर ऑफ लगाएंगे? आई थिंक आइडियली इज गोना गो फॉर द रैम्प सेक्शन एंड ही इज गोना लॉक इट डाउन। तो देखते हैं कैसा जाएगा ये इनका पिक विद द ऑफ। नॉट जस्ट रैम्प, वो सीधा नीचे की तरफ जो बी बॉम्ब साइड वहां पे चले गए। ही डजंट वांट टू ऑफ देयर, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर किस तरीके का अप्रोच लेने वाला है उनका। लेकिन फिलहाल पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा यूटिलिटी भी डंप हो चुकी है अपर साइड की तरफ, ए साइड की तरफ।
एंड हमेशा हमने नोटिस किया फेज कोशिश कर रही होती है कि उनसे एक प्ले बेट आउट करे, एक रिएक्शन बेट आउट करे, लेकिन वो नहीं कर रही. हीरोइक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितनी बार उन्होंने एग्रेशन दिखाया है, इट हैज बीन वेरी प्लान्ड एग्रेशन. एंड केडियन जिस तरीके से ऑप लेके जितना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं अपने आप के अंदर, वो काफी ज्यादा शानदार है. फ्लैश के बाद पीक करे, दिस कुड एक्चुअली लीड टू अ पिक. काफी अच्छा होमवर्क करके आया. कैन ही गेट दैट पिक? नो माय लॉर्ड, कनेक्ट्स दैट शॉट. केडियन काफी रिस्की मैन्यूवर वहां पे एंड स्टावन ऑलमोस्ट गेटिंग दैट पिक. रैम पे भी बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट किया है. इवन दो हीरोइक के पास मैन डिसएडवांटेज है, बहुत डैमेज डिश आउट कर चुके सामने वाली टीम के लिए. एंड मुझे अभी भी लगता है हीरोइक इज स्टिल इन द गेम अनलेस कैरिगन कैन मेक क्विक वर्क ऑन द बॉम्ब साइड. लेकिन यह भी वेरी अवेयर, पता था उनके पीछे उनको कवर नहीं दिया जा रहा था, इंफॉर्मेशन नहीं थी. एंड यहाँ पे रॉब्स क्या उनको चेस करेंगे? जाना जरूर चाहते लेकिन वो ट्रेड करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है. एंड अपर बॉम्ब साइड पे सिर्फ इकलौते प्लेयर एक बचे हुए. यहाँ पे स्टैवन की बात करें, काफी अच्छी तरीके से लॉक करें. फैसेस वंस अगेन, जो डिपेंडेबल प्लेयर की हम हमेशा बात करते हैं, पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन हीरोइक कम्स ऑन टॉप ऑफ दिस वन. शानदार काउंटर स्ट्राइक प्रदर्शन चल रहा है. मतलब अच्छा रीड था उनके, उन्होंने एकदम सही बी से रोटेट करके सीक्रेट से ऑप लगाने की कोशिश की, बट शॉट कनेक्ट नहीं कर पाया. एंड देयर एज एक एक राउंड इतना क्लोज जा रहा है, इतना स्पेस ले लिया उन लोगों ने, रैम्स की भी कंट्रोल ले ली, उसके बाद भी पिक्स निकालने के बावजूद दे समहाउ मैनेज टू गेट द राउंड. मतलब अच्छा अप्रोच था फेस की तरफ से, ये भी मैं कहना चाहूँगा. दे डिड पनिश देम ऑल्सो ऑन द प्लेसेस दे ट्राइड टू पीक, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए. हालांकि अभी भी इकोनॉमी नहीं गई उनके पास पूरे पैसे हैं. बट येस, आपने यूटिलिटी वाली चीज़ तो बहुत सही बोली थी. उन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी यूटिलिटीज़ वेट आउट करा लिए थे एक प्ले बना के. एंड ये वाला राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है उनको. एंड बढ़िया वॉल बना के समहाउ दे आर ट्राइंग टू टेक द आउटर गैराज कंट्रोल, बट इतना पैसिव एंगल लेके रखा है. कैरिगन को ले लिया एंड रेन इज कमिंग इंस्टेंटली फॉर द ट्रेड इन. आउटर का पूरा कंट्रोल मिल चुका है. अभी किस तरीके से ये राउंड को घुमाएंगे वो अच्छा लगेगा देखने में. रोटेट तो कर रहे हैं पीछे जाके डिफॉल्ट रीसेट होने का. लेट्स सी हाउ हीरोइक मेक्स इट हैपन नाउ. जी हाँ, यहाँ भी सोलो होल्ड करे बी की तरफ. स्टैवन यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश करेंगे पिक निकालने की. और एक चीज़ आपने अगर नोटिस करी हो, हीरोइक लास्ट राउंड उन्होंने फर्स्ट पिक निकाला था, सॉरी फेज ने निकाला था. इवन देन दे मैनेज टू कन्वर्ट दैट राउंड. यहाँ पे भी केडियन ने फर्स्ट पिक निकाल के दिया अपनी टीम को. लेकिन आउटर से ये जो हम इन आउट कहते हैं, कैबिन एरिया कहते हैं, वहां से अंदर आने की कोशिश ए साइड पे प्लांट करेंगे जरूर. लेकिन यह भी स्टिल लाइव. ही सीन द C4. क्या यहाँ पे वो किल निकाल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल. ओह नो माय लॉर्ड, दैट इज अनफॉर्चुनेट. दैट इज सो अनफॉर्चुनेट. M4A1S not being a one shot kill. उस रेंज पे जब वन शॉट किल नहीं होता है. ये तो टाइमिंग हो गई और गन डेफ हो गया मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने रैप किया था कि एविन से आ गए थे. दे लिटरली हैव द पूरा नॉलेज था उनको ये साइड का कि कहाँ पे क्या चल रहा है. बढ़िया टाइमिंग भी पकड़ी थी वेंट से बाहर आने का, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट. और रॉप्स ने भी बहुत इंसेन रिएक्ट किया उस जगह पे. मतलब क्या ही बताएं, अभी सब इंडिविजुअल स्किल्स अब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि किसका नर्व कंट्रोल बढ़िया है. क्योंकि फेज ने ये वाला राउंड मेरे को लगा था कि हाथ से गवा बैठा है जिस तरीके से हीरोइक ने उनको ओवरऑल हर जगह से काउंटर किया था. केबिन, वेंट्स, आउटर, हेवन. भाई ये बहुत ही रोमांचक हुए जा रहा है धीरे धीरे. एंड फेज ने लगता है अच्छे से वर्क किया है, अच्छे से रीड किया है, काउंटर स्ट्राइक किया है इन लोगों को. एंड वो दिख रहा है अभी गेम में, उनकी मेहनत पूरी दिख रही है. मुझे केडी ने जो किया था बहुत ज़्यादा पसंद आया. पेशेंटली रुके थे. कोशिश उनकी ये थी कि वो ट्रेड ना हो जाए, बिकॉज लेफ्ट साइड पे और जगह नहीं थी उनके पास मूव करने के लिए. तो द ओनली ऑप्शन ही हैड वाज कि सामने वाले प्लेयर के क्रॉस में वो पीक करे एंड कोशिश करके उनको ऑफ गार्ड पकड़े, बट वो नहीं कर पाए. हीरोइक इवन दो दे हैड दैट फर्स्ट ओपनिंग, कन्वर्ट नहीं कर पाए. एंड दिस वाज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑलवेज, बिकॉज हीरोइक ने जो ऑप निकाली थी उसकी वजह से वन ऑफ दोस प्लेयर्स ऑलरेडी हैड अ फमास. ज़्यादा यूटिल नहीं थी उनके पास अवेलेबल. यहाँ पे वंस अगेन सिर्फ पिस्टल्स है हीरोइक के पास. मुश्किल होने वाला है, लेकिन क्या वो किल निकाल पाएंगे? वो इनिशियल पिक बहुत क्रूशल होने वाला है उनके लिए. एंड याबी इज इन प्राइम पोजीशन इसको वहाँ पे टेक डाउन करने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल शॉट होने वाला है. एंड लोअर बॉम्ब साइड पूरी, बी बॉम्ब साइड पूरी की पूरी खाली छोड़ के बैठे. फुल स्टैक किया उन्होंने. 2 लोग रैम की तरफ, 2 आउटर की तरफ और एक ए साइड पर. और ये थोड़ा सा ओवर कमिट कर दिया वहाँ पे
यही शॉट्स तो अभी बहुत ज्यादा दिल को लगते हैं। अभी सर पे हेडशॉट तो बस नाम के हैं ये, क्योंकि डीगल के नर्व के बाद ये सारे शॉट्स कनेक्ट करना उतनी आसान चीज नहीं है। माय गॉड, वो क्या टाइमिंग पे उन्होंने स्मोक गिरते ही वो हेडशॉट लैंड किया। अच्छे से बी साइड का सीक्रेट का कंट्रोल ले लिया उन लोगों ने। अभी देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, बट आई थिंक स्टैबिन को पूरा नॉलेज मिल चुका है कि वो लोग ग्लास रूम से ही कहीं ना कहीं एंटर करेंगे। बट धीरे धीरे एंगल्स क्लियर करके जा रहे हैं। दे आर फेज इज ट्राइंग टू मेक द लीस्ट मिस्टेक्स। उन लोग कोई गैप नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके एंगल्स क्लियर कर रहे हैं, और कोई ना कोई हमेशा ट्रेड के लिए है। दैट इज रियली गुड। वो लोग शार्प है अपने पॉइंट पे। एंड बस देखते हैं अभी C4 जा रहा है बी साइड की तरफ, एंड डीगल से ले लिया है ब्रॉकी को। रॉब्स कमिंग इन फॉर अ इंस्टेंट ट्रेड। आई थिंक प्लांट तो अब आसानी से हो जाएगा। देयर इज नो वे शूज इज गोना गेट दिस राउंड, एंड रॉब्स सेविंग हिज टीममेट। सही टाइम पे बैकअप दिया, काफी आसानी से एक अच्छी लीड बना ली है। क्या लग रहा है आपको, हीरोइक क्या गलत कर रही है? क्या मतलब ऐसे अगर लीड बनाती रहेगी फेस, तो ये तो बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा कि भाई वो वापस आ सके, क्योंकि फेस ने अटैक में काफी राउंड्स निकाल लिए, 5 राउंड, और इकोनॉमी भी बढ़िया बना ली अपनी। I don't think it's heroic making mistakes. फिलहाल के लिए उनके पास इतनी अच्छी यूटिलिटी थी नहीं, उनके पास इतना अच्छा बाय नहीं था। ये राउंड बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला। अगर ये राउंड नहीं निकल पाए हीरोइक, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उनके पास, बिकॉज प्रॉपर यूटिलिटी है उनके पास, प्रॉपर वेपन्स भी है। पहले 6 राउंड में उनके पास सिर्फ 2 राउंड वैसे थे, अपार्ट फ्रॉम द पिस्टल राउंड ऑब्वियसली, जहाँ पे उनके पास अच्छी वेपनरी या फिर अच्छी यूटिलिटी थी। तो अब देखना ये बनता है कि क्या यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर बहुत दिक्कत की बात होगी वंस अगेन। अब बी बॉम्ब साइड की बात करें, वहाँ पे सिर्फ टेसिस को भेजा गया, 4 लोग अपर साइड पे खेल रहे हैं, एंड केडियन ऑन रैंप विद द ऑप। पेशेंस का गेम है ये तो। अब मेरे को लग रहा है बस, क्योंकि यूटिलिटीज एक एक करके बेट आउट कर रहे हैं। इनके पास अभी बहुत ही कम यूटिलिटी बची है। अब देखो एक तरीके से हीरोइक के पास, क्योंकि दे जस्ट हैव 2 smokes and 1 molotov incendiary to work with। और whereas अभी आप फेस के पास देखो, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए, फेक करने के लिए भी उनके पास यूटिलिटीज, एंड वही कर रहे हैं वो अभी। सब यूटिलिटीज अपनी डम कर रहे हैं। अब किस तरीके से ये रुका पाते हैं, एम डुएल्स जीतते हैं कि नहीं, वो बहुत मैटर करेगा। बट मेरे को लग रहा है टेसिस की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है। अगर उसने सही टाइमिंग पकड़ लिया, केबिन आउट वालों को पिक कर लिया, तो बढ़िया रह जाएगा। बट इट्स स्लोली गोना बी रैंप एग्जीक्यूट, एंड ये गेम चेंजर है ये गेम गन भाई। होली मोली, इतना बढ़िया प्ले बनाया, बट एंगल इतना प्यारा था कि कोलैटरल में आ गए। तो चल, काफी शानदार कोलैटरल था वहां पे, एंड यूटिलिटी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया था हीरोइक ने डिले करने के लिए। जो मेटल डोर है वहां पे स्मोक किया, मेड श्योर कि वो बाहर नहीं निकल पाए। आउटर की तरफ भी अच्छी तरीके से लॉक इन करे, एकदम वाटर टाइट डिफेंस है इनका। अब बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोअर साइड पे इकलौता प्लेयर खेल रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं वो। उनको नीचे से ही भेज देते हैं, पूरा घूम के आते हैं, टू मेक श्योर कि वो रोटेशन कट ऑफ कर पाए और कोई भी जगह से लीक ना करें, देन बाहर ही उनको कंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो कोलैटरल था बहुत अनफॉर्चुनेट फेस के लिए, बट केडियन की दाद देनी होगी। उनका ये वेपन और उनकी वो पोजीशन बहुत क्रूशियल है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक गेम चेंजर होता है। अगर आपकी ऑप अच्छी तरीके से चल रही है, आप वो पिक्स निकाल पा रहे हो, एब्सोल्यूट गेम चेंजर। आई थिंक एक FPS गेम में एक ऑप या स्नाइपर वाला जो रोल रहता है ना, वो बहुत क्रूशियल रहता है, क्योंकि इट्स अ 1 shot 1 kill। हाई रिवॉर्डिंग है। मतलब एक गोली में आप एक एडवांटेज लाके देते हो इमेंस वाला टीम के लिए। एंड जो स्मार्टली वो चीज़ को कर पाते हैं, वो तो मतलब बेनिफिट दिखता ही। अभी जैसे लग ही नहीं रहा था कि यूटिलिटी के बेसिस पे हीरोइक राउंड निकालेगी, बट अगेन द गन वाज मैसिव, द एंगल वाज वेरी नाइस, एंड ही वेंट फॉर द पिक। फिर फटाफट वो ग्रीडी नहीं हुए, कूद गए। अभी देखते हैं कि ये वाला राउंड कैसे निकालेगी, क्योंकि फेस का भी इकोनॉमी अच्छा खासा अब जा चुका है। मतलब काफ़ी इन्वेस्ट किया उन्होंने इस राउंड में। तो आई थिंक इट्स रियली ट्रू आपने जो बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है वो हीरोइक के लिए, और उन लोगों ने वो राउंड निकाला भी। अब प्ले स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हुए धीरे धीरे रैम्प से एग्रेस कर चुके हैं, एंड दैट एग्रेशन इज वर्किंग आउट। ट्विस्ट को ले लिया है, एंड अभी ऑरेंज डोर का भी इनको कंट्रोल मिल चुका है, बट ये जैबी ने स्प्रे मिस कर दिया। ये कॉस्ट करेगा इनको मेरे ख्याल से। जी हाँ, याबी का वो जो विफ था भारी पड़ जरूर सकता है, लेकिन ड्रॉप्स को डैमेज काफी ज्यादा दिया है उन्होंने। नाउ इट कम्स डाउन टू दैट इनिशियल पिक वंस अगेन। अब रीसेट कर दीजिए। मुझे लगता है हीरोइक को एक और बार कंट्रोल लेना, थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल एग्रेशन, एंड एक अगर पिक मिलता है तो फिर वो
अटैक डिसमेंटल कर पाएंगे आराम से। स्टैवन बहुत क्रूशियल पोजीशन में यहाँ पे, क्या कैरिगन को एक्सपेक्ट करे या कैरिगन ने उनको सुना है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन टाइमिंग जरूर हो सकता है। कैरिगन टेक डाउन हो जाएंगे वहां पे, अब बहुत मुश्किल होने वाला है टेरेस के लिए जाना अंदर। स्टैवन वापस ब्लाइंड होकर स्प्रे कर रहे थे। शुश एक लुक एट दैट हेडशॉट वंस अगेन, M4A1S वन शॉट हेडशॉट नहीं होते हो उसका भुगतान करते हुए, एंड शुश isn't that any question? What a spray transfer by Shush! What a man! Insane instinct. क्या प्यारा स्प्रे कंट्रोल किया उन्होंने, एंड ही डिडंट लीव द बुलेट्स, बस खींच दिया, मतलब एकदम लेजर शार्प कर दिया। इस चीज में M4A1S मदद भी करती है, बट हाँ ये 140 वाला फैक्टर तो 2-3 बार दिख चुका है हमें गेम में कि भाई गन डेफ होते हुए, बट बहुत प्यारा सेटअप बनाया हेरोइक ने, एंड मतलब एक हाथ से गया हुआ राउंड वापस से लैंड भाई साइलो के पीछे से, इनसेन फ्रैगिंग, इनसेन, बहुत प्यारा लीड, रीसेट कर दिया इनको फेस को। The one thing I really like about Heroic is कि वो सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट जरूर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी काबिलियत के ऊपर इतना भरोसा होता है उनको, जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो शानदार है। टेसेस यहाँ पे ग्रेनेड जरूर डालेंगे, बहुत डैमेज डिस्टॉर्ट कर सकती है ग्रेनेड, जी हाँ 67 28 एंड स्प्रे डाउन करेंगे। फ्लैश आया जरूर था, लेकिन वो रॉब्स का फ्लैश है, टीम फ्लैश हुए थोड़ा सा, लेकिन अब कैरिगन धीरे धीरे क्रीप इन करते हुए लोअर साइड की तरफ, बी बॉम्ब साइड पे, क्या वो ऑफ गार्ड पकड़ पाएंगे प्लेयर को? सबसे बड़ा सवाल है, दरवाजा भी खुला है यहाँ पे, ही कैन एक्चुअली कैच हिम ऑफ गार्ड। जीन, ओह माय गॉड, नो वे कैरिगन विफ्स दैट स्टैवन। कैरिगन की कोशिश ये थी कि शायद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, वहां पे वो राउंड बदल सकते थे, लेकिन स्टैवन ने सही मोमेंट पे वहां पे देखा, एंड कैरिगन अच्छा ट्रिगर डिसिप्लिन, शुश नजदीक बैकअप देते हुए एंड काफी अच्छी तरीके से रीड करते हुए फेस को भी वहां पे बेहतरीन तरीके से हेरोइक ने खेला। और मैंने कहा था जो पहला बाय राउंड था इनका प्रॉपर, वो क्रूशियल होने वाला था, अगर वो हारते तो फिर दिक्कत होती है। यस 5-1 के बाद जो इन्होंने ये बढ़िया राउंड निकाला, उसके बाद से मोमेंटम भी वापस से पकड़ लिया। आई थिंक कैरिगन थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहते थे ट्रिगर डिसिप्लिन करके, कि शायद कोई और भी हो, शायद ग्लास रूम का एंगल पकड़ के बैठा हो, क्योंकि उन लोगों ने रैम का कंट्रोल भी ले लिया था, एंड दैट अप्रोच वाज राइट। मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ कि उन्होंने क्यों फटाफट पिक नहीं निकाला, इवन दो यू नो द गाय वाज ऑफ गार्ड, बट बहुत ही शानदार प्ले था। एंड हेरोइक ने, मैंने आपको बोला ना कि ये मेरे को नहीं लग रहा कि देयर इज नो वे इवन आफ्टर लूजिंग सो मेनी राउंड्स दे आर गोना गो ऑन बैक फुट। मतलब एक राउंड इतना पैसिव खेला, फिर वापस से एग्रेसिव जाके ऑफ से पिक निकाला, अभी वापस से ग्राउंड्स होल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है कि यू नो दे आर नॉट गिविंग अप ऑन देयर एक्स फैक्टर, जो उनका एग्रेशन है, एंड वो नहीं गिव अप करना चाहिए, एंड दैट इज कीपिंग देम अप। वापस से आ गए वो लोग रेस में, वो डिफरेंस इन लोगों ने एक एक करके राउंड कवर अप कर लिया, एंड 5-4 वापस से प्रॉपर बाई आ चुका है एक, एंड ये थोड़ा सा लग रहा है बर्स्ट फास्ट एग्जीक्यूशन करने वाले या प्रॉपर्ली यूटिलिटी डंप बहुत ज़रूरी है फेस को भी, अगर कुछ और राउंड सिक्योर करने हैं तो अब वो डैमेज देना चालू कर दे, क्योंकि धीरे धीरे हेरोइक का पॉकेट भी भर चुका है, यू नो दे आर गेटिंग द क्रेडिट्स बैक, एंड ये पूरा शट डाउन कर दिया उन लोगों को। याबी ने काफ़ी प्यारा इंसेंड्री डाला, एंड दे हैड टू वॉक आउट ऑन द फायर एंड कुडंट डू एनीथिंग। प्यारे क्रॉस फायर्स लगा के रखे थे हेरोइक ने, एंड फेस को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। आई थिंक देयर इज नथिंग मच ब्रॉकी कैन डू राइट नाउ। हेरोइक जिस तरीके की तैयारी करके आए, जिस तरीके से वो प्रिपेयर करके आया अपने आप को कि नहीं ये सिचुएशन में इस तरीके से खेलेंगे, एवरीबडी स्टेपिंग अप, हर एक प्लेयर डिलीवर कर रहा है जब भी जरूरत पड़ रही है। केडियन की बात करें, कोलाचल ऑब्वियसली एक एलिमेंट ऑफ लक भी होता है वहाँ पे, क्योंकि आप कोलाचल लेने के लिए नहीं जाते, जब प्लेयर्स लाइन हो जाता है आपको मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम हर एक प्लेयर को जब भी मौका मिला स्टेप अप करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रही है। ये देखिए बड़ी सिस्टम का शानदार इस्तेमाल, हमेशा जितने भी एंगल्स क्लियर कर रहे हैं साथ में क्लियर कर रहे हैं। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेरोइक के, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, एंड वो दिख रहा है अभी। यही है कि अभी कौन फंडामेंटल्स अपने नर्व को रखते हुए इंडिविजुअल स्किल पे भी बात आ जाती है कि इतने स्किल्ड प्लेयर्स, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स है, सब कैसे खेलेंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेस के हाथ से भी कुछ गया नहीं है मेरे को लग रहा है। नो डाउट हम लोगों ने राउंड्स तो निकाले हैं, लेकिन अभी और 5 राउंड्स बाकी हैं। इट इज़ जस्ट एन इक्वलाइजर। अभी इस पॉइंट पे फेस जितने ज़्यादा राउंड्स निकाल लेता है अपने लिए, वो उनको ही हेल्प करेगा, क्योंकि हेरोइक का एग्रेशन मेरे को लग रहा है कि अटैक साइड में भारी पड़ेगा फेस पे, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्या सीन है, ये क्या सीन है भाई। Oh, look at him! Yes, he's actually going for the man. He's going to go for it.
नो इजी नहीं इवेंट में गए नहीं, वहाँ पे प्लेयर गए नहीं थे इवेंट में, लेकिन बाहर निकल के उनको फिनिश कर दिया जाएगा। एंड फॉर द अनइनिशिएटेड जो नहीं समझ पाए क्या हो रहा था यहाँ पे, केडियन को अंदाजा लग चुका था इको राउंड है, शायद वो मेटल डोर टू लोअर रश कर सकते हैं वेंट के थ्रू, तो वेंट में जाके नाइफ खोल के बैठ के जैसे ही कोई अंदर आते सीधा नाइफ कर दिया जाएगा, उनको अंदर नीचे उतरने नहीं देंगे। काफी अच्छी फोरसाइट, उनके पास जो वेपन था ऑप के साथ वहां पे किल्स निकालना बहुत मुश्किल होने वाला था, तो कोशिश उनकी यही थी कि वो एक किल निकाल दे, बाकी उनके टीममेट्स वहां पे होने वाले थे उनको बैकअप देने के लिए। इमेजिन ही हो जाता कि वो जा रहे हो वेंट के लिए और उन्होंने ब्लॉक करके रखा है सीढ़ियों का रास्ता। बढ़िया बढ़िया मोमेंट हो जाता, काश ऐसा देखने को मिले आने वाले राउंड्स में कभी तो। बट फॉर द टाइमिंग अभी प्रॉपर बाइज आ चुके हैं, यूटिलिटी स्मोक्स तो ली है फेज ने, एंड हेरोइक ने तो अपना अपने ग्राउंड्स होल्ड करके काफी राउंड्स निकाले, और ये नेड सही टाइम पे अगर ये छोड़ देते हैं तो काफी डैमेज लेके आएगा, एंड वही हुआ। काफी बढ़िया रीड है, मतलब ये देख के अच्छा लग रहा है कि इन लोगों ने रीड किया है, इन लोगों ने कितने अच्छे से एंटीसिपेट किया है कि ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं, और ये एक बढ़िया आउटर एग्जीक्यूट होने वाला है। अभी देखते हैं कि सीक्रेट्स में तो कोई भी नहीं है, अभी इन लोग एक दूसरे सेटअप पे खेल रहे हैं। आई थिंक दे आर नॉट गोना अलाउ एनीवन टू टेक द गराज फॉर द टाइम बीइंग, एंड धीरे धीरे अगर सीक्रेट का कंट्रोल लेते हैं तो सक्सेसफुल हो जाएंगे फेस, बट आई एम प्रीटी श्योर दे आर अलाउइंग देम, एंड ये आराम से रीटेक के लिए खेल रहे हैं बी साइड पे। अभी फिलहाल के लिए दो प्लेयर्स ऑलरेडी बी साइड की तरफ जा चुके हैं, केडियन उनके साथ टेसिस दोनों रोटेट कर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा रीड है हेरोइक की, अगर आप बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने इंटेंट दिखाया है रोटेशन पे कमिट करने के लिए, और जिस तरीके से रीड किया है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड ऑफ कोर्स मैन डिसएडवांटेज के साथ फेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, दे विल नीड अ पिक, एंड कॉन्टैक्ट की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रेन, क्या वो पिक निकाल पाएंगे ब्रो की उनके टीम के साथ, लेकिन स्टैवन होल्ड कर रहे हैं आउटर एरिया को, टेसिस भी बैठे हुए वहाँ पे। Alright then, Tessis gets one, Stavin once again gets one, he needs to stay alive but gets two as a matter of fact। वहाँ पे ट्विस्ट इकलौते बचे, क्या ट्रेड निकाल पाएंगे? जी हाँ ट्रेड जरूर निकालेंगे, लेकिन 1 versus 4 10 सेकंड पॉसिबल नहीं होने वाला है, एंड हेरोइक विद वन मोर राउंड खुद के लिए निकाल के जाएंगे वो 5 और 7। हेरोइक ने जिस तरीके से कमबैक किया है, वो 1-5 डाउन थे, एंड उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने राउंड्स निकाले एक एक करके आउट क्लास कर रहे हैं फेस को फिलहाल वो यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब वो मोमेंटम चला गया फेस का, क्योंकि न्यूक एक ऐसा मैप है ना, इसमें इतने सारे एंगल्स हैं डिफेंस साइड में फॉर अटैकर्स टू चेक एंड एंटर एंड ट्रेड एंड किल एंड गेट द साइट इन देयर हैंड्स। वो क्योस में ही राउंड निकलते हैं मेरे को लगता है जब आप अटैक साइड में हो, एंड कहीं ना कहीं जो शुरू के राउंड्स निकाले भी थे फेस ने, वो बहुत क्योटिक सिचुएशंस में निकाले थे जहाँ पे उन लोगों ने फायर पावर ट्रेड्स करके राउंड सिक्योर किए थे, और अब वो इतना स्लो खेल रहे हैं यूटिलिटी बेट करके, कहीं ना कहीं दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं हेरोइक के, बट वो उनको भारी पड़ रहा है अभी मेरे ख्याल से। हेरोइक इज जस्ट होल्डिंग ऑन पेशेंटली, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन देयर ग्राउंड्स, जस्ट लेटिंग देम कम इन देयर क्रॉसहेयर। एक भी डायरेक्ट फाइट्स लेने ही नहीं पड़ रहा उनको, क्योंकि फेज इतना पेशेंटली खेल रहे हैं, और जो अब उनके खिलाफ ही वर्क कर रहा है मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। फिलहाल के लिए टेक9 होने वाली है सिर्फ, लुक एट दैट एग्रेशन, बट मुझे लगता है थोड़ा सा डेस्परेट हो रही है फेज यहाँ पे, बिकॉज जब पहला प्लेयर कूदा था नीचे ट्रेड लेने के लिए कोई नहीं था, एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज अगर आप जा रहे इतनी जल्दी, केडियन शॉट मिस करते ये रेंज काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, बट वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका प्लेयर कोई नीचे कूद रहा है, कोशिश कर रहा है फर्स्ट पिक निकालने की, अगर आप उसके साथ फॉलो अप करने वाले माइट एज वेल जंप टुगेदर, तो हल्का सा डेस्परेशन की बू मुझे आ रही है यहाँ पे फेस की तरफ से। हेरोइक इवन दो उन्होंने कितने राउंड निकाले सीटी साइड पे, फिर भी डिसिप्लिन उन्होंने बरकरार किया, ओवर कमिट नहीं करे बिल्कुल भी, अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करे, अगर पुश करना है तो अपने टीममेट को साथ में लेके जा रहे, ट्रेड निकाल रहे और बड़ी सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे वो। क्या प्यारा स्पैम किया इन्होंने, एंड अच्छे से एंटिसिपेट भी किया, एंड डिस्पिरेशन अब निकल के आएगी, क्योंकि ये एग्रेशन इनको बाई राउंड पे भी दिखाना पड़ेगा अगर अटैक में ये राउंड्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि हेरोइक को अपनी गलतियां पता चल चुकी हैं, उन लोगों ने अच्छे क्रॉस फायर सेटअप्स कर लिए हैं, यूटिलिटी बचा के रख रहे हैं लास्ट मोमेंट एग्जीक्यूशंस के लिए, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो पुश करते हैं, या तो कभी रैम पे कंट्रोल ले लेते हैं, या तो कभी वो ऑरेंज डोर, या तो कभी केबिन, या तो कभी आउटर में कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेरोइक का बहुत अच्छा अप्रोच है। एंड ये देखो अभी केबिन में इतने एग्रेसिव एक पोजीशन पे लेके रखा था उन्होंने, दे आर एंटिसिपेटिंग इट ऑल प्रॉपरली, एंड अब फेज ने जब एग्रेशन दिखाया भी है तो इट इज सो
डिसकनेक्टेड कि दे आर नॉट इवन गेटिंग ट्रेड्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि सब आप देखो मैप में कहीं दूर दूर अलग अलग जगह पे मरे हैं। एंड इस पॉइंट से अगर 10-5 का हाफ होता है तो फेस के लिए बहुत टफ रहेगा, उनके लिए पिस्टल राउंड बहुत मैटर करेगा नेक्स्ट हाफ में, जो मेरे को लग रहा है हो जाएगा कहीं ना कहीं। हेरोइक ने एक अच्छी लीड और मोमेंटम बना लिया है एंड वो टूटना उतना आसान नहीं है फॉर द टाइम बिंग। स्टैन की बात करें, जिस तरीके से वो पीक करे, जितना कॉन्फिडेंस जता रहे, जिस तरीके से पूरी टीम एंगल्स होल्ड कर रही है, दर्शाता है कितना ज़्यादा ड्रिवन है ये पूरा का पूरा लाइनअप, कितनी कॉन्फिडेंटली खेल रही है और कितना भरोसा है अपनी खुद की काबिलियत के ऊपर। जो उन्होंने होमवर्क किया है, जिस तरीके से स्टडी किया ओपोनेंट को, वो नज़र आ रहा है। आखिरी राउंड इस पहले हाफ का यहाँ पे स्टैन देखेगा, एक और बार कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, स्मोक की जो धार है वहाँ पे खेल रहे हैं। ट्विस्ट थोड़ा सा भी अगर ओवर कमिट कर दे, एक आध पिक्सल भी दिखाते तो शायद वहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाते, लेकिन स्टैवन पीछे हटना चाहेंगे। ये डिसिप्लिन की मैं बात करूँ, उन्हें पता है कब पीछे उनको हटना है। केडियन पीछे खड़े थे बैकअप देने के लिए ऑप लेके, और एक और बार हीरोइक शानदार इंफॉर्मेशन प्ले, शानदार यूटिलिटी ड्रेन करा रहे हो। एंड अब उनके पास सिर्फ 2 फ्लैशबैंग बचे। इस फ्लैशबैंग के बाद 2 फ्लैशबैंग और किस तरीके से क्रॉस करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसेंडियरी जो सीटी साइड पे उसका ये स्टैब स्मोक के थ्रू स्प्रे करके वो पिक निकाल दे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसेंडियरी भी अवेलेबल है उनको डिले करने के लिए। दिक्कत ये बात है कि अब टेररिस्ट के पास बिल्कुल स्मोक नहीं बचे। 2 फ्लैशेस, दैट इज ऑल दे हैव। 2 फ्लैशेस पे उनको अब एंगल्स भी क्लियर करने हैं, साइड भी लेना है, पोस्ट प्लांट भी खेलना है। कैसे ही करेंगे, मतलब इट रियली लुक्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। बट स्टेविन क्या प्यारा एंगल लेके रखे और 2 हेडशॉट्स कड़क लैंड किए उन्होंने रॉप्स एंड ट्विस्ट पे। 4v2 का सिचुएशन है, यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, वेयर एज अभी भी हीरोइक के पास 2 फ्लैशेस, एक इंसेंडरी है, कहीं से भी अगर रशियन होता है, और एक प्यारा एंगल निकाला उन्होंने, सही से एंटिसिपेट किया कि ऊपर से आएंगे और मल्टी फ्रैग कर रहे हैं। हर एक प्लेयर मल्टी फ्रैग कर रहे हैं उनका, और आ गए उन लोगों ने वापस से रिदम पकड़ लिया एंड ये एग्रेशन काम कर गया उनके लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार गेम प्ले दिखा रही है रॉय। रॉय की एक मास्टर क्लास एरिया फिलहाल के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पूरे हाफ में खेला है, बिल्कुल भी नर्व्स नहीं दिखाई। श्योर जो शुरुआत में राउंड्स हारे थे वहाँ पे हमें लग रहा था कि वह नहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फेज काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेले थे, बट मैंने एक चीज़ आपको पॉइंट आउट करी थी कि हीरोइक के पास प्रॉपर बाय नहीं था, प्रॉपर यूटिलिटी नहीं थी। पहले 6 राउंड में सिर्फ 2 राउंड के पास वेपन्स थे, एंड उसके बाद जैसे उनको मौका मिला अच्छी यूटिलिटी लेने का, कॉन्फिडेंट मैप कंट्रोल डिनाई किया सामने वाली टीम को एंड उसके ऊपर कैपिटलाइज किया। बात तो सही है। एंड अब फेस को अगर गेम में वापस आना है तो उनको पिस्टल, पहला बाई, एंटीको, ये सारे राउंड्स काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी सोच समझ के अच्छे से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अटैक साइड मेरे को लगता है हीरोइक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड उनका फायर पावर भी आपने देख ही लिया है कि कैसे वो एम डुएल्स जीत रहे हैं अभी। दे आर कनेक्टिंग द शॉट्स ऑल्सो, अब उनको एके भी मिलेगी, तो इट इज़ गोना बी अ कंप्लीट क्योटिक सिचुएशंस आने वाली है बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर डायरेक्ट कॉल्स करते तो आराम से फेस को वो निकाल लेंगे। तो आई जस्ट वांट टू सी हाउ कैरिगन इज गोना लीड दीज गाइज नाउ। आई मीन टेरेस साइड पे थे वो, गेम अभी तक खत्म नहीं हुए, सो आई एम श्योर फेस के पास कोई ना कोई इस चीज़ का तोड़ ज़रूर होगा। बिकॉज अगर आप मेजर के क्वार्टर फाइनल में बैठे हो देन आई डोंट थिंक ये स्कोर लाइन आपको इतनी ज़्यादा कोई परेशान करेगी। 10-5 इज़ नॉट अ बैड हाफ, ऑब्वियसली आइडियल हाफ नहीं है आपके लिए न्यूक पे, बट इट्स नॉट अ बैड हाफ एट ऑल गिवन द फैक्ट कि आप टेरेस साइड पे स्टार्ट कर रहे थे। पहले जो 4 राउंड, पहले जो 2 बाय राउंड होने वाले खास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले फेस के लिए। अगर वहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो फिर हीरोइक विल मेक क्विक वर्क ऑफ देम एंड उनको मौका नहीं देंगे कम बैक के लिए। क्योंकि इकोनॉमी इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर आप पिस्टल हार जाते हो और पहला बाय अगर हार जाते हो तो मतलब वही 4-5 राउंड आपके चले जाते हैं, मतलब इमीडिएटली, बहुत क्विकली। तो अभी बस पिस्टल राउंड है, पिस्टल राउंड पे ही मेरे ख्याल से मेरा फैसला तो पिस्टल राउंड पे दिख जाएगा। एंड इट विल बी रियली अमेजिंग अगर वो पिस्टल हारते हैं और उसके बाद भी वो गेम में वापस आते हैं हीरोइक के अगेंस्ट।
खुश लग रहे हैं ये अभी, मतलब दे आर एंजॉयिंग द थिंग। जी हाँ, वो जो 9 राउंड की स्ट्रीक थी इनकी उसके बाद कोई भी टीम खुश होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट आप एग्जिस्ट का मूवी देख सकते हैं, ऑफ कोर्स कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है एग्जिस्ट के पास खुद। बाप रे, इज बीन अ लेजेंड इन द सीन। आप बात करें 1.6 भी खेल चुके हैं, ग्लोबल ऑफेंसिव खेल चुके हैं, सोर्स भी खेला उन्होंने, सोर्स भी खेला है। आई थिंक यस, आई थिंक आई हैव सीन हिम अगेन। सोर्स मैंने इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया था बिकॉज 1.6 और सोर्स के अंदर जो कम्युनिटी डिवाइडेड थी वो बहुत ज्यादा थी, बिकॉज आई बिलीव सोर्स 2004 में रिलीज हुई थी, वाज इट 2003 2004? But, yes, somewhere around at that time only. Nonetheless, 10-5 का स्कोर लाइन है यहाँ पे हीरोइक के लिए। बहुत क्रूशल पहला राउंड होने वाला है। 2 स्मोक, एक मोलोटोव। मुझे लगता है क्विक एग्जीक्यूट जरूर हो सकता है बिकॉज जिस तरीके की यूटिलिटी है वो बेट करने वाली यूटिलिटी नहीं है। कॉन्टैक्ट पे एक्सप्लोड करेंगे, मुझे फीलिंग आ रही है। यस, अभी ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से देखने के लिए। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। एंड या टॉकिंग अबाउट दिस, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खेला है, रहे हैं उनका पार्ट। एंड ये आया इनका क्योटिक एग्जीक्यूशन, एंड एज आई सेड ये एकदम क्योस कर देंगे जब साइट में आएंगे। एंड वही क्या इन लोगों ने यूटिलिटी के साथ एंड एम ड्यूल्स भी जीत रहे क्योंकि अब उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है। इट्स अ 4-1, काफ़ी बहुत शानदार तरीके से वो साइड पे एंडर की है। एंड कैरिगन ने एक अच्छा पिक भी निकाला था, बट यू नो, ओह नो, आई थिंक ही इज गोना नाइफ हिम। बहुत मॉरल डाउन हो जाता अगर कट जाते तो मेरे ख्याल से। लेकिन एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, लैन इवेंट जब होते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप समझ जाते हो कभी भी अगर आप एक एंगल होल्ड करो, पीछे क्राउड ज्यादा आवाज करे, ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पीछे कोई खड़ा है। और ये चीज की वजह से उन्होंने पीछे चेक किया है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बट अगर वो नाइफ हो जाती तो फिर तो क्या ही कहना था। बट हीरोइक, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके की डोमिनेशन दिखाया उन्होंने फेस के ऊपर, मुझे नहीं लगता फेस के पास कोई जवाब होने वाला है इसके बाद। पता नहीं, मेरे को तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है अभी क्योटिक सिचुएशन में वो क्या करेंगे जिससे यू नो टीम का मोरल वापस आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे वो टीम को एक साथ इकट्ठा कर लें। उन लोगों ने अभी इन्वेस्ट भी किया है, तो अगर ये 6-11 नहीं होता है तो बहुत मुश्किल लगेगा, हालात बुरे हो जाएंगे। एंड वापस से क्योटिक एग्जीक्यूशन जैसा कि मैंने कहा था, और बहुत ही प्यारा 2 पिक निकाला रॉब्स ने स्टेपिंग अप एट द राइट टाइम। 2 हेडशॉट्स कनेक्ट किए उन्होंने 1v2 ब्रॉकी के कंट्रोल में, बट जैबी हेडशॉट पे हेडशॉट एंड महंगा पड़ चुका है ये अब मेरे ख्याल से फेस को। अब उनके फेसेस पे दिख रहा है क्या वो प्रेशर पे आ चुके हैं। दे आर ऑल इन प्रेशर राइट नाउ एंड हीरोइक इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग देम, जस्ट विनिंग द एम डुएल्स। प्यारा हेडशॉट लैंड किया है भाई अभी ने। रॉबिन जो इतने साल से इस गेम को देखते आ रहे हैं, इंसेप्शन हुआ था काउंटर स्ट्राइक का, उस टाइम से खेलते आ रहे हैं, एब्सोल्यूट लेजेंड इन हिज ओन राइट। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे वो शॉट के बाद। उन्होंने सोचा किस तरीके से इस चीज़ को काउंटर करें आप। एंड रेन, ओ ला ला, केरियन को वहाँ पे टेक डाउन किया। यहाँ पे दिस कुड बी द वेरी मोमेंट जहाँ पे फेस कमबैक माउंट कर सकती है, लेकिन ये राउंड उनको जीतना पड़ेगा और क्लीन तरीके से जीतना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ईगर होते हुए इन्फॉर्मेशन के लिए रेन ने डैमेज काफ़ी ज़्यादा लिया एक के साथ, लेकिन जो फॉलो अप नीड था वो भी काफ़ी प्रिसाइज। यप, एंड शॉट तो बहुत ही प्यारा लैंड किया। मतलब मेरे को आजकल ये जो डीगल है ना नर्फ होने के बाद से, इससे अगर कोई हेडशॉट, अरे ये तो लास्ट कहीं और ही उड़ के गिरी है मेरे ख्याल से बट कोई बात नहीं, इससे जो हेडशॉट लैंड करते हैं ना मेरा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है उनके लिए, क्योंकि ये बंदूक मेरे से तो अब नहीं चलती, पता नहीं क्यों। पहले मैं भी बहुत चलाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था लेने में डीगल, बट अब तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आती डीगल लेने के लिए। आपको क्या लगता है डीगल का क्या सीन है अभी? डीगल के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी जी नहीं वहाँ। ओह नो, या भी सबसे पहले एक पिक निकाला, कैरिगन ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहाँ पे एक और बार ट्रेल लेने कोई मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होने वाली उनके लिए। कैसे होती है कि एक एक करके एंगल चेक करे, लेकिन ब्रोकी इज नॉट गोइंग टू मिस 2 शॉट्स। एंड आराम से ये साइड का कंट्रोल लेते हुए रॉस इकलौते प्लेयर बचे हैं जो रैम से ऊपर आने की कोशिश जरूर करेंगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ही कैन डू ओवर हियर। 1 वर्सेस 3, 5-7 जरूर है उनके पास। पोटेंट वेपन है ये, अगर आप उसको चलाना आता है तो
लेकिन यहाँ भी गोल गोल घूम के वहाँ पर प्लांट कर रहे थे। उन्हें आइडिया ज़रूर था कि सामने वाले जो प्लेयर है उनके पास इतनी अच्छी वेपनरी नहीं है, उनके पास इतनी अच्छी बंदूक नहीं है। गोल गोल घूम के प्लांट करने का एक ही कारण होता है कि वो हेडशॉट ना कनेक्ट कर पाए अगर गलती से भी पीक करे तो। यप। एंड अब 2 किल्स भी निकाल लिए डीगल से। इकोनॉमी में कोई खास ज़्यादा तो उनको नुकसान होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जीते रहे राउंड्स। अभी 5-13 का हाफ होने वाला है और अभी प्रॉपर बाई आएगा फेस का, तो बहुत क्रूशियल राउंड होगा। इसके बाद इट्स गोना बी मेक और ब्रेक फॉर देम। एंड डबल डिजिट टच कर दिए हेरोइक एंड दे आर लिटरली 3 राउंड्स अवे फ्रॉम विनिंग द फर्स्ट मैप इन द क्वार्टर फाइनल्स। और पहला मैप मिलेगा तो क्या ही स्ट्रॉन्ग मेंटल हो जाएगा टीम का कि उन्होंने ये वाली सीरीज क्लोज करते हैं फटाफट। ये इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अभी स्टेप अप करें इंडिविजुअली एंड एज अ टीम। रॉयक सिर्फ उनके डिफेंस को नहीं तोड़ रहे, उनके मोराल को तोड़ते जा रही है। एक एक राउंड करके चिप कर रहे हैं वो, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके मोराल को। और स्पैंक मी केडियन। उन दर्शक का तो पता नहीं, लेकिन केडियन फिलहाल के लिए फेस को जरूर स्पैंक कर रहे हैं। एंड हेरोइक एब्सोल्यूट डोमिनेशन, यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं दे रहे फेस को एक कमबैक माउंट करने का। ब्रो की नॉब जरूर उठाई है, लेकिन क्या उसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। रैम की तरफ खेल रहे हैं, हम मिस्टेकन। यस, ओ माय गॉड। अब तो भाई ये राउंड अगर ये निकालते हैं ना, ये रीटेक अगर कर लेते हैं वो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बी साइड लेना जितना टफ है उतना ही टफ मेरे ख्याल से रीटेक करने के लिए भी है। क्योंकि वाइल्ड फायर के तरह ओपोनेंट्स घुस जाते हैं पूरे एंगल्स को कैप्चर करने के लिए। एंड अब तो बस भगवान ही बचा सकता है मेरे को लगता है फेस को, या कोई स्टेप अप करने वाला है भगवान के रूप में इनके टीम में आके। देखते हैं धीरे धीरे क्योस में फ्लैशेस के साथ साइड में टेक तो ले रहे हैं, घुस चुके हैं वो, लेकिन ब्रोकी के फ्लैश। आई थिंक ब्रोक के फ्लैश ने इनको कहीं ना कहीं इनको धोखा दे दिया मेरे ख्याल से। जी हाँ, वो फ्लैश काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। एट द सेम टाइम केडियन को देखिए यहाँ पे आराम से वो किल निकाला, काफी बेहतरीन फ्लैशेस से। बैकअप बिल्कुल भी नहीं था उनके पास। ब्रो की ऑफ लेके खड़े जरूर थे वहां पे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। डबल पीक, द डिसिप्लिन, द एब्सोल्यूट डिसिप्लिन, ये देख के मुझे जितनी खुशी होती है कोई भी प्रोफेशनल मैच के अंदर, उससे कोई बेहतरीन मार्कर नहीं होता कोई टीम की सक्सेस का। आपने एक चीज अगर नोटिस करी, जैसे ही उनको पिक मिला रॉब्स के ऊपर, रैंप में जिस तरीके से कूदे, उन्होंने ओवर एक्सटेंड नहीं किया। नहीं, क्योंकि लैडर की तरफ से अगर कोई ऑफ करे तो उनको मार सकता था, लेकिन बिल्कुल भी ओवर एक्सटेंड नहीं किया। सारे के सारे प्लेयर्स नीचे चले गए। उसके बाद शुश ने पहला पिक निकालने की कोशिश जरूर करी रैंप के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए पीछे हट गए। ये रिस्ट्रेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायरेक्ट कॉल्स पे खेल रहे हैं यार, उनको पिक मिल रही है वो सीधा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको घुमाना नहीं है, नचाना नहीं है। उनको पता है कि वो एम ड्यूल्स जीतेंगे, सीधा जा रहे हैं, साइट ले रहे हैं, एकदम सिंपल खेल रहे हैं। उनको उतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है हीरोइक को, क्योंकि उनको पता है अभी वो लीड पे है, उनके ऊपर नहीं है। दे आर जस्ट प्लेइंग कॉन्फिडेंटली। उनको पता है कि प्रेशर अभी ट्रांसफर हो चुका है फेस के ऊपर है। अब देखो वो अभी भी एक जन को बस उन्होंने रखा है कि भाई कोई पीछे से आके ना मार दे। धीरे 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 सीक्रेट जा रहे हैं, आराम से बी कमिट करेंगे वो। ओह कैरिगन स्प्रेज डाउन 2, बहुत ही प्यारा स्प्रे था, बट इक्वलाइज हो चुका है। इट्स अ 3v3। आई थिंक काफ़ी बढ़िया स्प्रे किया कैरिगन ने। एंड अभी थोड़ा पीछे पहुंचा रहे हैं वो हीरोइक को। दे आर नॉट रियली लेटिंग देम टेक ऑन देयर नर्व्स राइट नाउ। एक गन भी रिकवर कर लिया और एक SMG भी है। अभी यूटिलिटीज एक स्मोकी है खाली रुकाने के लिए कहीं ना कहीं। तो देखते हैं how FaZe is gonna get this round, क्योंकि ये राउंड अगर FaZe निकाल लेती है तो वो इस रेस में अभी भी जिंदा बचेंगे। रेन ने बहुत अच्छे से अपने आप को रिपोजिशन किया है एंड ये स्मोक से बाहर आने की कोशिश अभी की, साथ साथ ट्विस्ट साइड में है, उन्होंने स्पॉट किया है प्यारा क्रॉस फायर रॉब्स के थ्रू। और ये टाइमिंग जैसे ही खराब हुआ, केडियन ने अच्छा पिक निकाला, बट एडवांटेज लेते हुए आई थिंक FaZe को ये राउंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड दे हैव गॉट इट। इसके बाद FaZe को कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। दे जस्ट नीड टू प्ले विद गुड क्रॉस फायर्स, हैव सम करेज, गो फॉर द पिक्स इफ दे नीड। एंड कैप्टन साहब टाइम पे शॉप की अपनी टीम के लिए।
बहुत ही प्यारा राउंड था। कैरिगन की खुशी देखिए कितना ज्यादा मायने रखता है ये एक राउंड जो निकाला है, एक एक करके दे कांट लुक टू फॉर इन द फ्यूचर, ज्यादा आगे के बारे में सोच नहीं सकते, एक एक राउंड करके उनको राउंड निकालने पड़ेंगे। और हीरोइक यहाँ पे टाइमर लेते हुए रीसेट करने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगा एक प्रदर्शन अपनी कैप्टनशिप का भी। उनको पता है कि वहां पे थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां करी थी उन्होंने, जब उनको 2 पिक मिले थे नीचे सीक्रेट की तरफ, वहां से 2 पिक अगर आपको मिल गया, आपको आई बिलीव दिस राइट अगेन, ये हीरोइक के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हीरोइक ऑब्वियसली हैव द रीजंस टू नॉट कमिट टू इट, बट अगर आप 2 पिक वहां पे निकाल चुके, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 प्लेयर्स और मिलते, शायद ट्रेड कर पाते, आई एम नॉट श्योर, बट जैसे ही पीछे थे और रेन ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी वहां पे, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो। एंड कैरिगन की खुशी की बात आप कर रहे हो, क्योंकि उनको आई थिंक ही रियलाइज्ड वेरी, मतलब उनको पता था कि वो जो डबल फ्रैग उन्होंने निकाला है वो बहुत ज़रूरी था राउंड को सिक्योर करने के लिए। टीममेट्स पे भी भरोसा था कि वो ये कैपिटलाइज करेंगे। अभी बात करते हैं ब्रॉकी भाई की, क्योंकि आपने बोला है कि उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया इस पूरे सीजन, एंड दिस इज द टाइम व्हेन ही शोज अप फॉर हिज टीम, क्योंकि अभी फेस को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके हर एक स्किल, उनके फ्रैग्स जो भी वो करते हैं अभी टीम के लिए, वो उनको धीरे धीरे राउंड डिफरेंस कवर करने में मदद करेगा। एंड एक पिक भी मिल चुका है ट्विस्ट को, इट्स गोना बी अ 4v5। रॉकी स्लोली मेकिंग इट गोइंग एग्रेसिव, एंड आई थिंक उनको भनक हो चुकी कि कोई ना कोई क्लोज है, एंड अ वेरी नाइस शॉट, आई थिंक ही इज गोना लैंड द सेकंड शॉट ऑन हिम एज वेल। ओह माय गॉड, ब्रॉकी जोश देख रहे हैं मामा आ गया है। ब्रोकी व्हाट आर यू डूइंग ब्रोकी? जब पहला शॉट वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे, बहुत पहले गन स्विच कर दी, मुझे लगा कि शायद ये डाउनफॉल होगा उनका, लेकिन नहीं, उसके बाद जो शॉट्स कनेक्ट किए उन्होंने, खास तौर पे केरियन के ऊपर जो नो स्कोप कनेक्ट किया था, बेहतरीन शॉट्स, फिनोमिनल स्टफ, इनसेंट ट्रिपल किल्स, ये बहुत जरूरी था, इससे मेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इकोनॉमी रीसेट कर दी है, पूरी इकोनॉमी जा चुकी है अभी हीरोइक की, आराम से 2 राउंड्स और क्लोज कर सकते हैं वो पैसिवली खेल के। लेट्स सी हाउ दे आर गोना एग्जीक्यूट राइट नाउ। छोड़ दिया पूरा रैंप, वो उनको पता है कि बंदूक नहीं है, ग्लॉक्स पे आएंगे, छोड़ भी देते हैं तो क्रॉस फायर्स में राउंड निकाल सकते हैं। और ये मल्टी फ्रैग करते हुए रेंज एंड ड्रॉप्स, बहुत ही प्यारा, एक गन गिराया है, हालांकि एडियन के पास एक एके भी है, एंड दिस नेड टेक्स देयर ड्रीम अवे। ये राउंड तो नहीं निकल पाएगा, एंड फेज इज क्लोजिंग द राउंड्स, यही चाहिए था, ऐसे ही क्लोज जाए गेम। अच्छा लग रहा है देखने में, अभी मजा आ रहा है कि किसी ने गिव अप नहीं किया। बढ़िया रीड, शानदार रीड। केडियन जिस तरीके से राउंड गया था फिर भी खुश नजर आ रहे थे, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे वो राउंड निकालने की उनके पास इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं थी बिकॉज ऑफ द सॉरी यूटिल दे हैड, बट जितनी खुशी नजर आ रही है उनके चेहरे पे लग नहीं रहा है कि राउंड हार रहे हैं, हाँ लग नहीं रहा है वो राउंड हार रहे हैं और मेजर की क्वार्टर फाइनल में खेल रहे हैं। देख के तो यही लग रहा है कि वो उनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे, द फैक्ट कि वो मेजर क्वार्टर फाइनल खेले उसी में बहुत ज्यादा खुश है, और काफी बेहतरीन चीज है अगर आप सोचे उसके बारे में, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑफ यू। लेकिन आप हीरोइक के लिए बहुत क्रूशियल राउंड होने वाला है, यहाँ पे वो बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकते। क्या टेसिस स्किल निकाल पाएंगे? सबसे पहला पिक, बहुत क्रूशियल पिक होने वाला है यहाँ पे। जी हाँ, टेसिस निकालेंगे जरूर, दूसरा शॉट कनेक्ट करना है, लेकिन ट्रेन बाहर से आएंगे, एंड ड्रॉप्स के पास ऑफ है। वही डबल ऑफ सेटअप यहाँ पे, 2 वर्सेस 3, 2 ऑफ। ब्रोकी क्या वो शॉट कनेक्ट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल साउंड के ऊपर शॉट कनेक्ट किया है जरूर उन्होंने, लेकिन ओह माय गॉड, ड्रॉप, दूसरा शॉट नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। शोश इन 1 वर्सेस 1 इंफॉर्मेशन दे दी गई है, C4 उठा लिया गया है। क्या ब्रोकी यहाँ पे एग्रेशन दिखाएंगे? उन्होंने एक ही उठा लिए, ऑफ छोड़ दी, एंड जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको ऑफ गार्ड पकड़ना चाहते हैं, लेकिन शोश दरवाजा खुला है, दरवाजे की तरफ जाएंगे। क्या ब्रोकी इस चीज को एक्सपेक्ट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। ब्रोकी स्टिल होल्डिंग द एंगल, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाते हुए, लेकिन शोश नीचे जाएंगे। इंफॉर्मेशन उनके पास ही लास्ट स्पॉटेड थे वो आउटर अपर एरिया में, ब्रोकी और पुश करते हुए, और इंफॉर्मेशन निकल, दरवाजा सुन लिया गया। चलिए C4 प्लान हो जरूर जाएगा, लेकिन ब्रोकी still needs to creep up, making his way into the wins. क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? शोश देख लिया, ब्रोकी connects that shot. What a man, what an absolute man, lad. जिस तरीके से वो शॉट कनेक्ट किया, काफी ज्यादा क्लीन, काफी क्रिस्प,
एंड हीरोइक अब प्रेशर जरूर फील करेंगे वो। शो अप कर लिया ब्रॉकी ने, मैंने आपको बोला ना कि ये शो अप करेंगे तो दिखने लग जाएगा वो स्कोरबोर्ड में, और वो अब दिख रहा है कि इन्होंने जो शॉट्स कनेक्ट किए हैं एंड काफ़ी सारे एम डुएल्स जो मेरे को लग नहीं रहा था कि हीरोइक हारेगी, उन लोगों ने कैसे तो हार गए। मतलब रॉब्स ने भी शॉट कनेक्ट कर दिया और ये इनके अब जोश, मतलब सब जोश में आ चुके हैं इनके प्लेयर्स ऑफ फेज के। तो अब ये वही है कि इतना प्यारा एग्जीक्यूट किया, इतने सारे पिकअप्स लिए, बट फेज ने भी इंस्टेंट ट्रेड्स निकाले फटाफट। ब्रॉकी ने 1-on-1 डुअल भी निकाला बहुत पेशेंटली खेल के, गन स्विच की। तो अब ये राउंड अगर निकाल लेती है फेज तो आई थिंक दे आर बैक इनटू द गेम फॉर श्योर। खुशी चली जाएगी फिर एडियन की। खुशी जरूर चली जाएगी, लेकिन जिस तरीके का एग्रेशन फेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, आई फील लाइक इट्स हीरोइक। जो सीटी साइड पे कर रहे थे वो एकदम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा एग्रेशन के साथ। फेज रुकने का नाम नहीं ले रही। शुश यहाँ पे इकलौते प्लेयर जिंदा, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रॉब्स आखिरी किल निकालते हुए। फेज अचानक से ऐसा लग रहा है कि पहले आप में ये टीम नहीं खेल रही थी, कोई और टीम खेल रही थी। देव सारे शोइंग अप, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं। अब केडियन क्या करते ही, इसके ऊपर सबकी नजरें होने वाली है, बिकॉज ये जो किल्स निकालने होंगे उनको। अब ये जो 2 राउंड्स है वो बहुत मुश्किल होने वाले, बिकॉज प्रेशर उनके ऊपर है। कुछ राउंड्स हारने के बाद वही हो जाता है कि थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में खेलने लग जाती है टीम, एंड वो भूल जाती है कि वो क्योस कहीं ना कहीं उनको मदद कर रही थी। अभी जिस तरीके से उन्होंने शुरू में राउंड निकाले थे, तेज ने 1-2 बार पनिश कर दिया, तो दे आर नॉट डूइंग इट। बट अभी आ जाते हैं इस राउंड पे लिटरली विद अ फ्यू यूटिलिटीज, एंड केडियन ने अपने एके पे इन्वेस्ट किया है, सीधा वेंट से बी साइड का कंट्रोल ले लिया, एंड ड्रॉप्स इज ऑल अलोन इन द साइड राइट नाउ, टेक्स डाउन 1। कोई भी एम डुएल नहीं जीत पा रहा है अभी, एंड बहुत ही सैड बात है कि इतना प्यारा यूटिलिटी का यूज करते हुए उन लोगों ने बी साइड का कंट्रोल लिया था, बट रॉब्स केम अप विद अ ह्यूज ट्रिपल किल। एडियन इज जस्ट होल्डिंग ऑन, उनका इन्वेस्टमेंट भी अभी काम नहीं आया। रॉब्स, ब्रॉकी, कैरिगन सब अब अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड it's just a few rounds right now and it's looking like a quarter final। 2 बड़ी टीम्स दिखा रही हैं कि why they are here। वो सिंगल डिजिट वाला स्कोर नहीं है जो इनको डिफाइन करता है, and just I think right now is just putting all the players off the pressure। अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे आई बिलीव भी आप लोगों को बस 2 राउंड चाहिए, you're just 2 rounds from closing this map, and you guys should know why you are here to win। बहुत important round है। डबल ऑप सेटअप हीरोइक, सॉरी फेस के लिए। yes ब्रोकी एंड ड्रॉप्स यहाँ पे क्या वो एग्रेशन दिखाएंगे वापस, क्या ट्विस्ट को अंदर भेजेंगे मेटल डोर की तरफ, या फिर थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कोशिश करेंगे हीरोइक की तरफ से एक प्ले को बेट आउट करे। दरवाजा तोड़ दिया, मोलोटोव्स भेजी जा रही है, शुश पहला पिक निकालते हुए ट्विस्ट के ऊपर। आई डू बिलीव ये सेम एग्रेशन दिखाने की कोशिश की वहाँ पे, नहीं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो आउट की तरफ मारे तो नहीं, वो एग्रेशन इतना ज्यादा नहीं दिखा पाते, लेकिन स्पैम जरूर किया। ओ रेन, ये बहुत क्रूशियल होने वाला, अगर रैंप की तरफ जाते तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है इनके लिए। रेन ने मल्टीफ्रैग अगर कर लिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ट्रिगर नहीं रोका, ही जस्ट वेंट फॉर द पिक। और ये आग में जलते हुए ब्रॉकी की भी काफी हेल्थ डाउन हो चुकी है। स्टेवन का लर्क शायद भारी पड़ सकता है अभी फेस को, काफी आसानी से उनको एम डुअल जीतना था, लेकिन ड्रॉप्स पीछे से आके स्टेवन को ले लेते हैं, एंड इट्स अ 3v3 राइट नाउ। 2 ऑप है, 2 ऑप से रीटेक कैसे ही होगा ये भी एक देखने की चीज रहेगी, बट एडियन इज ओनली 7 HP राइट नाउ। दैट वाज पेनफुल। 2 ऑप महंगा पड़ रहा है रीटेक पे अभी, 1v3 सिचुएशन है, एंड आई थिंक गन बचाना ही अभी सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। मैच पॉइंट पे हीरोइक आ जाएगी, आई थिंक बहुत जरूरी था वो टाइम आउट लेना, एंड जिस्ट का टाइम आउट शायद वर्क कर चुका है टीम के लिए। थोड़ी सी गलती महंगी पड़ गई तो इस अर्ली राउंड पिक हो गए, एंड 1 राउंड अवे हीरोइक।
one step closer getting the match series. रेन एंड ब्रोकी, रेन को वहाँ पे थोड़ा और पेशेंट रहना था, दूसरा ब्रोकी को शॉट कनेक्ट करना था. अगर वो कर पाते तो आराम से वो शायद राउंड निकाल देते, लेकिन शोश बेहतरीन वेंट जो कैबिन के थ्रू उन्होंने स्प्रे किया था. बट मेरा ये मानना है ये रेन का राउंड था. अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर पाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा, ब्रोकी भी शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए. एंड नाउ हीरोइक मैप पॉइंट पे बैठी है फिलहाल के लिए. Carrigan almost being taken down over there. Narrow escape. Oh! क्या प्यारा यूटिलिटी का यूजेज कर रहे हैं. एंड ट्विस्ट कमिंग इन विद द इक्वलाइजर और फटाफट उन लोगों ने ए साइड कंटेस्ट किया. शुश हेडशॉट लैंड किया बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाया. अभी केडियन के ऊपर इट्स अ 1v2 सिचुएशन. आई थिंक उनको पता रहेगा कि प्लेयर लो हैं. आई थिंक ही नोज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ. एंड ये राउंड अगर वो निकाल देते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है. बट ऑप है और बहुत बड़ा रिस्की प्ले बना रहे हैं. वो बहुत बड़ा रिस्की एक प्ले बना रहे हैं. एंड टाइमिंग हो गया. केडियन अगर थोड़ा 0.1 सेकेंड आगे हो जाते एंड ड्रॉप्स का वो मिस हो जाता तो आई थिंक ही वुड हैव गॉट द एंगल. अप्रोच बहुत ही इंसेन था 1v2 राउंड के लिए. एंड इकोनॉमी खराब हो चुकी है. एंड फेज ने कितना अच्छा कंटेस्ट किया है कि साइड में 2 पिक्स होने के बाद भी फटाफट आके रीपिक किया, कंटेस्ट किया. एंड बहुत ही प्यारा अप्रोच था इनके लिए. लगता है कैरिगन का गला ज्यादा छिलने वाला हमसे कंपैरिजन में, जिस तरीके से वो छिला रहे फिलहाल और एक राउंड जीतने के बाद. लेकिन कैरिगन द ग्रेट डेन हैड टू शो अप वो 1 वर्सेस 2 में, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल था वो करना. एंड यहाँ पे कैरिगन का एग्रेशन देखिए, एक और बार यहाँ पे स्पैम जरूर करेंगे. ब्रोकी नीचे उतर जाएंगे. कैरिगन ओह नो रन आउट ऑफ बुलेट्स. काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट, लेकिन ब्रोकी एक और किल निकालेंगे जरूर अपने आप. रॉक्स व्हाट इन द वर्ल्ड वाज दैट पुश. कियोस का फायदा उठा लिया रॉब्स ने एकदम टाइम पे. फटाफट आए, एक पिक निकाला और एक 1 मैन एडवांटेज लाके दिया टीम को. बट अभी भी काफी डुएबल है. इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल. एडियंस स्ट्रॉन दोनों जिंदा हैं अभी. आई थिंक वो पेशेंटली थोड़ा होल्ड कर रहे हैं क्योंकि सिटी साइड को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. एंड अभी थोड़ा इन्फो मिला है तो वो कहीं ना कहीं पनिश करना चाहेंगे. ब्रोकी का बैकअप हेल्प करने वाला है. एंड इट्स अगेन अ 1v2 सिचुएशन. क्या कप्तान निकाल पाएंगे ये राउंड अपनी टीम के लिए? पता है उनको कि ब्रोकी किधर है. इधर से पिक लिया था, उनके पास C4 भी है. इट्स नॉट गोना बी अ बिग डील. धीरे धीरे एंगल्स नैरो डाउन करते हुए. And it's a 13-5. Heroic unable to close the map after such a huge lead. क्या कहना चाहोगे यार? फेज तो दिखा रही है कि क्यों है वो यहाँ पे. फेज हमेशा हमने देखा इस टूर्नामेंट में, खास तौर पे नावी के अगेंस्ट जो 9-15 का जो डेफिसिट था उसके बाद उन्होंने कम बैक किया. तो उनके अंदर वो काबिलियत जरूर है. यू कैन नेवर काउंट देम आउट. और वही चीज का एक और बार प्रदर्शन करते हुए हीरोइक के सामने एक एक करके राउंड निकालते जा रहे हैं. एंड कैरिगन की खुशी देखिए, इतनी ज्यादा खुश है. ऑडियंस सपोर्ट कर रही है उनको. वो देख रहे हैं मतलब कि आसपास, मतलब खुद भी पंप हो रहे हैं, अपने टीममेट्स को भी जोश दे रहे हैं. पूरे ऑडियंस को, क्राउड को भी कंट्रोल कर रहे हैं. मतलब शानदार, देखने में भी अच्छा लग रहा है. मतलब यहाँ हमारे जज्बात भी बढ़ जा रहे हैं मतलब धीरे धीरे देख के कि भाई कहाँ टीम कितने राउंड के डिफरेंस में थी एंड कहाँ से कमबैक किया इन्होंने स्लोली. एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मैप अब क्लोज कर दे कि इतने प्यारे लीड के बाद अगर हीरोइक ओटी पे जाती है इस गेम को लेके तो अच्छा नहीं लगेगा आई थिंक उनके कोच को. तो देयर वी गो, अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड. 13-15 हीरोइक 1 राउंड अवे. पहला मैप क्लोज करने के लिए एक और राउंड की जरूरत. फेज को 2 राउंड जीतने हैं. कैरियन के हाथ में ऑप. फिलहाल प्रो की इकलौती ऑप पर काफी ज्यादा डैमेज दिया है इस नीड ने. और ये डिफरेंस हो सकता है M4 का 1 शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा.
स्मोक जरूर बाहर की तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए याबी आई बिलीव इज ट्राइंग टू क्रीप अप टुवर्ड्स रैंप, लेकिन रैंप के बाहर खड़े जरूर है। क्या वो पुश करेंगे? रोटेशन बेट कर रहे हैं आउटर की तरफ, एक काफी ज्यादा स्मार्ट याबी इज इन प्राइम पोजीशन वहां पे पिक निकालने के लिए। धीरे धीरे करके पीछे रोटेट जरूर करेंगे, लेकिन क्या इसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाएंगे वो? मेरे को लग रहा है कि अभी ये बहुत अच्छा कॉल था केडीएन के द्वारा, यू नो उन्होंने एक पिक ले लिया एंड फटाफट कॉल करता है, वापस से जाके न्यूट्रल हुए, एक रीसेट लिया और अब ए एग्जीक्यूट करने का शायद उनका प्लान है। एंड दे आर डंपिंग ऑल द यूटिलिटीज दे हैव राइट नाउ, बट इनके पोजीशंस बहुत अच्छे हैं। बट ये स्मोक के आउट पुश काम नहीं किया। ट्विस्ट कमिंग इन विद अ गुड फ्रैग एंड ये बहुत प्यारा इनका क्रॉस फायर है। ब्रोकी ने ये पे क्या हेडशॉट लैंड किया है। इट्स अ 2v1 सिचुएशन वापस से। ओह 7 HP पे है जिंदा, माय बैड, मैंने देखा नहीं था कि स्टॉन अभी भी मरे नहीं है। एंड 2v1 सिचुएशन हो चुका है वापस से। फेज ने गेम निकाल लिया, मतलब ये अब आई थिंक ये जज्बातों से राउंड निकाल रहे हैं। जज्बातों का तो पता नहीं, लेकिन फेज प्रूविंग द मैटर वंस अगेन। नावी के खिलाफ किया था, फिलहाल हीरोइक के खिलाफ कर रहे हैं एक और राउंड। क्या हीरोइक के पास उतने पैसे होने वाले कि वो बाय कर पाए, अच्छी वेपनरी रख पाए। और अब केडन के मुंह पे आपको प्रेशर नजर आ रहा है, कितना ज्यादा प्रेशर उनको उनकी टीम को झेलना पड़ेगा ये राउंड में, वो जरूर दिखाई देगा। लेकिन खुशी जा चुकी है उनकी एंड अब यूटिलिटीज भी नहीं है ज़्यादा, बहुत ही वीक बाई है। कुछ स्मोक्स हैं, एक गलिल है उनके पास, 2 गलिल हैं एक्चुअली, तो बहुत ही मुश्किल वाला ये राउंड रहने वाला है। लाइक अगर ये 16-14 क्लोज कर देते तो आई थिंक अच्छी नींद आएगी, बट अगर ये ओटी गया जो ये जाने वाला है। रेन ने बहुत प्यारा एक स्पैम करके पिक निकाल के दिया है टीम को। दे हैव एंटिसिपेटेड इट प्रॉपरली कि आउटर कंट्रोल ले रहे होंगे एंड स्लोली अभी भी वो लोग पैनिक नहीं बना रहे हैं हीरोइक की, यू नो दैट यू नो दे आर ट्राइंग टू टेक दैट साइड। बट इतना प्यारा इनका क्रॉस फायर है, रैम से ऑप का एंगल लगा के रखा है ब्रॉकी ने। बहुत टफ होगा ये साइड मेरे को लग रहा है इस मोमेंट में लेना, अनलेस यू नो दे जस्ट लैंड सम क्रेजी शॉट्स। रॉब्स ने पूरी की पूरी कोशिश करी थी वहां पे जिंदा रहने के लिए, लेकिन 2 वर्सेस 3 यहाँ पे C4 प्लांट हो चुका है। या भी पूरी कोशिश करे कवर में जाने के लिए, अपने टीममेट को मदद करने की जरूरत। ट्विस्ट को पता है वहां पे शायद एक और प्लेयर होने वाले, लेकिन ट्विस्ट क्या किल निकाल पाएंगे? केडीएन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। केडीएन बहुत क्रूशियल पोजीशन पे निकालेंगे जरूर ट्विस्ट के ऊपर वो फ्लैग एंड याबी वंस अगेन गेट्स वन मोर। Carrigan in a 1 versus 2, the man, the myth, the legend himself. क्या ये 1v2 निकाल पाएंगे? केडीएन को बेट करने की कोशिश, लेकिन केडीएन कुछ भी करके वहां पे जिंदा रहे जरूर। एक और बार वो दरवाजा खोलेंगे, कैरिगन अंदर पुश करेंगे, लेकिन केडीएन will finish things off 16 to 14। Oh my god, इतना बड़ा कमबैक करने के बाद मैप क्लोज नहीं कर पाए, ओवर टाइम पे पुश नहीं कर पाए। केडीएन शोइंग अप जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी टीम को, उन्होंने वो राउंड जिताया और ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। उनको पता है कितनी मुश्किल से ये मैप जीते हैं वो, और ये जो टाइम आउट होने वाला है दोनों टीमों के लिए, ये दूसरा मैप बहुत क्रूशियल होगा। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें करेंगे ब्रो की, आई एम प्रीटी श्योर इज वेरी डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से ये राउंड क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन फेज व्हाट एन एंटरटेनिंग लाइनअप, क्या ही इम्पॉसिबल राउंड निकाला है। मतलब रिसोर्सेज भी नहीं थे, गलिल थी, अच्छा एक्सप्लोजन किया साइड पे, फटाफट स्ट्रेट लिए एंड वो ट्विस्ट के साथ जो टाइमिंग हुई वहां पे, मतलब जस्ट उन्होंने अपना क्रॉसर हटाया ही था कि यू नो ही जस्ट somehow rechecked it and landed the headshot, and here we are, heroic closing the map with a lead in the series now। बहुत ही क्लोज था, जिस तरीके से गेम बन रहा था it wasn't looking like कि इतना क्लोज जाएगा कि 30 के 30 राउंड खेलेगी दोनों टीम्स, एंड बहुत निराश होंगे कि इतना अच्छा उन्होंने कमबैक किया था एंड क्लोज नहीं कर पाए या ओटी के लिए पुश नहीं कर पाए। ओवरपास उसके पहले रीसेट होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप फेस के लिए। अभी तो वो निकाल लेते हैं तो फिर सीरीज़ में बने रहेंगे, वरना निराशा मिलेगी आज उनको बहुत ज़्यादा। ये मत भूलिएगा ये फेस का पिक था,
अगला जो है वो हेरोइक का पिक है। ओवरपास की अगर हम बात करें, they've been looking pretty strong on that map, I'll be honest. अगर दोनों टीम को कंपेयर करें, हेरोइक very confident on Overpass, लेकिन ये मैप 13-5 as a matter of fact, 13-5 से 13-5 से लेके 16-14 किस तरीके का कमबैक किया था फेज ने यहाँ पे। I'm sure वो महसूस कर रहे होंगे अभी भी, they'll be hot एंड अगले मैप के लिए पूरी की पूरी तैयारी करके आएंगे। लेकिन फेज could have pushed it to overtime। जो एक राउंड था, मुझे अभी भी याद है, ट्रिकिन को बूस्ट दिया गया था रैम्प के ऊपर, ब्रो की वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, शायद ज़्यादा पेशेंस दिखाते वहाँ पे, तो इसकी कहानी कुछ और होती। ये बात तो है, मतलब आई विल टोटली एग्री टू दिस फैक्ट कि थोड़ा और शो अप करते तो रिजल्ट्स कुछ और होते, कुछ और दिखता हमें अभी स्कोर बोर्ड में। बट आई एम रियली होपिंग कि फेज हैज समथिंग इन देयर डायरी बुक और इन देयर बैग टू ब्रिंग इन ओवरपास, क्योंकि हीरोइक का पिक है वो, एंड कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं इस मैप में। इससे पहले भी उन्होंने जब भी ओवरपास खेला है, काफ़ी अच्छे स्टैट्स, काफ़ी अच्छे रोटेशंस देखने को मिलता है हमें। एंड फेज का मेंटल अच्छा है, तो आई स्टिल थिंक कि दे कैन कम बैक फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द गेम। तो स्कोर उतना मैटर नहीं करेगा, उनको बस अच्छा गेम खेलना है, एक दूसरे के अराउंड खेलना है। अभी भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा कैचअप किया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर फाइनल्स आई थिंक द ऑडियंस कैन सी राइट नाउ। हीरोइक वर्सेस फेज मतलब एक बहुत ही अच्छा फाइट है, एंड ऑडियंस इज ऑल्सो गोइंग क्रेजी आई थिंक। हमें आवाज़ आ रहा है कि हाउ दे आर मेकिंग नॉइजेस विद ईच एंड एवरी फ्रैग। हेरोइक वर्सेस फेज जब शुरू हो रहा था, तब मैंने कहा था कि ये क्वार्टर फाइनल जरूर है, लेकिन इस गेम का ऑरा और इस गेम का औहदा दोनों ग्रैंड फाइनल से कम नहीं है। और जिस तरीके का एंटरटेनमेंट वैल्यू इस मैच ने हमें दिया है, वो शायद आपको फाइनल में भी नजर ना आए। लेकिन फेज शानदार से शानदार कमबैक माउंट किया था आखिरी राउंड में। केडी वहाँ पे क्लच सिचुएशन में बाल बाल बचे थे कैरिगन जब उन्होंने गोली चलाई, लेकिन कुछ ना कुछ करके केडी ने राउंड जरूर निकाला। आई एम प्रीटी श्योर वो जो इतनी रेंज पे पॉइंट ब्लैंक पे भी अगर M4 का वन टैप हेडशॉट नहीं होता है, फिर तो दिक्कत जरूर, बुरा जरूर लगता है। 140 कितने बार हम लोगों ने देख लिया ये 140 वाला सीन यहाँ पे। द गन डिफ 140 भाई, मैं तो इमोशनली टूट जाऊं भाई अगर ऐसा 140 वाला चीज हो एक से ज्यादा बार। बट कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका है। एंड फेज गिविंग अ गुड फाइट, बट हेरोइक getting it. First map, very close to winning the series right now. यहाँ और फैंस को भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा इमोशन शो कर रहे हैं सारे के सारे फैंस। एंड अगर आपको घर बैठे इतने ज़्यादा इमोशंस आप महसूस कर पा रहे हो, इतनी चीज़ें आप महसूस कर पा रहे हो, फिर तो फैंस जो अरीना में बैठे हैं वहाँ पे एकॉर अरीना में, उनको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। समडे यूफो समडे हम भी वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे जरूर किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है। इंडिया में काफ़ी लाइन्स देखे, काफ़ी लाइन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। आप एज अ मैनेजर, आप बीन ऑन द स्टेज एज अ होस्ट, लेकिन जो ग्लोबल स्टेज के इवेंट्स होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, सबसे बड़े इवेंट होते हैं, उनका ऑरा कुछ और होता है। और वहाँ पे जो रहने की फीलिंग होती है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इट इज़ रियली अमेजिंग। एंड अभी मेरे को फैंस के पर्सपेक्टिव से भी आप सोचिए कि इतना अच्छा कमबैक किया, एंड कितने फीलिंग्स, कितने अप डाउन होते हैं। मतलब एक पल के लिए आप देख रहे हो कि आपकी टीम हार रही है, फिर वो फाइट की जा रही एकदम बराबरी पे आ जाती है, एंड नेल बाइटिंग सिचुएशन कितना हो जाता है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। मतलब मैं एज अ स्पेक्टेटर, मैं कभी भी अपनी टीम की भी गेम्स देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा एज अ स्पेक्टेटर देखता हूँ। तो बहुत इमोशनल चीज़ है। एंड आई थिंक यही एक स्पोर्ट की खासियत है कि लोगों को जो इससे इन्वॉल्व नहीं रहते वो सोचते रहते हैं क्या वीडियो गेम चल रहा है, बट भाई बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है हर प्लेयर के साथ। दिख रहा था कि प्लेयर्स कितने जज्बात के साथ खेल रहे थे, कितना हाइप क्रिएट कर रहे थे एक राउंड के बाद। सो देखिए जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई इस गेम के साथ साथ। अगर आप मेरी भी बात करें, मैं 17 साल से ये गेम खेल रहा हूँ और मेरी उम्र 26 साल की, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वक्त बिताया इस गेम के साथ।
और काफ़ी प्लेयर्स वैसे भी है जिन्होंने जब से ये गेम निकली थी तब से खेलते आ रहे हैं, अर्ली 2000 से खेलते आ रहे हैं। अब रॉबिन की बात करें एज ए कोच एज वेल, फेज के जो कोच है वो तो शुरुआत से 1999 2000 से खेलते आ रहे हैं, जो सबसे पहला हाफ लाइफ का मॉड निकला था उस जमाने से खेलते आ रहे हैं वो। तो इमोशंस तो रहेंगे, ये प्लेयर्स के लिए ये सिर्फ गेम नहीं है, जिंदगी है उनकी। आई नो, मतलब कितने ज़्यादा समय के बाद एक टीम बनती है, फिर कितना कुछ करना पड़ता है इस लेवल पे जाने के लिए कि आप वर्ल्ड स्टेज में बेस्ट हो। कितना प्रेशर रहता है, ब्रांड्स रहती हैं, कितने सैक्रिफाइसेस रहते हैं, कितने बहुत कुछ रहता है, मतलब सो मच गोइंग ऑन ऑल टुगेदर एट वंस। एंड यही करते करते हम लोगों को ये भी नहीं भूलना है कि दिस इज़ द लास्ट CSGO मेजर इन पेरिस, जो और इमोशनल कर देता है हम सबको, आपको, मुझे, ऑडियंस को। एंड इसके बाद एक नया जर्नी चालू होगा काउंटर स्ट्राइक के फैंस का, जो है काउंटर स्ट्राइक 2 का। पता नहीं उसमें भी क्या रखा है। आपने ट्राई किया है? Unfortunately, I've not tried it yet because मेरे अकाउंट में मुझे अभी तक बीटा एक्सेस मिला नहीं था। And there's not a lot I can do, right? क्योंकि जब बीटा एक्सेस आपको मिला ही नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। बट उम्मीद करता हूँ गेम जल्दी से रिलीज हो जाए, बट उसके बारे में चर्चा जरूर कर देंगे। फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाइएगा, जरूर लौटेंगे और एक्शन के साथ, बिकॉज ये दोनों टीमें बहुत एंटरटेनमेंट देने वाली हैं। सो विल बी राइट बैक, से
It's a tough task. I like that it was pointed out that they lost the opening maps in their previous series and they're still able to turn it around and win the series, right? So let's keep that in mind here if we are wanting to take this to 3 maps here. As far as FaZe Clan fans go, I think we might need to change their name. Comeback Clan, that could be a nice one if they can show us that brilliance once more, but we're about to get this one underway. Yeah, I loved it. I love the way they framed it. Let's see. Comment ça va, Paris? I think that means good. I think they're excited. FaZe Clan taking on Heroic. Second map. Will they continue to dominate? Or have FaZe got something to show us here? The desk wants and demands a strong start from FaZe. Starting on that defense. And they want to see more from Rain here. He's going to have a tall task. The A bathroom rifler can turn it into deathmatch when he's on his day. And look at this, a little aggressive jaunt. Brokey and Rop silently looking for a fight as Yabi hanging 10 right now. They're going to boost. Let's see if they can find a fight here. Oh, look at that! Huh? Ready for each other here. I've countered your counter. It leaves us 4-on-4, a little off kilter. Yabi and Robs, ships in the night. Nothing to report. Misinformation. Twist has no idea how that's happened. Robs, he can't explain it. Yeah, but they don't know about Robs. Heroic have no idea here. Tessa's coming back. He might get caught off guard. Yeah, but he's worried about Monster. This could catch him. It's really up to the timing. Still smoking heaven. He doesn't know that Robs is on the other side here. He's past them. Yabi, assuming it's clear, it's where he came from. Maybe Robs can have the element of surprise on this one. They're not going to clear this. This should be an opportunity for the sharpshooter to hit some shots. Oh. There it is from Robs. Downs one, needs another. Shush meets his face. Oh. It's all good in the FaZe Clan hood. Locked down. And a 1-on-2 for Yabi. He's been looking good. Comfortable on this stage, but he needs to get that bomb down. Time against him. As are Rain and Robs. Robs on the hunt for more. Looking for more. It's Rain to hold on. And FaZe do get that strong start. Another pistol for them. Yeah, well, that's how Nuke started, right? They grabbed that pistol. They were able to get off to that flyer. They had a very, very good look in on Nuke. And, well, now, I like what Jacob brought up on the desk, the fact that they did have a strong CT side on Nuke. Well, now they get to continue their CT campaign. But this is all Robs, right? The namesake, keeping it cool here. He could have gone for fights earlier than that, but just wanted to sit, wait, bait him in, and that's a massive round. So, sure, Twist goes down for it, but it doesn't matter. They still grab the pistol. And they're actually going to leave Heroic wanting. No plan. Look at a bit of a full eco here. Sure, there's a molly, a couple of flashes and P250s, but they do want to buy into the next round of play. There is a window of time which is closing as FaZe sprung forward towards A. They now have a good idea that there isn't too much pressure coming. It's all about to be on Carrigan. Oh, look at this. A farm for Carrigan. 4. And the crowd demands more. It's a second, it's clean, and it's a lot of cash as well. Yeah, exactly. $2,400 farmed up for the longevity of this defense. What are they going to operate with, though? They're going to get some upgrades through. Carrigan obviously making an awful lot of money right here, and it's going to be great for the confidence to just line him up and take him down in that type of a fashion. Yeah. He's singing ABBA in his head right now. Money, money, money. All right, well, we know that Heroic were going to go for this buy. Light on in several departments, but this is a bonus round for FaZe here with their level of investment. Just wanted you to keep your eyes on Yabi. Well, here he is. It's not the monster tunnel, it's the short pipe. And already calling underpass clear. Continuing to force the issue. Carrigan again to be tested. Will his MP9 feel the feed against the AK? What a flash! Yabi doesn't seem to think so. Despite the blind spray, he's down there. What a push from Rain. The inaccuracy costs him. And these rifles, look at the damage dealt to Heroic, but nothing lethal on this bonus round from FaZe Clan. Yeah, bomb's confirmed right now. I'm not sure Robs is coming for this right now, just hanging out in the club. Cry and his teammates are in the dirt here, but some exit, that'd be tidy. Brokey as well looking for some damage. Rain felt like he had the jump there, literally through the smoke and straight into the jaws. So, yeah, sure. Some damage done, but nothing converted here, and Heroic will get their first T-side rounds. As look how diligent they're being. I think they might have a good idea. They might find him. This would be a little bit of an unusual twist. Robs being stared at. Yabi's taking his hands off the mouse.
He gets him down. Nice catch, traded. Across three of them. Yeah, there he is, a ringing. And they're wobbling into the site. Look at this. They're already in. Yabi kicks open with one. Traded back. Rain and Robs need more. It's Robs again. And look at the pressure from Tessus. He gives them the moment's respite. Rotation on its way. Molly will hold them or force them into the fight. Forced back. Chipped away at Carrigan spotted. Re-smoke heaven limits the options of Brokey. Oh, he didn't hit it. And Tessus will plant it. There is a kit available, but it's unlikely Brokey even gets there. He's got the big gun. Can he pick up a big round? It's so valuable into the next as well. Does Brokey? क्या information निकालने की कोशिश expect कर रहे प्लेयर को पिलर के पीछे, लेकिन अभी भी आराम से इत्मीनान से पूरा समय लिया, लेकिन टेस्ट ने बेहतरीन ट्रेड निकाला वहां पे। केडन काफी खुश, काफी ज्यादा नजदीक था ये राउंड, इतना ज्यादा क्लोज होना नहीं चाहिए था उनके लिए, बट ब्रोकी ने काफी कोशिश करी। जो पहला शॉट मिस किया था हेवन से उन्होंने साइड पे, वो नहीं होता तो शायद इसकी कहानी कुछ और होती, लेकिन फिलहाल के लिए हीरोइक 2-2 से इक्वलाइज करते हुए सिचुएशन को। काफ़ी यूटिल का इस्तेमाल करें यहाँ पे। शुश ने जो स्टेयरकेस का कंट्रोल था, कनेक्टर का कंट्रोल था, वो डिनाई करने की कोशिश करी और रेन ड्यूलीज लेके बहुत नज़दीक खेले। और ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हमने काफ़ी लेजेंडरी मोमेंट्स देखी है, लेकिन टेस्ट धीरे धीरे कर आ रहे आगे, उनको देख जरूर पाएंगे। जी हाँ, स्पॉट हो चुका है और वहाँ पे उनके लिए किल निकाला नामुमकिन सा हो जाएगा। ड्यूलीज लेके वो रेंज में वो नहीं खेल सकती, इसलिए पीछे हटने का उन्होंने डिसीजन लिया। यहाँ भी बी साइड पे अकेले, अभी भी बी शॉट पे पानी के अंदर बैठे हुए रॉब्स पिक जरूर निकला है, लेकिन क्या दूसरा पिक निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। हीरोइक मेकिंग थिंग्स वर्क, जो इनिशियल पिक है बहुत जरूरी होता है। या भी धीरे धीरे क्रीप अप करने की कोशिश, क्या बैक स्टैप कर पाएंगे ये देखना जरूर बनता है। रोटेशन आना शुरू हो चुका है, यहाँ भी नीचे से अलाइव, वो अगर गलती कर दे बी साइड के ऊपर तो फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे शुश ने थोड़ी सी आवाज जरूर कर दी, लेकिन बी की तरफ रोटेशन आना स्टार्ट हो चुका है। कैरिगन इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मोलोटॉव, स्मोक्स, फ्लैशेस प्रॉपर एग्जीक्यूट के साथ बी की तरफ वो आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। C4 आराम से प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है उनको। कैरिगन ऑलमोस्ट ऑफ गार्ड पकड़ लिया था उनको, लेकिन शुश काफी ज्यादा नजदीक है। इतनी ज्यादा नजदीक खेलना मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा पिस्टल्स के अगेंस्ट खास तौर पे। अब देखने ये बनता है फेस कितना ज्यादा डैमेज दे पाते हैं उनको। ब्रोकी किल जरूर निकाला, केरियन का शानदार बैकअप, एक और किल निकालेंगे, क्या तीसरा किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, ट्विस्ट वो मिस नहीं करने वाले। इंस्टेड ने उनको ट्रेड किया जरूर, लेकिन केरियन की ऑप उठानी पड़ेगी उनको। थोड़ा सा एक्सपेंसिव राउंड जरूर कहूंगा मैं टेररिस्ट के लिए, बट स्टिल काफी अच्छा राउंड, काफी अच्छा रोटेशन मैनिपुलेट किया था उन्होंने एक ही तरफ। पहला पिक निकाला, रॉब्स को कनेक्टर के अंदर उन्होंने बस किया, फिर वॉशरूम के अंदर रेन ने कोशिश बहुत ज्यादा करी वहां पे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। Once again, heroic कोशिश जरूर करिए वो मिड कंट्रोल डिनाई करने के लिए। यहाँ पे ग्रेनेड लाइनअप किया जा रहा है, देखना ये बंदा या भी क्या करने की कोशिश करे। जी हाँ जरूर, शायद
आगे पुश करेंगे, लेकिन यहाँ भी अभी भी इंतजार करते हुए पॉप फ्लैश हुआ था जरूर, लेकिन एक और फ्लैश का इंतजार, क्या वो पुश कर पाएंगे? शायद यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़े जा सकते थे अगर थोड़ा सा भी जल्दी करते, लेकिन मॉलोटोव मिस कर दिया वहाँ पे, मॉलोटोव मिस कर दिया। पीछे हटना जरूर पड़ेगा उनको पता चल चुका है वहाँ पे अब पुश नहीं कर सकते। पी लॉन्ग पे पुश करना मौत को दांत पे बुलाने बराबर होगा, इसलिए पीछे हटने का उन्होंने निर्णय लिया वहाँ पे। रेन मॉलोटोव की वजह से बाहर मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, स्मोक था मौजूद, काउंटर कर लेंगे। रोटेशन मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश, लेकिन टेसिस को यहाँ पे एक पिक निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है टेसिस अगर पिक निकाल पाते हैं तो फिर आराम से वो ये साइड खोल पाएंगे, लेकिन रेन को वापस बुलाते हुए अपनी तरफ खींचते हुए रेन को डिस्ट्रैक्ट जरूर किया, लेकिन क्या टेसिस वो किल निकाल पाएंगे? ए शॉट के ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए 45 सेकंड्स ऑन द क्लॉक। यह भी एक और बार फ्लैश आएगा जरूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। कैरिगन और ट्विस्ट वहां पे काम तमाम करते हुए सामने वाली टीम का, लेकिन टेसिस को देखिए 30 सेकंड है अभी भी घड़ी के ऊपर, क्या वो किल निकाल पाएंगे? रॉब्स अभी भी खेल रहे साइड के ऊपर, अगर रॉब्स के ऊपर वो किल निकाल पाते हैं तो शायद इनके पास एक मौका होगा, लेकिन टेसिस बेहतरीन पोजीशन में। जी नहीं, केरियन को वहां पे बस कर दिया जाएगा, ए लॉन्ग के ऊपर C4 पे गिर जाएगा। हेरोइक कोशिश बहुत करी उन्होंने, लेकिन वो जो मॉडो मिस हुआ था वहां पे उसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा, एंड फिर फ्लैश से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मेकिंग दिस वर्क, ज्यादा ओवर रोटेट नहीं करे, ज्यादा ओवर कमेंट नहीं करे। हेरोइक की जो माइंड गेम्स है वो उनको इतनी ज्यादा काम नहीं लग रही है। फेज जिस तरीके से पेशेंस दिखा रहे हो सीटी साइड पे, जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा ओवर कमेंट नहीं कर रहे, उनको पता चल चुका है हेरोइक का प्ले स्टाइल क्या था, लेकिन उसके पहले वाले राउंड में फिर भी रोटेशन मैनिपुलेट कर पाए थे। सैम के पास गलील है, प्रो की ऑन द ऑफ, एक और बार वो शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए, कोशिश जरूर करी थी उन्होंने। रेन भी ऊपर आते हुए काफी अच्छी प्रेजेंस दिखाई है उन्होंने, दरवाजा भी तोड़ दिया गया यहाँ पे। शुश क्या कनेक्टर कंट्रोल ले पाएंगे? पूरा कैरिगन शॉट पे इंतजार कर रहे हैं। एंड सीरीज फेज ये लोगों का कंट्रोल मेंटेन करते हुए रोकी ऑफ लेके खड़े थे, रॉब्स वॉशरूम के अंदर है। एक और बार कोशिश यही की जाएगी कि वो जो मॉलोटोव है वो कनेक्ट करे, बी के ऊपर रोटेशन मैनिपुलेट करेंगे और फिर वो जाए ए की तरफ, लेकिन मॉलोटोव जी हाँ शॉट के ऊपर मॉलोटोव गई है, लेकिन वो मेक अ डिफरेंस स्टैंड वहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। याबी को वापस एक और फ्लैश दिया गया, शायद एक और फ्लैश देंगे जरूर, उनके पास फ्लैश है नहीं मौजूद, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होने लगी। जिस तरीके की यूटिलिटी है उनके पास, ब्रूट फोर्स के साथ ये राउंड जीतना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता वो राउंड निकाल पाएंगे। हेवन के लिए स्मोक है मौजूद है, एक मॉलोटोव भी है, लेकिन एक ही तरफ रोटेट करने का निर्णय लिया। रॉब्स का बैक स्टैप बहुत ज्यादा क्रूशल हो सकता है यहाँ पे, अगर रॉब्स अच्छी तरीके से ये बैक स्टैप टाइम कर पाए तो दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन ट्रॉफी साइड की तरफ जा रहे हैं जरूर, लेकिन शॉट मिस कर देंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। रॉब्स को देखिए धीरे धीरे करके क्लीप अप कर रहे हैं यहाँ पे, याबी को टेक डाउन करेंगे। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन रिले कर दी गई है। ए लॉन्ग की तरफ एक प्लेयर है केरियन, ही नीड्स टू कनेक्ट दिस शॉट। अगर यहाँ पे केरियन टेक डाउन होते तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, लेकिन रॉब्स हाउ डज ही कनेक्ट दैट वन? 2 वर्सेस 2 रॉब्स क्या वो गुल खिला पाएंगे यहाँ पे? एक और बार अपने टीममेट के साथ खेलते हुए गन स्विच कर दी गई है। जी नहीं, गन नहीं स्विच करी उन्होंने, फ्लैशबैक उठाया, नॉट मिस्टेकन। रॉब्स लॉन्ग की तरफ क्रीप अप करते हुए, केडिन के पास ऑफ है। जी नहीं, उनके पास वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा समय ले लिया रीटेक के लिए। एंड टेरेस साइड हेरोइक एक और राउंड निकाल दो, लेकिन केडिन को जिंदा रहना पड़ेगा, शायद वो रोटेशन काटने की कोशिश करें, लेकिन हेरोइक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से वो राउंड निकालते हुए। जी हाँ, मेरे साथ अब जुड़ने वाले हैं लूसिफर। लूसिफर, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing great. देखिए मैं आपका मैच जो चल रहा था फर्स्ट गेम देख रहा था, got a very interesting start for FaZe। उसके बाद ने जो धमाका मचाया, I think that kind of took the momentum away from FaZe, but थोड़ी वापसी करने के लिए ट्राई किया उन्होंने,
राइडर्स ऑफ नाउ दूसरे मैप की ओर बढ़ चुके हैं हम एंड अभी के लिए मामला जो है थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है बट माम्बा आई एम सुपर एक्साइटेड। आखिरी मेजर है जो हमें देखने के लिए मौका मिल रहा है। जी हाँ, आखिरी मेजर काउंटर स्ट्राइक का, ग्लोबल ऑफेंसिव का समारोह है। काउंटर स्ट्राइक नहीं, काउंटर स्ट्राइक इज नॉट अ गेम व्हिच इज गोइंग एनीवेयर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड काउंटर स्ट्राइक 2 के लिए। और ये जो स्मोक है, मुझे अभी भी याद है जब पहली बार स्मोक डिस्कवर किया गया था तो वाज गेम चेंजिंग। एंड जो बीलोंग का कंट्रोल है वो डिनाई करते हुए फेज वहाँ पे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो लड़ना चाहते हैं इस शॉट पे। जो रोटेशन मैनिपुलेट करने की कोशिश करे हीरोइक, वो नहीं करने देना चाहते। एंड जैसे ही मौका मिलेगा फाइट करेंगे जरूर। यस यस, यहाँ पे सबसे आगे जाते हुए रेन के पास एंगल काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन शायद वो ट्रेड नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, आगे जरूर उन्होंने फेस किया लेकिन ट्रेड निकाला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो तुरंत दो टीमें ट्रेड निकालते हुए अब उनको आइडिया है कि दो अगर प्लेयर्स ये साइड पे खेले तो ए साइड क्लियर होनी चाहिए। स्टैवन पूरा का पूरा कंट्रोल लेते हुए डिनाई करते हुए अगर ओवर कमिट करते फ्लैश का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उनको एक फ्लैश मिलता है वहां पे तो फिर शायद वो फाइट ले पाए। ओह नो, रॉक्स वंस अगेन क्रूशियल पिक निकालते हुए वहां पे। देखिए स्टैवन आगे जा रहे थे एंड ही वाज मेकिंग श्योर कि साइड पूरा खाली होना चाहिए बिफोर द प्लान कमिंग थ्रू, बट केडन वाज हैविंग थे सेकंड थॉट। अभी के लिए वो अकेले आगे आ रहे हैं, उनके टीममेट स्लोली बाथरूम से आ रहे थोड़ा। बट लुक एट दिस फ्लैंक, आई थिंक ये अनप्रेडिक्टेबल होगा। ये फ्लैंक बहुत बढ़िया काम आएगा, बट उससे पहले रोप्स एक निकालेंगे या भी विद अ ट्रेड ऑफ, बट इट्स अ 1v2। उसको वहीं पे खत्म करते हुए रोप्स ब्रिंग्स फेज टू 4-4। जी हाँ, 4-4। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, हीरोइक का सीटी साइड बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तेरे साइड पे थोड़ा स्ट्रगल किया था जरूर। फेस की अगर हम बात करें, उन्होंने भी सीटी साइड पे बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है। अब नावी के खिलाफ की जो मैच है अनुबिस को, उसकी बात करें, अगर आप बात करें आखिरी मैच के बारे में, देखना ये मतलब हीरोइक टेरेस साइड पे कितने राउंड निकाल पाती है। मैप पिक उनका जरूर है एंड फिलहाल के उनके पास वेपन्स इतने अच्छे नहीं, तो शायद एक कॉन्टैक्ट पे रश करने की कोशिश करे, देखना जरूर बनता है। लेकिन राउंड निकालना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। वेपन्स नहीं है। दूसरी ओर दे हैव अंडरस्टूड इतने ज्यादा यूटिल की वजह से इट शुड बी अ बी पुश। मॉन्स्टर को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। कैरिगन हैज सम इंटेंशंस, पुश करेंगे तो उनको मौत यहाँ पे जरूर लिखा जाएगा। 4 लोग साथ घुसने वाला है एंड ही गेट्स नॉट इवन 1, बट एटलीस्ट ट्विस्ट इज गोइंग टू बी देयर। ही गेट्स 3, यहाँ पे 14 भी मिल चुका है एंड ही वाज अबाउट टू गेट हिज 5th, बट ब्रोस आएंगे एंड ही पुट्स द लास्ट वन डाउन। आई थिंक फेज जो भी छोटे मोटे राउंड्स मिल रहे हैं ना, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। दिस इज हीरोइक्स मैप, अपने मैप में जीतने के लिए मौका नहीं मिला एंड नाउ दे आर अ मैप शॉर्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी सुपर क्रूशियल। फेज अगर यहाँ पे हारना नहीं चाहते, अपने दूसरी मेजर को जीतना चाहते हैं, दिस इज देयर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्वार्टर फाइनल से अगर आज हार जाएंगे इट्स जस्ट एलिमिनेशन, देयर इज नो सेकंड चांस, नो सेफ्टी नेट। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान रख के खेल रही है अभी के लिए फेस। हीरोइक ऑन द अदर एंड फाइनली यूजिंग उनके पहले टाइम आउट इस मैप पे। जी टाइम आउट की जरूरत थी उनको एंड वहाँ पे ट्विस्ट ने काफी ज्यादा कैश फार्म किया। $2400 हर एक एसएमजी किल पे आपको $600 मिलते हैं और MP9 से जब 4 किल निकाले तो काफी अच्छा कैश फार्म किया उन्होंने। तो अच्छा महसूस करोगे, ऑप के लिए काफी पैसे इकट्ठा कर रहे, जोड़ रहे हैं एंड केडे ने वापस ऑप उठाई है। देखना ये बनता है क्या वो फर्स्ट पिक निकाल पाएंगे। एग्रेसिव ऑपिंग नहीं देखी हमने उनकी तरफ से। ई साइड पे सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीममेट को बी लॉन्ग की तरफ, लेकिन क्या ये राउंड वो होने वाला है जहां पे हमें थोड़ा एग्रेशन नजर आता है। स्टार्ट्स ऑफ अगेन क्विक कंट्रोल यहाँ पे सिटी की तरफ से लेते हुए, डिनाइंग देम सम एडवांसमेंट, बट दूसरी ओर बी की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा के जरूर आगे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा यूटिल डम नजर आ रहा है, थोड़ा वेट अराउंड टाइम रहेगा यूटिल का डिसअपियर होने के लिए। तो आई थिंक जितना ज्यादा यूटिल अर्ली ऑन इन्वेस्ट होता है, बट लुक एट दिस पुश कमिंग थ्रू, तैयार थे रोप्स इसके लिए। फ्लैश डिड नॉट वर्क आउट एट ऑल वहां पे। या भी ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खो बैठे। ऑप ब्रोकी लॉन्ग को होल्ड कर रहे हैं। ओह नाइस बूस्ट, ओह नो इट मिस्ड। कोशिश जरूर करी उन्होंने वहां पे रन बूस्ट करने की, लेकिन मिस कर दिया एंड काफी खतरनाक साबित हो सकता था उनके लिए। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है थोड़ा सा डेस्परेशन जरूर दिखाया हीरोइक ने यहाँ पे। एग्रेशन के नाम पे जो शॉट पे पिक निकालने की कोशिश करी थी, मॉलोटॉव नहीं था वहां पे, रॉब्स आराम से बैठे थे। एक मॉलोटॉव की कमी जरूर महसूस हुई है वहां पे एंड ब्रोकी
अब जो ऑप कर रही है साइड के ऊपर, क्या वो पिक निकाल पाएंगे? काफी ज्यादा एग्रेसिव अपने टीममेट के साथ। शॉट स्मोक करेंगे एंड रेन वो भी इंतजार करे। टेसिस धीरे धीरे क्रीप अप करते हुए एंड ये बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है इनके लिए, बट एट द सेम टाइम टेसिस स्मोक की एज पे खेल रहे। देखना ये बंदा क्या वो पिक निकाल पाएंगे। अभी भी रुके हुए या सीटीजी एक्सपेक्ट करते। फ्लैश आया जरूर है लेकिन ब्रोकी ने पहला शॉट निकाला। रॉप्स गेटिंग दैट फर्स्ट पिक। ओह माय गॉड, हेरोइक के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। उनको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा। अंडरस्टैंडिंग कि ये बैक ऑफ करेंगे। लुक एट पुश कमिंग इन फ्रॉम ब्रोकी। द कॉन्फिडेंस फाइट लेना चाहते थे बट पनिश करेंगे केरन। एन ऑप वर्सेस ऑप, केरन प्रूव्स सुपीरियर। अभी के लिए नंबर्स का एडवांटेज बिल्कुल है, रिकवर कर लेंगे अपने AWP को। टाइम वेस्ट हो चुका है एंड दैट इज गोइंग टू बी फेस पुटिंग अप अनदर राउंड। 6-4। पूरी की पूरी कोशिश करी वहां पे। टेसिस की पोजीशन काफी अच्छी थी लेकिन ड्रॉप्स केम ऑन टॉप। और ये जो फाइट थी, याबी का जो किल था, वहां पे मुझे लगता है एक मोलोटॉफ की कमी जरूर थी। ड्रॉप्स काफी क्लच साबित होते वहां, क्योंकि पहला पिक तो निकाला ही और ए लॉन्ग पे जो स्मोक की एज पे प्लेयर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे पिक निकालने की, उनको भी उन्होंने वहां पे एलिमिनेट किया। रॉयक, मुझे लगता है इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। ओवरपास अगर आप देखें प्रीडोमिनेंटली शुरुआत में तो काफी ज्यादा सीरियस साइड था, बट अब मुझे लगता है इट्स स्टिल फेयरली बैलेंस्ड। रॉयक वंस अगेन, उनका सीटी साइड कैसा होता है, काउंटर टेस्ट साइड किस तरीके से खेलते, कितना एग्रेसिव खेलते, कितना ज्यादा मैप कंट्रोल वो खींच के लेके आते हैं अपनी तरफ, वो हमने देखा जरूर है। बट फिलहाल के लिए हीरो पाए वहां पे। केरियन ऑब्वियसली ऑफ है उनके पास, एसएस के पास डीगल, स्टैन के पास डीगल। सवाल ये बनता है क्या उनको पहले भेजेंगे ट्रेड निकालने के लिए? सुपर क्रूशियल राउंड है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है। स्ट्रेव वेपन्स नजर आ रहे हैं। लेट्स होप राउंड कन्वर्ट करे because Bank is looking super weak heroic के लिए। Positioning, what a collab! जैसे टॉयलेट से बाहर आए, it is going to be a big one. He's still holding it, training superior, rain साथ देते हुए उनका picks up on Yabi, edge the shoulders. Can he pick up another one? Yes, this time it's ahead. Oh my God, Cess is down होते हुए। Kaden versus Rain, इस बार Kaden इनको निकालते हुए नजर आएंगे, बट इस बार जो बैटल हुआ था AWP versus AWP यही था। I think Kaden दोबारा सेव पे जा सकते हैं, बट देयर इज अ फ्लैंक कमिंग इन। आई डोंट थिंक ये AWP सेव हो पाएगा मामा। ये ऑप सेव करना मुश्किल जरूर होने वाला है। डैमेज भी काफी ज्यादा लिया है उन्होंने, लेकिन केडीएन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। शॉट वेट करने की कोशिश, गेट सेंट इनटू अ डिफरेंट डिमेंशन। काफी शानदार शॉट वहां पे कनेक्ट किया और जितना डैमेज उन्होंने सामने वाली टीम को दिया, अब डिसाइड कर लिया फेजिंग की नहीं और गन्स गिरा के मतलब नहीं है। As a matter of fact, सिर्फ गन गिराने की दिक्कत नहीं, शायद वो राउंड निकाल के चले जाते अगर ओवर कमिट करते तो। लेकिन केडियन, मुझे लगता है जितनी शिद्दत से वो ये मेजर जीतना चाहते हैं वैसे कोई प्लेयर नहीं है फिलहाल इस दुनिया में। पूरी की पूरी कोशिश अपना पहला मेजर जीतने के लिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो कप्तान है जो अपनी टीम के लिए कॉल्स दे रहे हैं, वो फ्लैगिंग डिपार्टमेंट में पीछे नहीं रह रहे। Oh yes, I mean पहले मैप से लेके अभी तक he is looking unstoppable, but I think ये ओपनिंग जो ब्रोकी को मिला, it just tore apart heroic का जो भी स्ट्रैटेजी था। अगर ये कोलैट नहीं होता then there could have been a different situation। ऑडियंस की रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। It was unfortunate, but FaZe के फैंस जो है वो बहुत ही खुश रहेंगे because FaZe are the ones who are actually lagging behind। अगर पॉइंट बात करेंगे इस बेस्ट ऑफ 3 के, they're lagging behind a point। सीरीज पॉइंट पे यहाँ पे heroic खेल रही है, अपनी मैप के ऊपर खेल रही है। लेकिन वॉच इस बार it's a B approach coming in from the terrorists, but push करने का intention कैरिगन का है। Monster, I think they might be lining up a flash for him। He's lining up another smoke यहाँ पे, खुद बाहर नहीं जाना चाहते। They have an advantage here, Mamba, so I think advantage सीधा opponent के हाथ में परसना, it's not going to be a good thing। तो वेट करके खेलने का एक इंटेंशन, बट फाइनली ये स्मोक डिसअपियर होने के तुरंत टी साइड की तरफ से हेवी यूटिल स्पैम होगा एंड आई थिंक इट शुड बी अ क्विक बी रश कमिंग इन। मुझे लगता है कि शायद ये रश फिर भी ना करे। अगर रोटेशन मैनिपुलेट कर पाते पीछे हट सकते, लेकिन नहीं, उनके पास वेपन्स नहीं तो रश करना ही पड़ेगा। जी हाँ, कैरिगन वहां पहला किल निकाले, दूसरा भी निकालेंगे। जी नहीं, ब्रोकी थे वहां पे ऑफ लेके वेस्ट बैकअप देने के लिए तैयार, लेकिन केडियन वापस वो शॉट निकालेंगे जरूर एंड स्टैवन ब्रोकी के ऊपर एक और पिक निकालेंगे। 2 वर्सेस 2 सडनली दिस इज लुकिंग डूएबल। ग्रेनेड जरूर जाएगी, क्या ये किल निकाल पाएगा? जी नहीं, स्टैवन विद द ऑप, डबल ऑप
इस सिचुएशन में 35 सेकंड है घड़ी के ऊपर। C4 अभी तक प्लान है, लेकिन 7 does not miss those. He doesn't miss those. वन प्लेयर को स्पॉट जरूर कर लिया उन्होंने। स्मोक की एज पे खेला नहीं, that's connection. Rain gets taken down. Phenomenal stuff. Stavin क्लच करते हुए वहां पे अपनी टीम के लिए, इवन दो उनके कप्तान उनके बगल में खड़े थे राउंड निकालने के लिए, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खेला ऑप लेके वो बेहतरीन था। देखिए डबल ऑप बहुत बारी चलता है, स्पेशली सीटी साइड पे। ये टी साइड पे होने का, दैट टू रिकवरिंग फ्रॉम योर ओपोनेंट्स, उसके बाद ऐसे चलना अनबिलीवेबल। उनको पता था एक खिलाड़ी सैंडबैग्स के पीछे छुपे है, एंड ही न्यू वन ऑफ द अदर प्लेयर शुड बी कमिंग इन फ्रॉम मॉन्स्टर। थोड़ा चेक करने के लिए गए, रॉब्स वहीं पे मिल गया। He puts him down first and then he picks up the last. क्या ही शानदार शॉट था। He sees that silencer. बैरल भी पूरा नहीं देखा, सिर्फ साइलेंसर दिखा वहां पे, एंड तुरंत उन्होंने समझ लिया एंड took his shot. That's another round. I think बहुत खुश रहेंगे Heroic. They're slowly coming back. अपने टी साइड पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, but I think fairly कहीं ना कहीं they might have like an 8-7 or 7-8-7 or vice versa, 7-8 half. जिस हिसाब से हीरोइक अभी के लिए खेल रही है। जी हाँ, but heroic somehow they managed to make magic happen, and फिलहाल के लिए फेज देखना ये बनता है। जो उनका शैबी सा बाय शैबी वहाँ पे एक टेक डाउन हो जाएंगे। काफी अच्छा एग्रेशन दिखाया। जब आपके पास वेपन डिसएडवांटेज होता है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। काफी अच्छी तरीके से वो रिस्क लिया उन्होंने, हर राउंड नहीं कर रहे थे। केडियन वो एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि शायद वहां पे कोई पीक करे। डैमेज बहुत ज्यादा लिया है उन्होंने वहां पे। सवाल ये क्या यहां से वो किल निकाल पाएंगे? रॉब्स पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। टेसेस वहां पे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे। दिस कुड बी अ मैसिव प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, शुश सीधा स्विंग करेंगे। रॉब्स को वहां पे एलिमिनेट किया। 3 versus 4 अभी भी डुएबल जरूर है हीरोइक के लिए, लेकिन एक हीरोइक परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी। स्टेप अप करना पड़ेगा तीनों प्लेयर्स को मल्टीकिल निकाल के। लेकिन ट्विस्ट की जो पोजीशन है वो काफी शानदार है। दिस कुड बी द डिफरेंशिएटर। अगर ये शुश यहाँ पे वो शॉट कनेक्ट कर लेते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जी नहीं, वो नहीं करने देंगे। ट्विस्ट ही वोंट मिस दोस 2 versus 4 सिचुएशन। 40 सेकंड घड़ी के ऊपर मोलोटॉव भी डाल दी जाएगी। क्या प्लान करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, स्मोक के अंदर ट्विस्ट। क्या फ्लैश आने वाला उनके लिए? आप सीधा पुश करेंगे। फ्लैश नहीं आने वाला, लेकिन ओह माय गॉड, थोड़ा सा नहीं रेन फिर भी कुछ ना कुछ करके शॉट कनेक्ट जरूर कर लिया। यहाँ पे केडियन पीछे हटने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे क्या और बचा पाते कि नहीं। यहाँ पे पहले गलत डायरेक्शन में देख रहे थे रे। ऑलमोस्ट एक और खिलाड़ी थे उनके ओपोनेंट, उनको मार गिरा सकते थे, बट ही फाइंड्स द फर्स्ट एंड तुरंत सुसाइड गिर जाता है। आई थिंक वाटर पे डिसेबल गिरे, ओपोनेंट से इट्स टाइम टू टक बैक एंड रन। आई थिंक अभी के लिए जैसे हमने बोला था बैक एंड फोर्थ जरूर चल रहा है। फेज इज मेकिंग श्योर कि नजदीक ना आए। जब वो साइड स्विच आएगा इट कैन बी अ सिमिलर रेप्लिकेशन जैसे हमने पिछले गेम को देखा था, अ कंप्लीट शटडाउन। इस बार हीरोइक yes they're still lagging behind like the previous game, but previous game में first half की खत्म होने के नजदीक they had a big lead. राउंड शुरू हो चुका है, लास्ट 2 राउंड रहेंगे यहाँ पे। बाइज दोनों साइड से यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल रहा है, बट क्विक कंट्रोल यहाँ पे लेती हुई, बट दिस इज ही रीच्ड इट इमीडिएट रेंज के ऊपर शॉट कनेक्टेड एंड इट वाज आल्सो विदाउट साइट। टेसेस अपने टीममेट्स के साथ पीछे हटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से शुश वहाँ पे लॉन्ग कंट्रोल लेने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा समय, लेकिन इंफॉर्मेशन ड्रॉप्स, इनक्रेडिबल एग्रेशन यहाँ पे रॉब्स की तरफ से। अगर यहाँ पे अगर वो किल निकालते तो फिर तो हीरोइक मुझे नहीं लगता कोई भी मौका मिलने वाला उनको। कॉन्टैक्ट का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल ओवर कमिट नहीं करना चाहते। ओह माय गॉडनेस, टेसिस वहाँ पे टेक डाउन जरूर हो जाएंगे। ब्रो की एग्रेशन, व्हाट, दिस इज अनबिलीवेबल स्टफ फ्रॉम रोकी। जिस तरीके से वो घूमे, जिस तरीके से वो किल निकाला, उन्होंने फ्लैश अवॉइड किया। शुश लग जरूर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ज्यादा डैमेज दे पाएंगे, अनलेस हीरोइक, सॉरी फेज बहुत ज्यादा गलतियां करती है, बट हीरोइक जवाब नहीं उनके पास कोई भी। फेज जिस तरीके से एग्रेशन कर रही है,
एग्रेशन दिखा रही है सीटी साइड पे, उसका कोई जवाब नहीं। रॉप्स एकदम लॉक्ड इन है, 15 किल निकाल चुके वो फिलहाल 13 राउंड के अंदर एंड ही इज फीलिंग इट, इज एब्सोल्युटली फीलिंग इट। फेज का अभी तक जो स्ट्रैटेजी चल रहा है वहाँ, इट हैज बीन जस्ट एक्सेप्शनल। कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लेते हैं पूरा एंड ओपोनेंट को ऐसे समझाते हैं कि सिर्फ एक ही पुश आया है टू टेक कंट्रोल, बट वहाँ पे एक और, जैसे हम बोलते हैं ना, स्लाइड करके विदाउट एनीबडी नोइंग, विदाउट एनीबडी मेकिंग नॉइस, एक और प्लेयर चले जाते हैं उस पुश के साथ एंड दिस टाइम इट वाज नन अदर देन रोप्स। एक जरूर किल मिल चुका था उनको, बट फिर भी रोप्स का जो पुश आया था, नोबडी प्रेडिक्टेड। टेसिस, उनको समझ में आया कि देयर कैन बी अ सिचुएशन दैट कुड हैव हैपेंड, क्योंकि उनके पास प्लेग्राउंड या ए के तरफ कोई इन्फो नहीं था, सिर्फ शुश गए थे टुवर्ड्स लॉन्ग, तो द एंटायर टॉयलेट्स एज वेल एज बनाना पूरा कंट्रोल रह सकता था। और अभी के लिए राउंड चालू हो चुका है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फॉर द हाफ। अभी के लिए फेज, यस दे हैव अ 4 राउंड लीड। वेपन बाय थोड़ा ब्रोकन है कमिंग इन फ्रॉम हीरोइक, but they have lower control. पीक का इंतजार कर रहे हैं, अभी की तरफ से आता है, he does do damage to Raid, थोड़ा वीक कहलाएंगे। Stabin goes to hide, सिर्फ एक रेड नजर आएगा अभी के लिए। It will be a 4v4 situation. Kaden थोड़ा लो जरूर नजर आ रहा है, he's playing with the deagle, util recover करके they are looking for the push, but ये देखिए making a playground push happen and इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। This is what is happening every time. FaZe are pushing out from their bomb planting sites towards opponents positions and यहाँ पे क्या ही शानदार positioning playground की तरफ लिया गया है coming in from FaZe। और बार वहां पे बैकस्टैब के ऊपर कैरिगन ने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन बिल्कुल भी किल नहीं निकाल पाया, लेकिन रेन इज इन प्रिस्टीन पोजीशन। केरी एंड टेसिस दोनों को टेक डाउन कर दिया, ब्रोक की एक और किल निकालेंगे कनेक्टर के अंदर एंड फेज बॉय ओ बॉय सीटी साइड में जिस तरीके की डोमिनेशन लास्ट मैप में दिखाया था, इस मैप पे दिखाया है, शानदार, बेहतरीन, कोई शब्द नहीं है इनका जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है हीरोइक के लिए, अगर वो पहले 4 राउंड नहीं निकाल पाते तो फिर बहुत प्रॉब्लम में वो अपने आप को पाएंगे। पिस्टल राउंड तो और भी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। पिछले गेम आई एम प्रीटी श्योर हीरोइक्स को ये याद रहेगा कि उन्होंने कैसे जीता है। They had early rounds in the second half, जिसके वजह से उनका स्कोर लाइन जो था 14 तक आया, उसके बाद उनको 2 और राउंड चाहिए था। जब फेज का कमबैक हो रहा था फिर भी ये कमाल करके दिखा रहे थे। फेज ने ट्राई किया, they came till 14 but it was not enough, क्लोज करके दिखा दिए जरूर हीरोइक, बट इस बार it is a similar situation जहाँ पे हीरोइक को करके दिखाना पड़ेगा। कैरिगन इज फीलिंग एक्सटैटिक अपनी टीम के लिए, मतलब 10-5 का लीड, इट इज गुड एंड उनको भी पता है 2 और राउंड अगर मिल जाता है they will be at 12 and that's just 3 more rounds that they have to play and close this map on, and बहुत ही खुश हो जाएंगे अपने ओपोनेंट के ऊपर जो मैप उठाया है। वो अभी के लिए जैसे आपने बोला बीच में भी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट केडन वो करके दिखा रहे थे हर एक राउंड में, बट स्टिल इट वाज नॉट इनफ फॉर हीरोइक बिकॉज अर्ली एलिमिनेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे हीरोइक विदाउट एनी ट्रेड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। कैरिगन इन द मीनटाइम जिस तरीके से उन्होंने स्टेप अप किया था जब भी जरूरत पड़ी है टीम को, वो काफी ज्यादा शानदार था एंड हमने यूटिलिटी का भी बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल देखा। एग्रेशन सीटी साइड में जो फेस ने दिखाया, उसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जितने भी जगह पे हीरोइक ने जगह छोड़ी थी पूरा फायदा उठाया फेस ने। लेट्स होप अभी के लिए जो ये साइड स्विच का टाइम है इसको इस्तेमाल करके हीरोइक दे कुक अप समथिंग गुड, बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे देन वी आर गोइंग टू द, जैसे हम देखते हैं ना चैंपियन स्टेज में, हम जनरली विश करते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 का जब भी मुकाबला होता है वी गो राइट टू द लास्ट वन एज वेल, एंड तब जाके हमें एक क्लियर विनर, एंड स्पेशली जब आप कहीं ना कहीं वो एलिमिनेशन का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहता है, यू वुड वांट टू पुश इट टू द लास्ट वन व्हेन एज अ टीम और एज अ प्लेयर आपके पास एडवांटेज नहीं। यहाँ पे मैं बोल रहा था रेन हैड नो प्रॉपर विजन, ओपोनेंट के खिलाड़ी उनको पास करके चले गए एंड दैट्स वेयर ही रियलाइज्ड मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा एंड ही मेड अ पुश आउट ऑफ इट। बट आई रियली लव अभी के लिए जो फेस ने पूरा सीटी कंट्रोल, एंड मैं कई हद तक बोल सकता हूँ टी साइड से अपना कंट्रोल छीन के फ्लैंक करके बैकस्टैब करके इतना ज्यादा कंट्रोल उन्होंने इतने राउंड्स में लिया है, हैज जस्ट बीन फिनोमिनल कमिंग इन। फेज अभी के लिए तो बहुत खुश है अपने फर्स्ट हाफ से, बट थिंग्स कैन चेंज। हमने बहुत बारी देखा है सीएस में कि
पलक झपकते ही सीधा एक कमबैक नजर आता है एंड वी हेड राइट इनटू ओवरटाइम। आई थिंक कहीं ना कहीं फेज को उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आफ्टर हाउ हीरोइक प्लेड ऑन न्यूक। आई थिंक फेज खुद ने इतना फैंटास्टिक स्टार्ट देखने के बाद maybe they did not predict heroic to come back so big and take away the first half. So I think इस बार FaZe को ध्यान रखना पड़ेगा that sides have been switched, things can also change. Let's not forget Overpass है। Overpass जो predominantly CT sided map हुआ करता था, obviously उसके बाद मैप भी काफी ज्यादा चेंज हुआ था, मेटा भी काफी ज्यादा बदला, लेकिन ये जो पहला राउंड है बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है। केडियन इन्फॉर्मेशन निकाल के पीछे हटते हुए एंड बहुत ज्यादा हेवी प्रेजेंस दिखा रही है फेज यहाँ पे पार्क एरिया में। क्या ए पे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जिस तरीके की यूटिलिटी है, 2 स्मोक, 1 मोल्टोव, 2 फ्लैशेस, लगता है एक सिंपल सा एग्जीक्यूट करने की कोशिश, लेकिन केडियन को यहाँ पे किल निकालना पड़ेगा। ओह ब्रो की थोड़ा डैमेज जरूर लिया, लेकिन नॉट टू बैड, नथिंग टू बैड। धीरे धीरे करके फेज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इन्फो मिल चुका है एंड नाउ दे आर अग्रेसिंग इन द अदर साइड, जहाँ पे थोड़ा और कंट्रोल ले सकते हैं एंड मे बी दे हैव 2 फ्रेंड्स फ्रॉम जहाँ से वो फाइट ले सकते हैं। अभी के लिए लॉन्ग को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहे थे, फ्लैश आएगा एंड दे विल बी फोर्स्ड ऑफ, बट अभी भी देखिए बनाना की तरफ लोग है। केडन पिक्स अप 1, ही इज लुकिंग फॉर द सेकंड, स्पॉट कर चुके, हेडशॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, but look at the late walk into the toilets. Ropes picks up 1, brilliant, he spotted another. यहाँ पे एक और निकाल सकते हैं, he's running right behind him. एक और headshot, this is down हो चुके हैं, C4 plant हो चुका है and it is FaZe again raining back control. And look at the positioning, dumpster के बाजू में ही खड़े, अगर कोई पुश कर जाता है उनको आसानी से किल कर देंगे, but I think missed shot, जैसे वो बैंक से बाहर आए अभी तक उस dumpster के बाजू में जिंदा थे। Finally रेन को गिरा दिया जाएगा, but twist puts an end. FaZe with 11, starting off really good in the second half as well. जिस तरीके से रॉप्स ने वो 2 क्रूशल किल्स निकाले अपनी टीम के लिए, उनके बिना ये राउंड निकालना नामुमकिन था। एंड इतने कॉन्फिडेंट, इतने काम, अब देखिएगा जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक किया सामने वाले सीटी को, आराम से, बिल्कुल भी नर्व्स नहीं दिखाई, बिल्कुल भी क्रॉसर नहीं हिल रहा था उनका, एंड किल निकाला। ये चीज की वजह से रॉप्स इतने ज्यादा इफेक्टिव प्लेयर है। Oh my God, I think अभी के लिए जो जनता भी है ना पागल हो रही है, आपने अभी भी देखा। But we'll jump right in the next round, predict कर रहे थे। Next one will scout, Kaden again, irrespective अगर उस वेपन में स्कोप है, कमाल करके दिखा देंगे। जैसे ये पहला पिक मिल गया, बी का जो बूस्ट था, they understood this A push थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया गया and things might get slowed down coming in from FaZe. I think early pick मिलना बहुत जरूरी था because they have invested into the round. अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पाए, it can be a tough one for them. Broky in the meantime, देखते ये क्या गोल खिला पाते हैं यहाँ पे। केडियन ने स्काउट उठाई, जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक महसूस हो रहा है, बिकॉज अगर ये डिंग जरूर सुनाई दिया होगा उनको, पक्की बात है, जरूर सुनाई दिया होगा। ए लॉन्ग में भी एक प्लेयर को स्पॉट जरूर किया है, लेकिन मुश्किल होने वाला है ये, बहुत ही रिस्की बाय, लेकिन किल नहीं निकाल पा रही। That's problematic, but the moment I say that, just the moment I say that, रोकी के ऊपर उन्होंने किल निकाला। कैरिगन मैक 10 लेके अंदर चढ़ गए, अभी भी विनेबल राउंड जरूर है दोनों। तुरंत वहां पे टेक डाउन कर दिए जाएंगे। ट्विस्ट ने जैसे ही गोली सुनी, स्विंग किया उनको, 1 versus 3 shush. He needs to channel all he has to pull this round back in his team. उनकी टीम को इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली इस मैप के अंदर इनकी, अगर ये राउंड निकालते हैं ये जो क्रॉस फायर तोड़ना होगा। जी नहीं, पहला शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए। ट्विस्ट स्टैंडिंग टॉल। देखिए अभी के लिए जो फेज का प्ले स्टाइल चल रहा है, सीटी में उन्होंने हर वक्त पुश करके कंट्रोल लेने का एक इरादा बनाया था एंड इट हैज बीन वर्किंग आउट। टी साइड में दे आर वॉचिंग ईच अदर्स बैक एंड आई थिंक ये पोजीशन जैसे कॉल करके एक दूसरे को देख पा रहे हैं। जब अभी एक फ्री पिक मिल सकता था, दे डिनाई दैट फ्रॉम हैपनिंग। तुरंत वहां पे ट्विस्ट जो है किल निकाल ले रहे हैं। दैट टेल्स यू कि द क्रॉस फायर इज जस्ट एक्सेप्शनल कमिंग इन फेज की तरफ से। फाइनली एक सेफ राउंड नजर आता हुआ हीरोइक की तरफ से। यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ अर्ली डैमेज करने के लिए, मॉली के ऊपर थोड़ा चढ़ गया, बट नॉनदलेस अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं सेव राउंड होना चाहिए। अग्रेशन देखिए, दे स्नीकिंग देयर वे इन, सारे लोग यहाँ पे वाटर में है। इट माइट बी अ ह्यूज सरप्राइज
फेज के लिए इंतजार रहेगा, बट अकेले सिर्फ रोब्स आ रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स का इंटेंशन जो है एक ही तरफ नजर आ रहा है। अभी तक बॉम्ब प्लेग्राउंड में पड़ा हुआ है, सो दे विल वेट एंड वॉच आउट। फ्री वेपन्स नहीं देना चाहते, बट रोब्स व्हाट अ चेक एट हेवन, टेसिस को डाउन करके दिखा देंगे। एंड अभी पता चल चुका है, थोड़ा अग्रेशन आ चुका है, पुश करने का इरादा बना रहे हैं वाटर से, बट ही बैक्स ऑफ। टाइमिंग माम्बा Robs is dialed in right now. जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, शानदार तरीके से वो गेम को अप्रोच कर रहे हैं। फिलहाल जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ी, हर बात तरफ के यहाँ पे ओवरवेलमिंग होगा उनके लिए। यहाँ पे 4 लोग वो एक साथ प्ले करना तो बहुत मुश्किल था। एंड जिस तरीके से हीरोइक ने स्टैक किया था, जो पुराने लुमिनोसिटी गेम जो फॉल एंड कोलसेरा वगैरह खेलते थे, तब की याद आ गई थी, बिकॉज ओवरपास पे उन्होंने ये चीज करना स्टार्ट किया था, ए शॉट नीड स्टैक करना स्टार्ट किया था। फील्स गुड टू नो कि टीम्स अभी भी कोशिश करती है, लेकिन ब्रोकी ही इज वॉकिंग इन, नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। याबी को वहां पे टेक डाउन कर देंगे। हीरोइक का मैप पिक था ये, मत भूलिएगा। 13-5 जो स्कोर लाइन है, हीरोइक का मैप पिक था ये। इस हिसाब से ये पहले 2 मैप चल रहे हैं ना, पहला फेज का था, फेज ने वहां पे हारा, ये हीरोइक का मैप पिक है, वो यहाँ पे हारते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स जस्ट लुकिंग लाइक एक दूसरे को काउंटर करने के लिए तैयारी करके आई है ये दोनों टीम्स। यप, प्रेशर फॉर हीरोइक साइड इज टू हाई राइट नाउ, क्योंकि अभी के लिए बैक टू बैक राउंड्स हारती हुई नजर आ रही है। ऑन अ स्ट्रीक अभी के लिए चलते हुए नजर आ रहे हैं फेज, एंड दे लुक अनफेज्ड। पिछला राउंड जो था इट वाज अ सेव, तो अभी देखेंगे देयर विल बी अ एंटायर बाय कमिंग विद ऑल द यूटिल्स दे नीड। ब्रोकी के हाथ में वापस AWP लग चुका है, स्टिल हैव अ गली टू प्ले विद, देखेंगे उसको क्या फायदा मिलेगा। बट अर्ली मॉली यहाँ पे प्लेग्राउंड एज वेल एज उनके जो रैंप लोअर अपर का एंट्रेंस होता है उसको ब्लॉक करने के लिए ट्राई किया, बट जस्ट स्मोक उसको डिनाई करते हुए नजर आएंगे। ओह नाइस, वहाँ पे डिनाई किया गया कि अगर पुश आएगा सैंडबैग्स की तरफ रोकने के लिए, बट टेसिस विद जोन पुश चेक करने जाते लोअर को, एंड ही गेट्स वन फ्रीबी फॉर हिमसेल्फ, एंड वहां से सीधा बैक ऑफ करेंगे। वहां से सीधा बैक ऑफ करेंगे, लेकिन अब ये फेस के लिए दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट पिक जरूर निकाला हीरोइक ने, लेकिन रॉब्स जिस तरीके से खेल रहे, मुझे लगता फर्क पड़ने देंगे अपनी टीम को। टेसिस इतना ज्यादा नजदीक स्मोक के अंदर, या वो पिक निकाल पाएंगे? पैर का इंतजार करे, सबसे पहले फुटस्टेप नजर आता है, लेकिन नहीं एक्सपेक्ट करे शायद कोई दूसरी तरह से भी उनको पुश कर सके। ओह नो, ही नीड्स टू फॉल बैक, पीछे हटना पड़ेगा। रेन काफी ज्यादा नजदीक खेले थे, लेकिन ब्रोकी, ओह नो, टेसिस, ओह नो टेसिस, जिस तरीके से उन्होंने रोटेट किया था, बहुत प्रॉब्लमैटिक। केरियन बहुत क्रूशल राउंड होने वाला है इनके लिए, किल निकालना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं, उसमें स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। और अगर ये यहाँ पे स्ट्राइक होल्ड कर पाते हैं तो फिर शायद उनके पास मौका होगा, बट मुझे लगता है अगर यहाँ पे वो पिक नहीं निकाल पाते, सीधा सेव के लिए जाना पड़ेगा। इफ दे लूज इवन वन प्लेयर दे विल हैव टू गो फॉर बहुत अग्रेसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं ब्रोकी, ट्राइंग टू कनेक्ट हिज शॉट, बट उनकी टीममेट रेन रहने वाले हैं, तुरंत ट्रेड हो जाएंगे जरूर। द बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। 3v3 सिचुएशन, कैरिगन यहाँ पे सुपर लो है, बट पुश आ रहा है दोनों साइड से। बट लुक एट द पोजीशनिंग कमिंग इन, रोब्स पिक्स अप वन, एंड जैसे आपने बोला, ही इज कंप्लीटली डाइल्ड इन, वेटिंग फॉर द अदर पर्सन। थोड़ा बूस्टेड है, बट फिर भी उनके ऊपर शॉट्स आएगा। रोब्स पुट्स हिम डाउन एज वेल, एंड इट्स नाउ ओनली अप टू केरिन। AWP एंड वो तुरंत लौटते हुए नजर आएंगे। Robs has become a monster on this, 22 kills के साथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई भी खिलाड़ी सामने दिख रहा है यहाँ पे हीरोइक की तरफ से, तुरंत उनको शट डाउन किया जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव कोई भी हो। एंड कैरिगन, हम बात कर रहे थे बहुत लो HP पे, मैंने भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, जैसे उनको पता चला केरिन विल सेव AWP, he puts him down. व्यूअर्स हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ब्रोकी का वो शानदार शॉट जो मैन एडवांटेज था उसको इक्वलाइज किया। M4A1 से जब हेडशॉट लगती लेकिन किल नहीं मिलता, वो तो ऑब्वियसली एक कह सकते हैं चुपता है, दिल में जरूर चुपता होगा, बट एट द सेम टाइम ओह नो, काफी स्पाइसी, काफी ज्यादा स्पाइसी बिलबोर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको वहाँ पे। देखिए इतना भी ज्यादा इन्वॉल्व मैं नहीं हूँ, बट आई थिंक आप जैसे, मैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे CSGO के लिए गुरु मानूंगा, तो आप अगर थोड़ा इन डिटेल यहाँ पे हमें बता देंगे क्या हुआ था बिलबोर्ड पे। I'll also be. Nico is one of the best players in the world, probably one of the best riflers to ever touch the game, जिन्होंने पिछले 10 साल में
इतने शानदार प्लेयर होने के बावजूद एक भी मेजर नहीं जीत पाए, और हुक्सी को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम दिया जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया एंड फॉर द लैक ऑफ स्टैंडिंग पावर। तो उस तरीके उसकी वजह से वो जो वहाँ पे जो किया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा शानदार था। लेकिन कैरिगन इन द मीन टाइम एक प्लेयर खो चुके हैं, अब किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं। या भी MP9 लेके बैठे हैं, एक डाउन जरूर होंगे, लेकिन रॉब्स What in the world is up with you? Oh my goodness. रॉब्स जिस तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे, he's absolutely untouchable right now. एक भी गलती नहीं. Nerves of steel and Brokey. He knew exactly where sound was. उनके ऊपर भी पिक निकाला. अब 1 versus 2 Cadian. उनको जाना पड़ेगा, उनको कमिट करना पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज अब सेव करके कोई भी मतलब नहीं है. Cadian की टीम को उनकी जरूरत इससे ज्यादा कभी नहीं पड़ी है इस पूरे मैच में. And he needs to deliver. But can he? Is a question. 1 versus 2. Kit उनके पास मौजूद नहीं है. M4A1S एक स्मोक और C4 देखिए बी शॉट की तरफ जाते हुए कनेक्टर से रोकी आते हुए. केडियन क्या ये किल निकाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल. धीरे लेकिन ड्रॉप्स. Oh my goodness. I don't even know what's up with drops, but whatever it is, FaZe यही चाहेगी कि वो दोहराते रहे इस चीज को. I think यहाँ पे अगर थोड़ा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा देते, अभी he could have actually picked up ropes as well. उस कॉर्नर को चेक ही नहीं किया गया. Early he couldn't hold his trigger, फायर किया एंड उसका तुरंत पनिशमेंट मिला. ना सिर्फ उनको, उनके टीममेट को. रोप्स पिक्स अप अ डबल देयर एंड उसके बाद आखिर का स्लो एंड स्टडी. रोप्स एटलीस्ट 20 सेकेंड्स उन्होंने अपने जो टी साइड की तरफ प्लेग्राउंड है वहां पे वेट करते हुए नजर आए C4 के साथ, लुकिंग फॉर अनदर फ्लैंक. पर उसके बाद आई थिंक केरन लॉस्ट हिज कंपोजर. अभी के लिए राउंड चालू हो चुका है. इट इज FaZe राइट एट मैच पॉइंट. ये जो सीरीज का एडवांटेज उठाया था हेरोइक ने, इसको यहीं पे 1-1 करने के लिए मौका मिल चुका है FaZe को. दे हैव बीन ऑन अ फेनोमिनल एंड अ मॉन्स्टरस स्ट्रीक. कोई रोक नहीं पा रहा है उनको. यूटिलिटी आ रहा है बट दे आर रेडी फॉर इट. एलॉन्ग का बहुत नजदीक पुश कर चुके थे रेन. दूसरी ओर स्लो एंड स्टडी कैरिगन एंटर कर रहे हैं. वहां बनाना पे 2 खिलाड़ी ऑलरेडी पुशअप है एंड इसका आइडिया कोई नहीं है. कैरिगन क्रॉसेस दैट, नाउ ही इज पुशिंग क्लोजर टू याबी एंड याबी इज गुड फॉर दैट. दूसरा खिलाड़ी आ रहा है, चेक करने के लिए आगे आएंगे टेस्टिस एंड ही आल्सो पुट्स ड्रॉप्स डाउन. इस बार कहीं ना कहीं हीरोइक लग रहा है कि एक राउंड ले सकता है, बट आई माइट जस्ट बी सेइंग इट टू अर्ली. 3v5 है, अभी भी चांस है. 2 खिलाड़ी लो नजर आ रहे कमिंग इन फ्रॉम हीरोइक. लेट्स वेट एंड वॉच. वेरी क्लोज. ये पासा बदल सकता था राउंड का, लेकिन FaZe यहाँ पे जो 2-man डिसएडवांटेज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 25 सेकंड है घड़ी के ऊपर और वो ज़्यादा कमिट नहीं करना चाहते, विच इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ देम बाय द वे, क्योंकि पैसा उतना ज़्यादा है नहीं उसके पास. पूरी टीम के पास ब्रोकी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गन ड्रॉप कर सकती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि रॉब्स के पास भी पैसा है, कैरिगन के पास भी पैसा है. शायद कैरिगन को थोड़ा दे ड्रॉप एक, बट आई थिंक दे डूइंग फाइन. बहुत ही अच्छा कॉल यहाँ पे FaZe के द्वारा सेव करने का. 3 गन्स बचाएंगे, पैसा है उनके पास जो कैपिटलाइज कर पाए. बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहिए हेरोइक को. जैसे आपने बोला, आई मीन अगर यहाँ पे अपने गन भी देते तो री इन्वेस्ट करना पड़ जाता, इवन दो दे हैव मनी. एंड अगर ये कैस्केड होता हुआ, वी हैव सीन सिचुएशन जहाँ पे मैच पॉइंट के नजदीक आने के बावजूद टीम्स अनेबल टू होल्ड डाउन द ओपोनेंट ओवर टाइम की तरफ चला जाता है. सो अभी के लिए FaZe will have 3 weapons. उसके ऊपर 2 और बाई करते हुए नजर आएंगे with the economy that they have. दूसरी ओर heroic, they'll be super happy. Finally उस streak को तोड़ा गया. 6-15. They need to find a lot more in terms of momentum. Again, early control जैसे FaZe deny कर रहे थे वैसे heroic करना चाहती है. But that kind of control is not being taken every time heroic की तरफ से. तो I think heroic थोड़ा slow and steady खेल रही है अभी के लिए. बट FaZe आर स्टिल वरीड. उनका हर एक पोजीशनिंग देखिए चेक किया जा रहा है, काउंटर यूटिल आ रहा है, स्पैम किया जा रहा है, एंड फाइनली देयर स्लो एंड स्टडी पुशिंग अप. काफी डिफॉल्ट सेटअप है फिलहाल FaZe. 3 लोगों को एलॉन्ग की तरफ भेजा. यहाँ पे केडी ने पुश करने की कोशिश
अरे फ्लैश किल जरूर है लेकिन किल नहीं निकाल पाएंगे। एग्रेशन दिखाया लेकिन वो गोदी में जाके गिरा वो रेन की। लेकिन नहीं, एग्रेशन दिखाया, जरूरत थी उनको ये एग्रेशन दिखाने की, बट मुझे एक सेकंड समझ नहीं आया। आई थॉट मे बी आर फील्ड लाइक, बट कैरिगन का चेहरा तो हिला था। स्मोक, ओह माय गॉडनेस, कैरिगन के ऊपर किल निकाला। कैरिगन सोच रहे थे इतना समय क्यों लग रहा है मुझे स्मोक के बाहर निकलने में। रॉब्स अभी भी जिंदा है, ही इज बीन द डिफरेंस मेकर फॉर द टीम। शोश बहुत ज्यादा नजदीक के लिए, रॉब्स ब्लाइंड है। एक और प्लेयर, व्हाट अ फ्लैश वहां पे याबी के द्वारा एंड्रो के अंदर पुश करने की कोशिश। एक किल जरूर निकालेंगे, क्या दूसरा निकाल पाएंगे? जी नहीं, दूसरा शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए। हीरोइक कीपिंग द होप्स एंड ड्रीम्स अलाइव। फेस की तरफ से एक राउंड करके कोशिश करेंगे वापस आने की। देखना ये बंदे क्या वो कर पाएंगे सेकंड मैप के अंदर। आई होप दे डू। अभी के लिए मुश्किल जरूर होने वाला है। लुक एट द कॉल कमिंग इन। तुरंत यहाँ पे एक टाइम आउट लिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग की, जिसे मैं बता रहा था पिछले राउंड में कि देयर आर सिचुएशन जहाँ पे आप जो मोमेंटम आपके पास है वो सीधा ओपोनेंट के हाथों में दे देंगे, एंड वहाँ से ओपोनेंट जो इतना बड़ा लीड है आपके पास 10 राउंड का, वो तुरंत छीनती हुई नजर आ सकती है। अभी सिर्फ 9 राउंड का डिफरेंस नजर आएगा हमें। We'll wait and watch, but ये ग्रेनेड जैसे आपने बोला सीधा जाके गोदी में ही गिरा है, but this flash was just brilliant. ब्रोकी का भी फ्लैश आया था, बट याबी's फ्लैश was just better. दोनों को ब्लाइंड कर चुका था एंड वहां पे तुरंत स्विंग आउट करके 2 किल छीनते हुए नजर आया। वरना इट कुड हैव बीन अ प्रॉपर बी एग्जीक्यूशन। फेज वहां पे राउंड भी ले सकती थी अपने आप के लिए। राइट नाउ इज गोइंग टू बी अनदर राउंड जहां पे हीरोइक जिंदा रहेंगे। They will be looking forward to a lot more coming through. B shot को जरूर ब्लॉक ऑफ किया जाएगा फेज की तरफ से। मॉन्स्टर को भी they don't want any early aggression coming in. यहाँ भी एक और बार बी शॉट की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेले हैं। हीरोइक जिस तरीके से खेल रहे लगता है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया वो जो एक्सप्लोर होने वाले, जो कॉन्टैक्ट पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करने वाली है फेज यहाँ पे। एंड जैसे ही स्मोक पॉप ऑफ फ्लैशेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रॉब्स इज ब्लाइंड हिमसेल्फ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला। ट्विस्ट एंड रॉब्स दोनों को टेक डाउन करेंगे शुश यहाँ पे। एक और किल मिलेगा। जी हाँ, शुश बीइंग द एंकर दैट हिज टीम नीड्स राइट नाउ। रेन एक ट्रेड जरूर निकाले, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन फ्लैश एंड शट डाउन करते हुए फेज को वहां पे। Unbelievable show Mamba coming in from Heroic. मतलब almost at the brink of losing the map, but फिर भी वो हौसला नहीं आ रहे। They're still pushing with all they've got. And जैसे आपने बोला, शुश literally holding down the pillar. वहीं पे थे, right left swing out कर रहे थे, and he was just picking one after another. Entire round. Teammates का साथ मिला। जी हाँ, util is always super crucial. And यही हम बोल रहे थे कि util का कंट्रोल जितना ज्यादा होता है उसके वजह से टीम कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाता है, इन्फो ज्यादा निकलता है। बट अभी के लिए दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। एडब्ल्यू के साथ मिस द अपॉर्चुनिटी, तुरंत वहां से केडन निकल जाएंगे। बट हिज टीममेट इज स्टिल देयर। टेसिस जंपिक्स, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, लेकिन वहां पे पहले बूस्ट कर सकते थे आप। एक पतली सी विंडो होती थी ऊपर ग्लास की, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो गुड ओल्ड डेज। अब वो हमें इतना ज्यादा देखने नहीं मिलता है। रॉब्स इन द मीन टाइम काफी डैमेज लिया है उन्होंने। ईगल्स हैं इनके पास, लेकिन टेसिस ऑलमोस्ट बीइंग टेकन डाउन ओवर देयर, लेकिन नहीं, पीछे हटेंगे। डी का एक शॉट सही जगह पे आपको टेक डाउन कर सकता है। केडियन एज वेल इन द मीन टाइम पीछे हटेंगे जरूर, लेकिन टेसिस बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते। ही वांट्स टू कमिट टू दिस फाइट। अगर वो ट्रिपल पीक होते हैं तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उनके लिए, लेकिन फेज धीरे धीरे करके कंट्रोल लेते हुए, लेकिन उनको पिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। द डीगल्स विल हैव टू शो अप। केरियन ऑफ लेके बैठे हुए वहां पे। रेन या पिक निकाल पाएंगे? फ्लैश लॉन्ग की तरफ पॉप कर सकते जरूर, लेकिन केरियन को देखिए, वो नहीं रुकने वाला। वाओ, व्हाट अ फ्लिक, व्हाट अ फ्लिक। केरियन, मेरा हाथ तो फ्रैक्चर हो जाता है ये फ्लिक करने में। I mean, जब ये AWP देखने के लिए मौका मिला ना मुझे, आई थॉट लाइक ऑलरेडी वो टी साइड पे कमाल करके दिखा चुके हैं, अभी तो सीटी साइड पे रहने वाला है। ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। लुक एट हिम, ही गेट्स दैट कोलैड, एंड जैसे आपने बोला ये फ्लिक टू क्विक कमिंग थ्रू, बट नॉनदलेस फेस का ये इको था।
They will be coming back with a full buy and अभी वो try करेंगे कि close out करना है, वरना अगर Heroic अगर double digits उठा लेती है यहाँ पे, we might get a couple more rounds that we can see from Heroic. Push off कर रहे हैं long से and range predicted it, punish करेंगे Kaden को. Unfortunately इस round में AWP जा चुका है. दूसरी ओर जो control लिया गया था बनाना का, कहीं ना कहीं उसको छोड़ना नहीं चाहते. They still want to aggress on that. Steven trying to push up, but lower से एक खिलाड़ी आ रहा है Kerrigan. He has the right idea, but headshot angle था उनके पास, तुरंत उनको मार गिरा देंगे. But they are looking forward to a trade and Brokey, he picks it up on Steven, but वहाँ पे दूसरी खिलाड़ी है. Tessus is looking forward to an opportunity of his own. Bob finally जो है retreat होता हुआ आ रहा है playground की तरफ safely without any trouble. But अभी के लिए जिस हिसाब से Heroic खेल रही है मामा, they are keeping that aggressive control. हमने बात करी थी शुरुआत में जब पहला हाफ चल रहा था, Heroic काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाना उनको अच्छा लगता है. सीटी साइड पे खास तौर पे काफ़ी एग्रेसिव सेटअप होते हैं उनके, और वही चीज़ आपको नज़र आ रही है फिलहाल. 15-9 Heroic, जो चीज़ फेज ने करी थी वही चीज़ Heroic को करनी होगी. फेज ने नावी के खिलाफ किया था, Heroic को फेज के सामने करना पड़ेगा अगर वो फेज को बाहर फेंकना चाहते इसी मैप के अंदर. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी द थर्ड मैप. बट श्योर ओह माय गुडनेस, वहां पे बैक स्टैप करते हुए देखिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस. मैन डिसएडवांटेज था, फिर भी रिस्क लिया, पिक निकाले. टेस्ट वहां पे उसको शट डाउन करते हुए ड्रॉप से क्लॉथ प्लेयर 1 वर्सेस 3, 14 सेकंड्स ऑन द क्लॉक. कैन ही पुल दिस ऑफ? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, लेकिन आसान नहीं होगा. धीरे 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 कोशिश करे आगे जाने की. या उन्होंने सीडी को स्पॉट किया? आई डोंट थिंक सो. अब सुन लेंगे, गोली चलाएंगे जरूर, लेकिन वक्त नहीं है उनके पास इतना. जिंदा रहना होगा उनको. जी हाँ, जिंदा रहेंगे. 15-10 Heroic. मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे करके आगे जरूर बढ़ रहे हो. This push from Shush coming through. I think यही हम बात कर रहे थे, जैसे आपने राउंड के बीच में भी बताया था. aggression Heroic ले रहे हैं. They were surprised. They were surprised. I mean, एक स्केरी मूवी जैसे हम बोलते हैं ना, all of a sudden जंप स्केयर हो गया था वो किल उठाते. FaZe will use their last timeout. Roban के साथ यहाँ पे जरूर बातचीत करके I think he will let them know कि कुछ अलग करना पड़ेगा. जैसे वो लोग भी FaZe were also taking that aggressive control, either बनाना की तरफ ले रहे थे या मॉन्स्टर की तरफ ले रहे थे, या they were try to push out from long. ज़्यादातर उनका बनाना एंड प्लेग्राउंड कंट्रोल लेने के लिए मौका देख रहे थे. Let's see कि T साइड पे क्या करेंगे with the help of Roban. Wow. That is so cute. Yeah. I think हमारा जो superstars रहते हैं ना, the future superstars, कहीं ना कहीं वो फाइनल बनते हुए नजर आ सकते हैं later down the line. ये कुछ, this is a very Indian true right way of coaching players and students. बचपन में ही आप ट्यूशन चालू करते थे, यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक दिखा रहे हैं आप. Yeah. लेकिन टेस्टस क्या वो किल निकाल पाएंगे? इसी सवाल है. लाइक ट्विस्ट, जी हाँ नहीं, ट्विस्ट वहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे. टेस्टस बिल्कुल ओवर कमेंट नहीं करना चाहते, मैन एडवांटेज मेंटेन करेंगे, पीछे हटेंगे. ये डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा था. यार ऑन शॉट ड्रॉप्स अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा सवाल. ओह डैमेज जरूर दिया उन्होंने सैवन और शुश को, बट नॉट इनफ. इतना ज्यादा डैमेज नहीं दिया था. Heroic मैन एडवांटेज, क्या और एग्रेशन दिखाना चाहेंगे? रेन ईगल लेके बैठे जरूर है, लेकिन पिक की जरूरत है. एक पिक निकालना पड़ेगा. रॉप्स भी धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं. Is this going to work out for them? एक जरूर है. They are looking forward to an A execute. सारे जरूर वॉशरूम के बाहर नजर आया, टॉयलेट्स के बाहर, but can they do anything? The grenades and mollies are doing damage, but Kaden का shot right here for Rob Spikes trade is looking for another one, but the spray down coming in from Tessus and Steven. एक और राउंड Heroic के नाम करते हुए. One after another Mamba, एक करके राउंड जो है अपने तरफ मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं Heroic. केनी ने वो जो दूसरा शॉट लिया, फॉलो अप शॉट, काफी ज्यादा रिस्की था. अपने टीममेट को शायद अगर गोली लगती तो बहुत दिक्कत हो सकती थी उनको, लेकिन कॉन्फिडेंस जताया. जरूर शॉट मिस हुआ था, सामने वाले प्लेयर को भी नहीं लगा. इसी कॉन्फिडेंस के साथ ओह ब्रोकी, ये जो 3 मैन स्टैक होता है, कोशिश जरूर करी उन्होंने. वो पिक निकाल भी सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए.
Roki has been good on up, लेकिन consistent नहीं है वो जो crucial picks होते हैं उस समय deliver नहीं कर पाए वो. CT side में he had a better time. अभी के लिए they're just trying to buy time and waste util दोनों side से. But I think early control जो heroic को चाहिए था, they're just holding and waiting off in terms of अपने positions में, अपने sides में. इस बार कहीं भी उन्होंने overextend नहीं किया. Understanding कि opponent के पास भी full buy आएगा. सोच रहे थे यहाँ पे initially सोचे कि B की तरफ एक push आएगा. They want then they try to fake it and वहाँ से slow and steady they're moving around. Deep playground तक एक smoke आ गया था FaZe heroic की तरफ से to try and prevent any kind of shenanigans. But वो smoke disappear होने के बाद आप देख सकते हो they are taking control towards A. बनाना की तरफ से push आ रहा है, long की तरफ से तो ज़्यादा ही push आ रहा है. They've almost sneaked up. It's all about the timing. Flashes and smokes को lay down किया जा रहा है to deny the aggression. केरन का ऑप अभी भी चलेगा तो I think मौका मिल सकता है. Brilliant deny मॉली के साथ, but oh timing. Twist fine on केरन but अभी भी छुपे हुए. Tessus finds two with a headshot. एक और खिलाड़ी वहीं पे है but Tessus is running away. He's making time. He's making space for his teammates. But दोबारा बनाना की तरफ से आ रहा है and Tessus का इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है. But look at the timing. How is Tessus surviving? He finds another. Broky trying to survive for his team. Last and lonely survivor. And Tessus उनको वापस गिराते हुए नजर आएंगे. Plan जरूर किया था but this was a Tessus showdown coming through from Heroic. Tessus के वो 2 kills और तीसरा kill खास तौर पे I think जो पहले 2 kill थे वो तो बहुत crucial थे लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए वहाँ पे जिंदा रहना, प्रेशर बनाना सामने वाली टीम के ऊपर. और जब when luck favors you, right? मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो 2 किल वो लकी थे लेकिन जो तीसरा किल उनको मिला रॉब्स वहाँ पे उनके ऊपर किल नहीं निकाल पाए. पिक्सल परफेक्ट टाइमिंग था और अनलकी रॉब्स के लिए लेकिन टेसिस ने जिस तरीके से वो राउंड निकाला अपनी टीम के लिए. Imagine if this is the reason why this goes to overtime. ये इकलौते राउंड की वजह से. इस बार शॉट कंट्रोल बहुत तेजी से लेते हुए शुश. He's thinking this might be a quick B execution coming in. Eco कहीं ना कहीं नजर आ रहा है. Flash आएगा and brilliant flash from Broky. Ropes उसके ऊपर एक kill उठाएंगे. They're trying to push up default. Shush yes picks up one but Twist is good with the trade coming through. Make it a double for him. Numbers are falling down. Eco पे कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ सकते हैं. All on the captain right now. Can he lead this time? Broky को boost करते हुए Heaven की तरफ push किया जा चुका है. The smoke gives makes space and FaZe closes it out. एक राउंड का जरूरत था माम्बा, एक ही राउंड का जरूरत था. It was 15-5 तब से लेके FaZe स्ट्रगल किए जा रहे थे. एक ही राउंड की जरूरत थी. केरी यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं हुई, पूरी टीम यहाँ पे इतनी ज्यादा खुश नहीं हुई बिकॉज could have been closer और ज्यादा नजदीक होना चाहिए था. इनका मैप पिक था. FaZe हमेशा जब भी वो अपने आप के कोने में पाते हैं they bring out the best in them and drops ने जिस तरीके से पूरी की पूरी मैच में अपनी टीम को सपोर्ट दिया, crucial kills निकाले हैं. I do believe इस मैप के MVP तो रॉब्स होने चाहिए, no doubt about that. Because जो kills उन्होंने निकाले, जिस टाइम पे उन्होंने वो kills निकाले हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कर पाता. Later down the line थोड़ा Shush as well as Tessus चालू हो गए coming in from Heroic. कहीं ना कहीं वो पूरा गेम को पलट सकते थे, जैसे आपने बोला ओवरटाइम की तरफ मोड़ सकते थे. But an unthought of इको राउंड कमिंग थ्रू जहाँ पे FaZe ने क्लोज आउट करके दिखा दिया. आई थिंक पिछले बार हमने जब बात किया था ना, जो फ्लैश पे 2 पिक्स निकाले गए थे जिसकी वजह से FaZe का जो क्लोजिंग राउंड था उसको डिनाई करके उसके बाद उनको बैक टू बैक इको पे धकेला जा रहा था. वैसे एक सिमिलर फ्लैश इस बार FaZe की तरफ से देखने के लिए मौका मिला एंड FaZe वर एबल टू डबल डाउन, दे वर एबल टू ट्रेड बेटर. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा ट्विस्ट का भी वहाँ पे हाथ है जिसकी वजह से ट्विस्ट यहाँ पे अपनी टीम को जीत दिलाते हुए नजर आया अलॉन्ग साइड हिज टीममेट. और अभी के लिए हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. मिलेंगे आपको अगले गेम के मैप के साथ. अगले गेम के मैप के साथ. अगले गेम के मैप के साथ. गेम के मैप के साथ. अगले
emotional roller coaster in a series of streaks and almost comebacks, but close, unfortunately, won't cut it. Hot out of the gates on that second half, it is FaZe to be holding their nerve and in a series of streaks and almost comebacks, but close, yet again FaZe leaving it to the final moments on that second half. It is FaZe to be holding their nerve We obviously saw a nice comeback there from Heroic. You saw some of the individuals start to pop off. We saw a great round from Shush on that B-side defense. Tess's continuing to extend play further even after his first teammate died on that A side of things, but there was just too much cushion for FaZe. They did so much work in the first half. The fact that they were continuing to extend top of it felt like everything they were doing in the beginning was just working on that A side of things, but this was just too much cushion for FaZe. They did so much work in the first half. Every single time it's a 50-50 felt like everything they were doing in the beginning was just working on that A side of things. A game that in the beginning seemingly when the deciding FaZe Clan, I would argue it was still a very close game. They could fight on every single round. They were so one game. That tells you one story about the beginning. Seemingly when the deciding FaZe Clan, I would argue it was still a very close game. They could fight on every second round. You know, despite being 10-5 to chasing that game. Situation. Consistently output that sort of firepower. It's so scary to be Heroic right now because you played well as a team, but you can't outduel this guy. Let's focus a little bit more on that first half in particular, because Jacob, I think you're output that totally sort of right. Obviously, a firepower. 10-5 It's first so half. scary to be I think Heroic it's a right bit now more because you indicative played that well FaZe as a team, had the but you advantage can't because outduel this guy. Heroic really had the fight for basically any of the rounds. Basically, I think we have to do the game justice by highlighting the fact.
kept up the comms. The teamwork was still phenomenal for them. We saw so many good flash assists. When Shush had his ace in this one, it was off the back of some good flashes. Even in these moments where Heroic could have been caught because FaZe found a timing running out monster, there was just good counter utility. And Heroic, they just showed their class in this. Even though they lost, if they had a little bit more in terms of buffer, in terms of space, rounds they could play with, they definitely would have brought this one back. But they just didn't do enough on the T side. But that CT side showed so much class. I buy that sentiment. I buy the sentiment that had Heroic started on the CT side, had they get going, had they ended up the round, 10-5, something like that, it would have been a complete different game. As you said, the utility usage, the team play, the synergy, what Mahone highlighted coming into the game with being proactive on the CT side, we saw all the assets coming out from Heroic in that second half. Unfortunately for them, the first half ruined it for them. We were talking in the green room about how we selfishly wanted this to go to 3 maps, because obviously it is Mirage to be rounding this one out, and I'm so damn glad we got there, because we just talk about the history on this particular map alone. There is so much to be dissecting. There is so much, it's 2 teams right now who is 1 map away from a semi-final and 1 map away from being eliminated. Captain Obvious over here, of course, informing you on that one, but fact of the matter is that it's 2 teams that play Mirage in a different style. I think Mirage is probably one of the most enjoyable maps to watch in Counter-Strike right now, especially as a decider. The way Heroic plays it, it's based off a lot of Wolfpack mentality. They like to execute together. 4 guys, one plays KD on another, or Stown out in middle by himself, then 4 guys doing an echo. Whereas I feel for FaZe Clan, it's a little bit more relying on the individual powers. We want to see Twist being set up with the rifler. You want to see Robs being activated with the rifle. Brokey turning around, rotating all over the map. So it's the team play from Heroic going up against the individuals from FaZe, and I feel like the playing ground of Mirage is the perfect setting for that. Yeah, I can't wait for some of the clashes that are going to occur. I'm really looking out for what's going to be occurring on that A site, because I know both these teams are going to game plan so heavily on mid, and so when FaZe is on that T side going with that mid control, I want to see if Rops gets a little cheeky with it, if he goes for a little peek out at A at any point, because he is feeling it right now. He is playing like he is the best player in the server, and so I'll just say Shush has got to have his work cut out for him on that defense. If Rops catches you on a timing, if you throw one flash to try to help your mid players out, that's when Rops is going to just wide swing you, take you out, and find an opening that just shouldn't even have happened. Get a bit, these nerves got to get under control, He's having fun with it, but I was just about to say it. For Kerrigan, he is the guy that I want to target right here, because I think Heroic right now, in this very moment, have been speaking about how do we punish Kerrigan on that B-bomb side, on the defensive side. We have seen him have some weaknesses in terms of defending the B side. I think Heroic have some of the best B executes that I've ever seen in my entire life. So when it comes to certain individuals that we can focus in on, that we can zoom in on, this guy right here eating a banana in the most sexy way you can imagine, he's going to be under a lot of pressure. Like he heard you. He's hesitating. I know. It's going to happen every single time. Well, hopefully we'll see a bit more than just some banana action going down on the ground of Mirage. You talked about where, Heroic could maybe be punching FaZe where it hurts. On the flip side, where do you see FaZe maybe being able to take the advantage over the side of Heroic if it's such a good map for them? I think that what Pimp said is totally accurate. The fact that Heroic's going to have some really sick executes coming out, especially on B, and that's where I want to see Brokey step up. If he's rotated into position, if he's there to defend from that just back pillar, we've already seen some highlights come out from him in this matchup. If he's able to just find multifrags that he has no business finding, multifrags that only the best uppers in the world can find, then Heroic, even if they throw the best flashes on that the world can conjure, then Brokey can bust those execs. It's star power versus teamwork for me in this one. Listen, Freya, you asked for weaknesses when it comes to Heroic. I was looking up their stats for Mirage the past 3 months. The lowest rated player on Mirage for Heroic is KDM with a 105 rating. That's the lowest rated player. And the highest is Stown with a 1.18. Everyone else is in between that. So there's no weak link, there's no weak spot, there's no B-side you can execute towards and think, over here we have a player that is not feeling it. Shoes is a fantastic A-side player as well on that CT side. So to me, it comes down to what we spoke about coming into the game. We know what we're going to get from Heroic. A high-level performance, but the ceiling is not as high as FaZe. So to me, it's all about that. Can FaZe raise the ceiling? Can they play up to the absolute best? Then they can beat Heroic. But if not, I think Heroic's top floor right now is enough. I think that's where it's a really interesting comparison when we're talking about the AWPers coming into this ground, because we're looking at Cadian with way more responsibility on his back, right? He is the in-game leader, leading the charge for this squad, whereas Brokey, it's just about the AWPing, it's just about the firepower when you come into a matchup like this. That's why it's worrying if you're a fan of Heroic in this one, because you know that Cadian's going to have to shoulder so much of the burden in terms of coming up with ideas and plans for them that sometimes that's why his rating drops off. The fact that Pimp already mentioned that Cadian, he's been the worst performer on Mirage for Heroic. That is a huge, huge hole in the game
for this team. If they can't get their op going, then the riflers from FaZe, they're just going to feast on them. The comparison between Kaden and Brokey is fantastic, though, because Kerrigan, as we spoke about, the in-game leader for Heroic, probably the guy thinking the most, communicating the most within the Heroic camp. I would argue it's the complete opposite for Brokey within FaZe Clan. He's a player that plays on his intuition, right? Of course he's communicating, but he's not the guy that you look towards as a secondary goaler. It's not the guy that is dictating the way FaZe is playing whatsoever. I think Brokey is best when he's left in a 1v2 or in a 1v1, where he doesn't have to think, where he just has to play as per his intuition. So you have these two players, one guy thinking a lot, 200 IQ, the other guy, I'm not saying Brokey is dumb at all, I'm just saying that he's best when he's just playing by himself on his intuition, probably one of the best in the world. Gentlemen, I almost never do this, but I want to get some preds because this has been such an epic quarterfinal to open things up here in the Accor Arena. Who are you guys siding with in this one? Give me FaZe. Give me it for all 30 rounds, though. 16-14. You know it's going to be some crazy comeback from them, but I think FaZe is going to get this one done. This is going to be explosive. It's going to be a great game. I think Heroic is too good for FaZe for now. Well, we have gone the full distance, and it all comes down to Mirage. An epic quarterfinal thus far, and I see that continuing coming into this third and final decider. It's Heroic versus FaZe for the last time in the Accor Arena. It all comes down to this. Paris, are you ready? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जिस घड़ी का इंतजार था, जिसके बारे में हम सोच रहे थे पहला मैप जब शुरू हुआ था, वो अभी कुछ ही देर में शुरू होता हुआ नजर आएगा। हम वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है लूसिफर, मेरे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे माम्बा। इट हैज बीन अ ग्रेट गेम सो फार। ओपोनेंट का मैप यहाँ पे दूसरी टीम लेती हुई नजर आई एंड वाइज वर्सा वर्कड आउट इन द सेकंड वन एज वेल। अभी बढ़ेंगे आखिरी मैप की तरफ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आई डोंट नो। I genuinely not know because FaZe का मैप पिक Heroic जीत रहा है, Heroic का मैप पिक FaZe जीत रहा है. The way these rounds have been going on, it makes no sense. Makes absolutely no sense. लेकिन entertaining बहुत ज़्यादा है. चलिए रुक करते गेम के और देखते हैं मैच में क्या होने वाला है. First round, ladies and gentlemen, coming out on Mirage, the decider in this first quarterfinal. Shush, smoke through spam करेंगे जरूर. And एक बहुत ही default, बहुत ही basic explode A side के ऊपर होने वाला है. और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ भी अभी तक रोटेट नहीं कर रहे हैं. Early openings यहाँ पे निकल चुका है, but they're still committing for none other than the plant. टिकट के थ्रू यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं मार के नए ट्राई कर रहे थे. सैंडविच के बीच फंसे हुए थे. शुश पुट्स ट्विस्ट और अभी के लिए ब्रोकी भी फंस जाएंगे. The last player Carrigan, he does not see the bullet coming at all. That's going to be the first round. यहाँ पे Heroic they start off, but अभी के लिए ये सिर्फ pistol round था, so something initial control जिसकी वजह से वो जरूर खुश रहेंगे. जी हाँ. But clean shots from Heroic. बात करें हम FaZe के बारे में, काफी एक बेसिक सा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी उन्होंने. Almost worked out for them, but दिक्कत ये थी एक बार साइड कंट्रोल लेने के बाद उनके पास कोई यूटिलिटी नहीं था. जब काउंटर कर रहे थे सीटी साइड, तब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. यहाँ भी काफी लेट रोटेट किया था बाय द वे. जो एक फ्लैश के साथ इसे कहते हैं मेक इट रेन, ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है. इन द मीन टाइम शुश गेट्स टेकन डाउन. रॉक्स हमेशा डिलीवर करते हैं अपनी टीम के लिए जब भी जरूरत पड़ती है. यहाँ पे प्लान करने की कोशिश, लेकिन क्या प्लान होगा? जी हाँ, प्लान हो जाएगा. सो उतना पैसा गारंटी हो जाएगा टीम के लिए. बट लुक एट केडन, ही सरप्राइज. लाइक गोली कैसे नहीं लगी मेरी? मतलब प्रॉपर डिफॉल्ट कर रहे थे, बट हाउ दूसरे खिलाड़ी गिर गए जो उनके पीछे कवर देने के लिए थे, स्मोक के छुपे हुए. बट nonetheless, अभी के लिए तो Heroic will also get the second on board. अभी मामला बदल सकता है. That's what they have to worry about. They knew यहाँ पे second round बाई नहीं करने. They'll just force fight it out. जैसे आपने बोला केरन रिप्ले में दोबारा भी देख सकते हैं. It's like find कर दिया उन्होंने. Right now we will be seeing buys coming in from both the ends. केरन के हाथों में AWP लग चुका है. Now this is where things can turn around. Let's wait and watch. जी हाँ, काफी स्मार्ट डिसीजन था यहाँ पे ऑप लेने का, बिकॉज उनको पता था सामने वाली टीम ने इतना पैसा खर्च नहीं किया था. C4 भी प्लांट कर दिया था वहाँ पे, तो पैसा जरूर होगा. एंड काफी ज्यादा पैसा है अगर आप बात करें FaZe के पास. तो यूटिलिटी है, गन्स भी काफी अच्छी है. दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर Heroic. अगर ये राउंड निकालते तो फिर they'll be stamping their authority. सवाल ये बनता है कि किस साइड पे वो अपनी प्रेजेंस ज्यादा दिखाना चाहते हैं. रॉब्स पैलेस के अंदर घूम रहे फिलहाल के लिए, और इज आउटसाइड पैलेस? इज एक्चुअली आउटसाइड पैलेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई डोंट नो, बहुत बड़ा लोग है तो समझ में नहीं आ रहा है. जी हाँ, पैलेस के बाहर है वो, ए मेन की तरफ है. ए पे स्मोक्स डाले, मॉलीज वगैरह डाली, रोटेशन फोर्स करने की कोशिश. ट्विस्ट के
ऊपर प्लेयर है वहां पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पे। मॉली करी जरूर है प्लेयर को पीछे फोर्स करने के लिए। स्टैवन उनको हटना पड़ेगा रेन धीरे धीरे करके शॉट की तरफ बढ़ते हुए। तो ए पे फेक जरूर किया था, एक और क्रॉसिंग स्मोक जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर रॉप्स यहाँ पे एक किल निकालते ए साइड की ओर तो बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन रेन नहीं रुकने वाले। स्टैन को वहां पे टेक डाउन किया है। केडियन नीड्स टू कनेक्ट दी शॉट्स। प्लेयर जरूर स्पॉट किया वहां पे, लेकिन अपने पीछे भी देखने की जरूरत। क्या भी अंदर है, रेन को डाउन जरूर करेंगे साइड के अंदर। कैरिगन आ चुका है, बट ही नोज इट्स नॉट कंप्लीटली क्लियर। ओह नाइस फ्लिक ऑन टू याबी। बट दूसरी ओर ए के तरफ खिलाड़ी बढ़ चुके हैं, अभी भी टिकट की तरफ रहने वाले। कनेक्टर की तरफ खिलाड़ी को डाउन किया गया। शुश विल बी टेकन डाउन इन ट्रेड एंड रोप पुट्स केडन डाउन। जो AWP निकाला था वो नलिफाई हो जाएगा एंड it is going to be FaZe making their full by round work. जी हाँ, बेहतरीन तरीके से रोटेशन मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। ए पे फेक किया, बहुत ज़्यादा फोकस कराया ए पे। ट्विस्ट आए थे अंडरपास से, लेकिन ड्रॉप्स जो पहले इनिशियल पिक्स निकाले वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। और शुश के ऊपर भी काफ़ी अच्छा किल निकाला था। केडियन को भी वन टैप किया उन्होंने लास्ट मैच से लेके अभी तक। एंड शुश ने रियलाइज़ किया था वहाँ पे कि उन्होंने तो ओवर कमिट किया ही था, लेकिन यहाँ भी बहुत इमोशनल हो गए थे। वन इक्वलाइज करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा। थोड़ा वीकर बाई नजर आ रहे हीरो की तरफ से। दोबारा कनेक्टर की तरफ प्रेशर बनाने का इरादा बना रहे हैं एंड दूसरी ओर स्नाइपर नेट की तरफ भी जाने का। बट कैरिगन थ्रू द स्मोक गोज डाउन। Oh, what a spam! 7 gets a double! Brokey trade जरूर किया, but that was not something that should be justified. Brokey अभी पूरा aggressive बन चुके हैं. He is unable to digest that. उनके teammates smoke के through गिर गए, but अभी यहाँ भी control है उनके पास, जिसके वजह से he gets one. Brokey is trying to find an opening, but दूसरे खिलाड़ी side पे already है. Nozzle दिख चुका है. Cricket discipline खेले, going ringer, Rose is surrounded, and finally Kaden उनको मार गिरा देंगे and that is going to be another round for Heroic. Equalize करने के लिए बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। जी हाँ, काफी ज्यादा पेशेंस दिखा और ये स्टैमिना जो 2 के था काफी क्लच। एक स्मोक के थ्रू, दूसरा बस घुटना दिखाता, नीचे स्पीड ट्रांसफर किया, किल निकाला। केडियन देखिए कितने ज्यादा हाइप कर रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते फेस को। वहां पे पूरी तरीके से मेंटली, इमोशनली, सर्वर के अंदर हर तरीके से उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। फिलहाल बहुत अच्छा मौका है इनके पास, ये राउंड नहीं हार सकते। ब्रोकी ऑलमोस्ट कनेक्टिंग दैट, अगर कनेक्ट हो जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्टार को देखिए कितना ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, मेंटली तोड़ना चाहते हैं उस टीम को, लेकिन रेन आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पुश को। स्टैन शायद वो कमिट कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बिकॉज अगर ब्रोकी ये शॉट कनेक्ट करे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। Oh, Brokey, you have to connect, you have to hit those shots, Brokey. Gideon, so close, लेकिन फ्लैश डाला था अपने टीममेट के लिए। अब अंडरपास ओपन है, ये देखिए पुश करके अंदर जाके मार रहे हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, इस तरीके का एग्रेशन जो मीनिंगफुल एग्रेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप स्मोक के थ्रू सीधा पुश करके जा रहे हैं, आप एग्रेशन दिखा रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव, सामने वाली टीम को डराने के लिए, सामने वाली टीम को तड़पाने के लिए। Nothing. इस बार भी FaZe कुछ नहीं मिलेगा उनको। That's going to be another round in favor of Heroic. Early game CT side का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। FaZe are unable to do anything. उनकी full by round के बाद there's been nothing that they've still found. थोड़ा confusing उनके लिए भी रहेगा, because अभी के लिए जो भी वो कर रहे, कंट्रोल जहाँ पे भी ले रहे, all of a sudden smoke के थ्रू, यूटिल के थ्रू वो मरते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दे हैव टू गेट इन कंट्रोल। अभी के लिए मेन को ब्लॉक ऑफ किया जाएगा, मिड जो नेस्ट है उसको स्मोक ऑफ किया जाएगा, क्विक फ्लैशेस कमिंग थ्रू, अग्रेशन नहीं देखना चाहते एंड एक होल्ड ऑफ। यहाँ ऑप वर्सेस ऑप बैटल हो सकता है, कनेक्टर के थ्रू कोई ना कोई बाहर आने का इरादा बना रहे हैं and that's the reason Brokey is holding it down. And जैसे आपने बोला, Brokey needs to connect the glimmer of opportunity जो उनको कभी भी नजर आता है। याबी on the other end, brilliant positioning। अगर नेस्ट के तरफ कोई प्रहार करने का सोचते, जैसे स्मोक डिसअपीयर होता है, he'll be the first one, but grenades ये कहीं ना कहीं इनिशियल कांटेक्ट बना रहा है एंड हेल्थ ड्रेन करते हुए नजर आ रहा है मामा। What is this? आपने एक चीज नोटिस करी, जितना डैमेज ग्रेनेड ने दिया था उसी की वजह से ये जिंदा रह पाए टेसिस यहाँ पे, वरना नहीं बचते, बिल्कुल नहीं बच पाते।
वेस्ट स्मोक के अंदर स्पैम करेंगे, मोलोटोव का इस्तेमाल क्या फोर्स कर पाएंगे प्लेयर को? जी हाँ, फोर्स जरूर किया लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाए शुश, सिर्फ 3 HP। ये देखिए बड़ी सिस्टम, ओह माय गुडनेस, द मोमेंट मैंने उनकी तारीफ करी, दूसरे प्लेयर पीछे हटे और एक फ्री का फ्रैग दे के आ गए। पूरा क्लियर करना चाहिए था मेरे हिसाब से वहाँ पे, बट we'll see, we'll wait and watch what happens। केरियन अभी भी ये साइड पे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, फ्लैश जरूर आएंगे धीरे धीरे करके, 2 फ्लैश अवेलेबल है उनके पास, लेकिन वो पहले से डालना पड़ेगा उनको। Initial flash entry. देखिए ट्विस्ट हैज नॉट बीन हैविंग अ ग्रेट स्टार्ट एज ऑफ नाउ। स्टेयर्स की तरफ खिलाड़ी है, इंतजार कर रहे हैं शुश, कैन ही फाइंड एनीथिंग ऑन द अदर एंड? ट्विस्ट फाइंड्स याबी, जैसे हम पहले ओपनिंग के बारे में बात कर रहे थे, बट लुक एट दिस, इमीडिएटली केरन एंड शुश एक निकाल लेते हैं, बट रोकी पुट्स केरन डाउन। बैक टू अ 2v2 सिचुएशन, शुश कनेक्टर्स को गार्ड करेंगे, बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे, एंड लुक एट दिस कमिंग आउट फ्रॉम साइड, ऑलरेडी दिख चुका है पोजीशन, एंड फाइनली वहां पे आखिरी खिलाड़ी को भी डाउन किया जाएगा। अ ब्रिलियंट पोजीशन होल्ड कमिंग इन फ्रॉम Heroic. बेहतरीन हीरोइक के द्वारा वहां पे काफी क्रूशल पिक्स थे जो रॉब्स को पैलेस के अंदर पिक किया गया, केडेन ने भी जो पिक निकाला था, एंड फेज फाइनली टाइम आउट यूज करते हुए यहाँ पे जो फेज फैंस है वो काफी ज्यादा दुखी होंगे, बिकॉज अच्छी पोजीशन नहीं है उनके पास, जिस तरीके से उनको पुश बैक किया जा रहा है, जैसे वो साइड लेने की कोशिश करते हैं, काफी क्रूशल फ्लैग निकालते हुए वहां पे। पर खुशी देख सकते हैं आप, केडिन की खुशी देख सकते हैं। मैं जब भी इनको इतना चिल्लाते देखता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं अगर मैंने कभी ऐसा चिल्ला दिया मुझे तो चक्कर आ जाए। I think it's the adrenaline जो आप खेलने के टाइम पे चलता रहता है, especially when you're low in number of players या you're on a streak, वो पता भी नहीं चलता है। अगर गेम के बाद में इंटरव्यू जैसे होता है, जब आप उनसे पूछते भी है कहाँ से इतना एनर्जी आता है कि आपको गेम के अंदर भी ध्यान रखना पड़ता है, बट जीतने के बाद चिल्लाते हो, he is like I don't know, it's just there. Can he make magic happen again? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। लास्ट राउंड काफी क्रूशियल किल्स निकाले थे, वापस उनको पिक निकालने पड़ेंगे। यहाँ भी देखिए कितना ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं, शुश कोशिश जरूर करेंगे लेकिन ये साइड पे उतर चुके हैं प्लेयर्स, एंड ओहो यहाँ भी कैसे पिक एंड कैरिगन फॉलिंग प्रे टू केडियंस ऑपरेट ऑफ वहां पे, लेकिन केडियन जिस तरीके से एंगल होल्ड कर रहे हो काफी ज्यादा शानदार है। रॉब्स एंड ट्विस्ट 2 versus 4, क्या ये अपनी टीम के लिए राउंड निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल होने वाला, इट्स अ टफ टास्क। इन ट्विस्ट को यहाँ स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको ये पिक्स निकालने पड़ेंगे। पहला जरूर निकाला लेकिन क्या ट्रेड होंगे? केडियन जी नहीं, वो नहीं होने देंगे इस चीज को। ट्विस्ट को वहाँ पे टेक डाउन किया, एंड एक और राउंड, छठा राउंड आते हुए हेरोइक के लिए। केडियन हैज बीन जस्ट ब्रिलियंट। केडियन एंड शुश अगर बात करेंगे, दे हैव बीन जस्ट होल्डिंग डाउन द साइड रियली वेल। बाकी खिलाड़ी जितना सपोर्ट दे सकते देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस गेम में अभी तक टेसेस का जो भावी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसका इंतजार भी जरूर रहेगा, बट ये जैसे एंट्री होता है क्लियर करने के लिए फेस के खिलाड़ी थोड़े एक्सटेंड करते हुए नजर आते हैं सीटी साइड की तरफ, उसको पनिश किया जा रहा है। लाइक डिफॉल्ट तक हम आपको एक्सेस दे रहे हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा, एंड आई थिंक हीरोइक हैव बीन पिकिंग राउंड्स वन आफ्टर अनदर। इस बार कहीं ना कहीं एक क्विक बी एग्जीक्यूशन का इरादा बना रहे हैं, थोड़े लोग स्प्लिट होते हुए मेन की तरफ, दूसरी ओर मिड की तरफ बढ़ रहे हैं, बट शुश हैज द सेम इंटेंशन। रेन का ग्रेनेड आया था बट शुश टेक्स एडवांटेज, पिक्स केयर अगेन, एंड उसी के साथ रेन को भी डाउन करते हुए नजर आएंगे। अर्ली एडवांटेज टेकन, उनका जो बाई राउंड था उसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय थोड़ा करते हुए नजर आ रहा है। 1-6, इट कैन बी अ 1-7 कमिंग थ्रू, एंड टेस इज आल्सो पुट्स 1 एट एप्स। 2 versus 5। फिलहाल हेरोइक बुली करिए फेस को, जिस तरीके से जितना कॉन्फिडेंस के साथ, जितना कॉकी होकर पुश करे। टेसिस I'm not sure अगर वो उनको एंगल पी करने की जरूरत थी, लेकिन केडियन he could have connected that shot। इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है उनको ब्रो की, क्या उनके पे शॉट कनेक्ट कर पाएंगे? जी हाँ, उनके पे शॉट करेंगे, फॉलो अप के लिए जा रहे हैं लेकिन ट्विस्ट उनको टेक डाउन करेंगे। दूसरा ऑलमोस्ट कनेक्ट करते हुए मोलोटोव मौजूद जरूर है उनके पास, उनको फोर्स करते हुए जला देंगे टेसिस को। नाउ सडनली रिड्यूसिंग इट टू 1 versus 3। C4 उनके पास नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर वो किल निकाल पाए मार्केट के प्लेयर के ऊपर तो काफी शानदार हो सकता है। बिलीव उनके पास इंफॉर्मेशन है वहां पे C4 ड्रॉ, इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्मोक है यूटिलिटी के लिए, स्मोक डालेंगे, जैसे ही स्मोक पॉप होगा आई डू बिलीव प्लेयर्स पुश करने की कोशिश करेंगे। वहां पे स्पैम कर रहे हैं,
And twist. लेकिन जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुश वहाँ पे स्मोक के थ्रू टैप करते करते किल निकाल के जाएंगे। एंड फेज, बॉय ओ बॉय, यहाँ पे लग रहा है माम्बा कि फेज आर आउट मैच, लाइक दे आर नॉट इवन श्योर कि इस मैप में क्या किया जाए। दे आर जस्ट बीइंग आउटस्मार्टेड। उनके यूटिल उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, अग्रेसिव पोजीशन होल्ड आउट किया जा रहा है, एंड इट्स जस्ट वर्किंग आउट फॉर हीरोइक अभी के लिए। Other the buy round, यहाँ पे देखिए फुल इन्वेस्टेड है फेज। लेट्स होप दे फाइंड समथिंग। यूटिल की कमी भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, बट ऑन द अदर एंड फ्लश कैश यहाँ पे हीरोइक की तरफ देखने के लिए मौका मिल रहा है। लेट्स होप फेज कैन पुल ऑफ सम मिरेकल, जहाँ पे ये मोमेंटम उनके हाथ से जा रहा है। इट कैन बी क्लोज्ड ऑफ। ब्रिलियंट ग्रेनेड, कैरिगन का थोड़ा HP ज़रूर लेके जाएगा एप्स के तरफ। अभी के लिए बात करेंगे, द मेन इंटेंशन लुक्स टू बी अ बी। मे बी यहाँ पे एक फेक सेल के रोटेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए A के तरफ भी खिलाड़ी है। सिर्फ और सिर्फ मिड का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है यहाँ पे अगर बात करेंगे फेस का। एंड आई थिंक इसका एडवांटेज केडन उठाते हुए आगे जा रहे थे, बट ही मिस्ड हिज शॉट। ही इज रनिंग बैक नाउ, बट उनको ये मौका नहीं है। थॉट इट कुड हैव बीन अ फ्री पिक, जैसे ट्विस्ट आगे बढ़ रहे थे, बट रिकवर कर लेंगे अपने आप को केडन। ही गेट्स बैक द जंगल विद हिज टीममेट। जब से ग्रेनेड्स ड्रॉप कर पाते हैं, मेटा कितना ज़्यादा चेंज हो गया। आप कई बार देखते जो यूटिलिटी होती है वो पास अराउंड करते, स्मोक्स पास अराउंड करते, इंसेंडियरी होती है, लेकिन धीरे धीरे फेज पुशअप करने की कोशिश करे कनेक्टेड के अंदर, लेकिन क्या वो पिक्स निकाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला। एक्सप्लोर तो किया जरूर है, कैरिगन पहला पिक निकाल दो। केडियन, ओह नो, ब्रोकी कम्स इन, सब धड़ सेलेक्ट कर दिया उन्होंने उनका। टू रन पिक ऑफ किया टेसेस ऑन 1 वर्सेस 4। ऐसा है उनके पास, लेकिन मुझे लगता है सेव करेंगे जरूर, बिकॉज केडियन के पास ऑफ का पैसा है, शुश के पास यूटिलिटी का पैसा है। 7 उनको जो लूजिंग बोनस मिलने वाला है यहाँ पे वो $1400 होगा, तो ज़्यादा पैसे है नहीं। यूटिलिटी आपको बचा के रखनी है। करेक्ट कॉल इन माय ओपिनियन। फेज का एक बहुत ही बेहतरीन राउंड यहाँ पे निकला है। अभी तक फेज का जो प्लेस था हम देख पा रहे थे कि मिड की तरफ एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहे थे, इट वाज फेलिंग। डायरेक्ट एग्जीक्यूट का ट्राई कर रहे थे, इट वाज फेलिंग। इस बार स्लो एंड स्टडी खेला, थोड़ा अर्ली यूटिल डंप किया, वेटेड फॉर द राइट टाइमिंग एंड तुरंत रोटेट करते हुए नजर आया। एंड आई थिंक ऑल्सो ज़्यादा इन्फो नहीं दिए यहाँ पे हीरोइक को, जिसके वजह से द प्लेयर्स फ्रॉम हीरोइक वर ऑल इन डिफॉल्ट पोजीशंस, अपने जगह को होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे। एंड दैट इज वेयर अ क्विक एग्जीक्यूट हैपेंड एंड कनेक्टर का जो कंट्रोल उनको मिल गया, वेयर केडन फेल बैक, आई थिंक वहाँ पे उनको और ज़्यादा उम्मीद मिल गया। लाइक दैट जस्ट ओपन अप अ न्यू अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अग्रेस करके फेज गॉट बैक इनटू द गेम। जी हाँ, लेकिन ये राउंड मुझे लगता है और भी ज्यादा क्रूशियल है। शुश ने ऑग उठा लिए है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरीके से उसको यूज करना चाहेंगे मैं जरूर देखना चाहता हूँ। लेकिन केडियन ये देखिए कोने से वो पिक निकालना चाहते हैं। काफी ज्यादा चीकी, अपना होमवर्क किया जरूर है इन्होंने, काफी चीकी एंगल लेके बैठे। अगर एमिंग की तरफ जाती है टीम तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन रेन अभी के लिए मिड का इंतजार करेंगे। कंट्रोल दिलाया जरूर है, लेकिन केडियन को पीछे हटना पड़ेगा। पैलेस कंट्रोल उनके पास है नहीं। रॉब्स वंस अगेन डिफॉल्ट करके पैलेस की तरफ गए, तो फेज डिफॉल्ट करने की कोशिश करी, लेकिन रेन धीरे धीरे क्रीप अप करे। क्या उनको मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल होने वाला ये। क्या भी रेन विल गेट टेकन डाउन, नो स्टैमिना विल नॉट मिस दैट। शुश गेस व्हाट, कैन ही फाइंड द सेकंड एज वेल? जी नहीं, कैरिगन को ट्रेड कर लेंगे बहुत ही जल्दी। रॉब्स कैरिगन को ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, कैरिगन एक और किल निकालेंगे केडियन के ऊपर इतनी कम एचपी पे। एंड समहाउ आई बिलीव फेज ये राउंड निकाल के जा सकती है, लेकिन ड्रॉप्स को स्टेप अप करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही कैरिगन C4 प्लांट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत ही बढ़िया पोजीशन में उनके पास यूटिलिटी नहीं अवेलेबल नहीं। एक स्मोक है सिर्फ सीटीज के पास, लेकिन बैक सैप पे प्लेयर्स आते हुए धीरे धीरे याबी पीक नहीं करना चाहते, मैन एडवांटेज मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन टेसेस मेन होल्ड करते हुए जी हाँ कैरिगन को पिक निकालेंगे। अब उनके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रॉब्स कैन ही मेक दिस हैपन, कैन ही मेक मैजिक हैपन? सीटी होल्ड करते हुए स्पॉट हो चुके हैं, वहां पे शोल्डर किया था एंड याबी स्विंग करके उनका काम तमाम करेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्लोज राउंड। ग्रेट ट्राई कमिंग इन कैरिगन की तरफ से, स्पेशली जो 2 पिक्स निकले, दैट डिड गिव अ लिटिल बिट ऑफ होप फेज के लिए। बट जिस हिसाब से हीरोइक खेल रही है, दे जस्ट स्लोइंग देमसेल्व्स डाउन। एंड आई थिंक ये कनेक्टर का जो पुश आया था, देयर वाज नो यूटिल यूज्ड अराउंड इट। दे वांटेड टू मे बी गो फॉर अ स्नीकी अटैक, बट
it completely failed. मतलब कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे. इंतजार कर रहे थे, वो स्मोक डिसअपियर होने से पहले उस पोजीशन को होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे फेस के खिलाड़ी. एंड इस बार they will be able to get it. दोबारा टाइम आउट कॉल करते हुए यहाँ पे फेस की तरफ से. It's going to be their second in this map. रॉबिन का इनपुट बहुत क्रूशियल रहेगा. लेट्स होप फेज जिस हिसाब से खेल रही है अभी के लिए कुछ बदलाव करके आएगी, वरना तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है. अगेन फर्स्ट हाफ का स्कोर एक बड़ा लीप लेते हुए नजर आ सकते हैं हीरोइक. एंड देन व्हेन वी स्विच साइड्स maybe FaZe can make a comeback in their own CT side, but I think तब तक अगर ये स्कोर लाइन बहुत दूर जा चुका होगा, जिस हिसाब से हमने पहले 2 मैप्स को देखा है, जो भी बहुत बड़ा एडवांटेज उठा चुकी होती है राउंड्स पे, that team eventually has to close that. अभी तक एक भी ओवर टाइम हमने नहीं देखा है. So if it repeats again, मुश्किल हो सकता है FaZe के लिए. अभी के लिए propped up, wake up. Highly possible, I'll be honest. यहाँ पे क्योंकि देखिए FaZe अभी स्ट्रगल करिए टेरेस साइड पे, लेकिन मुझे लगता है कि हीरोइक को सेम स्ट्रगल होने वाला है टेरेस साइड पे. सीटी साइड पे FaZe will have that lockdown as well. मिराज एक ऐसा मैप है जहाँ पे अगर आपको सीटी साइड खेलना आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट कर सकते हो ऑपोनेंट को. लेकिन टेसिस देखिए पिकअप करें, क्या रॉब्स के ऊपर किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, रॉब्स गेट्स टेकन डाउन. द गोल्डन चाइल्ड FaZe के लिए. जो इंसान हर जगह ओपनिंग निकाल के दे रहा था, जो इंसान हर राउंड लॉकडाउन करके दे रहा था आपको, वो इंसान जब एलिमिनेट होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है. बैक ब्रो की रेन ट्विस्ट स्कैरगन सारे के सारे प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स सबके पास ही अभी राउंड निकाल पाया अपने आप. कैरिगन इतना ज़्यादा स्नीक अप करके तो फाइनली गेट ट्रेडेड दो. It's a long range fight. Yabi puts a really good one down and Carrigan यहाँ पे डाउन हो चुके हैं. पूरा A side कंट्रोल में आ चुका था, सिर्फ खिलाड़ी जंगल पे थे. And they were also not watching जब Carrigan ने पुश किया, but अभी के लिए स्लो डाउन हो चुका है. There is still chance. 3v4 situation है. Rain finds the first opening through shot. एक और पुश कर रहे हैं, but इस बार दोबारा Yabi with a headshot coming through. M4 AS के साथ and he puts another down. Twist finally उनको trade करेंगे. It's a 1v2 situation. मार्केट में जरूर खिलाड़ी है with an AWP. That's going to be none other than Kaden. दूसरे खिलाड़ी जो है Shush. He's coming in for a backstab. इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं रहेगा. Kaden is waiting for a push. C4 जो है गिरा हुआ है and Twist again he has to recover it. एक खिलाड़ी को देख चुके हैं. Shush is down now with all of the Kaden. Fake करने के लिए गए and Twist comes in with a clutch. Unbelievable stuff. Twist ने जिस तरीके से methodically वो राउंड निकाला, C4 नहीं उठाया था पहले, कोशिश कर रहे थे हर एक एंगल एक एक करके क्लियर करे. वो एक एक करके उन्होंने सारे प्लेयर्स को टेक डाउन किया. हीरोइक की थोड़ी सी गलती कहूंगा मैं, लेकिन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास फ्रॉम ट्विस्ट. जिस तरीके से उन्होंने खेला. हीरोइक सीवर प्लांट होने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन ट्विस्ट बॉय ओ बॉय, ये प्लेयर इसको कैसे रोकेंगे आपको? Somebody has to step up and especially Twist early rounds में नजरअंदाज हो चुके थे. And right now it was his time to shine. And ये देखिए Stavin, he connects a lot. 2 खिलाड़ी barely surviving, holding on to the rifles with just fingers. वैसे नजर आ रहे हैं 2 HP पे यहाँ पे Twist and 19 on Carrigan. अंडर पे बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके हैं. And you can see immediate FaZe ने regroup कर चुके towards T side, but याबी का जो मिड कंट्रोल है इट्स गोइंग टू बी टफ. अगर मिड पुश करते हैं वहां पे एक बैकअप भी है, तुरंत ट्रेड भी यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल सकता है, बट वापस ले जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग की कुछ अलग हो सकता है. रेन ही रीच द अंडर पुश कमिंग थ्रू, पनिश करेंगे खिलाड़ी को. दैट डज गिव एन अर्ली पिक. स्टैविन को फाइनली पनिश किया जाएगा फॉर द इनिशियल डैमेज. बट अभी के लिए आई थिंक इट इज स्टिल गुड टू से कि हीरोइक के पास कंट्रोल है. फिलहाल के लिए if FaZe manage to get 2 more rounds then it's over for Heroic. मैं तो ये कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से FaZe यहाँ पे बैकअप पे, even though players उनके पास 5 लाइव है, लेकिन HP उतनी ज़्यादा नहीं है. रेन एक और प्लेयर को टेक डाउन करते हैं वहाँ पे. टेसिस will have to go huge over here. और किल्स निकालने पड़ेंगे उनको, लेकिन एक प्लेयर नीचे कूदते हुए. गोलियां नहीं होगी इनके पास इतनी ज़्यादा. क्या रॉब्स उनके ऊपर किल निकाल पाएंगे? जी नहीं, टेसिस still stays alive. एक और किल निकालते हुए किस तरीके से ये जिंदा रह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन एब्सोल्यूट क्लच मोमेंट. टेसिस अपनी टीम के लिए निकालते हुए. रेन पीछे से बैकस्टैप करने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन टेसिस एक और किल निकालेंगे. व्हाट अ राउंड, व्हाट अ राउंड. पहले 9 and 19 2 खिलाड़ी हुए थे, रेन एंड कैरिगन, एंड वही 2 खिलाड़ी आखिर में बचते हुए नजर आए.
It did not work out as of now. Double digits पे आते हैं, I'm pretty sure ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम कि this can be heroic's map, जिस हिसाब से वो अभी के लिए खेल रहे हैं. But जैसे आपने बोला, if FaZe know to play their CT really well, side switch होते एक lockdown हो सकता है, and which can turn this advantage to a disadvantage. जी हाँ, bow down करना ही पड़ेगा. अभी के लिए जिस हिसाब से heroic खेल रही है, it has been just brilliant. And FaZe अभी के लिए जो rounds जीती है, it has just been by an individual star show. अगर वो individuality नहीं नजर आ रहा था, FaZe नहीं जीत रहे थे अपनी T side पे. A quick timeout coming in. I think जिस हिसाब से heroic के पास advantage है, वो बरकरार रखने चाहते हैं. That's what he wanted to call. जिसके वजह से ये timeout है, and they want to increase this double digits. अगर मौका मिले, they want to push it to none other than 11-12. We will see if they can. Well, 9-3 तो चल रहा है फिलहाल के लिए. FaZe के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, so कोशिश करेंगे एक फटाक से एक्सप्लोर करने की. जैसे ही मौका मिलेगा. लेकिन Shush once again he's in pristine position. लेकिन उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा पिक्चर्स. Almost getting the third one as well. लेकिन 2S coming in clutch. KDN as well. ये क्या shots hit कर रही है पूरी की पूरी team. Cracked right now. KDN with the last one as well for a closer. Heroic अपने double digits डालते हुए on the scoreboard. Everybody right now is just pop coming in from Heroic. मतलब कोई भी इनको रोक नहीं पा रहा है. FaZe there's this worry. मतलब वो साइड की तरफ एक्सेस लेने का इरादा बना रहे हैं सिर्फ, बट वहीं पे शट डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक सम सरप्राइजेस, सम फ्लैंक्स वर्क. उस फ्लैंक्स और सरप्राइजेस में सिर्फ उनको एक किल मिल रहा है, और उसके बाद तुरंत Heroic आर गेटिंग बैक टुगेदर. अभी के लिए वापस बाय FaZe की तरफ से इस बार एक पैलेस पुश नजर आ रहा है विद द C4 एज वेल. मॉली लाइनअप्स एज वेल एज स्मोक आ चुका है स्नाइपर नेस्ट की तरफ से, एंड पैलेस को स्मोक ऑफ किया जाएगा. This will give them some more time. Heroic can in the meantime clear out other corners. KDN जरूर hold off कर रहे हैं. Flash आएगा. Now he has the right idea. He sees the player but unable to react at the right time, जिसके वजह से side control मिल चुका है. I think C4 भी आसानी से plan कर लेंगे, but दूसरी ओर nice read of the T-Apps push coming through. Tessus को down किया जाएगा. Still not planted, Mamba. They're just waiting. अगर कोई quick pushes आता है, but KDN जैसे smoke disappear होते हैं, by the slit pixel. Twists को down करेंगे. He picks up another again, carrying it down. Not planting. उसका एक कहीं ना कहीं बड़ा भुगतान यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है. Shush picks up Brokey ropes. He's trying to control this with his teammate Rain. Palace से वापस लौटेंगे, but C4 जो है साइड पे गिर चुका है. Rain right now has connected control. अगर इसको चेक करेंगे, आई थिंक इट कैन बी अ फ्रीबी, क्योंकि साइड पे अभी भी एक खिलाड़ी है हीरोइक की तरफ से. मुझे नहीं लगता वहाँ पे पिक निकाले बिना वो प्लांट कर भी पाते, बिकॉज अगर स्मोक के थ्रू स्पैम करते तो फ्री किल मिल जाता. कनेक्टर कंट्रोल नहीं था उनके पास, ना जंगल कंट्रोल था. शॉट से भी स्पैम कर पाते थे, तो प्लांट करने की जगह नहीं थी उतनी उनके पास. अब सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला था कि यहाँ पे एक और पिक निकाल पाते. जी हाँ, एक और निकाला. ऑलमोस्ट गेटिंग द लास्ट वन एज वेल, लेकिन ड्रॉप्स. ओह माय गुडनेस, ऑलमोस्ट. या अभी मिस करने वाले थे इस चीज को. क्लोज राउंड, लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आपको Heroic को. FaZe ने साइड कंट्रोल लिया जरूर था, लेकिन पेशेंस दिखाया, किल्स निकाले, काफी क्रूशियल किल्स निकाले KDN ने वहाँ पे. आई बिलीव वाज अ 3K, एंड जो पहला किल था जहाँ पे C4 डाउन हो गया, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. And I think also smart decision making. या भी जैसे साइड क्लियर हो चुका था, वो पुश आउट करके he went up to Palace to make sure he clears it out, and that was an unpredictable position. आप हर एक जगह को क्लियर करते, but Palace read, you might be thinking कि इतना भी वो चेक करने के लिए कोई नहीं जाएगा, and that's the reason Heroic making such heroic moves itself. डबल डिजिट से आगे बढ़ रही है. FaZe lagging behind by a huge gap. 12-3 का अगर स्कोर लाइन आ जाता है, then I think it is going to be too tough, Mamba. I know. I mean, मैंने पहले मैप से जैसे देखा है, सेकेंड मैप में जैसे बोला है, like comeback can happen at any time. But I think अभी के लिए Heroic का जो momentum and confidence है, it's surpassed of FaZe doing anything. Yeah, bhai, what a smart move coming through. बहुत तेजी से सोच रहे थे कि कैटवॉक पुश करेंगे, but it did not happen. मिड का कंट्रोल अंडर से लेते हुए Shush puts Brokey down. It's just left to the last two players coming in. उनको सराउंड करके वापस दोबारा अंडर से आ रहे. Carrigan is good for that. But
क्या कंट्रोल मिलेगा? जी नहीं, तुरंत स्टेवन हैज रीपोजिशन्ड. It's a 1v4, a dream clutch यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा. ropes has been a phenomenal player throughout for FaZe, but क्या अब कुछ करके दिखा सकते हैं? Too many players, one pushing out from B main, दूसरे यहाँ पे नेस्ट के नजदीक है, and A का पूरा कंट्रोल लेते हुए एक CT साइड की तरफ and जंगल की तरफ. This is going to be too tough for him. They spread out, but again, इस spread out isolate kills अगर उठा सकते हैं ropes, there can be something for FaZe. There can be. Methodically एक एंगल क्लियर करने की कोशिश करे रॉप्स. यहाँ पे ट्रेड पोटेंशियल है जरूर, लेकिन केरियन फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाले अपनी ऑप लेके, लेकिन वो ए मेन देख रहे हैं फिलहाल के लिए. रॉप्स कैन यू फाइंड दैट पिक? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. लेकिन जंगल की तरफ स्टेवन ऑफ एंगल पे बैठे थे और वो नहीं मौका देने वाले थे उनको बिल्कुल भी कि वो पिक निकाल पाए. तो काफी अच्छा डिफेंस, काफी अच्छा सीटी साइड यहाँ पे हीरोइक की तरफ से, एंड बहुत खुश होंगे वो. जिस तरीके का स्कोर लाइन है उनके पास, इससे बेहतर स्कोर लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो. 12-3. अब देखिए पूरा फेज के जो स्क्वाड है पूरा दे वरीड राइट नाउ. मतलब जो भी करने के लिए ट्राई कर रहे थे, आउटस्मार्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, खुद दे वर फेसिंग दैट हीट कमिंग इन फ्रॉम नन अदर देन हीरोइक. एंड हीरोइक का जो यूटिल के तरफ स्पैम या काउंटर यूटिल भी था ना, इट वाज टू गुड. माम्बा कुछ नहीं कर पा रहे थे. आई मीन ये सरप्राइजिंग प्लांट उन्होंने सिक्योर किया, जैसे केडिन भी सरप्राइज थे कि कैसे किया उन्होंने. आई थिंक that's how their plans were. Their clutches were also a surprise. कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट वो एक प्लेयर became a star of that round, and वैसे वो एक राउंड लेते हुए नजर आए थे. That's the reason FaZe just have 3 rounds. एक बार ट्विस्ट ने कमाल करते हुए नजर आए. That's another one round that they got. I think ऐसे जब खेल रहे थे FaZe, that is the only rounds that they got. दूसरी और हीरोइक का अगर बात करेंगे, अब देखिए जब भी एक पुश आ रहा था, they were letting them have that side control. पुश होने के लिए मौका ढूंढ रहे थे, अपने आप के लिए टाइम बाई कर रहे थे, एंड साथ में पीक लेते हुए they had that trade potential, quickly holding it out. ये भी देखिए पहले शुश ने एक पिक निकाला, जैसे उनको कनेक्ट करते हुए खिलाड़ी पता चल गया, he got back down the stairs, waited for the player to push out from connector, and तुरंत उनको भी खत्म करते हुए नजर आया. Brilliant communication, brilliant exchanges coming through, brilliant hold out and buying of time coming in from Heroic is first half में. आपने एक चीज नोटिस करो, जितने भी राउंड निकाले थे फेज ने वहां पे, वाज मोर ऑफन हीरोइक मेकिंग अ मिस्टेक. जिस तरीके से ट्विस्ट ने भी वो क्लच निकाला था, ऑफ कोर्स मास्टर क्लास था, नो डाउट अबाउट दैट. वो गलतियों के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए जो स्किल होना चाहिए आपके पास, तो वो सारे के सारे प्लेयर्स के पास है. लेकिन ट्विस्ट का वो राउंड शानदार राउंड था, वो बेहतरीन तरीके से खेला था. लेकिन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, पेशेंस, जिस तरीके से हीरोइक ये चीज दिखा रही है, इज नो डाउट अबाउट दैट कि ये एक टॉप टियर टीम, हॉट फेवरेट्स टू विन द मेजर. अगर यहां से वो आगे बढ़ पाते हैं तो. एंड ट्विस्ट ने जिस तरीके से ये राउंड को अप्रोच किया था, शानदार था वो. One of another fake plant, and उसके बाद तुरंत रीड करना कि मार्केट की तरफ से खिलाड़ी आ सकता है, एंड इट वाज नेसेसरी. ट्विस्ट बहुत पीछे चल रहे थे, बट दूसरी ओर these weird early quick pushes coming in, जहाँ पे FaZe couldn't predict. मतलब हर एक राउंड में कुछ ना कुछ अलग नजर आ रहा था हीरोइक की तरफ से. मिड पुश अगर आ रहा था, आपने देखिए एक अंडर चले गए, दूसरे सीधा कैटवॉक की तरफ, शॉट की तरफ इरादा बना लिए. FaZe were not ready for that. उसके बाद तुरंत अगर वो ए का सोच रहे थे, टी एप्स की तरफ से बी मेन पुश करके बाहर निकल रहे थे खिलाड़ी. It's just brilliant timing and position जो हमें देखने के लिए मौका मिल रहा था हीरोइक की तरफ से. राइडर्स नाउ टाइम आ चुके हैं जहां पे हम सेकेंड हाफ जाएंगे, एंड FaZe नॉट जस्ट विद डिसअपॉइंटमेंट बट आल्सो विद अ ह्यूज डिसएडवांटेज शुरू करनी है. बट अगेन अगर हीरोइक अपने सिटी साइड पे इतना कमाल कर सकती है, होल्ड आउट कर सकती है मिराज पे, सेम कैन बी रिपीटेड फ्रॉम FaZe. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट डूएबल, बट कहीं ना कहीं उनको 4 राउंड ध्यान से खेलना पड़ेगा. अगर एक राउंड होके हीरोइक की तरफ चला गया, then this game is done for. This is where FaZe will say bye-bye, especially क्योंकि ये last CSGO major रहने वाला है. I'm pretty sure FaZe wants another major trophy. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. ड्रॉप्स देखिए कितना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, अंदर जाने की पूरी कोशिश दिखा है. डीप टेसिस एक्सपेक्टिंग दैट. ओह नो, टेसिस
ट्रेड भी नहीं निकाल पाए वहाँ पे स्टेवन। मेरे हिसाब से कमिट करना चाहिए था वहाँ पे उस फाइट के लिए, लेकिन यही चीज़, ये कॉन्फिडेंस, ये कॉकीनेस देखना चाहता हूँ मैं। ट्रिपल बॉक्स से पीछे खेले, लेकिन रेन वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि शुश ठीक नहीं कर रहे थे एप्स के थ्रू। जब इन्फॉर्मेशन थी, जब वो आपका प्लेयर पुश कर रहा है सैंडविच की तरफ से, यू नीड टू बैक हिम अप, लेकिन अभी राउंड इज फार फ्रॉम ओवर। देखना ये बनता है कि क्या रॉयक यहाँ से हार की जबड़ों से अपना राउंड वापस निकाल के लेके आ सकता है कि नहीं। ड्रॉप्स का पोजीशन आई डोंट थिंक वो चेक करेंगे, पता भी नहीं था। एंड 2 क्विक हेडशॉट्स कमिंग थ्रू। आखिरी खिलाड़ी बसेंगे शुश, ही इज कमिंग डाउन राइट एट मिड एंड होल्ड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। रेन पिस्टल बैटल गोज डाउन एंड द यूएस पिस्टन स्ट्रॉन्गर कमिंग थ्रू। एंड यहाँ पे फेज अपना पहले राउंड जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, जो स्ट्रीक जा चुका था हीरोइक के पास, अपने तरफ लेके आएंगे इस पिस्टल राउंड की शुरुआत से। दिस कैन बी द सिचुएशन जहाँ पे जो हमारे फेज की टीम है वो पूरी गेम को वापस लेके आ सकते हैं। बट आई थिंक रियली गुड प्ले कमिंग इन। जिस हिसाब से ऑफ बीट गेम प्ले हीरोइक दिखा रहे थे इस मैप में, पिस्टल राउंड से लेके आ रहे हैं एंड यू कैन सी द कॉन्फिडेंस इज रेनिंग बैक इन। जी हाँ, जिस तरीका पुश किया था फेज ने वहाँ पे पैलेस के अंदर, सॉरी ई पैलेस के अंदर, वो सराहनीय था एंड कॉन्फिडेंस दर्शाता। ड्रॉप्स जिस तरफ उनकी गोली चल रही है, सामने वाले का सर पा रही है। रेन अभी भी एग्रेसिव एंगल खेल रहे हैं, ब्रोकी भी काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं वहाँ पे। केरियन थोड़ा सा वो कमिट कर दिया वहाँ पे, अच्छे से पीक नहीं कर पाए थे। ड्रॉप्स M4A4 चला रहे हैं। डबल टैप्स, क्विक हेडशॉट्स, एक और यहाँ पे उनको पता है टी ऐप से बाहर आ सकता है। C4 जरूर गिर चुका है। क्विकली चेकिंग, टेक्स टेस्ट डाउन एज वेल एंड गोस फॉर अनदर। ropes in the entire round अपने नाम। That's what ropes also needs to do, अपने muscles को flex करना पड़ेगा, the gaming muscles। जी हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट कीजिए एंड ऑफ कोर्स जो मोमेंटम है वो बिल्डअप मत करने दीजिए सामने वाली टीम को। लेकिन ड्रॉप्स क्या वापस एग्रेशन दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंड करना चाहेंगे वो, लेकिन was that smoke? I think it was, I don't know, wait a second, I'm confused, unless वो मॉली, makes sense, वो शायद काउंटर, मॉली को काउंटर करने के लिए वहाँ पे स्मोक डाला गया था कि ताकि पुश कर पाए प्लेयर्स अपने आगे। स्टैवन इन द मीन टाइम अंडरपास में इंतजार कर रहे हैं। आप ये देखिए, हीरोइक एक ही तरफ स्मोक्स लाइनअप जरूर करेंगे, लेकिन केटीएन वाज गोइंग टुवर्ड्स बी अगेन, वाज गोइंग टुवर्ड्स मिड। C4 लेके अगर मिड की तरफ जा रहे, दैट इज अ क्वेश्चनेबल प्ले, बट अनलेस वो अच्छा स्मोक करने के लिए जा रहे, नेवर माइंड, स्मोक करने के लिए गए थे वो, एंड ही विल मेक हिज वे बैक टू ए। ऑल स्मोक्स लाइंड अप। पैलेस की तरफ से एक क्विक जंप डाउन एंट्री होगा, बट इसको काउंटर करने के लिए खिलाड़ी ऑलरेडी आ चुके हैं। रेन, ही हैज टू रेन डाउन सम बुलेट्स। पहला पिक मिल जाएगा, बट तुरंत जैसे स्ट्रेट करेंगे रोप्स विद अ क्विक स्ट्रेट एज वेल, बट बैक एंड फोर्थ चल रहा है खेल एंड फाइनली पिक्स अप द एडवांटेज। 3v2 कर चुके हैं। बाकी दो अकेले खिलाड़ी जो थे, कैरिगन एंड ट्विस्ट, जो बी पे होल्ड आउट कर रहे थे, और दे हैव टू रोटेट ऑल द वे एंड गेट बैक, बट ऑलरेडी जंगल में इंतजार कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी टू टफ फॉर कैरिगन, बट ही स्टिल मेक्स इट वर्क। बहुत कम एचपी पे रहने वाले, साथ में खेलना पड़ेगा, बट लुक एट द स्लो एंड स्टेडी अप्रोच कमिंग इन। धीरे से स्टेवन आ रहे हैं, ही इज क्लीन्ड आउट ऑल द कनेक्टर एंड उनको पता है कोई कनेक्टर की तरफ से नहीं आ रहा है। ही इज वेटिंग फॉर द जंगल पुश, बट दूसरी ओर ट्विस्ट, ही प्रॉप्स हिमसेल्फ एट टिकट। दूसरी ओर डेफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। दे ट्राई फॉर अ स्पैम ट्विस्ट विद अ कवर। आई थिंक दिस डेफ्यूज इज डन, एंड जी हां, व्हाट अ राउंड बाय फेज। सारे जगह को क्लियर किए करके कनेक्टर की तरफ आ चुके थे खिलाड़ी, बट ही डजंट पुश आउट अनफॉर्चुनेटली, जिसका फायदा उठाते हुए कैरिगन अपने टीममेट को कवर देने के लिए बोल देते हैं एंड द डेफ्यूज इज स्टक। जिस तरीके की पोस्ट प्लान पोजीशन में अटके थे वो काफी ज्यादा मुश्किल था उनके लिए C4 को डिफेंड करना है। एक एचपी में बचे थे वहां पे कैरिगन, तो छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी जो मार्जिन होती है, इस वजह से आपके राउंड जाते हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन ट्विस्ट को टेक डाउन करते हुए वहां पे केटीएन में भी जिंदा जरूर है। वेंट तोड़ देंगे, फ्लैश किया अंदर, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया और ये चीज की जरूरत थी। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम इन योर ओन हैंड्स।
फेज कंट्रोल करने की कोशिश करें यहाँ पे। फेज आराम से इंतजार करेगी। रॉप्स देखिए लॉक्ड इन, वैन के थ्रू किसी को भी नहीं आने देना चाहते हैं। बी की तरफ एक एग्जीक्यूट होने वाला है इस बार भी उनके पास। अच्छी एग्जीक्यूट भी नहीं है, खाली पॉप आउट करेंगे। 2 फ्लैशेस, एक मोलोटॉव है, ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है उनके पास। किस तरीके से एंट्री करते ये देखना ज़रूर बनता है। सारे के लिए एप्स की तरफ है। एंड दूसरी ओर के बात करेंगे शॉट की तरफ, लैडर रूम में अभी भी रुके हुए हैं। कैरिगन फाइंड्स द फर्स्ट, इज लुकिंग फॉर द सेकंड, बट टेसिस उनको जरूर गिरा देंगे। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्लांट। केरन जरूर इंतजार कर रहा है, अगर कोई भी कैटवॉक की तरफ से शॉट आएंगे ही विल बी एबल टू पिक देम ऑफ, बट उसका कॉल आउट ऑलरेडी दे चुका है। इसी की वजह से केरन इवन दो ही इज गार्डिंग इट, लोग उसकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे। दे आर टेकिंग द अदर रोड, जहां पे अंडर से जाके दे गेटिंग टुवर्ड्स एप्स। और यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। दे डू नॉट इवन हैव एन इंटेंशन टू गो फॉर अ रीटेक। अपने वेपन्स बचाना चाहते हैं अभी के लिए। रॉब्स डेड ट्राई कि अगर कोई चीकी पिक्स मिल सकता है, ही डिड लिटिल सी द पिक्सेल्स एंड वहां पे डैमेज दिया था, बट दैट्स ऑल अबाउट इट। यहाँ पे जा चुकी है वॉपसी फेस टू सेव देमसेल्व्स ऑल दीज राइफल्स दैट दे हैव, एंड हेरोइक विल बी देयर विद देयर 13th. Heroic काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे वो, लेकिन फाइनली वो राउंड निकाल के जाएंगे अपने आप के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल राउंड, लेकिन फेज इस तरीके से खेल रही है, मुझे नहीं लगता ये गेम बिल्कुल नजदीक है खत्म होने के। बिकॉज हमने सीटी साइड देखा था हेरोइक का कितना ज्यादा डोमिनेंट था, और यही सेम चीज मैं फेज से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। पहला किल तो इसके ऊपर जो निकाला था बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेज ये दूसरी बार गलती होने देगी। Kerrigan with a weaker buy. Brokey, I think बहुत पीछे चल चुके हैं। I mean, जिस हिसाब से हमने उनको पिछले मैप में देखा था, अभी सिर्फ उनको 7 किल्स पे देख पा रहे हैं। So I think he needs to start popping off. Kerrigan ट्रक की तरफ जंप करके इंफॉर्मेशन ले लेंगे। He spots players. दूसरी ओर अभी भी they're still making those lineups ready. ट्विस्ट तैयार है, चेक कर रहे हैं शॉट को। दूसरी ओर नेस्ट को गार्ड करते हुए अपने टीममेट के साथ, एंड मार्केट को भी होल्ड आउट कर रहे हैं। कैरिगन स्टिल इन दैट पोजीशन। ब्रोकी फाइंड्स द फर्स्ट, यही हम बात कर रहे थे, ट्रक ड्रॉप अप करेंगे कैरिगन। ही नीड्स टू फाइंड वन, बट ही स्टक इन नो मैंस लैंड। अभी उसको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। यहाँ उनके साथ ट्विस्ट भी गिर जाएंगे, बट रोप ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक इन कंट्रोल। रेन आल्सो ट्राइंग टू होल्ड इट आउट, बट ब्रोकी वहां पे गिर जाएंगे, एंड नाउ इट्स ऑल अप टू रेन हु डिड फाइंड वन। इट्स अ 1v2 सिचुएशन, होल्ड आउट कर रहे थे एंगल। स्टाइवन जैसे ही विंडो पीक आया उनको डाउन किया जाएगा, and that's going to be another round here for Heroic. They're inching closer to victory, Mamba. धीरे धीरे करके, one round at a time. That is all it's going to take. लेकिन FaZe उन्होंने कम बैक किया है पहले, उन्होंने उनको होल्ड किया है, एक और बार कर सकते हैं। चौथा टाइम आउट यूज करते हुए 4 vs 4। FaZe need to show up right now. जो FaZe नावी के सामने आई थी वही FaZe को अभी आना होगा और रोकना पड़ेगा हेरोइक को यहाँ पे, लेकिन हेरोइक रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोकी आई बिलीव विल हैव टू स्टेप अप एज वेल। वो शॉट्स उनको हिट करने पड़ेंगे, बहुत क्रूशियल शॉट्स थे। उन्हीं की ऑफ उठा के स्टैंड ने वहाँ पे वो पिक निकाला। फेज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए। फर्स्ट पिक मिल चुका था उनको, उसके बाद the immediate flood into side जो Heroic ने करके दिखाया था, they were unable to stop it. Twist गिर गए, जो शॉट होल्ड आउट कर रहे थे। उसके बाद रोप जरूर मदद करने के लिए आए, then he was also immediately traded. Brokey अभी भी अपने AW के साथ थे, he also gets picked up. अभी के लिए Twist, he'll be with his gun. Let's see if he can make some magic happen. दूसरी ओर really good buys coming in from Heroic. सिर्फ याबी के पास देखने के लिए मौका मिल रहा, not too sure क्या करना चाहते। दूसरी ओर Cadian AWP के साथ रहने वाले। They're making a mid approach इस बार। कनेक्टर को क्लोज आउट किया जाएगा, and just try to rush mid and then go to short. जी हाँ, वही इरादा नजर आ रहा है, and they're just trying to isolate. Yes. Carrigan. Yeah, that was questionable. लेकिन यहाँ भी वो नहीं मिस करते मैक 10 के साथ उस रेंज पे। I don't think possible भी उस रेंज पे मैक 10 के साथ मिस करना, but regardless एक बहुत क्रूशियल किल निकालते हुए, बहुत क्रूशियल ओपनिंग निकालते हुए, इवन तो उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन कनेक्टर से एक ही तरफ रॉब्स हैज अ फमास जंप, आई थिंक स्क्रॉल व्हील जंप था वो।
Oh my goodness! That is unfortunate. That is so unfortunate. Wow. It feels like Mamba ye heroically is map mein. FaZe was not even a challenge. I mean, heroic का जो map win percentage है वो काफी ज़्यादा अच्छा था मिराज के ऊपर. There's no doubt about that. उसमें और थोड़े percentages add कर दीजिएगा, लेकिन वहाँ पे Robs, I don't think he meant to jump. वो scroll wheel की वजह से शायद jump हुआ है. But वो मैच के बाद पता चल जाएगा. ये देखिए सीधा aggression दिखाते हुए, लेकिन शुश पहला पिक जरूर निकाला. Robs करेगा. Unfortunate. पिलर के थ्रू गोली नहीं लग सकती, and ये explosion बहुत ज़्यादा deadly साबित हो सकता है, लेकिन Stan barely clinging on to his life. Broky needs to go big. Broky needs to step up. क्या वो पिक निकालता है? Carrigan को देख के spam करते हुए स्पोर्ट्स के अंदर. Oh, Broky, what a shot. 1 versus 2. Carrigan. पूरी की पूरी टीम की जो उम्मीद है इनके कंधों पे टिकी हुई है. C4 प्लान नहीं हुआ अभी तक. बैक सैप क्लियर करना पड़ेगा. एक एंगल पे कमिट करना पड़ेगा. MP9 है इनके पास. CT Molotov ऑफ कर दी गई है. क्या वो पहुंच पाएंगे? क्या उनके पास गन होगी? सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है. इस रेंज पे MP9 लेके बहुत मुश्किल है. सामने वाली टीम के पास ऑफ भी है. CT कंट्रोल लेते हुए अब उनके पास इंफॉर्मेशन होने वाली कि प्लेयर कहाँ पे, लेकिन बी की तरफ जाते हुए. Wait a minute, does Carrigan know this? Does Carrigan realize this? I think Carrigan realizes this. क्रॉस पकड़ सकते हो, क्रॉसिंग पकड़ सकते हैं. बहुत ही ज्यादा क्रूशियल राउंड. Carrigan, oh my goodness, gets one. Can he find the second as well? Yes, 49 HP के साथ इंतजार करते हुए Carrigan needs to pull this off. He actually needs to pull this off, but नहीं. Tessis खत्म करते हुए. Heroic, ladies and gentlemen, are your first semi-finalists. बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच था. पहले दो मैप में एटलीस्ट मिराज में Heroic ने डोमिनेट किया. Carrigan so close from bringing it back. उदास जरूर होंगे, लेकिन केडियन का चेहरा देखिए. ऐसा लगता है इस मैच के बाद उनकी उम्र 5 साल बढ़ चुकी है. Yeah, केडियन बहुत खुश नजर आ रहे हैं. ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उन्होंने इतना बड़ा लीड बना चुके थे, so they knew they had this game under control. थोड़ा स्मार्ट खेलना था, and I think they did show that. Quick trades coming in, positive trades जो निकालना चाहिए था वो भी निकाल के दिखा रहे थे, and it just worked out coming in for none other than Heroic. Close out करके दिखा देंगे with a scoreline of 2-1. FaZe a worthy showdown coming through. Champion stage तक आए जरूर last major पे, but I think this is where it ends for FaZe अभी के लिए. On the other end, Heroic, they will be ecstatic. उनके fans देखे इतने खुश हैं. Unbelievable showdown इस बार देखने के लिए मौका मिला. Especially जैसे पहले राउंड से देख पा रहे coming in from Kadian. As their captain, as their leader, leading from the front, हर वक्त करके दिखा रहे हैं. I think ये fans भी जो लैंड पे आए ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे. Looking at Heroic अपने पहले मैच में जहाँ पे विटनेस करने के लिए मौका मिला, एंड पहले ही मैच में उन्होंने जीत के अपने आप को पहले सेमीफाइनलिस्ट बना चुके हैं. And Carrigan, as always, you guys put up one hell of a fight. You look at Nuke and an almost bounce back Overpass, which has been difficult for you this major. Then you get the win. At that point, did you feel like, okay, we can still do it, we can grab Mirage? I mean, it has been like this for the whole tournament the last month. Like every time, have a bad start, a good start, and we don't play our A game right now, and we're just fighting so hard, giving everything we can, heart and passion. I think you can see that even when it's looking really bad and we're not doing the right things. But Heroic is a great team, and obviously as a caller, it's hard to play against them and try to find the solution. But I'm just proud of the guys today. Like, give a hands for them. They have fighted so hard to come back in level and perform here on the stage. And it's not easy at all, getting to this stage, playing to this level over and over again. For you guys, what do you think has been missing? Why the games have been so close? Why it's been so tough? You got a lot of love out there still, man, no matter what. I mean, I think after we won the Grand Slam, we haven't found the same confidence and the same game. And we are just not performing right now, but I only think I'm proud of the mentality that we never gave up at any moment in any situation we were in. But yeah, they just play better than us, and sometimes you just have to lose and learn from that. You definitely do, and one man that learns is definitely you for sure. I want to talk a bit about your whole career within CSGO, right? Because this is the last major, it's a special one.
We look at where you started in Jönköping. We look at Boston, the almost Antwerp, a magic moment, an amazing moment. What has CSGO been for you? What's the emotions like right now? I mean, it's all my life. It's the highs, the lows. You fight. I think I've learned so much about life through the game, meeting a lot of great friends, meeting fantastic fans, and playing in front of an arena like this is just dream come true. And obviously, you lose sometimes and you have to learn, and I think that goes for life. And CSGO has been in my life for 2 decades now, and I always want to come here, and just seeing this is just every day a dream come true. And I just want to say thanks to all the fans that make this life possible for me. I appreciate it. And Kerrigan, next goal though, a CS2 major? Obviously, I want to be one of the few players in the world that won Tier 1 trophy in 3 different games, so I'm not going anywhere. Plan is to resign and grind a lot for the next major. You make us very happy saying that. You're a legend. Well done, mate. Sadly, we're saying goodbye to FaZe Clan. But guys, one more time, let me hear it for Kerrigan and FaZe Clan! Woo! Straight into another. Hello, Stone. From one side to another, we're quickly changing the pace. And when we talk about changing the pace, you, in that first map, you came out looking like absolute fire. When we're doing the intro for you, you were getting the boos. Now, Heroic's very much used to these boos coming in there. But has this become fuel for you guys now? Yeah, I would say so. I mean, we're used to it. It's fine. Come on, guys, they won! It's a part of the game. It's a part of the game. I guess they are just mad because we beat Vitality in so many finals previously and in other games, but it's okay. Woo, just straight going for their juggler with that one. But we got to say, right, looking at that Nuke game, you did manage to win it against them. But we keep calling FaZe the comeback kings. Do you start to worry? Do you start to actually think, oh God, it's happening to us now? I mean, at some points you can definitely feel that they build their way back into the game, especially on the Nuke on CT as well. And as you say, they are just known as the comeback kings, and yeah, that's also just so impressive that we can close it out on Nuke as well and just win the series in this fashion. So I'm just really happy. And then in the reset you had between Overpass going to Mirage, you came in and rolled all over him. At that point at 12-3, do you think, okay, we have done it, or do you really have to wait till 16 against FaZe? I mean, we're just really good at resetting in general, and we know Mirage is a really strong map for us, and we got to start CT, and we're always happy with that, so we were just feeling really confident. Now, you've been here before, right? You managed that second place at Rio. What does it feel like now? What does this team feel like now, the progress and everything you've been through? Do you feel like you're ready to go all the way? We're definitely ready to go all the way. I can feel the emotions are different than previous, it's the last major, and it's just something special, so yeah. All right, well, Stown, thank you very much, man. We'll see you later on. Congratulations so far. The first step has been completed for Heroic and Stown. You can love them or you can hate them, but you should always make some noise and applause. Heroic and Stown! That was exceptional stuff. We don't say his name enough, even though we say his name so frequently, Pim. I feel like there's a great case to be made that right now Shoes could be the best role player in the world, right? We highlight the likes of Perfecto in that role. Shoes up there now as well. He's been so consistent. He's been so good for such a long time. And as you said, Maui, this was a picture-perfect game coming out of Shoes. Look at the kill distribution just for the side of Heroic on this one, right? We're talking about the impact that Shush had on the server as well. But this is why we say time and time again, Heroic are such a well-synergized machine. And that was my whole point getting into this game. The lowest rated player on Heroic, statistically speaking, was Kadian with a 105 rating, whereas the highest rated was Stown with a 1.19. Everyone else is in between, and we see that on the scoreboard. There is no weakling within Heroic right now. It's so exceptional to watch a team that can perform like that. That really, every single time they're going for a play, it's just that everyone knows their role. They're not going to create a losing condition rounds, and that's something where I think that came back to bite FaZe in some ways. When one piece falls apart, when one
one guy doesn't recognize there's a window of opportunity for the opponents to get back in the round, Heroic are always pouncing. They were so proactive once again. The amount of times they caught FaZe off guard as they were trying to find map control, exceptional stuff. It's why Heroic look like the best team, and the individuals for FaZe, they couldn't rise above that teamwork on the other side. We literally saw that happening in the first half, right? Twist pulls off an unholy clutch, but then Tezos, the round after, he puts the rabbit back in the hat and completely silences them. Yeah, they could never get going, unfortunately, FaZe Clan. I think they were outmatched, tactically speaking, as a team. There was too many weak links as well, and we said it coming into it, Mirage, right? It was two different teams, two different ways to win that game. For Heroic, it was all about the synergy, all about the team play, whereas for FaZe, it had to be the individual carrying out the ship, and this time around, they didn't have it in them. I think we have to break down the final nail in the coffin round, I guess, for the side of FaZe Clan. That is going to be round number 20. Yeah, we'll take a look at that one here. This is what Pimp was setting up in the pregame. The fact that Heroic have some of, if not the best B execs in the world. There was a stack from FaZe towards this side of the map. They had at least 3 players here, maybe might have been even 4, and they just couldn't get it done. The players missed the shots, the flashes were too good, and the trades. Look at how Heroic just swarm that bomb site. It's like sharks smelling blood in the water. They're all there in just a moment's time, and if you miss a single bullet, Brokey, you're dead. Simple as it is, right? We talked about it. Kerrigan, he was going to be highlighted as a potential weak link on that B bomb side, even though they did stack 3 players over there. Brokey was in with the AWP. We saw Heroic still find success. I think isolated, looking at this matchup on Mirage, there was no doubt whatsoever that Heroic were the better team. Yeah. But over the entire series, in a best of 3, we almost saw FaZe come back on Nuke. We saw them win quite convincingly on Overpass. We had a good game. Unfortunately, they couldn't live up to the standard we saw in the first 2 maps on Mirage. I love that we got to get some very mature words coming out of Kerrigan. Unfortunately being defeated here at the hands of Heroic. The fact that we talk about his tenure, his experience, his longevity throughout Counter-Strike. Pimp, you even playing alongside him in the first ever CSGO major. It is crazy to see him kind of surviving and thriving, arguably, in the later stages of his career. Listen, it's never been easy for Kerrigan. I had the honor a couple of times of actually kicking him for my teams back in the early days because he didn't have the level in order to be good enough. Look at where he is today. Look at what he's achieved. Look at what he's done with FaZe Clan, with Mouse, with all the different teams that he's been in. Even Astralis back in the early days. Kerrigan is in the contention for one of the all-time greats in terms of being an in-game leader. And as I said, he never had it easy. In the beginning, he was getting kicked by me. That speaks volumes to how bad it was for him for that matter. But he had a career that only people can dream of. Yeah, 19 S-tier LAN trophies for Kerrigan, a single major captured, a Grand Slam captured. It's been a beautiful career for Kerrigan in CSGO, but I'm glad to hear that he's going to keep it up for CSGO. Yeah. He wants to get back on that contract, re-sign, and then hopefully show us more of that magic, show us more of that clutch from him and the rest of FaZe. Because it's crazy just to think about, 1 year ago today, lifting the trophy in Antwerp, an achievement that he fought so hard, built a team around him, a team of superstars. It was amazing to see them have that achievement. Unfortunately, not able to replicate that here. You know what I respect the most is what Kerrigan said on the stage as well. I think it's obvious to everyone that FaZe didn't play great Counter-Strike at this tournament. We saw them struggle in the qualifier, we saw them struggle at the Challenger and the Legends, we saw them struggle throughout the entire tournament, yet they still went in here and gave us a good show. That was great to see for FaZe. They're playing on their B, maybe their C level right now, yet they still gave us a good showing, and for that, I commend respect. Well, we can take a look at the Champions bracket to see exactly how the land is laying after Heroic take that initial W. Only the first quarterfinal here in Paris, and we have so much more action coming your way, and it is Heroic to lock in that semi-final spot. Maui, we talk about it time and time again, the fact that Heroic, they're a team that we can rely on to make it deep into tournaments. Grand Finals is where it gets a little bit shaky though, right? Yes, that is where the nerves really boil up for Heroic. That's where you can see the stress on their faces, where you see those dips in performances. But thankfully for Heroic, they showed why they are such a high-quality team. The fact that everybody contributed on map number 3. It wasn't one shining star. They just followed their game plan. They worked together, and that synergy lifted them above the stars of FaZe. Well, if you thought it was getting loud in here already, we are about to raise the roof because, ladies and gentlemen, it is time for the hometown heroes to be gracing the stage. It's Vitality taking on Into the Breach after this. Where do you begin with Vitality? Dupree, Magisk, Zonic, they are in the history books. Cyber is already a legend of the game. He's so good. You are arguably one of the best players in the world. Because for me, I'm just much able. It would be a crime to not have him in Paris alongside Apeks, one of the most tenured French players that Counter-Strike has to offer. You need to give everything all the time.
all the time, every fucking day, every fucking game. Everything you have prepared for was pretty much out of play. Of course there's going to be pressure. I don't like to be bored during the game, so I want action. I'm fucking ready. If you win here, it's going to be life-changing. The Golden Hornets have arrived in their drones, and you know exactly what that means. It is time for the hometown heroes of Vitality to make their arena debut. After injecting deadly venom into their opponents throughout the duration of the Legend stage, not dropping a single series thus far, it looks like everything is coming together for the Hive at the perfect time. Of course, we have to add Matthew up here on the desk to be breaking this one down. And shamelessly, you brought a little bit of a jersey with you, haven't you, Matthew? No bias intended here. Super shameless. I'm totally shameless. And I really appreciate Blast making me the honor, of course, of having a biased analyst at the desk, because I'll be representing without any problem. You can tweet at me if you have any issue. We can have a conversation. They bought my heart. They already had it. We are so ready. All it took was a jersey. Ready. All it took was a jersey. You're so cheap, man. I thought you were expensive. The love of the game, Jacob. The love of the game. Love of the team, apparently. And a jersey. And we can feel the love oozing so much already in this arena. Vitality fans obviously showing up for the first series. That was heroic, taking on FaZe Clan. But now, I can just feel the energy in here, man. Matthew, you've been down in the crowd, experiencing, soaking up the atmosphere, right? Yeah, it's coming in now already. I hope people can get a little bit of a glimpse, at least on the audio, because the fans are already warming up. They're going in with the clap, clap, clap. This is such an honor to be a player and to experience that feeling, having a whole crowd with you. They came here for Vitality. They want to see Vitality play. But I'm sure we'll touch on it. This comes with a level of pressure. Now, you fail, they're right here. You got them to answer to. Matthew, I do have a little bit of a bone to pick with you, unfortunately. Oh, you know, we had a conversation coming into this major, and I was like, hey, first major in France, in Paris, and the first time we see more UK players than French players. You said, come back to me at the playoffs and tell me then. What about today, Mania? You got me on that one. I'll take the L, humbly. I did not expect Into the Breach to be in the quarterfinal. Not that they've had a, I guess, unlawful run. It's pretty legit. You see the teams they've beaten, FaZe, Ensa here. I mean, what can you take from them? I know in Counter-Strike, we want to have our best teams. We want to have the best namesakes. We want to have G2, ENS, and all of these Furia in playoffs.
the players, they don't care about our stories. Whoever plays the best actually get to be in the arena and Into the Breach deserve their spot here in the Accor Arena. Yeah, may not be the most familiar faces, may not be the players that you'd expect walking into the playoff, but I fully agree with that sentiment, Matthew. The way they've been playing in the tournament so far, the way they've conducted themselves on the server and off the server for that matter, have been pure class to me. They came in as a massive underdog. They came in with no one believing in them. They came in as the 0-3 favorite for the pick'ems, and they destroyed everyone's pick'ems in that regard. The team you're looking at right now have played some beautiful Counter-Strike. Yes, there may be certain limitations. Yes, they may not be a favorite to walk through right here against a team like Vitality, but they surely deserve to be here. It's such a story of vindication and just tenacity. Yes. Tenacity. Two of these players we have, Volt and Cypher, are a little bit less, I guess, familiar with these players. I'm starting to get to know them, meeting or making their acquaintances. But a player like Thomas has been playing in Envious for a while. And then a player like Rollen, who was in DreamHack Winter 2014 with ESC, ESA1 Codon 2015 rather, with eBeetle, Vexed as well. Crucial, who was kind of swimming in the waters of the unknown of Counter-Strike for a while, never letting go. These players also have kept their love of the game in spite of the success that they now have. Can you maybe give me a little bit of a TLDR then for maybe some of the viewers at home who aren't too familiar with Into the Breach and maybe what they'll be deploying on the server? Maybe some of those people that haven't been tuning in for the Legend stage. See, that's one of the biggest question marks to me, right? Can they continue to play the same style that they played, you know, in the group stage, in a studio environment, on a stage like this? Then I'll start to believe in Into the Breach, because they're very aggressive, very proactive. We're talking about a team that has a plan from the beginning of every single round. Not a lot of mid-round decisioning, not a lot of mid-round calling in that regard. More so a team that just relies on the individuals, and the individuals have been delivering so far. But one thing is doing it in a studio environment, another thing is in front of a crowd like this. Well, you mentioned the key individuals. Crucial, undoubtedly a key piece of the puzzle for Into the Breach. So let's throw it on over to the Mahone zone to break down a play. That's right, Crucial has been a huge piece for IGB, and one of the reasons why is his smart positioning with the ops. So let's take a look at this round here. It was against FaZe, and it first starts off here. 5v4 situation, take a look at the way he finds his first kill. He comes here towards mid, throws a Molotov here towards Boiler. Now when you throw this Molotov towards Boiler, what it does is it cuts off two main important choke points at mid. Here, and as well as here. When you throw this Molotov, you only need to focus on this one choke point here. What that allows Crucial to do is to now take an aggressive angle without having to worry about anybody towards that Boiler side. That's how you're able to catch Rain here. Now more in the middle of the round, what we're going to see, he's towards the site, FaZe, they're coming in towards short. Now as this push comes in, take a look at the way Crucial positions himself. First thing you'll see here is that he kind of tucks himself into the pillar. He tucks himself into the pillar as this push comes in. And the reason why he does that is to dodge all of the common flashes that always come through whenever players come up towards short. By tucking himself into the pillar, he's able to dodge this first flash. That allows him to find this kill onto Kerrigan. Next, the re-peek right here. He's more than comfortable re-peeking this because in this position behind the pillar, there's two places you can peek from. You can peek from either the left side or the right side. This allows him this mobility where he can catch players off guard. By doing so, he's more than happy to re-peek Brokey right in this moment. That's how he finds that kill. And then lastly, he takes this wide angle onto Rops because he understands that he has a player here towards this apartment side. Perfect crossfire to eliminate this last player. And as soon as Rops overextends, that's when Crucial finds his kill. So that's really the ability of Crucial on the op. It's his ability to kind of visualize these situations and put himself in very smart positions so he can always capitalize on the opponents coming out. I love that breakdown from Mahone. And Matthew, Crucial has been a player that has continued to impress us from the side of Into the Breach time and time again. Yeah, the numbers are clear. They're his best. They are the best CT player rather of that lineup as well. In terms of entry rating, he's up there. But I think Jacob was right on the money when he said, can they do it here? Because I'm going to tell you, Freya, I've played once in my life against a full crowd. It was in 2014. I played against VP in Poland. And to this day, I haven't forgotten what it is to have an entire arena shout in my face when I'm getting killed with a Glock in my hand. And I am not shitting you. This is an incredibly hard feeling. It's very tough to get through that. You feel like you have the entire world against you, and any round you lose is just times 20. And that is my one question. I know they've played with no stress and full of energy.
can they actually withstand that arena right here? It comes down to the character. Some people will crumble under that pressure. Some people will use it as fuel. I think Heroic is a great example of a team that has been playing, you know, backs against the wall. Wherever they go in the world, they always get booed, and they use that as a source of fuel. They use it as energy. They use it to motivate themselves. I don't think Into the Breach is in the same situation as Heroic. It's a surprise they're even here, right? So for me, I think Thomas said it pretty well when we interviewed him after they qualified for the playoff. He said, we're just happy to be there. We just want to go in and have a good experience. Question remains is it going to be a good experience in front of this crowd? Well, that is just one thing that is unfortunately stacked against Into the Breach. Another is the experience and appearances at majors, right? We're talking about a team who has literally never been here before against a player who has been at every single damn one. I know the contrast could not be any starker. That is the situation. You could argue Vitality is the most veteran team out there when it comes to major. Of course, we have so many different storylines that we get to choose. It's like being in an ice cream shop and they have all the ice creams you like, and you're like, what am I going to go for? Like a little bit of vanilla, a bit of mocha. That's the situation with Vitality. Hey, should we talk about dupreeh and how he can win 5 times the major and be the only one? Should we talk about Magisk and his 3 majors he's won? Should we talk about Apeks and the major he won in 2014? Which one ice cream do you want? Because they have all the ice creams. You've been inside that store and we haven't mentioned the best flavor yet, which is Saibu, right? So I think that's a perfect analogy for that. You're right. Whether that being dupreeh as the only player in the world who's attended every single major, about to make it 15 playoff as well. Apeks, who's up there as well with 17 appearances as well. There's so much tenacity, there's so much experience within this lineup, and there's so much expectations for them coming into this. I'm loving some of these arrival images just from Vitality as well, because it's almost a crime that we haven't seen Zaiwu making more playoffs appearances at majors, and he has literally never made it deeper than this very moment, a quarterfinal. I know, that's a fact, and I struggle to get at peace with that idea, but it is a fact that Zaiwu has only 2 quarterfinals to his pedigree right now. He's only played 5 maps ever on a stage of a major, and he's only won 1 of these 5. He's lost to Evangar. He's got his ass handed to him by Simple in Stockholm, which, by the way, no one could play Simple at the time. And then there was this unfortunate period of Counter-Strike between 19 and 21 where we weren't gifted any major. So his resume has this gigantic hole in it for a player that is the best in the world currently, but there is a mismatch, and he is supposed to correct history today. This has to be his first semi-final. He has to create a new line in his CV. There's only so much one player can do, and I think that's been the storyline for me when it comes to Saibu, because he's been absolutely fantastic throughout his entire career. Let's not forget he broke out in his debut year and became the best player in the world, something nobody has ever done before. So the fact of the matter is that Saibu haven't had the team to back him up for these majors. Yes, he was handed his ass on a plate against Simple in Stockholm, but did the team really, were they really ready to help him? I didn't feel that was the case. Now coming in this time around, I feel finally Vitality have a team that can back up Saibu, so we can have the conversation one more whether or not he's ready to follow in the steps of Simple. It's an incredibly different story, particularly because Spinks finally stepping up and being that second star that Vitality have needed for so damn long. I know, because I feel like we had been lied to. You know, I feel like I had let a very good salesman talk me into buying some timeshare in a weird house somewhere in the islands. That's how I felt about Spinks at the very beginning of Vitality. It took so long for him to activate, so long for him to find his rhythm. And I don't know if these were just the magic words of Apeks saying, hey, listen, Spinks, you got to do it. But the matter of the fact is, in 2023, we are seeing a different Spinks who is finally fulfilling what he is supposed to be. The second prong, the second 1-2 punch with Zaiwu. He's got a high rating here, 1.24 as well. And he has actually been in the semi-final of the major. Listen, I feel the reason why we've been focusing so much on Spinks is the fact that Vitality as a team haven't worked out. Because I felt like it was the same with Yabi. Yabi came into Heroic, and it took him a good 9, 10, 12 months in order to get fully integrated into the lineup. Fair enough. And we see Yabi now being a superstar within Heroic. I think the same is happening right here with Spinks. It took him a little longer than we would have liked to, but problem was that we were focusing so much on Spinks because Vitality as a team weren't delivering, while Heroic with Yabi struggling a little bit were delivering. So I think it's natural what we're seeing right now, and I expect more and I expect better from Spinks. Well, from the young star to the most experienced player undoubtedly on the side of Vitality. Let's check in with dupreeh, courtesy of Dinko. Well, here with dupreeh ahead of their opening game here at the playoffs versus Into the Breach. You've lifted 4 trophies on the major stages in CSGO, and now today you begin the fight for that 5th. Now, going out onto that stage, Vitality have failed to make it past the quarterfinals as an organization. They brought you 3 Danes in to change that. They brought you in to win a major. Do you feel like you're in form, in shape now to actually do what you've been brought here to do? Of course. I think it's if it's not meant to be here, then I don't think it's ever meant to be. So for us coming here and
having to play in front of the home crowd, getting to play the last major playoff in Counter-Strike Global Offensive is gonna be massive. So I'm just looking very much forward to it. I know the team is looking forward to it, and I'm definitely also hope that the fans will look forward to it. Now there is a story of underdogs throughout this major. Into the Breach, one of the biggest ones we've had so far in this major circuit. Coming into today, they even admit themselves they are underdogs in this matchup. But that hasn't really mattered as much in this major. There's been some crazy upsets. What's the mentality for you guys coming into a game like this? I think the most important thing coming into this game is definite that we're not looking at papers anymore. I think you can scratch the papers for this major. You've seen multiple upsets. Some of the very big organizations haven't made the cut here to the playoffs, and you've seen there's probably 4 teams here that people didn't expect to see. And I think we're just like seeing a small generation shift. You know, we see a lot of all the teams that are working hard for it, all the teams that's grinding a lot. They also reap the rewards, and I think Into the Breach is one of the clear cases for that. So they're a team that we have to look out for. I mean, yes, of course, on the paper they might not be as experienced as we are, but again, scratch the papers. We're here to fight. Now we're looking at you as a player that's won the most majors alongside your teammates at Astralis. So I have a question. It's, what does it take to win a major? It's a different tournament, it's a different level. What does it take to win one of these? I think it takes a lot to win a major. One thing is that it requires skill, it requires determination, and it requires dedication towards the game. I'd also say it requires a little bit of luck. Like, you need to be a little bit lucky. You need to obviously make the right decision. So combine everything. I think you have a great shot, but you also need to have a lot of things going your way. I mean, everyone has to be on the same page. You need to do a lot of work coming into the majors. You can't just show up maybe 1 month before and say, okay, let's start working for the major. I think it's a process in the works for a long, long time. And I think we started the work back in January, and probably even a little bit before, because we knew it was going to be in Paris and it was going to be important for us. So it takes a lot, but going there, I think it's a possibility for pretty much everyone if they believe they can do it. Now we look at today being a very emotional day. A lot of people reflecting on the last 10 years of CSGO and what it's done for them and what it means for them. You've attended every single major. Tell me some of your thoughts when you think back at the 10 years and what you've achieved so far. I've had a super long career. I've achieved a lot. I'm super proud of what I've achieved. I've won 4 majors, being the only one being at 19 majors, making, was it like 15 playoffs? I think it's my 15th playoff out of 19. Changing teams and finding success in another team has, or at least for now, I mean, has been weird for me, because, you know, I was just used to being back in Astralis, now being in Vitality, getting to play for a home crowd like here in France is going to be amazing. And of course, I'm just super proud of everything. It's been a long, long journey. I'm just super excited to go and finish this off with a boom. We do get to see the picks and bans rolling on in, and we do get to see Into the Breach going with Vertigo. That's a bit of a risky game. It could be a gift for Vitality, honestly. I think we just need to address Vitality's map pool just for a little bit, because every single great team, every single great trophies usually come off the back of a strong map pool. And Vitality have finally reached that point where they have 3 very tactical map that they can rely on. We're talking about the Nuke, the Anubis, and the Vertigo with crazy high win rate over the last 3 months. In fact, over 80%. Now, ITB pick into Vertigo, one of the strongest maps of Vitality. Jacob, I don't know about you, I think they might have just made a gift to the Frenchman. Potentially a gift, but also a sign of the fact that they can't go anywhere else. No. Where are Inferno, ITBs? maybe? They could have gone Inferno? Inferno could have been up for suggestion, but I feel like if you're ITB, and I think that's what they've done right here, they want to play to their own strengths. They've had a good showing so far on Vertigo. They had a couple of good, you know, maps on that one. We also did see them beat FaZe on Inferno, so that also speaks into that. But you're right, it does seem like Into the Breach, so is just trying to play to their own strengths. Into the bin? I like that one. Yeah, prefacing that with your predictions early on there, Jacob. Sure. Dupree spoke about the importance of, you know, being on the same page, and again spoke about how the team have really been revving up to this point back right at the beginning of the year, right? He spoke about the importance of the T sides, and we have actually seen that coming to fruition, Jacob, with some great offensive halves. They've been fantastic. They've been absolutely fantastic on the T sides lately. We saw the first glimpses of that in Pro League, where they had Jax standing in for Dupree, and all of a sudden we saw Vitality play well on the T side, and we thought, oh, maybe that's Jax coming in, changing stuff. But ever since Dupree slotted back in instead of Jax, they've been good. They have the highest T side win rate percentage at the entire tournament, even better than Heroic. And then I have a very disturbing stat for you as well, Matthew. When Vitality get the opening pick on their T side, when they're playing 5v4, they win 96% of those rounds. 96. So basically, whenever Vitality is finding the first pick in a round on a T side, they won the round. You say it's disturbing. I love that.
it makes me feel happy. I'm not disturbed at all. I'm disturbed. I'm enjoying all of it. Yeah, thriving in that chaos that the Vitality squad can be pulling out. Outrageous. It's mad, particularly when we look back at Vitality in the later stages of 2022, right? And often they look flustered, and you were totally right, Matthew. They didn't really have that home ground that we could rely on Vitality to be pulling off W's on. Yeah, absolutely. I think that was the main issue. When we talked about two different philosophies coming in together into this team, we could witness the issues and the shortcomings on T side specifically. There were a couple of maps where they just looked disjointed. They couldn't find the right balance between the speed and the detail. How many times we've seen them on Overpass just break their teeth against the wall trying to figure that out. And this seems to be the light at the end of the tunnel. There finally seemed to be an idea, a harmony, I want to use that word, for the T side of Vitality. It's been paying off here, and that's why we cannot write them off anywho. We've spoken so much about the experience on the side of Vitality. There's one name that we haven't actually highlighted, the man who's going to be standing behind him, Big Daddy Zonic. Man, he has been a part of some of the most historic moments in CSGO history, and now being with the coach of Vitality, it's amazing to see what he's been able to deploy with the team, with the Deadly Danes as a duo. He's also won a lot of majors as a coach. Yeah. He's en route to do it perhaps one more time. I agree with you. It's clear to me to see that what you're speaking about, two different styles, two different languages, they had to mesh them together in the beginning. I think it has been a very, very tough task for Sonic to try to integrate himself as well. But we speak about the T sides, we speak about the calling of Apeks. Everything seems to be going up in a higher line right now. One stat that is suggesting that Sonic has actually come in with an effect is the fact that Vitality is also the team dealing the most damage with the nades, and that's what we remember Sonic from in the Astralis time. He integrated all this nade system, all the damage with the nades, etc., how you use utility and how you, I guess, provoke the opponent with the utility. That is the same case for Vitality. Look out for it, because they're going to throw nades in the face of them. I agree with you, and I'm going to be honest. If you'd asked me a few months ago, I was worried that the relationship between Apeks and Zonic would come to an end. I thought they just couldn't make it work. You have to just imagine, for context, Zonic comes in, he's got a plethora of success with the Danish way of playing Counter-Strike, and then Apeks is obviously not thinking of the game the same way, and you have to put that aside, and you sort of have to come to a compromise where everybody can be activated and everybody can trust in. And I think these two sort of hearing each other and coming to a compromise in how they wanted to play CS, this is some of the like off the box, behind the curtain stuff we don't know about, but I'm sure had a huge impact. Particularly when we think about the story of Apeks, right? I would argue that he is one of the, you know, unsung French heroes of the scene, because he transitioned from a really super aggressive entry fragger back on the early days. He obviously picked up a major trophy in Collision Poker as well, to being actually the brain behind this Vitality machine. That's kind of an insane character arc. I swear to God, back in 2014, 15, 16, he was one of the most annoying players to face. He would always be in your face. He would always duel you. And back then, yes, he was quite good at it. We don't praise Apeks for his individual level anymore. Even though at this tournament, it's been all right. It hasn't been a disaster. Hasn't been on the levels of the Hooksies of the world or the Kerrigan, who's struggling in this final as well. He's up there, and it's okay. Apeks is, I wouldn't necessarily call him the brain behind this mastery, what is Vitality, but I feel like he's given a lot of trust in ZywOo, and ZywOo have given a lot of trust in Apeks. Those two have a special bond. That's what I feel, at least. And I think a lot of the success from Apeks as an in-game leading is also setting up ZywOo. He realized early on in his career that if you want to find success as an in-game leader and as a team, you better stay friends with ZywOo and you better cater to him. And we've seen that from Apeks in many, many interviews. He said, I sacrifice for ZywOo. I do everything I can in order to make him look good, because I know that's my way. I mean, that's my way of winning. Why would Apeks is like a cowboy in the far west, and he saw that horse, that wild horse going, and he was like, that horse, that's my horse. I'm not letting that one go. Yeah, come here, you, wee, wee. And he got into the horse, and he just never let go. That's what I would do the same. If I play with ZywOo, I would never let it go. I'd be like, please, ZywOo, don't go. Keep me with you. Listen, joke aside, there is one thing you could never, ever doubt or put up against Apeks is his love of the game. You have to imagine what he has been through to actually remain relevant and to keep participating to this French scene. From an entry fragger outside this universe, just completely reckless, to now having to be an IGL with lower stats, lower numbers, people spitting at you, calling for your head, because that's what you are as an IGL sometimes. And he stayed the course. He stayed the course, and now it feels like he's about to be rewarded for all these efforts. I love how you pick on that, up on that rather relationship between Apeks and ZywOo, right? Because I feel like Apeks has been trying to sort of facilitate not the same relationship, but a similar one with Spinks, right? We've seen a complete turning of the tides in Spinks
Spinks' playstyle, because obviously he came from ENCE. We were so hyped as to what he would deliver for Vitality. It didn't happen in the first, 6 to 8 months of his tenure on the squad. Apeks then says to him, you have to command within the server. You cannot give all these guys so much respect, right? They might be more experienced than you, but you have to prove why you deserve to be on this team. And you know what the cool thing about that is? Apeks sometimes use the public media in order to get that message out there. You remember what happened in Stockholm when they went 0-2? Went out in an interview saying, Saivu, you have to play better, otherwise we're exiting the tournament. What happened? Saivu went on a roll. He was playing fantastic Counter-Strike. He did the same with Spinks. He said in a couple of interviews that we need to see more from Spinks. We're giving him more space. We're trying to cater to him. We're trying to make him feel more comfortable. And as a result, we want a little bit more productivity on the server. And guess what happened? Spinks looking like the best version of himself right now. I mean, you needed that productivity. The first few months of Spinks in Vitality were unacceptable in terms of demands and what he was putting out the server. But you're picking on a very good point here. When you're Spinks, you have to enter the mindset of Vitality that if you need a flash from Zaiwu, I don't care that he's the best player in the world. You ask for that damn flash, and you asked him to bait for you if you have to. I think this was the issue with Spinks. Originally, he wasn't taking enough initiative. He wasn't putting himself first in a couple of situations where he could have an impact. And now that he does, he puts himself in multi-kill positions. He has the right timings of the lurks. He has the bait for him on the CT side. I'm not asking for Zaiwu to die for him every single round. Absolutely not. But you have to be able to seize an opportunity that's for you and not just let it go because you are impressed by who's playing with you. I love how much focusing we're putting on towards Spinks, fair enough, but Matix as well. During the time where Spinks were not working out, during the time where Vitality were struggling, he was the one player that we highlighted saying that he's actually delivering what we can expect. It's not like he's always making the difference on the server, but he was the one player who always went free of the criticism because I think he always delivered at an acceptable level. That's the thing with Matix right now. He's also raised up. He's also getting better. The highest rated T-side player in the entire tournament. And we speak about Spinks, we speak about Saivu, sorry. There's so many different attributes to this Vitality lineup. They're playing the best brand of Counter-Strike we've seen Vitality play in a year. And Magisk also has been extremely valuable in just taking the hit and taking the fall in some of these maps. I think he's one of the few players where you can just say, listen, we need you to play here. Like, do your best. He started in Pit on Inferno. Now he's playing B on Inferno with Apeks. A couple of changes here and there. If you're Apeks, if you're Zonic, it's very important to have a player on your team who you know can step up to the challenge. Even if it's not exactly the best tailored for his stats. We're talking about a former MVP of a major, by the way. That's Magisk. But we don't need you right now, brother. We need you to be on B. This is where you need to be. We need that. And Magisk will do it. And that is very valuable. We heard similar sentiments echoed from Dupree as well, just after IEM Rio finally Vitality getting to hoist a trophy, and no better time to be doing it, right? Coming into the most important tournament of the year, particularly for the Vitality squad, right? We're talking about not only wanting to make it the deepest they've ever made it as a team unit together, but doing it for 2 players on home soil. That's a big deal. That's a massive deal, and that adds a lot of pressure. You spoke about it coming in, right? One thing is having the crowd with you, cheering for you. That's going to feel nice, but if you don't deliver in front of that crowd, you're going to feel very, very sorry about yourself. I do want to pick up on that point as well, because I feel like we've been throughout the entirety of the Vitality squad right now as well. Dupree is stepping up. He's finally seemingly finding his footing. He's not the difference maker that he used to be in Astralis. He's not needed to be. Sort of like you're describing with Magix as well. I feel both him and Magix came into this Vitality lineup and they accepted that they would have to be role players. They accepted they would have to do roles and have to do certain stuff that they normally don't do. Dupree, the man on the screen right here, has probably been the weakest link within Vitality for the vast majority of the time, but as of recently, he stepped up. So just like we're praising Heroic for, just like we sometimes praise FaZe for, they've raised the floor of the team, and that's important if you want to be a championship contender. And you talk about the hit that he took. I mean, for Dupree, it was visible that it shook him. It was visible, it was palpable that he was struggling. You're talking about a player that used to win pretty much every event he was going to, and then suddenly he finds himself in that system where he's not putting up individually. The game goes too fast for him. He's uncomfortable. His numbers are down. The team is losing. He's losing faith and confidence in his own play, and I think this is also a test of the true value of a player. Can you actually push through that moment? Because maybe if you can, the rest of the puzzle is going to start to make sense, and you win more rounds, you have more anti-eco, your stats are a little bit better, you have a bit more confidence. There's a co-correlation between how a team is doing and how a player is doing, and it maybe, just maybe, Dupree survived the worst of Vitality. Well, we are almost ready to be getting this quarterfinal series underway, but not before you guys at home get involved in the action yourself. Yes, of course, there will be a show match ahead of the grand final on Sunday, and you guys, if you're watching on Blast.tv, can get involved in the picks and bans for this one as well. It's obviously a best of one, and we decided to ban Vertigon, and Overpass. Vertigon. And I don't know. I hate Overpass.
I've actually vowed to never ever play Vertigo in like premium ever again. Like I've made that vow, and I have to say my life quality has never been so good. I've improved in life quality ever since. Overpass did hurt me a little bit. I love the map, but I understand in terms of entertainment and fun, not exactly what we're looking for. Yeah, so you guys are home during the first map of this series. If you're watching on Blast.tv, you can get your votes in to ban your least favorite map left in the pool and see hopefully Anubis maybe making it through this pro match on Sunday. I don't know, not biased here at all, but man, the Hive certainly looking to thrive in the arena, and the Golden Hornets behind them every single step of the way. We're throwing this one to a quick break, but when we are back, it's Vitality and Into the Breach to enter the Accor Arena. the pinnacle of competition. The gateway for legends. Its trophy, a maker of kings. Counter-Strike in my life for 15 years. I've been playing this game for 2/3 of my life. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike.
I live and breathe it. CS will in my life forever. I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's what I've always done. It's my whole life. And I wouldn't have most of the things that happen in my life right now if I didn't have CSGO. Years of Counter-Strike majors, 10 years of legendary plays. Paris, the last chance, the last moment, the last time to crown a major winner in our beloved game. For Counter-Strike. Accor Arena! We're moving into our second match of the day. A special one for the home crowd. And boy, oh boy, are you making some noise. But within 10 years of Counter-Strike, with this being the last major and it being so special, we've seen upsets, we've seen heartbreak, we've seen champions of old fall already. So it's not just going to be easy for any team fighting right now. But are you guys excited? Are you ready? I see some British flags over there. How many Into the Breach fans do we have right now? That's better than I expected. And then the obvious one, Vitality. It is to be expected. It is the home crowd. But either way, fantastic Counter-Strike deserves a fantastic stage. And that deserves a fantastic performance from you all. Are you ready to bring the hype with me one more time? No, no, no. Are you ready to bring the hype for me, guys? It's time for our second quarterfinal. It's time to bring the hype! Come on! Is it coming home? This is Into the Breach. Cypher, at just 20 years old, he's gone up against some of the most iconic names in Counter-Strike and shown that their reputations mean nothing. Rallen, standing at 197 centimeters. He's gone on a journey looking for his home, looking for a place to showcase himself.
Now he stands on Counter-Strike's biggest stage. Thomas. Some said he had no chance. Other British players envied him. Others thought he would only be good for endpoint. But now he's into the playoffs. Crucial. Coming from a country that isn't well represented at the top. Deciding to find his feet within the British scene. Fighting and never giving up. Now he stands before you, putting up one hell of a performance. And Volt. Danger, danger, high voltage. Beating Fnatic and showing them that they missed out on the rising player to get into the Breach's spot in the arena. Give it up for Into the Breach! He has shown his strength, he has shown his ability to adjust to a new system and a new team. And now he proudly shines and stings for the bees. ZywOo, French royalty, the greatest rookie we have ever seen. Counter-Strike's child, still without a major. Apeks, 17 majors attended. One major trophy to his name and a legend of the game. He doesn't hold back, he doesn't hide his emotions, and he hasn't ever given up. dupreeh, the only player to have attended every major we've had. The most major trophies of any player left in the competition. Here he can go another step further to being the most revered major champion in CSGO. And Magisk, no longer a boy, but a man who has grown in and out of the server, lifting more trophies than most. He could end it in style here in Paris. V is for victory! V is for vitality! Now there is a clear favorite going into this matchup. It's certainly not going to be easy for Into the Breach, who have never stood on such a stage. The crowd is going one way, but Into the Breach, they've proved they can upset time and time again. But for Vitality, they have been focused on the major since the beginning. Their whole journey is around the major, and what they want to do here in this arena in front of their countrymen. Thomas is already up here to join me. Apeks is going to get himself in position. Thomas, crowd's definitely not on your side, mate, but does that bother you? No, you know,
You know, the French scene is awesome, so, you know, it's going to be a great game, you know. And for you guys, you don't have the same level of experience or even stage experience. What were you telling yourselves? What were you doing before going into this? We're just going to try our best, you know. It's a great honor to play Vitality at their home crowd, you know, like, they're absolute lads. They are absolute lads, and they're very close brothers to us. Dan, Paris is pretty special, mate. Yes, that's an amazing moment. One of the best in my life without a doubt, so I just enjoy right now. I'm sure you do. I enjoy it as well. It's a beautiful sight to look at. But when it comes to the Counter-Strike, Into the Breach have taken down some big names. Is this as easy as people keep saying on paper? Of course not. It's a player for the major. They beat FaZe, ENCE, and Fnatic, which are all really good teams. So don't underestimate them. They can make a lot of damage. So we're gonna give our 100% to be able to make it through. That's it. And are you feeling extra pressure? Of course, there's extra pressure. We're playing on home soil, and it's always something special. We're only 2 French people playing the major, so obviously we have pressure. But that's fine. We're ready to handle it. Thomas. Oh, it does sound good. Thomas, is it coming home? We'll try our fucking best. I love it. Guys, shake hands. Take your seats. Now it's time to watch our first game that gets to be delivered in a very biased way. But I want all of you in this arena to deliver with each other great moments on the kills, great moments when you see every player make a good moment. Because this is what Counter-Strike's all about, and this is our last major. So Accor Arena, are you ready? It's time for Into the Breach, take on Vitality! They go where no UK core have ever gone before, and this should be by the numbers, a baptism by बहुत ही क्रूशियल मैचअप यहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए टीम वाइटैलिटी दूसरी ओर उनके चैलेंज करते हुए इनटू द ब्रीच एंड जैसे हमने देखा प्री शो में दे हैव टेकन डाउन बिग नेम्स एंड आज टीम वाइटैलिटी के सामने खड़े हैं एंड वो भी चैंपियन स्टेज पे एलिमिनेशन मैच Only one team goes ahead. Team Vitality and the fans, उनको यहाँ पे आगे जाने के लिए पूरी support है. On the other end, it is on the downside into the breach के लिए. मेरा नाम है लूसिफर, मेरे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. Mamba again. Mamba, what do you think? The crowd is literally in complete favor of Vitality. कोई support नहीं नजर आ रहा है into the breach के लिए, but into the breach have done justice to be here. I'm just going to wait for this moment. जिस तरीके से आप क्राउड को देख पा रहे हैं. Yeah. Oh. I think this is the best part of every LAN. Damn. अभी के लिए कैमरामैन का स्विचेस है ना वो फास्ट रहना चाहिए एंड उसी के लिए वो दर्शक इंतजार कर रहे हैं वो फैंस इंतजार कर रहे थे Vitality versus Into the Breach, France versus England. ये दोनों टीमें
They're going to give it their all. पहली बार कोई इंग्लिश स्कोर मेजर के प्लेऑफ्स में पहुंचा है. बात करें वाइटैलिटी की, 2 फ्रेंच प्लेयर्स, the only 2 French players in the major right now. होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं Zaiwu और Apeks. You also have Spinks, Dupree and Magisk. एक तरफ एक टीम जिसे किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि वो मेजर प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी. दूसरी तरफ डुप्री जिन्होंने 4 मेजर ट्रॉफीज उठाई है, ग्रैंड स्लैम जीता है जिन्होंने. क्या वो 5वीं ट्रॉफी उठा पाएंगे मेजर की? Will he be the only player ever in the history of Counter-Strike Global Offensive जिन्होंने 5 मेजर जीते हैं? Or is it going to be into the breach? जो आगे बढ़ेगी सेमीफाइनल्स में. तो स्टोरी लाइन, but ladies and gentlemen, पहला राउंड शुरू होते हुए यहाँ पे Vitality versus into the breach. देखेंगे जरूर क्या होने वाला है. मैप पिक की बात करें, Vertigo into the breach का पिक है. Start off क्विक एग्जीक्यूट की तरफ into the breach की इशारा नजर आ रहा है. ड्यूल बेराटिस के साथ Zaiwu स्ट्राइक द होल्ड ऑफ शॉट. रैम की तरफ एक हिट शॉट का एक्सपेक्टेशन रख के into the breach इंतजार कर रही है. साइफर जस्ट क्लियरिंग इट आउट. into the breach की बात करें, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका, बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने टेक डाउन किया है. Fnatic की बात करें, एंस की बात करें, FaZe की बात करें, Zaiwu with the first pick, and ये देखिए क्राउड कितना ज्यादा खुश होता है. दूसरा किल Zaiwu के हर एक किल के ऊपर, Apeks के हर एक किल के ऊपर आपको ये चीयर सुनाई देते मिलेगा. Zaiwu the prodigal son of Counter Strike, जब वो सीन में आए थे पहली बार इतना ज्यादा सपोर्ट मिला था उनको. गोल्डन चाइल्ड कहा जाता था काउंटर स्ट्राइक का, और अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए फिलहाल ट्रिपल किल के साथ पहला राउंड की शुरुआत करी उन्होंने. और वाइटैलिटी ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट. लेकिन वाइटैलिटी की अगर मैं बात करूं, 9 मैच का विन स्ट्रीक है उनका. 9 मैचेस में उन्होंने 18 मैप खेले हैं, उसमें से सिर्फ 2 मैप्स वो हारे, 16 मैप्स वो जीते हैं. तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म में है ये टीम. बात करें जोनिक, मेजिस्क, डुप्री के ट्रियो के बारे में. जोनिक जो कोच है उनके, एस्ट्रालिस में हुआ करते थे. आपको पता है कितनी ज्यादा डोमिनेंट टीम होती थी. लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रोस्टर के साथ इश्यूज भी आते हैं कम्युनिकेशन के, बट देखेंगे जरूर यहाँ पे क्या कोई क्विक एग्जीक्यूट हमें देखने मिलता है. Zaiwu सीधा M4 उठाते हुए. सेकेंड राउंड शुड बी ए फेयरली इजी वन वाइटैलिटी के लिए. Apeks जरूर थोड़ा अग्रेस जरूर कर रहे हैं एंड पनिश किए जाएंगे उसकी वजह से, बट देयर स्टिल दिस M4 इन एक्शन. M4 is Zaiwu एक्सेप्ट 2. अभी के लिए आखिरी खिलाड़ी बचे हैं रैलन. ही डिड पिक अप अ कपल इस राउंड में, एंड बॉम्ब जो है अभी भी A रैंप्स पे गिरा हुआ है, सो इट्स गोइंग टू बी टफ टू रिकवर. द ओनली थिंग दैट ही कैन डू इज ट्राई टू पनिश अ कपल ऑफ द प्लेयर्स, बट जिस हिसाब से वाइटैलिटी के खिलाड़ी A के बाहर खड़े हैं, मेकिंग श्योर दे गार्ड द बॉम्ब, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ मिलने वाले रैलन को. ये फ्लैंक भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है. यू कैन सी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर इट. ऑफ कोर्स इंतजार करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी चढ़ सकते, लेकिन वो नहीं करना चाहते शायद. 1 versus 3, 3 1v1 बनाना पड़ेगा इनको. बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. एक्स-रे बंद करके हमें दिखा रहे थे कि किधर प्लेयर्स हो सकते हैं. क्या राहुल ऊपर चढ़ेंगे? जी हाँ, साइलेंटली ऊपर चढ़े जरूर है. शायद वो किल निकाल पाएंगे. प्लेयर को स्पॉट किया, पहला निकाला है पिक. डुप्री को टेक डाउन करेंगे. 30 सेकंड बची है. C4 उनके पास है नहीं, लेकिन अभी भी मौका है उनके पास ये राउंड निकालने के लिए. लेकिन डबल पिक करेंगे. Zaiwu को अपनी टीममेट की हेल्प करनी पड़ेगी. स्पिंक्स क्या यहाँ पे पेशेंस खोएंगे? जी नहीं. MP9 इतनी क्लोज रेंज में श्रेड करती है. आई डू बिलीव जब आपके पास डीगल जैसा वेपन होता है तो आपको डिस्टेंस बनाना पड़ता है सामने वाले प्लेयर के सामने कंपैरिजन, बिकॉज डीगल इज वेरी इफेक्टिव मिड रेंज तक. Vitality right now बहुत खुश रहेंगे. Early game they do have what they want in terms of victories. दूसरी ओर into the breach still have a long way to go. They do have a long way to go, no doubt about that. लेकिन रॉल की बात करिए, पहला बाय राउंड आते हैं उनके पास. यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन just enough to take away some control. Spinks कितना ज्यादा aggressive खेलेंगे, यहाँ पे वोल्ट को स्पॉट करेंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है स्पिंक्स वहाँ पे थोड़ा सा सो गए एंड भुगतान करना पड़ेगा उनकी टीम को उस चीज के लिए. Zaiwu in the meantime होल्ड करेंगे अपने फ्रेंच टीममेट के साथ, एपेक्स के साथ. फ्लैश दे सकते हैं उनको, लेकिन जो स्मोक ग्रेनेड था, एक और फ्लैश पे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन क्या एपेक्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? जी नहीं. Zaiwu अकेले स्मोक के थ्रू पहला पिक निकालते हुए. एक और पिक की जरूरत.
मैन एडवांटेज अभी भी इनटू द ब्रीच के पास, लेकिन रोटेशन देखिए आप, धीरे धीरे करके ए साइड की तरफ, सॉरी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बी साइड की तरफ रोटेट करते हुए। एंड मेजर्स क्या वो यहाँ पे जादू दिखा पाएंगे उनका। थॉमस गोज इन ट्राइंग टू फाइंड द फर्स्ट पिक, लेकिन वोल्ट होगी जो मेजर्स को वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे एंड सीटीज विल हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग बैक। यहाँ पे शायद गन सेव करने की फिरात में 2 वर्सेस 4 बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अनलेस उनको एक पिक मिलता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो कोशिश भी कर रहे हैं ये यहाँ पे गन ड्रॉप कराने की। ज़ायरू एंड डुप्री, ये दोनों प्लेयर्स गन बचाने की कोशिश, एंड अच्छा कॉल है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छा कॉल है। एग्री, अभी के लिए पहला राउंड इनटू द ब्रीच को जरूर मिल जाएगा, बट दे आर अ लिटिल बिट ऑन द हंट। उनको समझ में आ चुका है कि कहना का सेव कर रहे, ए की तरफ गए, सेडवॉक की तरफ रहेंगे। जी हाँ, डुप्री आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है ज़ायरू। And there are players pushing him. He gets one. There will be another quick one coming from Apeks. Smoke off किया जा रहा है, but there's still a fight that he needs to put up. But he नहीं. ज़ायरू का weapon भी गिरा दिया जाएगा, and that is going to be into the breach with the first one in their favor. Again, Vitality बोल सकते कि इनको अभी full buy मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीतते हुए नजर आया, but Vitality also had good weapons to invest. जिसकी वजह से this can be a little bit of a iffy round for them. Can definitely be an iffy round, no doubt about that. लेकिन आप जानते हैं किस तरीके की काउंटर स्ट्राइक, कौन सी ब्रांड की काउंटर स्ट्राइक खेलती है पूरी की पूरी सिटी साइड। एंड ज़ायरू विद द डीगल इज फिनोमिनल। यहाँ पे एक इनिशियल पिक गेम की राह बदल सकता है, राउंड की राह बदल सकता है। देखना ये बनता है क्या उनको पहला पिक मिलता है। डुप्री थोड़ा डैमेज लेते हुए, लेकिन एक ही तरफ बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिखा रहे हैं इनटू द ब्रीच। हम 4 राउंड से देख रहे हैं, शुरुआत में एक ही तरफ प्रेजेंस दिखाते हैं, देन अगर जरूरत पड़ती है वो फिर वो बी की तरफ जाते हैं, लेकिन वोल्ट पहला पिक निकालते हैं, पिंक्स वापस तो फर्स्ट पिक है वो हो रहा है, लेकिन डुप्री अपना जितना भी एक्सपीरियंस उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर पिक निकाला जरूर है। मेजर्स एंड ज़ायरू दोनों को टेक डाउन कर दिया जाएगा। ए साइड शुड बी फॉर द टेकिंग, लेकिन साइफर एपेक्स इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले थे। डुप्री इकलौते प्लेयर 13 एचपी पे बचे हुए, 1 कमिट करेंगे मुझे नहीं लगता। एक ही बचाना ज़्यादा अच्छा साबित होगा यहाँ पे उनके लिए। 13 HP पे you'll not be able to do lot. And रैलन को देखिए, वो हंट पे निकले क्योंकि उनके पास कम HP है। So like आप आगे जाइए, ढूंढिए अगर कोई मिलता है तो, because I feel like अभी के लिए उनके पास भी थोड़े कैश है जिसके वजह से they can go for a rebuy. But I think इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, but रैलन was good enough. डुप्री के ऊपर कनेक्ट करेंगे, and I can see into the breach are in the mood of challenging every player coming in from Team Vitality. टीम वाइटैलिटी को जो सपोर्ट है वो भरपूर नजर आ रहा है कमिंग इन। यप, थोड़ा इनटू द ब्रीच का भी जो सपोर्ट है नजर आ रहा है फैंस की तरफ से, बट एट द एंड ऑफ द डे माम्बा इट विल ओनली डिपेंड कि ये गेम कैसे जाएगा। ये फैंस का सपोर्ट तो हर वक्त रहता ही रहता है अपने टीम्स के लिए। वो ऑल हैपन हियर इन दिस बेस्ट ऑफ 3 इज व्हाट मैटर्स। इस बेस्ट ऑफ 3 में क्या होगा वो जरूर देखना बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए सीटी साइड के पास अभी भी इतनी अच्छी वेपनरी नहीं है, पिस्टल के साथ खेलना पड़ेगा। मेजिस स्पॉट हो जरूर जाएंगे वहां पे, डैमेज भी पड़ेगा ज़ायरू को बहुत ज्यादा। क्रूशियल विद 2, एक ही अभी तक एग्जीक्यूशन नजर आ रहे हैं। दे गोइंग हेड ऑन, हैमरिंग द प्लेयर्स ऑफ वाइटैलिटी। आखिरी खिलाड़ी बचने वाले दोबारा डुप्री में, इस बार फुल हेल्थ पे, बट on the bad end of the cards उनके पास अभी भी सिर्फ पिस्टल है। This was a save round coming through from Team Vitality. अगर कुछ करेंगे 1-2 वेपन गिराने का इरादा बनाना चाहिए, but look at players surrounding and covering every angle and check करके यहाँ पे Vitality को हराते हुए नजर आएंगे। That's going to be a lead, and look at this, one supporter in between the entirety of Vitality fans. बहुत super happy, and बाकी लोग चिंतित। Very brave I'll say. Yeah, true. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको वहाँ पे इकलौते प्लेयर हो के सबके बीच में चीयर करने की जो उन्होंने जुर्रत करी है होम क्राउड के सामने। Let's be honest, स्पोर्ट्स फैंस काफ़ी पैशनेट होते हैं अपनी टीम्स के लिए, खासतौर पे जब होम ग्राउंड के ऊपर आप खेल रहे हो। But the breach, they're looking pretty strong right now. Again, back-to-back दो weaker rounds में जरूर जीते हैं, so we will look forward to what's going to be happening. But it looks like यहाँ पे एक technical pause. It's coming home. No, it's not. Oh boy.
काउंटर स्ट्राइक का जो क्राउड है मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट क्राउड्स आउट देयर। हाँ, कई बार काफ़ी इमोशनल, काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि जिस तरीके का बैंटर काउंटर स्ट्राइक की ऑडियंस कर सकती है वैसा यूजुअली आपको आसानी से देखने नहीं मिलता। It's too good, देखिए I mean, जी हाँ, जो नावी के फैंस है they will be a little bit disappointed क्योंकि ये आखिरी मेजर था। Unfortunately, it was not for them this time. I think Vitality के फैंस जो है ना अभी के लिए जो कैमरा बार बार उनके सामने आ रहे हैं, they're just happy about it. तुरंत कैमरा जब भी उनके सामने पैन हो जाता है, they're just showing all the support coming through. Literal energy shower. Early game, technical pause. I think कुछ sound issue हो रहा था, so I hope it gets corrected very soon. And early games में जब भी होता है, it's good. I mean, late games में बीच में कभी भी हो जाता है, it kind of wastes a lot of time. अभी के लिए दोनों साइड के एडमिन्स चेक कर रहे हैं। जी हाँ, थॉमस ने ज़रूर अपने फैंस को एज वेल एज अपने होम क्राउड जो देख रहे हैं, चुने गुने जो आए हैं, सबके नजरें उनके ऊपर था। दूसरी ओर एपेक्स, थॉमस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंटिमिडेटेड है बिल्कुल भी। True. इस क्राउड के सामने He's like bring on the action, हम तैयार है इसके लिए। जी हाँ, और ऑफ कोर्स आपको एक एफ बॉम्ब मिलता है, मतलब वैसे तो एक भी नहीं मिलता है, बट जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया उसका for comedic effect, that was wonderful. I think banter and storylines ये सबसे important चीज होती है, and almost वहाँ पे साइफर को टेक डाउन कर दिया था इन्होंने। Barely surviving, 10 HP सिर्फ नजर आ रहा है, साइडवॉक से आगे आ रहा है to try and punish a player अगर रैंप पुश आउट करते हैं तो। Looks like Apeks around it. Oh, spicy, very spicy. साइफर वो 10 HP के ऊपर सर्वाइव करके जब Apeks के ऊपर किल निकाला, आई थिंक इससे बेहतरीन कन्वर्जन, इससे बेहतरीन मौके को कन्वर्ट करना नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं था। एंड साइफर, आप क्या कहेंगे इसको? ऊपर वाले की दया, लक, एक गोली और लग जाती है अगर स्मोक के थ्रू तो उनका काम तमाम था। एंड उन्होंने सिर्फ वहाँ पे वेपन लिया था अपने टीममेट से कि मुझे एक ट्राई करना है, गया निकाले के, एंड ही इज जस्ट बैक एंड गिवन द वेपन टू हिज टीममेट। रैलन ट्राइंग टू गो फॉर अ सिमिलर अप्रोच, ध्यान से खेलना पड़े, goes in for a check, दोनों exchange of bullets with majority of damage eaten by Rallen, but Cypher still good, he's still pumping bullets। Zaiwu को डाउन करेंगे 10 HP के साथ, अभी भी ट्राई करें, पोजीशन यहाँ पे पता चल चुका है। Can some magic happen? Gene spins डाउन किए जाएंगे Cypher की तरफ से। Finally Cypher will be put down, but the number advantage जो यहाँ पे Into the Breach चाहती थी वो अपने तरफ मोड़ चुकी है। The plan is coming down from Thomas, and this round is also looking like it can be sealed in the favor of Into the Breach. Cypher getting a 3K over there was not something that should have happened. In all honesty, वो बिल्कुल भी possible नहीं होना चाहिए था, लेकिन Cypher 10 HP थी तो एंट्री तो कर ही रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन इतना पेचीदा तरीके से अंदर जा रहे थे, इतनी आराम से वो अंदर जा रहे थे कि क्या कहें आप। पहला किल वहाँ पे निकाला, ये दूसरा शॉट भी बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, एंड तीसरा किल Cypher, मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। आखिरी जो वेपन था डिप्री जरूर बचा लेंगे, but a great round here for Into the Breach। दो लोगों के पास not rifles in their hands, playing with SMGs, आगे गए थे, Deagle भी था, went crazy, went berserk Cypher इस राउंड में।
4-2 के बढ़त यहाँ पे इनटू द ब्रीच की तरफ। एंड देखिए दिस इज अ पिक कमिंग इन फ्रॉम इनटू द ब्रीच, तो अपने मैप पे कहीं ना कहीं जैसे खेलना पड़ता है टीम्स को, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट्स हाउ इट्स वर्किंग आउट। बट फाइनली यहाँ पे टीम वाइटालिटी की तरफ से एक टाइम आउट कॉल किया गया है। लेट्स सी हाउ दे टर्न द टाइड्स। जी हाँ जरूर, लेकिन वाइटालिटी तुरंत टाइम आउट इस्तेमाल करते हुए, दीज आर नॉट गुड साइंस ऑफ वाइटालिटी, दे नीड टू स्टार्ट शोइंग अप। एंड बात करें इनटू द ब्रीच के बारे में, तो एक हनीमून फेस कहते हैं ना, जो शुरुआत के मैच के शुरुआत में होता है, आपको पता होता है कि आप राउंड्स जीत रहे हैं, धीरे धीरे करके चिप अवे कर रहे हो आप सामने वाली टीम की कॉन्फिडेंस से। लेकिन साइफर, आई एम स्टिल नॉट ओवर द फैक्ट कि वो जो 3K मिला था उनको वहां पे, वो किस तरीके से मिला, किस तरीके से उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक और फ्री राउंड हो सकता है वाइटालिटी के लिए, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ नया करके दिखाते हैं। तो another round, another try। इस बार भी कहीं ना कहीं जो इंटेंशन है, इट माइट गो टू अ फाइट ऑलरेडी छिड़ चुकी है रैम्प की तरफ। इस बार डीगल के साथ एपेक्स ट्राई कर रहे हैं। Great comes towards his favor, he needs to back off। पुश करके बी की तरफ इंतजार किया जा रहा है, they're checking the stairs, अगर कोई स्लोली क्रीप इन किया जा रहा है to get in quick headshot angle। अभी के लिए साइड वॉक का कंट्रोल जो है छीन चुके हैं। There will be a molly drop down and अभी तुरंत वो सीधा रैम्प से आगे बढ़ेंगे to take control, keep a check of it। प्लेयर्स को ऑलरेडी नोट किया गया है, but Apex still good for one। एक और प्लेयर आ चुके हैं, then Cypher with 2, he finds another one headshot। यहाँ पे ट्राई कर रहे करने का, he's go for the top tap, but Cypher he's looking for another 3, but इस बार वॉल ले लेंगे Crucial with another and another bomb plan coming in from into the breach। Swings all alone, 1 versus 3। क्या कोशिश करेंगे, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, डीगल भी है उनके पास अवेलेबल। आई डू बिलीव गन गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पे, तो अंदर कमिट जरूर करने वाले। रीलोड तक नहीं किया उन्होंने, बिकॉज अपनी पोजीशन नहीं देना चाहते वो। एंड इनटू द ब्रीच देखिए धीरे धीरे मेथोडिकली पीछे हटने की कोशिश। और साइफर, he man's feeling it, he's absolutely feeling it। आई थिंक वो एक राउंड था जहाँ पे he felt like he's just completely opened up, जहाँ पे 10 HP पे उन्होंने एक 3K निकाला है। आई थिंक उस वक्त से जैसे आपने बोला, he's just feeling it, he's looking unstoppable। आई थिंक ये वही है जो अभी हमने देखा वाइटालिटी के बीच में थे पूरे क्राउड के फैन में। आई थिंक फाइनली ही इज कम टू हिज सेंसेस, बोले कि नहीं अभी इनटू द ब्रीच अच्छी खेल रही है, थोड़ा और अगर सपोर्ट करूंगा कुछ अलग हो सकता है। बैक्स ऑफ एंड अभी अपने टीममेट, अभी जो फैन क्राउड सपोर्ट कर रही है इनटू द ब्रीच को, वहां पे आ चुके हैं। फाइनली अ प्रॉपर बाय कमिंग इन फ्रॉम टीम वाइटालिटी। AWP के साथ Zaiwu होल्डिंग डाउन रैम्प, एंड इस बार आप देख सकते हो into the breach not making that quick A execute। लेकिन आप देखिए इस चीज को नोटिस कीजिए, Zaiwu के हाथ में ऑप, और ये इंसान ऑप के साथ जो जादू दिखा सकते हैं। ooh la la, Thomas, what in the world was that shot? Dupree को वहां पे स्पैम पे टेक डाउन किया जाएगा जरूर, एंड वोल्ट को ट्रेड किया जाएगा, लेकिन मेजर्स पहली सवाल का जिंदा रह पाएंगे मुझे नहीं लगता। यहाँ पे रॉलन पूरी कोशिश करते ट्रेड निकालने की, लेकिन सिर्फ प्रेजेंस वहां पे Zaiwu की, जिसकी वजह से वो किल नहीं निकाल पाए, लेकिन किल निकालेंगे जरूर Zaiwu। इसी जादू की मैं बात कर रहा था, और ये राउंड होना चाहिए था इनटू द ब्रीच में। अब देखिए मेजर्स और एपेक्स दोनों 7 और 22 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं फिलहाल। आई थिंक वो बी का पुश जो करने के लिए इरादा बना रहे थे, उसी के साथ आफ्टर लूजिंग अ प्लेयर ट्रेड तुरंत जो करना चाहते थे, दैट डिड नॉट वर्क आउट। दैट इज वेयर एवरीथिंग फेल आउट, बट व्हाट अ ग्रेनेड कमिंग इन फ्रॉम क्रूशियल, बट जस्ट गुड फॉर वन। Zaiwu जैसे आपने बोला कमाल करके अपने टीममेट्स के लिए एक राउंड वापस लेके आ चुके। जो मोमेंटम इनटू द ब्रीच की तरफ गया था वो वाइटालिटी की तरफ मोड़ चुके हैं। इट्स स्टिल गोइंग टू बी द वन राउंड, दे हैव टू गेट अ लॉट मोर। अभी के लिए 3 राउंड का लीड था, उस लीड को सिर्फ 2 पे लेके आ चुके। जी हाँ, Zaiwu के हाथ में ऑप एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप ऑप को फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहते हैं, क्लासिक केनियस की बात करें, JW की बात करें, we've had ऑपर्स लाइक डिवाइस, we've had ऑपर्स लाइक सिंपल, एंड देन ऑफ कोर्स we had ऑपर्स लाइक Zaiwu। ये जितने भी प्लेयर्स हैं जिस तरीके से ऑप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एक बहुत डेडली वेपन साबित हो सकते हैं। साइफर एक और बार एंट्री फ्लैग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे Zaiwu को ऑफ गार्ड पकड़ेंगे। जी हाँ, वंस अगेन
goodness. Cypher को रोकने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनको because Cypher is being an absolute menace. Two v two. Bomb slowly making its way towards B. बहुत तेजी से अभी भाग जाएंगे एंड बट उनके पीछे पीछे एक खिलाड़ी बहुत जल्दी फॉलो कर सकते हैं. दैट्स समथिंग दैट दे हैव टू वॉच आउट फॉर. Dupree मेकिंग दैट मूव. Backstab is going to be big. अगर ये यहाँ पे ये backstab एटलीस्ट एक भी किल निकल जाता है, I think this is going to be a round जहाँ पे vitality स्कोर लाइन को थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए नजदीक आ सकते हैं. But Dupree's position has been seen. दूसरी ओर कूलर से पुश आगे कर रहे. Understanding कि already एक backstab है. Rallen was ready for it. Connects and puts Dupree down. आखिरी खिलाड़ी 1v1 and Apeks. He makes the clutch happen for the team. What a round from Apeks being pulled out. It's a big one for the team. Oh, it's a massive round. Apeks ने जिस तरीके से क्लच किया 2 HP पे वहाँ पे सर्वाइव करके क्लच करके लेके आया. ये शायद दिक्कत दे सकती है इनटू द ब्रीच को क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना एक्सपीरियंस वाइटैलिटी के पास है. इमेजिन करिए एक प्लेयर 19 में से 17 मेजर्स अटेंड कर चुका है. एक प्लेयर जो हर एक 19 में से 19 मेजर अटेंड कर चुका है. इतना ज्यादा एक्सपीरियंस. एक 4 टाइम मेजर चैंपियन, एक काउंटर स्ट्राइक 1.6 का लेजेंड जो आपका कोच है. जब आप उनके सामने खेलो तो प्रेशर तो होता ही आपके ऊपर. एक और राउंड सिर्फ दूर रहने वाला है. टीम वाइटैलिटी टू इक्वलाइज द स्कोर. नाइस 2-man सेटअप कमिंग थ्रू. अगर कोई फास्ट एग्जीक्यूट आता है उसको डिनाई करने के लिए आई थिंक अगर फ्लैश के साथ उतना फास्ट एग्जीक्यूट आएगा तो उतनी जल्दी सफाई भी हो जाएगी. ट्रू. बट हाईलो सेटअप काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप एक्सपेक्ट करो विदाउट यूटिलिटी आने वाला है तो फिर आपको काउंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ज़ाइवू को वापस बार बार पिक करते जा रहे हैं. एक एक करके कॉन्टैक्ट प्लेस काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं. जिस तरीके से मैप कंट्रोल ले रहे हैं बहुत कम इन्फॉर्मेशन सामने वाली टीम को ये दे रहे हैं. सो इनटू द ब्रीच द वे दे प्लेइंग इज फिनोमिनल. वाइटैलिटी रीड नहीं कर पा रही उनको. एंड ऑल्सो उनकी जो ए हिट्स है वो बहुत मेथोडिकल है. लाइक दे मेक श्योर कि एक तरफ से वो थोड़ा प्रेशराइज बनाया जहाँ पे प्लेयर्स इफ दे आर एट ए उनको क्रंच करवाया जाएगा एंड उसके बाद तुरंत जब वो प्लेयर्स रीपोजिशन करने के लिए पीक करने के लिए ट्राई करते हैं देयर इज ऑलरेडी अ प्लेयर फ्रॉम इनटू द ब्रीच रेडी. आखिरी 2 प्लेयर्स Apeks and Dupree will be saving up their weapon. हंट करने के लिए थोड़ा सा इरादा बना रहे इनटू द ब्रीच की खिलाड़ी बट दे आल्सो नो थोड़ा ओवर एक्सटेंड अगर वो भी करेंगे देन his teammate would have to end up buying him a weapon जिसके वजह से into the breach get another round and देखे लीड अभी भी बरकरार रख रहे हैं. They're not letting team vitality equalize the score. जी हाँ लेकिन into the breach तारीफ करनी पड़ेगी आपको इनकी जिस तरीके से ज़ाइवू को पिक ऑफ कर रहे हैं बार बार. मैं कह रहा हूँ कि उनके हाथ में ऑफ जो है बहुत पोटेंट वेपन है उसकी जरूरत है. और यहाँ पे खांसी खा के आई डू बिलीव साइफर का गला वहां पे थोड़ी सी खराश खा गया था. Another round इस बार C4 को जल्दी just waiting अगर कोई पीक आता है. Crucial is in great position. AWP के साथ एंड स्पेशली जो गैप था स्मोक के थ्रू उसके लिए इंतजार कर रहे थे. रैम्प को थोड़ा क्लियर करके अपने आप के लिए थोड़ा और स्पेसिंग बनाने के लिए to make use of मॉली. एक और मॉली फॉलो अप आ रहा है बट प्लेयर अभी भी बहुत नजदीक है. ज़ाइवू इज गुड फॉर 100 matches. He gets taken down as a trade. Crucial अभी भी वो एंगल ढूंढ रहे थे बट oh wait actually finds. इस एग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी. मुझे काफी अच्छा लग रहा है एग्रेशन देख के लेकिन शायद वो कमिट कर बैठेंगे. राल अभी उनको ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं. ज़ाइवू स्टिल होल्डिंग दैट एंगल. इज ही गोइंग टू सीम क्रॉस. ही डिड. देख लिया उनके पीछे जो बक्सा था वो देख लिया उन्होंने एंड इंफॉर्मेशन रिले कर दी जाएगी. जी हाँ लेकिन वो मेक अ डिफरेंस. एपेक्स फिर भी उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे. ज़ाइवू अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको वहीं से पीक करेंगे लेकिन क्या आपको वो इन्फो मिलने वाले. ज़ाइवू को नेट से डैमेज जरूर पड़ेगा लेकिन तुरंत ट्रेड हो जाएंगे. Dupree a 4-time major winner in a 1 versus 2. भर के एक्सपीरियंस है इनके अंदर. हर एक मेजर को अटेंड कर चुके हैं.
If there's one man you trust with a clutch like this, तो वो डुप्री है. फमास अपने हाथों में. क्या जाएंगे अंडरआर्म गोली डाली से कितना ज्यादा डैमेज देंगे देखिए. लेकिन C4 प्लांट हो जाएगा. ये बहुत बड़ी दिक्कत. आई थिंक प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं वो. ओह क्रूशियल. Virality right now at अपने CT side में at least they're unable to do anything for into the breach. जिस हिसाब से into the breach खेल रहे, जिस हिसाब से इनके trades जा रहे, they're so quick. All unfortunate, but thankfully वो plant हो चुका था, वरना it would have been very difficult for Crucial. AWP था दूसरी और Farmers, and I think that battle would be better itself. जैसे आपने बोला, Dupree, he would have done it. He would have done it, no doubt about that. लेकिन ऑप के सामने फमास का ठीक करना आसान नहीं होता. बिल्कुल भी इमेजिन अगर क्रूशियल वो शॉट कनेक्ट कर पाते तो. फ्लिक तो बड़ी जोर से किया था, लेकिन इनटू द ब्रीच फिलहाल के लिए वाइटालिटी को बुली करते हुए. लेकिन मेजर्स पहला पिक निकालेंगे जरूर. ड्रॉल यहाँ पे क्या वो पिक निकाल पाएंगे? जी हाँ, AK-47 पीछे लेके आ रहे हैं. हाथ में नहीं देना चाहते, उनके एक फेक देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है उनके लिए. Look at him. He makes that throw and जैसे हम बात कर रहे थे M4 against Naked, you connect the ding but players don't go down. But दूसरी ओर यहाँ पे देखिए B के तरफ खिलाड़ी आ रहे हैं, but push करके Dupree, can he do anything? Can he find at least one? Oh, it was 3-man push coming in. Rallen दूसरी ओर से आ गए and has broke everything down. But Cypher के ऊपर भी वैसे ही Ramps की तरफ 3-man push आएगा. They take control of it. तुरंत बहुत तेजी से B के तरफ भागते हुए खिलाड़ी आ रहे हैं, but there will be an intervention from Majest. क्या यहाँ पे कुछ कमाल कर पाएंगे? अभी के लिए तो उन्होंने पीक नहीं किया, इंतजार कर रहे हैं with a proper angle, connects the instant headshot, but finally Rallen उनको नीचे गिराते हुए नजर आएंगे. It is a 2v3 situation. Weapon still in favor of none other than Into the Breach, but Zaivu को एक weapon हाथ में मिल चुका है. He is almost at the backstab. Timing का इंतजार कर रहे हैं, but Rallen kind of has the idea कि कोई ना कोई आ सकता है. Oh, misses the shot. Crucial. क्लिक ही नहीं कर पाए वो वहाँ पे. What? Oh, no way! There is absolutely no way. Into the breach ये राउंड जीत के जा सकती है. आप देख सकते हैं disappointment, surprise, shock. कोई चीज से भरोसा नहीं कर पा रहा. ये राउंड वाइटालिटी का था. जिस तरीके से उनको ओपनिंग पिक्स मिल रही थी, जिस तरीके से मेगिस ने वो किल निकाले, ये राउंड उन्हीं का होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए वो किल. वो राउंड even Dupree was surprised. Yeah. अभी के लिए जिस हिसाब से Into the Breach खेल रही है, they're outclassing Team Vitality. And देखिए Team Vitality का एक और टाइम आउट यूज करने में मजबूर किया गया. You already said early timeouts ये कहीं ना कहीं Team Vitality का problems नजर आ रहा है शुरुआत में. They're unable to read, they're unable to understand क्या हो रहा है, they're unable to counter anything properly. Trades बेहतर जा रही है Into the Breach की तरफ से. दोबारा इस्तेमाल किया गया था. Let's see if they find any value. They do have a full buy going around with them, denying them any lift control. आगे जाएंगे, but the flash is good coming in from Apeks. Pings यहाँ पे Rallen के ऊपर एक पिक उठा लेंगे. That is a crucial one. Rallen बहुत ज़्यादा पिक्स उठा रहे थे, ट्रेड के ऊपर कमाल कर रहे थे, but अभी के लिए पुश आएगा Cypher को final shut down, but a quick trade coming in from Thomas, but the double prop up coming through. Apeks good for it. Numbers के ऊपर बड़ा advantage है. Crucial still playing with the AWP. Sidewalk को check करने के लिए गए थे. Doesn't find anybody. Apeks का position already called out था. Grenade, and again a quick peek coming through, another shot, no connection. जी हाँ, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते शॉट को वहाँ पे, लेकिन वोल्ट को ये पिक निकालना पड़ेगा. क्या आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन एपेक्स नो टीम फ्लैश कर दिया वहाँ पे. बहुत क्रूशियल फ्लैश होने वाला था, लेकिन वोल्ट स्टिल गेट्स वन पिक, इज गुड फॉर वन. एक और पिक की जरूरत. क्या क्रूशियल यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे? उनके ऊपर बैक से आ रहा है, लेकिन क्रूशियल हैज नो आइडिया. क्या क्रूशियल देखेंगे इसको? जी हाँ देखेंगे जरूर, बट नॉट क्विक इनफ. वोल्ट इतनी ज़्यादा HP है नहीं उनके पास, उनको पता है बैक से बाहर एक प्लेयर एलिमिनेट करना पड़ेगा. जी हाँ निकाल पाएंगे. 1 versus 2, 40 सेकंड है यहाँ पे घड़ी के ऊपर. C4 भी उठा चुके हैं. या वापस जाएंगे ऊपर? जी हाँ वापस ऊपर जाने की कोशिश. काफ़ी स्मार्ट, लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा यहाँ पे, थोड़ा इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता CT साइड ये जो क्रॉस फायर है वो छोड़ने वाली है. 20 seconds.
It's all about the timing. अभी भी खिलाड़ी वहाँ पे पोजीशन पता चल चुके थे. Go for double swing. That's a round. यहाँ पे team vitality finally able to break something from into the breach, but एक ही round था वो. देखना पड़ेगा कि और कुछ बना सकते हैं. I think यहाँ पे जो initial battle हुआ था, that's something into the breach should have fell back and immediately दूसरी ओर control लेना चाहिए था. But उस timing पे quick peaks आ रहा था. There were many players in A side, जिसके वजह से positive trade हो पाया team vitality के लिए. Into the breach. Let's hope they bring it back again. क्योंकि अभी के लिए अगर double digits ना है मुश्किल हो सकता है. Quick swing coming in from swings with a flash. It's again Rallen down. ये Rallen का जो first pick बार-बार हो रहा है ना मामबा. It's just breaking into the breach from executing towards any place. जी हाँ, रॉलन लास्ट राउंड में पिक हुए थे जल्दी. एंड ये जो मैन डिसएडवांटेज होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है काउंटर करना बाद में. क्रूशल फिलहाल के लिए ऑफ कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि वो ओपनिंग निकालने. लेकिन स्पिंग्स के हाथ में MP9 क्लोज रेंज खेलना चाहते, डबल स्टैक खेलने की कोशिश. बहुत ज़्यादा फैंसी. साइफर गेट्स वन. ऑलमोस्ट दूसरा किल निकालने की कगार पर थे जरूर, लेकिन क्रूशल का ये ट्रेड शानदार, बेहतरीन तरीके से ट्रेड निकाला उन्होंने. एक और किल की जरूरत क्या निकाल पाएंगे. ओह नो, स्टील पिलर उनके सामने आ गया था. वॉल बैंक के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया. मैजिस इज barely surviving. 25 HP is all he has. पुशअप करेंगे. क्विक चेक अगर कुछ नजर आता है. On the other angle it's going to be Xyview with the AWP. यहाँ पे फर्स्ट कांटेक्ट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है into the breach को. एंड vitality is making sure ये नंबर जो है 3v2 ये वैसे ही रहे. Molly आएगा denying the plant even though they get closer. Vault with jump picks trying to spot anything, but I think उनको कोई कुछ नजर नहीं आने वाला. जब plant करने के लिए जाएंगे I think he'll get surrounded. पहले bomb आया, जी हाँ, then the surround hit coming through and Xyview to finally seal the deal. Team vitality एक-एक करके slow but steady वापस आ रही है गेम के अंदर. They're trying to get close to equalize the score. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. वो जो इंसेंडिटी था वहां पे काफी ज्यादा क्रूशल. ज़ायवू को पता था एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है. जिस तरीके से उन्होंने दीवार की तरफ देखा लग रहा था शायद वो लाइन अप करेंगे. एंड बिल्कुल वही किया. प्लान डिनाई करने के बाद जिस तरीके से एग्रेशन दिखाई, ही बॉट इनफ टाइम फॉर हिज टीम. लेकिन ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से निकाले. यहाँ पे देखिए क्रूशल जैसे उनकी टीमें डाउन हुए तुरंत ट्रेड निकाले. लेकिन जो रालन का अर्ली पिक मिल रहा है उसकी वजह से मैन एडवांटेज वाइटैलिटी के पास जा रहा है. वो फिर सिर्फ और सिर्फ मैन एडवांटेज खेल दिए. एंड उनको पता है उनको प्लान करने के लिए आगे आना पड़ेगा. एंड दे जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट अपॉर्चुनिटी. एंड उसके लिए भी काउंटर यूटिल है. जैसे आपने बोला मॉली था, उसके बाद हमें देखे ग्रेनेड आया. ग्रेनेड के बाद तुरंत एक स्विंग आ गया एंड दैट जस्ट पुट द प्लेयर डाउन. एंड उसके बाद क्रूशियल ही हैड टू फोर्स द फाइट इन अ 1v3. तब तक ज़ाइवो ऑलरेडी अपने AWP लगा चुके थे. फाइनली अ टाइम आउट बीइंग फोर्स्ड टू बी कॉल्ड फ्रॉम नन अदर देन इनटू द ब्रीच. ज्यादा राउंड्स बचे नहीं है इस फर्स्ट हाफ में. इज द फाइनल राउंड इटसेल्फ. It is the final round, no doubt about that. लेकिन ज़ायवू देखिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहते हैं यहाँ पे. शायद मुझे लगता है कि वाइटैलिटी हल्का सा ओवर कमिट करिए. लेकिन देखेंगे मेरिस्क स्मोक के अंदर लाला. साइफर हमेशा अपनी टीम के पहला पिक निकालते और इनका कन्वर्जन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है. जितने राउंड साइफर ने फर्स्ट पिक निकाला है वो राउंड को कन्वर्ट कर पाए हैं ज़ायवू. लेकिन तुरंत यहाँ पे जवाब देने के लिए आ चुके हैं. उन्हें पता है राइट साइड पे कोई ना कोई प्लेयर से मॉन्ट ऑफ करके उनको बाहर निकालने की कोशिश करी जाएगी. एंड शॉट नहीं कनेक्ट होगा. साइफर That's 2 in the round. एंड देखिए इनटू द ब्रीच का जो ए एग्जीक्यूशंस अभी तक रहा है इट हैज बीन फेयरली गुड. बट उसका काउंटर फाइनली वाइटैलिटी निकाल चुका है. दे हैव बीन हैविंग बेटर ट्रेड्स इन देयर फेवर. एंड देखिए उनका काउंटर था रालन को पहले पिक करिए. या इस बार वो नहीं हो रहा है. एंड आप देखिए हर वक्त वो साइड वॉक की तरफ से जो पुश आता है दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट इट. हर वक्त एटलीस्ट एक 2-man पुश आता है जिसकी वजह से दे आर ओनली गुड फॉर 1 ट्रेड. फाइनली साइफर जैसे कंट्रोल मिल जाता है ऑल द अदर प्लेयर्स स्टार्ट पुशिंग अप रैम्प्स. एक ही खिलाड़ी अभी के लिए रहने वाला है. इट्स गोइंग टू बी एपेक्स. ही हैज टू ट्राई एंड होल्ड दिस ऑफ बट ही विल बी स्मोक्ड ऑफ इन एवरी डायरेक्शन. ग्रेनेड फेंकने के लिए ट्राई कर रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू पुट अप अ फ्लैश. ट्राइड हिज बेस्ट बट क्रूशियल उनको टेक डाउन करके दिखा देंगे अपने गलील के साथ. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू गिव into the breach the 9. Double digits सही तो नहीं but at least they will have a lead in this first half.
जी हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप बात करें वाइटैलिटी के बारे में, ये राउंड उनके पल्ले भारी था, लेकिन इनटू द ब्रीच उनको बिल्कुल मौका नहीं देने वाला। साइफर ने जो पिक्स निकाले, उनकी टीम के पास इतनी ज़्यादा अच्छी वेपनरी भी नहीं थी, ना उनके पास उतनी ज़्यादा यूटिलिटी थी। एक डीगल था आई बिलीव, एक मैक-10, उसके बावजूद ये राउंड निकाले जा रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट आप देख जरूर सकते हैं। वाइटैलिटी आई स्टिल बिलीव दे नॉट आउट ऑफ द गेम। साइफर 17 किल निकाल के बैठे हैं पहले हाफ में, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। टीम वाइटैलिटी शुरुआत जो था हाफ का नॉट दैट ग्रेट, बट रिकवरी किया। दे आर ओनली सिटिंग विद अ डिफरेंस ऑफ 3 राउंड्स नाउ। 8-7 का भी स्कोर लाइन हो सकता था इफ नॉट फॉर द लास्ट राउंड, जहां पे उनको रैलन को उठाने के लिए मौका नहीं मिला। एंड इनटू द ब्रीच प्लेड रियली स्मार्ट, दे वेटेड फॉर देयर फर्स्ट पिक्स एंड उनको फर्स्ट पिक मिलते ही स्लो एंड स्टडीली दे स्टार्टेड अप्रोचिंग, स्टार्टेड डंपिंग यूटिल, डिनाइड अ कपल ऑफ एंगल्स एंड पोजीशंस, जिसके वजह से हमें ये जो स्कोर है अभी के लिए 9-6 का देखने के लिए मौका मिल रहा है। एंड यू कैन सी हर वक्त इट हैज बीन दैट ए एग्जीक्यूट जो अभी के लिए काम आया है फॉर इनटू द ब्रीच। बी के तरफ जा रहे थे, बैकस्टैप जा रहा था, एक बार आई थिंक सिर्फ एक ही राउंड था जहां पे उन्होंने कन्वर्ट किया। देन वी सॉ अ फिनोमिनल राउंड बीइंग क्लच फ्रॉम एपेक्स, barely surviving। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बट दुप्री कीपिंग द होप्स अलाइव। हर क्रूशियल राउंड में आपको नजर आएंगे कोशिश करते हुए राउंड निकालने की, लेकिन बोल्ड ये राउंड बहुत ज़्यादा मशक्कत करी उन्होंने, लेकिन पॉसिबल नहीं था राउंड जीतना। एंड जब अंदर भागने की कोशिश करी, ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड एंड एक राउंड वाइटैलिटी की तरफ गया था। वाइटैलिटी जो राउंड जीती है वहाँ पे मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम वाइटैलिटी ऑब्वियसली कैपिटलाइजिंग ऑन द मिस्टेक्स दैट इनटू द ब्रीच मेड, वो राउंड्स इनटू द ब्रीच बहुत ज़्यादा गलतियाँ करके हारा है। जैसे उनको राउंड्स मिल रहा था, दे वर लाइक लेट्स कीप इट गोइंग, एंड आई थिंक एंड फोर्स कर रहे थे फाइट्स को। जब उनके खिलाड़ी को गिरा दिया गया था, दे वर क्विकली ट्राइंग टू गो फॉर अ ट्रेड, एंड आई थिंक एडवांटेज वो सीटी साइड पे था तब। आई थिंक दैट्स सम मिस्टेक्स दैट दे हैड टू पे अटेंशन टू, जिसके वजह से ये स्कोर लाइन जो डबल डिजिट्स का हो सकता था इनटू द ब्रीच की तरफ, आई थिंक दे देमसेल्व्स मेड अ कपल ऑफ दिस मिस्टेक्स। बट नॉनदलेस अभी के लिए जो होम ग्राउंड है पूरी सपोर्ट पे है, स्पेशली जो हाफ अभी साइड स्विच हो चुका है। आई थिंक दे विल बी इवन मोर कॉन्फिडेंट दैट अभी के लिए जो टी साइड है उसका मौका टीम वाइटैलिटी को मिलेगा। लेट्स होप एंड सी कि इनटू द ब्रीच क्या अपने मैप पिक जो अभी सीटी साइड पे आएंगे, आर दे रेडी फॉर व्हाट टीम वाइटैलिटी इज गोना ब्रिंग। क्या लगता है आपको किस तरीके से इस गेम को अप्रोच करेंगे? Because vitality, it feels like they're running out of ideas. अगर आप ट्विटर चेक करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया चेक करेंगे, एक्सपर्ट्स तक ये कह रहे हैं ज़ोनिक हर एक टीम के सामने कोच कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर अ ब्रिटिश टीम जिसमें एक प्लेयर डब्ल्यू दबा के AK-47 लेके इज रनिंग अ राइट। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा रैलन को शट डाउन किया, जिसके वजह से इनटू द ब्रीच स्टार्टेड लूजिंग अ कपल ऑफ राउंड्स, बट उसके बाद साइफर एंड क्रूशियल जैसे ऑलरेडी फ्लैग्स उठा रहे थे, they stepped up even further in the last couple of rounds, जिसकी वजह से we see the big score line they have. But जैसे आपने पूछा, अभी के लिए it does look like team vitality are running out of a lot of strats. जो हो रहा है उसका reaction नजर आ रहा है उनके तरफ से, rather than being proactive and trying to take control and info. जी हाँ, 69 स्कोर लाइन वाइटैलिटी अब आ चुके टेरेस साइड पे और इनटू द ब्रीच उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होने वाला है। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी, सीधा जितनी भी कांच दिखाई दे रहे थे उन्होंने तोड़ दिए ताकि ग्रेनेड जब जाए तो पता ना चले, और ये काफ़ी अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम साइवू इनके ऊपर सारा का सारा दारोमदार होने वाला है, इनको स्टेप अप करना पड़ेगा जिस तरीके से साइफर फर्स्ट पिक्स निकाल के दे रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग मॉलटॉफ, लेकिन ये देखिए सीधा मॉलटॉफ के थ्रू भागने की कोशिश, लेकिन रॉलन जिस टाइम पहले पिक हो रहे थे इस बार 2 क्रूशियल पिक्स दिखाए। ओह नो क्रूशियल, ओह माय गुडनेस। मुझे लग रहा है कि वो अपना माउस तोड़ देंगे आज। 3v3
Ryan is the first one to go down. अभी के लिए 3v2 situation बन चुका है. डबल के ऊपर प्रॉप अप कर रहे हैं. ड्यूअल बरेरा के साथ डुप्री को बहुत लो छोड़ा गया. But it becomes a 1v2 situation. अकेले साइफर बचे हुए. ड्यूअल बरेरा के साथ आगे जरूर बढ़ रहे. He doesn't have a kit to defuse. He needs to force the fight. Otherwise उनके पास time नहीं रहेगा. And Cypher makes the 3K happen. Are you kidding me? खिलाड़ी नजदीक भी नहीं थे. साइफर ने फोर्स किया वो फाइट. And they couldn't do anything about it. Look at Cypher. Ice in the veins. Oh my goodness, Cypher. My brother in Christ. What are you doing, Cypher? किस तरीके से ये राउंड्स निकाल रहे हैं आप? वैसे उनके हेडफोन्स निकलने नहीं चाहिए थे उस हिसाब से. हर एक प्लेयर का रिएक्शन देखिए, हर एक प्लेयर का रिएक्शन. Incredible stuff. Cypher is in a form of his life. जिस तरीके से खेले 20 किल निकाल चुके, 10 deaths. And vitality, ये बहुत ज़्यादा. Oh, Volt, almost throwing away that round. देखिए 4 से यहाँ पे आ चुका है. Let's hope Team Vitality has some plan in the CT side. Hold off towards ramp. Finally, good connection coming in. Dupree barely surviving. Thomas ready है. पहले यहाँ पे Ralin. No, make it double for him. Finally, Zawu shuts him down with the triple coming in. Cypher तुरंत भागते हुए rotate कर रहे हैं. Because he's the only person surviving. Can he make the magic happen again? 1v3 situation में पिछले बार भी फंसे थे, इस बार भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं. He does have the weapon, but opponent के पास AK है. I think that's where trouble can start riling up. दूसरी ओर health भी देखिए, Mamba. It's super low on Vitality's end. Health काफी ज़्यादा लो है, लेकिन जिस तरीके, oh no, Zayu gets a 4K by the way. Yeah. Zayu had to step up. Big round. बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली थी step up करने के लिए. I feel थोड़ा सा over extend किया था यहाँ पे into the breach, लेकिन Zayu उनको आप 1 इंच भी देंगे, पूरा का पूरा राउंड निकाल के चले जाएंगे और एक राउंड करके मैच निकाल के चले जाएंगे. Zayu is a world class player. उनके सामने आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन ये देखिए, हर एक जो ऑडियंस मेंबर है सबको मालूम है कितना ज़्यादा क्रूशियल राउंड था ये. Zayu, that 3K was so crucial. They make that buy work. Into the breach. अभी को जरूर नजर आ रहा है. Let's hope another free round for Vitality here without making any mistakes. Crucial जरूर push up कर चुके हैं. Scaffolding की तरफ आ चुके हैं. Can he find any value? Smoke के through जरूर force किया जा रहा है, but finally, oh wait, actually he finds one on Dupree. तुरंत ट्रेड ऑफ जरूर किया जाएगा, but at least it's one rifle shot. Into the breach. अगर ये राउंड निकाल के जाते हैं, I think Vitality fans will start molding. कि इतना बुरा लगेगा उनको, लेकिन मेगिस हर एक एंगल बड़े आराम से चेक करने की कोशिश, बिल्कुल ओवर कमिट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना चाहते, पर मुझे लगता है शायद एक गलती हो सकती है यहाँ पे. जी हाँ, साइफर उनको ट्रेन निकालेंगे जरूर तुरंत, लेकिन Zayu was waiting for him. Zayu might actually be able to get the pick on him. जी हाँ, Zayu patiently वेट कर रहे थे, वहाँ पे पिक निकाला. Roland is still in a pristine position. यहाँ पे छिपेंगे B बैक साइड पे. 2 versus 3 Volt. उनको बहुत ज़्यादा किल्स निकालने पड़ेंगे. He will have to go big अगर यहाँ पे अपनी टीम के लिए राउंड निकालना चाहते हैं. तो डीगल देखिए काफ़ी अच्छी जगह पे खेल भी रहे वो पैसेज के अंदर. Oh no, स्पॉट हो चुके हैं वहाँ पे. जी हाँ, he will get taken out once again. Roland 1 versus 3. Can he pull it off? That is the question. इकलौते प्लेयर है जिनको ये करने की जरूरत पड़ने वाली है. C4 प्लांट हो चुका है, गन जरूर है उनके हाथ में, लेकिन मेरे ख्याल से सेव करना पसंद करेंगे. Vitality getting back into the game. आखिरी वेपन जो है जरूर रालन बचाते हुए नजर आएंगे. पिछली बार हम जरूर हर वक्त जब बात कर रहे थे टी साइड की तरफ into the breach खेल रही थी, it was Rallen that they needed. First pick जब खो रहे थे
into the breach was falling short for the later trades. अभी के लिए Rallen ही आखिरी में बचते हुए नजर आ रहे हैं. It is Rallen to start things off. He riles the opponents off. एक दो पिक निकाल जाते हैं और उसके बाद वो गिरते हुए नजर आते हैं. But अभी के लिए into the breach, slowly falling off momentum. Again, not much to be worried about. पिछला जो round था, it was an eco coming in from them, save करते हुए नजर आए थे. अभी के लिए उनके पास पूरा भाई रहना चाहिए. They should be going all guns in. Let's hope इस बार कोई गलती ना करे so that they can close another round in their favor. Double digits already ले चुके हैं, but ये gap जो है into the breach as well as vitality के बीच में हर एक round के बाद में it is stagnant at 2 rounds. जी हाँ, it is stagnant at 2 rounds. लेकिन यहाँ में मुझे लगता है vitality आराम से एक और राउंड निकाल के जाएगा और ये ग्रेनेड ने जो डैमेज दिया है वोल्ट को जरूर महसूस करेंगे वो. गन्स इतनी अच्छी है नहीं सीटी साइड के पास, तो vitality methodically हर एक एंगल क्लियर करते ही करते they will make the way to the side. इस साइड तरफ जाएंगे, लेकिन क्या सीटी साइड के पास रीड है यहाँ पे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. रॉलन ये गन लेके क्या कर पाते, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. साइफर जिस तरीके से खेल रहे थे उनको बंदूक मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, because he's been on a Cinderella run right now. और ये देखिए ग्रेनेड काफी अच्छा, ज्यादा डैमेज नहीं बट कनेक्ट जरूर किया था. Oh, another brilliant grenade actually coming in from the T side. Vitality यहाँ पे 3 लोगों को साथ में डैमेज करते हुए नजर आएंगे. They're just trying to spam them right now. साइडवॉक से बाहर निकलने के मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे टीम Vitality को, बट जैसे ही वो फ्लेम चला जाएगा मॉल, they will start pushing up. Crucial will the first one to fall down. Double से ट्राई कर रहे थे होल्ड अप करने के लिए, but look at the spam. Thomas is good for one, but Zaivu Rallen को डाउन करते हुए नजर आएंगे. Now it's only Vault. He recovers the weapon Rallen की तरफ से. And I think वो भी यहाँ पे सेव करते हुए पीछे हट रहे. He's already reached up to B, but he's thinking of a push that might come up. एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं. The match is down. राउंड को रिकवर नहीं कर पाएंगे, but at least the only intention अभी के लिए जो नजर आ रहा है is just save this weapon and make sure कि वो हाथ से ना जाए. पैसा उनके पास होने वाला, तो even if they drop the weapon over here, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये जो लूजिंग बोनस है उनके पास आने वाला है, तो they should have about $4,600-4,800 each. तो मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होने वाला है यहाँ पे. But into the breach, अब they're feeling the pressure because जिस तरीके से vitality धीरे धीरे करके कम बैक करते जा रही है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है. और ये जो पहला प्रॉपर बाय राउंड आने वाला है into the breach के लिए, ये शायद ये जो vitality फैंस की खुशी है उसको बर्बाद कर सकता है. Yep. मैं सोच रहा था पिछले राउंड में they'll be going for that, but 2 rounds save and now they have the full buy coming through. 10-9 into the breach. अभी भी लीड है, एंड जो मैं बात कर रहा था 2 राउंड का जो डिफरेंस था स्टैग्नेंट था उसको फाइनली क्लियर करके 1 राउंड में लेके आ चुके हैं. वाइटली सुपर क्लोज. ज़ाइवू इंतजार कर रहे थे बट कोई एग्रो पिक के लिए नहीं आएगा, बट क्रूशियल इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश अप सैंडबैग्स. दिख चुका है ज़ाइवू को एंड इवन क्रूशियल को. बोथ ऑफ देम डिसाइड टू जस्ट बैक ऑफ. अभी के लिए वोल्ट बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं. ही इज बैरली सर्वाइविंग विद 26. Still holding the angle. Vitality भी ज़्यादा push नहीं कर रही है अभी के लिए. Slowly and steadily holding it out. अभी के लिए Cypher, he's going to be the first point of contact अगर B की तरफ जाएंगे. Magic has the right idea कि up close कोई ना कोई खिलाड़ी रहने वाला है, but can he find any value? Small gap. Cypher trying to find some value. Spam करेंगे Magic के ऊपर, damage जरूर करेंगे, and Magic side that he has to back off. Actually, he's challenging. काफी ज्यादा बॉल्स ही प्ले कर रहे साइफर यहाँ पे. जितना भी उनका मोमेंटम है उसको कैरी ऑन करने की कोशिश. 2 HP पे वहां पे सर्वाइव करते हुए ऑलमोस्ट बीइंग टेकन डाउन, लेकिन अभी भी 5 vs 5 सिचुएशन. इनटू द ब्रीच 35 सेकंड खड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से साइट होल्ड कर, लेकिन को ये पहला पिक निकालना पड़ेगा जरूर, लेकिन वो हो नहीं पाएगा. क्रूशियल उनको शट डाउन करते हुए यहाँ पे साइफर रुके हुए थे बी साइड के ऊपर. इकलौते प्लेयर क्या होल्ड कर पाएंगे उनको. स्पॉट जरूर हो चुके हैं, उनके ऊपर पुश भी आ सकता है, लेकिन उनको जिंदा रहने की जरूरत. Look at this, the amount of confidence on this one. My Lord Cypher, this is unreal stuff. इकलौते प्लेयर वहां पे साइड होल्ड कर रहे थे. रॉलन बैक स्टेप पे आने की कोशिश, इंफॉर्मेशन रिले हो चुकी है. स्पिंग्स पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे जिंदा रहने के लिए. रॉलन बैक स्टेप पे जाएंगे. साइफर, व्हाट इज दिस मैन अप टू? क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं? The timing of the push, वहां पे तीनों साथ में जाके पुश किए. They planted it down, but
the timing of the backstab and Cypher's push उसको counter बिल्कुल नहीं कर पाया and Cypher just took down both the players. वो खिलाड़ी अपने सिर छुपा के झुकना चाहते थे but the timing of the peak coming in from Team Vitality's player was a little bit too late. पहले planter को गिरा दिया and उसके बाद the pillar के around जो खिलाड़ी थे उनको and the player who's trying to hold off the backstab कुछ नहीं कर पाए वो रैलन के हाथों ही मरते हुए नजर आए. That is going to be into the bridge, bringing back the 2-round difference. साइफर जिस तरीके से आपने कहा था कि 2 राउंड का डिफरेंस बरकरार रहा है इनटू द ब्रीच और वाइटालिटी के बीच में, उसी तरीके से वो 2 राउंड का डिस्टेंस बनाते हुए लेकिन इनटू द ब्रीच आई थिंक साइफर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा. वोट ने यहाँ पे पहला पिक निकाला डुप्री के ऊपर और ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. इकलौते एंकर कर रहे हैं साइफर वैसे पूरी की पूरी बी साइड को. Dupree has always been the first to eat up some utility. Either grenade या molly के ऊपर चढ़ जाना and उसके बाद थोड़ा health चला जाना and I think that's what happened again and उसके बाद Walt उनके ऊपर pick करी. Apeks also falls with his A push but matches he was expecting दोबारा कोई ना कोई खिलाड़ी रहेंगे aggressive. इंतजार किया, barely smoke fade out हो रहा था, तुरंत उन्होंने साइफर के ऊपर kill निकाला but यहाँ पे crossover के लिए तो ग्रेड का इस्तेमाल किया, तुरंत क्रॉसओवर कर लेंगे बट रालन गेट्स पुट डाउन. इंतजार कर रहे हैं कि कूलर की तरफ कोई पीक कर सकता है बट अभी के लिए आई थिंक उसको स्मोक ऑफ करके प्लेयर को वापस बुला लिया जाएगा टू गेट बैक इनटू पोस्ट प्लान पोजीशनिंग. इट इज अ 2v3 सिचुएशन. आई डोंट थिंक यहाँ पे या रीटेक के लिए जाएंगे. हैविंग एन AWP सेव जरूर कॉल कर लेंगे बट लुक एट दिस barely. That shot was too good and उसके बाद तुरंत रालन के ऊपर मैचेस की कनेक्शन. I think Cypher felt it कि दोबारा मैंने गलती किया थोड़ा और अग्रेसिव खेल के. पिछले बार भी मैचेस को ये डाउन किया था so it was an expected position. Double digits now for none other than Team Vitality. थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलती करी थी वहां पे इकलौते प्लेयर जब क्रॉस कर रहे थे. ए पे ट्रेड सॉरी बी पे कोई ट्रेड करने के लिए था नहीं एंड अनफॉर्चुनेट पिक ऑफ साइफर का वहां पे. लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आपको मेजर्स को जिस तरीके से उन्होंने पुश किया, जितनी आसानी से उन्होंने उनको पिक ऑफ किया पेशेंस के साथ. बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पे टाइम आउट लेते हुए इनटू द ब्रीच. फीलिंग द प्रेशर राइट नाउ. वाइटालिटी फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे टीम के कमबैक के साथ. लेकिन देखिए गॉड कितना ज्यादा सपोर्ट है जायू के लिए. I mean, he's been putting up a show like that. तो जरूर रहेगा उनके लिए ऐसे सपोर्ट. And now you can see, I think ये टाइम आउट जो into the breach की तरफ से आया ना Vitality, they'll be feeling a little more confident. क्योंकि ये early टाइम आउट उनके तरफ से नजर आ रहा था when they were in trouble. अभी पता चल चुका है कि it is none other than into the breach in trouble. Let's hope अभी जो बातचीत कर चुके हैं अपने कोच के साथ, let's hope कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे into the breach. अभी तक अलग ही कर रहे थे but it was just Vitality forcing the duels better and understanding वो similar positions पे जो into the breach खेल रही है उनको punish करते हुए नजर आ रहे थे. Look at this again, understanding कि Cypher up close मिलेंगे, punish करो उनको and he becomes the first, makes the B completely vulnerable and Matches goes bonkers, picks up a 3K, opens up the B side entirely for his team. क्या ये खेल रचा गया है यहाँ पे Matches की तरफ से. This ran in classic counter strike strategy. जो tactical time out होता है उनके बाद उनको ऑफ गार्ड पकड़िए, वो पेस स्लो करने की कोशिश करेंगे, आप उनको ऑफ गार्ड पकड़िए और Mages just going in with the triple kill on top of it. जो 3 किल उन्होंने निकाले. Incredible stuff. बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस. And तुरंत यहाँ पे मजबूर किया गया उनको सेव करने के लिए. There's nothing that into the breach could even think about doing. But यहाँ पे dual face फोर्स कर रहे to make sure कोई weapons ना बचाया जाए and that is Team Vitality shutting down into the breach. Time out के बाद nothing works. Unstoppable machine बन गया यहाँ पे. This is आप Cypher खेल रहे थे ना. It looked like a mirror gameplay coming through. जो Cypher करके दिखा रहे थे Magisk replicates the same thing. W, full on W. Yeah.
बॉय ओ बॉय, इनटू द ब्रीच। अब किस तरीके से यहाँ पे उसको खेला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। 5 मैन ए पुश एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ए की तरफ, सॉरी 5 मैन बी पुश एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बी की तरफ आएंगे, एंड ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होना है स्पिंग्स के लिए होल्ड करना, अनलेस ऑफ कोर्स दे स्टार्ट वॉकिंग वन बाय वन। एक किल, 2 किल, 3 किल, चौथा भी मिलेगा उनको। जी हाँ, Well done, Spinks. Go get your 5th. जा रहे वो जरूर, कॉर्नर चेक करना पड़ेगा, पर Rallen he denies him of that. Weapon recover कर लेंगे, and I think he'll immediately try to run back. But दूसरी ओर से प्रेशर बनाते हुए, they want to take this weapon away. आगे जरूर आ रहे हैं bitches. Is he going to be ready for the swing? जी नहीं, Rallen connects another headshot. Stairs से एक खिलाड़ी आ रहे हैं, आगे से एक खिलाड़ी आ रहे हैं. There was just too much pressure coming in. Rallen at least tries to do some damage उनके इकोनॉमी में, but अभी के लिए फाइनली वाइटैलिटी ना सिर्फ राउंड को क्लोज आउट करके इवन स्टीवेंस लेके आ चुके थे, दे टेक अवे द लीड। फाइनली एपेक्स के चेहरे में आप देख सकते हैं खुशी नजर आ रहा है, ही इज फाइनली लाफिंग, एंड दिस विल बी द सेम रिएक्शन जो टीम वाइटैलिटी फैंस भी फेस करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इनटू द ब्रीच ऑप उठा लिए क्रूशल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मौका होने वाला उनके पास। नेट जरूर डाली, इतना ज्यादा डैमेज देंगे नहीं, लेकिन क्रूशल अगर जरा सा भी ओवर कमिट करते, ज़ाइवू बिल्कुल नहीं रुकने वाले, वो टेक डाउन करेंगे, एंड वो धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश, लेकिन वो ऑलमोस्ट गेट टेकन डाउन। ऑफ गार्ड पकड़े गए थे वहां पे, क्रूशल ने खुद के ऊपर स्मोक डाला क्रॉस करने के लिए। ओह नो! Oh my goodness, Crucial. You can't afford this. Not in this round. ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन थॉमस स्टेप अप करेगा अपनी टीम के लिए। मेजेस क्या किल निकाल पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। हिल रहे थॉमस, नहीं वो नहीं निकाल पाएंगे। साइफर इन 1 versus 3 एक और बार, क्या यहाँ पे ये राउंड निकाल पाएंगे? कैन साइफर वर्क हिज मैजिक अगेन? बहुत ज्यादा क्रूशल, बहुत ज्यादा जरूरी। C4 उनके सामने, ओह C4 उनके सामने, गन भी उठा ली जाएगी, स्मोक डालेंगे अपने सामने। This could be his round. This could absolutely be his round. एक गलती के बाद दूसरी गलती दोहराते हुए हर एक टीम यहाँ पे, साइफर अपना बैकस्टैप क्लियर करते हुए, उनकी गन शायद नीचे से बैरल विजिबल होगा। जी हाँ, अभी भी एंगल होल्ड कर रहे हैं, क्या वो किल निकाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता है वहां पे किल निकालना इतना आसान होने वाला है। C4 उठा लिया गया है, जी हाँ, एंड एपेक्स, ओह माय गुडनेस, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट। This is just pressure that's happening to Into the Breach. Vertigo is such a map. कभी-कभी वो players को consume करके नजर आता है, and in pressure you make the mistakes. And I think Into the Breach, they're breaking apart. थोड़ा उनके chink in the armor नजर आ रहा है यहाँ पे, and I think उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम वाइटैलिटी फोर्स करके exploit कर रही है। They're making Into the Breach make mistakes. Not that downfall. I'm pretty sure अभी के लिए Into the Breach will not be happy. 2 राउंड का जो लीड उनके पास बरकरार था, वो 2 राउंड का लीड टीम वाइटैलिटी के पास जा चुका है, and now they've been they're having a mixed play. देखिए, हर वक्त जब भी हम यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, there's always that initial connection जिसको गॉबल अप करते हुए डुप्री नजर आता है। इस बार भी ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज खाया, बट ही स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइटिंग। इस बार ज्यादा डैमेज नहीं खाएंगे। ज़ाइवू स्टिल वर्किंग हिज ऑप मैजिक। I'm sure Crucial बहुत ज्यादा दुखी होने वाले जो चीज हुई थी उनके साथ उसके बाद, एंड इट कुड बी अ मेजर लूजिंग ब्लंडर। जिस तरीके की पोजीशन में थे वो वहां पे राउंड जीत सकते थे, पैसा कम कर सकते थे वाइटैलिटी के ऊपर। आई थिंक साइफर उनको दिया गया। जी हाँ, साइफर उनको, ओह दूसरा स्मोक उनकी मदद करेगा वहां पे। What is going on? उनके एकदम नीचे बैठे थे वहां पे, लेकिन किल नहीं निकाल पाएंगे। Backs off the cover.
It is still a 5v5. Oh, what an angle. Apeks cooler के around. जरूर एक खिलाड़ी को down करेंगे. Looking forward to an opening. Rallen, can he find any picks? बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोस्ट प्लान खेला जा रहा है टीम वाइटालिटी की तरफ से. फाइनली एक जंप आएगा एंड Rallen finds his first. ऑप के ऊपर ट्रेड निकालने के लिए ट्राई किया जरूर. दोबारा एक रिपीटेशन हो सकता था Zaiwu, but I don't think he's going to make such expensive mistakes with his AWP. That's Team Vitality putting themselves to 14. एक और राउंड दूर रहने वाला है मैच पॉइंट से. Into the breach, but the major. Oh, Apeks. What a shot. Rubbing salt on their wounds. Absolutely rubbing salt on their wounds, no doubt about that. लेकिन Vitality, जिस तरीके का कमबैक उन्होंने किया, जिस तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब किया है, तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी. क्रूशल एक और बार ऑफ लेके बैठे यहाँ पे. क्या इस बार वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? Zaiwu always having this A ramp control. It's undeniable, जिसके वजह से into the breach भी कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी ओर Vitality playing really smart towards B. They're forcing the players at B to also back off. I think उसी की वजह से बहुत बारी into the breach को जैसे ही back off करने के लिए मजबूर किया गया. There's an opening being found. इस बार Cypher मजबूर करते हैं एक fight लेने के लिए at default. A little bit off, जहाँ पे तैयार रही थी Team Vitality. Finds the first pick. Apeks is going to be down. Cypher on the other end, he's also taken over, beating 34 HP पे सिर्फ बचे हुए. Reposition करेंगे अपने teammates के साथ. Now it's going to be Rallen in the same position and Cypher looking forward to covering him in the other angle. 3 players here. It's going to be tough to fight it out. Matches still finds one. There's immediate shade coming in. Cypher जरूर एक निकालेंगे, but finally Cypher को गिरा दिया जाएगा. Default has been taken control of, but Spinks का position देखिए. He's trying to wait and catch them off guard as he heads up. And जी हाँ, कनेक्टर की तरफ एक खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे. And that is now left only up to Crucial. 1v3 situation. AWP and he's pushing up. Already खिलाड़ी खड़े थे इंतजार करते हुए उनको. What a propped up aggressive position. Another round for Team Vitality and they are at none other than map point. Vitality एक राउंड करके यहाँ पे पनिश कर रही है into the breach को. जितनी भी गलतियां करने का मौका मिल रहा है, जितनी भी गलतियां कर रहे हैं into the breach, उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं. Vitality तारीफ करनी होगी जिस तरीके से प्रेशर एब्जॉर्ब किया. Phenomenal stuff. I think जैसे आपने बोला, like that pressure जिस हिसाब से खेल रहे हैं Vitality is just brilliant as of now. Like even though जैसे आप एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं, वहां पे ही प्रेशर उनको नजर आ रहा है, but they're still able to find a way to trade it, push up, fight them against their util as well, and work it out. Yeah, this job site has suffered one injury, and one of the biggest and costliest ones. Crucial का fall. Zaiwu in the meantime. क्या वो वापस अपना जादू दिखा पाएंगे? क्रूशियल के पास पैसा नहीं है, MP9 लेके खेलना पड़ेगा. आसान राउंड नहीं होगा into the breach के लिए जीतना, लेकिन अगर ये राउंड निकालते हैं then maybe we're in for overtime. Because अगर ये राउंड वो जीत सकते हैं तो फिर वो कोई भी राउंड जीत सकते हैं. Yeah. Dupree in the meantime information निकालने की कोशिश, वापस नेड उनके ऊपर आते हुए. And Rallen स्पैम करने के लिए लाइन अप कर रहे थे अपने आप को. Crucial, 35 HP. Push up कर रहे हैं, sidewalk and जी हाँ, Dupree finds the first one. That's the opening that Team Vitality needed. अभी देखिए, they're immediately running right towards B, I think so. Time कर रहे हैं अपने आप को. A के तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो प्रेशर बनाते हुए नजर आएंगे, and he's also slowly backing off. Cypher again with the responsibility to put a stop to it. Mid के तरफ आगे बढ़ रहे थे खिलाड़ी, but it is going to be Thomas going down. Cypher as well falls down through the edge of the smoke. Majesk making magic happen यहाँ पे देखिए. I think this is done. Mamba is not looking things working out in the favor of the breach. Loses 2 players. Spengs with a 2K to close the map, and यहाँ पे Team Vitality उनका मैप नहीं था, but फिर भी यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया उन्होंने. Vitality were the favorites. जिस तरीके से वो मैच के अंदर आए थे, जिस तरीके से टूर्नामेंट में उनका रन रहा है, 9 मैच की
उनकी विन स्ट्रीक है 18 मैप में से सिर्फ 2 मैप हारे हैं वो 16 मैप्स जीते हैं मेक द 19 बाय द वे 19 मैप्स प्लेड 2 लॉस्ट एंड 17 वन एक और मैप और 10 मैच की विन स्ट्रीक होगी वाइटैलिटी की रेड हॉट फॉर्म में चल रहे फिलहाल के लिए They've had a super clean run उसको बरकरार रखते हुए यहाँ पे भी ओपोनेंट के मैप के ऊपर पिक निकाल चुके हैं नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी Anubis जिस जो उनके खुद के पिक है दिस इज गोइंग टू बी सुपर टफ फॉर इनटू द ब्रीच लीड जो था कैपिटलाइज नहीं कर पाए टी साइड पे जैसे आए वाइटैलिटी उनका जो एग्जीक्यूशन नजर आता दे फिगर्ड आउट कहाँ पे उनके जो मेन फ्रैगर है जो हैवी डैमेज डील करते हुए ज्यादा से ज्यादा किल्स निकाल रहे इट वाज साइफर उनका पोजीशन जब भी पता चला इट वाज ऑलवेज वन प्लेयर होल्डिंग ऑफ एट ए जनरली जाइवू रैम्प को होल्ड करते हुए नजर आया बाकी सारे खिलाड़ी राइट बिहाइंड मैजेस्क पुश करते हुए नजर आते हैं एंड मैजेस्क इमीडिएटली गोइंग ऑन अ ड्यूल विद साइफर वाज जस्ट इनसेन वो एक बार मैजेस्क डाउन हुए थे उसके बाद कभी भी मैजेस्क was never falling prey to Cypher. It was always Cypher being taken down. जी हाँ बिल्कुल सही कहा तोड़ निकाल लिया था एक बार और तुरंत उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड दैट्स जस्ट ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और आप देख पाएंगे रीप्लेस के अंदर भी किस तरीके से तोड़ निकाला था वाइटैलिटी ने इनटू द ब्रीच का ग्रेट हाफ फॉर टीम वाइटैलिटी मतलब टी साइड का क्या ही बेहतरीन उपयोग उन्होंने किया है एंड आई थिंक यूटिल का भी अगर बात करेंगे आई थिंक डुप्री एज वेल जैसे हम बात कर रहे थे टू gobble a little of the damage on himself and still force a couple of duels towards A ramp वो बहुत बेहतरीन था जहाँ पे वो एक पिक एटलीस्ट निकाल के वापस आ रहे थे बट लेटर पता चलने के बाद कि into the breach कैसे खेल रही है it was just brilliant but Cypher come on man this was not something that you see normally जिस हिसाब से Cypher both CT as well as T side पे खेल रहे थे it was just insane but finally उनका proper counter में just करते हुए नजर आए थे they started denying them सिर्फ 2 rounds I think into the breach their CT side looked super weak जी हाँ एंड इनटू द ब्रीच काफी अच्छी पोजीशन में थे वहां पे लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए काफी कोशिश करी लेकिन वाइटैलिटी जो कहते हैं ना चिंगदा आमर हर एक जगह पे ओपनिंग निकाले थे जितनी भी जगह मिल रही थी उनको उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड अपने लिए जगह बनाई एक एक राउंड करके कैपिटलाइज किया एंड देन वाइटैलिटी ऑब्वियसली कमिंग ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट मैप सुपर हैप्पी टीम वाइटैलिटी एपेक्स को भी आपने देखा रिप्ले में भी दोबारा दैट टीम गॉट एवरीथिंग इन कंट्रोल आई थिंक जिस हिसाब से अपने आप को पोजीशन पे लेके आ रहे थे अंडरस्टैंडिंग कि इनटू द ब्रीच प्रेशर में खेल रही है अभी दे जस्ट वरीड ऑफ लूजिंग राउंड आफ्टर अनदर they started making some wonderful plays vitality हर एक डायरेक्शन पे पुश करते हुए नजर आ रही थी जहां पे भी साइड की तरफ एक फ्लैंक कर सकते हैं they started making that happen mid push कर रहे थे साइड पुश कर रहे थे they were making sure हर वक्त keep in check the players of into the breach and इसके वजह से टीम vitality in their home ground making their fans super proud पहली गेम अपने नाम कर चुके हैं अभी के लिए ये गेम होने के बाद हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक आप कहीं मत जाइएगा सुपर इंटरेस्टिंग मैप ऑफ वाइट टीम वाइटैलिटी इटसेल्फ Anubis देखने के लिए मौका मिलेगा अगेंस्ट इनटू द ब्रीच क्या इनटू द ब्रीच कुछ कर पाएंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक
than they were. And then that's when Cypher punished, that's when he pounced and he showed that skill and that pizzazz. You see the attitude? He's got Roland next to him like shushing the crowd and he's just having fun. Like, this is what we're talking about. That's a competitor. Yeah, Cypher and nuisance both in and outside the server indeed. And the man is continuing for Into the Breach on that first half of Vertigo. So Danny, what moment have you picked out for us? It's round 10 that I want to talk about, and it's also just a display of how this aggression is also a team effort. So let's take a look at this round right here. First starts off 4 people or 5 people here towards this A ramp side. Starts off with the Molotov from Crucial. Now off of this Molotov, take a look at what they do. They just swing into the site off of the Molotov. And what this does is it allows them an opportunity for them to catch ZywOo in the side and as well Apeks in the site as well. Quick double entry. But why does this work so well exactly? So the first thing is that this Molotov, typically when you throw this Molotov here towards the sandbag, it's normally just a default Molotov. It's to flush out any players here towards that sandbag position. It's not really a sign of a commitment. On top of that, normally when you hit the A site, you typically throw these 2 smokes here to isolate the site. But because they don't actually do that, it leaves Apeks in a spot where he's essentially, as soon as he sees that Molotov, he thinks that he has time to try to push back with utility. But little does he know, the push comes in immediately. He's completely out of position here. At the same time, ZywOo, who's holding here towards Gap, he doesn't even expect this push at all. He's completely caught off guard. And as well, take a look at the pathing that they take. After they throw that Molotov, the pathing right here, Volt, he goes straight here behind the boxes, allowing him cover. At the same time, Thomas, he goes wide. What that does is it allows them to actually double peek ZywOo on the left side, while at the same time, Apeks here, he can't get a clear angle on either person. If you look at this again from Apeks' point of view, when he peeks out, he doesn't really have a clear shot on either of these people. And that's really the key thing to this play, is both the utility, the timing, and as well as the pathing that make it all work for ITB here on the T side. Absolutely love that breakdown once again from the Mahone zone, because Jacob, it really illustrates your point. On that T side for Into the Breach, if they found a hole, they were able to exploit it. They were able to exploit it. Some individual prowess came out from Cypher. The rest of the team as well backed it up. And again, we gotta give credit where credit is due. I think a lot of us potentially would be fearing that Into the Breach couldn't make this a close game. I think they did it in the first half. I think Vitality really had to sweat for it. You said it as well. The crowd had to settle down a little bit. They were probably getting worried as well. But fact of the matter is, once we got into that second half, there was nothing being offered from Into the Breach whatsoever. Yeah, that's usually the issue when you're trying to poke at the bear, to poke at the favorite. When you are dictating the pace, when you are at the initiative, and you get to print the rhythm that you want, you find yourself in a zone of comfort. You take all these viewers, you're having a grand old time. Problem is, once you switch the sides, it's a different story that's being told. It's Vitality who's slowing down. They're exploiting Magisk's impressions and experiences we've talked about on the T side. We've pinpointed him as a key factor. Had multiple impactful kills on the B side from that stair position. Even Spinks was having a great success as well, and I think Vitality just got ITB exactly where they wanted them. They knew how they had to play, they knew the patience they had to demonstrate at such time. They didn't allow Roland to have some of these aggressive lurks, and honestly, the score, or I guess the end of the game, didn't really was a question for us. Like, we knew Vitality were in control in that second half. It was just a question of time before Vitality would win the game. I fully agree with you. Sometimes we can also dumb it down to a point where I felt like there was just not enough quality on the Into the Breach players in order to stop Vitality. I'm looking towards Volt, Crucial, and Thomas, who played 12 CT rounds and combined for 9 kills between the 3 of them. If you do that in a game against Vitality, where Spinks is fired up, where Magix is fired up, where ZywOo is also starting to wake up, you need firepower on the server. And I hate to say that word, but in this matter, I felt like that was the difference right now for Into the Breach. In that second half on the CT side, the players lacked quality. Just look at the scenes going down in this arena right now. This is why we were so damn excited to be gracing the Accor Arena in Paris. I mean, this audience, the atmosphere, it is simply electric down here. I'm just letting it sink in. I'm having a good time. We need a bask in moments like this, right? Like, this is why we say, and this is why we talk about the growth of CSGO. Like, if we're just reflecting for a moment upon where we started as to where we are now, like,
this is just so epic. It's amazing to get this convergence of all these different communities coming together. It's beautiful. We've been all over the world, right? Right now we find ourselves in France, in Paris. Not so long ago we were in Rio and Brazil. We've been in America as well. The MLG makers over there also delivered at a high level. It doesn't matter where we take this circus, where we take Counter-Strike. It seems like people just like us are enjoying it a lot. Absolutely love it. I love basking in moments like this. We do need to move on to talk about the second map in this series. That would be Anubis. That is Vitality's pick coming through, which we've seen them, Matthew, you kind of preface this as becoming more of a solid home ground for Vitality to be reliant on. Yeah, they have really put in the hour, the work and the results to establish Anubis as one of their strongholds. It's one of their fortress. They've been one of the first teams to truly embrace that map, and we see here the man, he's embracing the public. Of course, I will go ahead, my man. You belong here, they belong to you, they're your fans. We're moving on to Anubis now, and things could not look more dire for Into the Breach. The results from Vitality are very, very strong. They're on a hot streak, 4 maps win in a row. That's the likes of Monte, FaZe, and G2 as well is in there. I think they've done the hardest. I think Vitality have survived the first tribulations of the first map, and now we're settled in. I agree. The results that you have to showcase for yourself when you're Vitality, taking down Monte at this tournament. Monte came in with a 15-game win streak on Anubis. Vitality won that fairly easy, 16-10, taking down FaZe, taking down G2. Right now, it does seem like Vitality, as we spoke about coming into the matchup as well, Matthew, they have that map pool to back it up. There were different routes that could have went with this video, but even though we can question whether or not Anubis is smart, it does feel like Vitality are so good on so many different maps that I'm not even slightly worried, to be honest. And this is yet another area where we've seen so much growth of Vitality. I don't want to keep gassing up the bees in the arena, but you kind of have to, because Dust 2 gets taken out of the pool. That was basically the only ground that we were saying Vitality was a consistent force, was one of the top teams on, right? When that map pool got shaken up, we were worried for them, and it's fantastic to see the growth and the maturity that they've had coming into this new pool. Yeah, and it was a process of trial and error if you're Vitality, right? We remember all the focus they put on Mirage for a while, and it didn't really pay off. I think they got to a relatively decent position without being able to assume that in a veto. Then we've seen Inferno, they've struggled quite a lot, and even I personally think this might be one of the weaknesses in the whole castle of Vitality, currently moving a little bit of the setup on the CT side. But they do have these 3 maps that we mentioned in the pre-show: Anubis, Nuke, and Vertigo. And these are such tactical, punishing maps. Every single team that has dominated in the years of Counter-Strike had a couple of maps where they could attack you in the video and punish you. I think that's the case of Vitality right now with that Triumvirate Rate of Doom. This is also one of the few maps when we talk about Anubis where it's not all about Saivu. It's not just the Saivu show. Looking into the stats, Spinks is the highest rated player on their T-sides on Anubis, and they win an awful lot of their rounds on that T-side. He's averaging a rating of 1.52 over 8 maps on that map, which is absolutely insane for a rifler on a map like Anubis. I know it's heavily T-sided right now, and I know most teams feel comfortable on that map, but that's the point for me. We always talk about Vitality. We always look towards Saivu when we need something to happen on the server. If they're under pressure, Spinks can be that guy for you right here on this map. And honestly, just to bounce back on the Zaiwu part, obviously the first map wasn't a firework per se. He doesn't end up with 150 rating. He doesn't have 42 kills. But when Vitality is down 10-7, they're forcing, and there needs to be a trade. Who steps up with the triple kill? It's Saiwu with the AK. It's Saiwu making that difference. And I think this is what we want. This is what we expect from him. Not only to top stats, not only to be a super hard carry, but just to find moments of explosiveness, moments where, hell, I am needed right now. I can change the tide of that game. If we step up, if we win this force buy, if we reset the economy, I'll put my team on track. He did that on Vertigo, and that's all we can hope for. I'm just looking at some of the stats from that Monte game, because as you aptly said, you know, Monte on such a hot win streak on the particular ground of Anubis. It was actually Magis to be topping the charts, rather, on both the T and CT side. We saw him igniting in the tail end of Vertigo. I'm worried for Into the Breach going up against this Dane. Me too. He's been fantastic in the tournament so far. The highest rated player on the T-sides in the entire tournament, and I think he actually equaled that rating, having a 1.54 rating on Vertigo, so it makes an awful lot of sense for him to play well. Into the Breach, they have a shot at making this game competitive. They're already lost to Liquid at this tournament, so I think a lot will have to go wrong for Vitality not to win right here, right now. Well, the Temple of Anubis does await Vitality's pick coming into things. They're gracing the stage in front of their home crowd and tantalizingly close now to the semi-finals. The second quarterfinal, it is Into the Breach versus Vitality. मेरा नाम है मामा, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त लूसिफर,
who's been helping me through. और ये जो पहला मैप था शुरुआत में लगा था into the breach, might actually be able to breach their defense and Vitality को शायद हरा पाती. 11-9 तक उनके पास बढ़त थी, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए. Vitality की अगर बात करें 9 मैच की विन स्ट्रीक के ऊपर है. 19 मैप्स में से 17 मैप्स जीते हैं पिछले और 2 मैप्स हारे हैं. Incredible form, red hot form. होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं. Dupree, Mages, Apeks, Zaiwu, Spinks, and into the breach के लिए हमारे पास है Thomas, Wold, Cypher, Rallen, and Crucial. But map number 2 in the second quarterfinal, ladies and gentlemen, Anubis होने वाला है. And Vitality T side पे start करेगी, जो एक बहुत ही heavily T sided map है. Yeah. अभी आपने सुने, like Vitality have made this their home ground. Zaiwu starts it off as the first blood. Wall जरूर तुरंत उसका एक ट्रेड करते हुए नजर आएंगे. But let's see how far it'll go. अभी के लिए बहुत तेजी से भागते हुए क्रॉस करके सारे प्लेयर्स को डॉज करते हुए नजर आ रहे हैं Vitality, and will very soon get to planting. Yeah, Majes has started the plant, but Rallen in the meantime has found Spinks. यहाँ पे situation 3v4 का बन चुका है. Majes is not looking great on health, and Zaiwu was trying to find a situation जहाँ पे numbers को equalize किया जाए, but Majes, he's actually doing that right now in a situation of 1v1 as he takes down the last second player. Cypher with full 100 HP position पता चल चुका है, but Majes is just running barely to rank 20. Cypher trying to force the fight, and Majes, he closes it with just 20 health zone के ऊपर था. That's the first pistol round, Mamba. ये जो रन बूस्ट था बहुत ज्यादा क्रूशियल था in terms of timing, and Zaiwu को ये जो प्लेयर पीछे भागते हुए मिले थे वो रन बूस्ट की वजह से मिल पाए थे. बेहतरीन रन बूस्ट था वो, and incredible stuff from Vitality. जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके की एक्सपर्टीज दिखाई उन्होंने इस मैप के ऊपर, वो शानदार है. That was a great and a fantastic start. अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं तुरंत इस जो फायरी स्टार्ट को डोज डाउन करने का, but it's just been trays and Majes again वो सिर्फ ब्रिंक एजेस द स्मोक पे थोड़ा पिक्सल जो नजर आता है उसके ऊपर एक पनिश करेंगे, तुरंत प्लांट कर देंगे, and we are at a 3v2 situation. Another round force किया था यहाँ पे into the breach, and it's not looking good for Cypher. A nutcracker. AK-47 के सामने जो डीगल डैमेज देती है कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक गोली लग जाए, Rallen एक और किल निकाल दो स्पिंक्स के ऊपर, दिस कुड एक्चुअली वर्क आउट इन द फेवर. Apeks मॉलोटोव लाइनअप करके बैठे जरूर है, लेकिन क्या वो डिफ्यूज कर पाएंगे? डिफ्यूज स्टिक कर रहे हैं. Rallen is sticking the defuse. Oh my goodness, is this going to work out? Rallen is sticking it. He's somehow going to make it happen. Oh my goodness. Apeks. Oh my goodness. Every bullet जो उनके मैगजीन में था सब फायर कर चुके थे, आखिर में अपने नाइफ के ऊपर भी आ गए, but just because of that smoke, उनके पास किट भी नहीं था मामा, फिर भी he made that defuse. Oh भाई साहब, जिस तरीके से डिफ्यूज आया था, this shouldn't have happened, absolutely should not have happened. And Vitality बुरा जरूर लगेगा उनको, लेकिन वो जो एक किल था मेजिस के ऊपर, साइफर ने एक और बार निकाला, शानदार किल. Man oh man, 1-1 off to a fiery start. Vitality को सीधा डोज डाउन करते हुए नजर आए, उनके ऊपर पानी फेरते हुए नजर आया, and right now it is Vitality still going to be having bias. Push out RS. Cypher is going to be the first point of contact. He's good for it. Spinks को down कर चुके हैं. Dupree is trying to find a trade. He'll also fall prey to none other than into the breach. Execution की तरफ जा रहे थे, and ये भी सिर्फ decimation face करते हुए नजर आ रहे. Cypher finally goes down. When numbers का अगर बात करेंगे, it is into the breach having advantage. Rallen finding a one off guard. Apeks गिर चुके हैं. Crucial. ये क्या हो रहा है? Team Vitality look lost in their own map after that first round. I don't even know what's happening right now, लेकिन Zaiwu 6 HP पे survive कर रहे हैं 1 versus 4. 40 सेकेंड है उनके पास, लेकिन एक भी गोली छुएगी अगर उनको तो उनकी मौत लिखी जाएगी. लेकिन क्या ये क्लच कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला है. उनको एक पिक निकालने की जरूरत, ताकि कम से कम वो C4 प्लांट कर पाए. उसके बाद 3 और किल्स निकालने हैं, एक एक करके उनको किल्स निकालने होंगे, लेकिन जी नहीं, it's not going to work out. Volt वहां पे उनको शट डाउन कर देंगे, and into the breach somehow.
making a comeback. Unbelievable. जो rounds को हम सोचते कि it should not be the rounds which should be taken away. पहले वो defusal, उसके बाद ये push into the breach. वो यहाँ पे actually पूरा पढ़ के यहाँ पे तैयारी के साथ आई है, ऐसे ही लग रहा है. That making sure Vitality को off guard ही हर वक्त पकड़ा जाए. वो हमने शुरुआत में भी देखा था लास्ट मैप के, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे. वाइटालिटी के पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको काउंटर करना इतना आसान. उसको उस एक्सपीरियंस को काउंटर करना इतना आसान नहीं होने वाला है. जब आपके पास ज़ायू जैसे प्लेयर हो, स्पिंग्स जैसे प्लेयर हो, तो फिर तो क्या ही कहना. On the initial opening, I think कहीं ना कहीं जब हम later rounds पे जाएंगे, maybe यहाँ पे ज़ायू फटते हुए नजर आएंगे. पहले गेम मैप में it was not too much. He was there, his presence was there. But अभी के लिए इंतजार रहेगा. It's going to be a spray down wall, easily gobbling up all these players. Crucial. आखिरी पे कटाते हुए. That's going to be another round written in the favor of Into the Breach. ITP making Vitality work in their own map. Save round tha doesn't matter. Buy round tha doesn't matter. They have broken weaponry. They're still making things work. ITP, उनको पता है. This is a do or die map for them. This is going to be the last Counter-Strike global offensive major. If they make it happen here, they put themselves on the radar. Oh, they've already put themselves on the radar. Into the Breach को किसी ने expect नहीं किया था कि वो playoffs तक पहुंचेंगी. लेकिन of course आखिरी major अगर semi-finals तक जाते हैं, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती थी उनके लिए. And of course उसके बाद के बारे में चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा, लेकिन I also don't want to get too ahead of myself. अगर Into the Breach ये major trophy उठा दी in some parallel universe, imagine the scenes. Helter Skelter. I think the silence speaks for it. मतलब, there's a lot of people thinking the other side of the story, but Into the Breach अगर कुछ कमाल करके दिखा देगी, it is going to be unimaginable. अभी के लिए hold off किया जा रहा था, rather than slowly, steadily coming in and picks out spins. 3v4 situation, Vitality again in a discomfort. And वो देखिए अपने positions पे T-spawn की तरफ बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल नजर आ रहा है. Finally, I think they make some movement coming through. Again, very small angles that players can find. बहुत ज़्यादा corners है clear करने के लिए करना पड़ेगा. And Dupree, he does make one clear before they get the plant through at A. जी हाँ, लेकिन Apeks ये एंगल होल्ड करके खड़े हैं. उनको पिक निकालना पड़ेगा. Magus, in the meantime, वो नहीं मिस करने वाले ये शॉट्स. Into the Breach के लिए आसान राउंड होना चाहिए था, लेकिन Apeks को देखिए कितनी अच्छी पोजीशन में बैठे. थॉमस ने 1 वर्सेस 2 क्या कमिट करेंगे रीटेक के लिए. मुझे लगता है करना जरूर चाहते हैं. भाग रहे सीधा साइड के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ओवरफ्लिक कर दिया वहां पे. शायद किल निकाल पाते, फिर देखना बनता था कि दूसरा किल मिलता है कि नहीं. लेकिन वाइटैलिटी, उनके फैंस देखिए कितने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं. Finally, Vitality much needed round pull back कर चुके हैं अपने पास. And देखिए अभी हम टेस्ट पे भी जैसे बोल रहे थे, this is their map. They've won against numerous big name teams. And finally वो strategies नजर आ रहे हैं. But Team Vitality also go for a quick timeout क्योंकि उनका जो place भी है यहाँ पे, it's falling short. आप देख पा रहे हैं simple pushes आ रहे हैं coming in from Into the Breach. साइड से बाहर निकल के they're trying to keep a check कि अभी भी थोड़ा वेट आउट किया जा रहा है T-spawn की तरफ या मिड की तरफ. And that's all. वो सिर्फ चेक करने के लिए जैसे बाहर आ रहा है, they find a free frag and they back off. ऐसे आसान picks Into the Breach को अभी तक मिल रहा था. So they understand they need to be the ones who need to go to offbeat positions, and second round अपने आप के लिए secure कर लेंगे. We are going and moving into the 6th round of Anubis. Dupree in the meantime कोशिश डिफॉल्ट होल्ड करने की, पिक निकालने की, लेकिन Into the Breach इतनी आराम से नहीं देने वाले उनको. वाइटैलिटी ने अभी टाइम आउट लिया, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा था, बट अच्छी बात है उस तरीके के टाइम आउट लिया उन्होंने. ज़रूरत थी टीम को जैसे काम देमसेल्व्स एंड कलेक्ट देमसेल्व्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं
अगर कोई ऐसे प्लेस बना दे जिसकी वजह से आप राउंड हारेंगे तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे आप। रालन फ्लैश खोल के बैठे जरूर है, क्या क्रूशल यहाँ पे पिक करने वाले हैं ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन अभी भी देखिए वाइटैलिटी डिफॉल्ट होल्ड कर रही है, बिल्कुल आगे पुश करने की कोशिश नहीं कर रही है। हर एक राउंड में वही होल्ड आउट करते हुए नजर आए थे डिफॉल्ट, बट दे वर स्टिल लूजिंग अ कपल ऑफ प्लेयर्स। दिस पार्ट दे मेकिंग द स्लो पुशेस एंड अगेन लुक एट दिस, जस्ट गोस डाउन। एपेक्स दूसरी ओर ए की तरफ फाइंड्स, आई मीन मिड की तरफ ही फाइंड्स वन। Oh, timing! Zaiwu! He doesn't find anything and Cypher doubles down. He gets a 3 in the round. Rather than Dupree go down करते हुए नजर आएंगे, it's going to be the lonesome survivor. Spinks. एक frag भी अभी तक इस मैप में इनका नाम नहीं है, and Cypher with the 4th to get into the breach with another round. साइफर जिस तरीके से अपना कीबोर्ड और माउस रखता है टेबल के ऊपर, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उनका हाथ का एंगल जो है अपने शरीर से कुछ 45-50 डिग्रीज के एंगल पे रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट। लेकिन जो शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे साइफर, मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। I mean, unbelievable show जो साइफर ने पुट अप किया है, and again it has been in previous map as well. अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे, but wow, Zaiwu! Oh God. वो थोड़ा ज्यादा हो गया। Looking for another. पर एक चीज अगर आप नोटिस करें तो हमेशा जो अच्छा प्लेयर होता है, और जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है, उनके बीच का यही फर्क होता है कि जो छोटी छोटी उनके पास मौके होते हैं, छोटे छोटे मौके, उनको वो एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अब फर्क इतना होता है कि जिस प्लेयर के पास वर्ल्ड क्लास स्किल होता है वो उसको ज्यादा आसानी से कन्वर्ट कर पाता है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर यही किल ज़ाइवू निकाल लेते तो शायद उनकी तारीफ हो रही होती। तो आई डू बिलीव बहुत रिस्क होता है उसके अंदर, बट कई प्लेयर्स इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, कई प्लेयर्स इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं कि आपको वो रिस्क बहुत बार दिखाई नहीं देता। Completely agree on that. मतलब हमें पता है, and that's the reason we see so many supporters not only for Team Vitality but calling Zaiwu God Wu. As of now, it is into the breach जो lead लेती हुई नजर आ रही है, and I really like जो aggressive control लेते हुए into the breach नजर आ रही है, making sure in Vitality नजदीक नहीं आ सकती है sides के। It looks like this time they want to go for a B execute. Zaiwu walking up, इंतजार कर रहे हैं Cypher. It's all about the timing. He changes his gun to the knife and Zaiwu तुरंत उनको पकड़ लेंगे. Spinks puts Ralm down and this opens up the side entirely in the favor of Team Vitality. अभी तक A की तरफ हमें प्लान देखने के लिए मौका मिल रहा था. Finally we see a B plan coming through and no contest. 5v3 retake करने का इरादा भी नहीं नजर आ रहा है into the breach की तरफ से. They're stuck onto A. जी हाँ, लेकिन ज़ाइवू ने जिस तरीके से किल निकाला था, काफी ऑफ गार्ड पकड़ लिया साइफर को वहाँ पे। आई एम श्योर बुरा लगा होगा उसके लिए साइफर को भी, बिकॉज क्रूशियल राउंड था। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अनुबिस इज वन ऑफ दोज मैप्स जो काफी ज्यादा टी साइडेड है। वाइटैलिटी यहाँ पे ट्रेल कर रही है 2-5, ब्रीच ने 5 राउंड निकाल लिए, तो देखना जरूर बनता है कि अब वो सेकंड हाफ में क्या गुल खिला दे, बिकॉज साइफर किस तरीके से एंट्री फ्लैग करता है हमने देखा था। One round ऐसे ही करके एक एक राउंड लेते हुए टीम वाइटैलिटी क्लोज द गैप। आई थिंक इनटू द ब्रीच को उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बट अगेन मेकिंग वाइटैलिटी वर्क ऑन टी साइड ऑन अनुबिस ये जरूर दर्शा रहा है कि इनटू द ब्रीच दे मेकिंग श्योर अगर वाइटैलिटी को ये जीत हासिल करना है दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। अगेन आप देख सकते हैं एपेक्स के चेहरे पे जो सेकेंड हाफ पे व्हेन वी सॉ ऑन वर्टिगो ही वाज कंप्लीटली एक्साइटेड, सारे राउंड्स उनके नाम आ रहे थे, they were getting all the important frags। अभी वापस वो टेंस नजर आ रहा है because early game टीम वाइटैलिटी की तरफ से is not working out। Again with the opener, Zaiwu। Another for him। अभी भी ए साइड की तरफ 2 खिलाड़ी है बम्बा एंड दे आर थिंकिंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन। थॉमस विल बी द फर्स्ट वन इन कांटेक्ट, स्प्रे डाउन करेंगे एंड ही फाइंड मैजेस्टिक्स
यहाँ पे तुरंत वाइटैलिटी जो अपना डिसीजन है बदलेंगे, बट थ्रू मिड इज व्हाट दे आर मेकिंग दैट मूव. मिड की तरफ है सही, लेकिन राल यहाँ पे बहुत क्रूशियल किल निकाल सकते हैं. क्या वो इंतजार करेंगे? जी हाँ, इंतजार तो करा, लेकिन वो किल नहीं निकाल पाया. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. फिर भी एक और किल निकाला उन्होंने. एपेक्स फाइनली ट्रेड करेंगे थॉमस इन 1 वर्सेस 3. बहुत ज्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए. अगर ये 1 वर्सेस 3 निकालते तो शानदार तरीके से कम बैक कर पाएंगे इस फर्स्ट हाफ के अंदर. पहला किल जरूर निकाला है, दूसरे ट्रेड की जरूरत. ग्रेनेड भी है उनके पास, लेकिन क्या डैमेज दे पाएंगे? इतना ज्यादा नहीं. एक और ग्रेनेड, शायद ये डैमेज देगा जायवू को. नहीं, ये भी नहीं दिया. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डुप्री ऑन द बैक स्टैब, वो उनके ऊपर पिक निकाल लेंगे. वाइटैलिटी एक और बार शुरुआत के थोड़े बहुत राउंड हारने के बाद धीरे धीरे कमबैक करते हुए. जिस हिसाब से वाइटैलिटी खेल रही है, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा स्टार्टिंग ट्रबल नजर आ रहा है, बट उसके बाद वंस दे स्टार्ट देयर इज नो स्टॉपिंग देम. एक और राउंड यहाँ पे लेते हुए वाइटैलिटी, दे आर क्लोजिंग द गैप. 10th राउंड. Zaiwu better than simple. He has 3 stamps, Mamba, of the same thing. शायद अगले आधे घंटे में पूरा हाथ कवर हो जाए, क्या ही पता. Exactly. लेकिन साइफर ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप अप किया अपनी टीम के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है. फिलहाल के लिए वाइटैलिटी, दे जस्ट नीड टू कीप अप विद व्हाटएवर दे आर डूइंग. कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी. पैसा नहीं है इनटू द ब्रीच के पास, तो काफ़ी आराम से खेलना होगा उनको. बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकते यहाँ पे वो. They have a big control. अभी के लिए एक की तरफ जाएंगे तो it's only one player holding it out. Force कर सकते हैं, but the smoke is preventing them from doing anything. Sphinx, अगर कोई flank आ रहा है उसको चेक करते हुए अभी भी default खेलते हुए नजर आ रहे हैं. It'll all depend on Walt in this first contact. क्या कुछ अलग कर पाएंगे? Oh wait, actually there are 2 players and जी हाँ, Walt opponent के flash को इस्तेमाल करते हुए he picks up 1, but Dupree is good for the trade. Sphinx, ooh, that double peek बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको काउंटर करना, लेकिन वाइटैलिटी के पास साइड का कंट्रोल है. C4 प्लांट हो चुका है. ऐसा है नहीं सीटीज के पास. मुझे लगता है कि कोशिश नहीं करने वाला रीटेक के लिए, बिकॉज प्लेस भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है. यहाँ पे शायद एक आध गन गिराने की कोशिश करे, लेकिन ज़्यादा ग्रीडी हो रहे मेरे हिसाब से. एपेक्स विल बी गोइंग इन. पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है. डुप्री ड्रॉप दे सकते हैं अपने टीममेट्स को, लेकिन अगर डुप्री खुद टेक डाउन होते हैं, एलिमिनेट होते हैं सर्वर के अंदर, तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है. उनको जिंदा रहना होगा बिकॉज ही नीड्स टू सेव सम सॉर्ट ऑफ मनी फॉर हिमसेल्फ. सेफ एंड साउंड दोनों सिटी की तरफ एग्जिट करते हुए नजर आएंगे. दैट्स गोइंग टू बी अनदर राउंड फॉर वाइटैलिटी, इक्वलाइजिंग द स्कोर. टीम वाइटैलिटी अभी बता रही है ये मैप उनका क्यों है एंड हाउ दे आर मेकिंग इट वर्क, एंड टी साइड का फायदा. पांच का स्कोर लाइन इनटू द ब्रीच के लिए बहुत क्रूशियल राउंड होने वाला है यहाँ पे. और एक भी नजर नहीं आने वाली फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन एट द सेम टाइम काफी एग्रेशन दिखा रही है मिड की तरफ. बहुत ज्यादा एग्रेशन इनटू द ब्रीच की तरफ से, लेकिन फ्री बहुत चीकी एंगल होल्ड कर रहे हैं. अगर उनको फर्स्ट ओपनिंग पिक मिलता साइफर एक और बार काफी ज्यादा डैमेज देगा. पे टेक डाउन हो जाएंगे, थॉमस भी टेक डाउन हो जाएंगे एंड साइफर 22 एचपी पे सर्वाइव करे. मुझे लगता है इनटू द ब्रीच थोड़ा सा ओवर कमिट कर दिया वहां पे उन्होंने, एंड भारी भुगतान करना पड़ेगा. एक और बार सेव करने की जरूरत पड़ने वाली है सीटी साइड को, अनलेस उनको पिक मिल जाए. अगेन इट्स ओनली वॉल ट्राइंग टू सेव एन एंकर. एक जरूर पिक उनको मिल जाएगा. ही इज लुकिंग फॉर अनदर चैलेंज. डुप्री को डाउन कर दिया गया एंड ऑल ऑफ अ सडन जहां पे ये 5v3 हो सकता था, ही ब्रिंग्स इट डाउन टू अ 3v3 सिचुएशन. Into the breach, they have a possibility. Retake के लिए आ सकते हैं. इंतजार कर रहे हैं अपने तीसरे खिलाड़ी का आने का. All the way from B. Plant हो चुका है.
It's all about how they retake this. Smoke off कर चुके हैं Spinks को. दूसरी ओर मिड से आने के लिए स्मोक ऑफ किया गया है, बट Magisk is covering and he gets one. But तुरंत जैसे उनका पोजीशन पता चल जाएगा, that's going to be Volt with the third. Time बीत चुका है and they immediately call this retake off. Good round. बेहतरीन राउंड था वाइटाली की तरफ से, लेकिन into the breach के लिए बहुत बड़ी दिक्कत. मोमेंटम खो रहे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ना खो दे अपना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड मिड पे एग्रेशन दिखा रहे साइफर नीड्स टू स्टे अलाइव, बिकॉज साइफर जितनी देर जिंदा रहते हैं उतनी देर उनकी टीम को प्रेशर बनाने का मौका मिलता है. प्लस साइफर का कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है. क्रूशल का जो किल था वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, थॉमस को डबल पीक कर दिया गया. डुप्री काफ़ी खुश उस पीक के साथ. I think finally पिछले गेम में थोड़ा Walt, Thomas पीछे पड़ रहे थे, and right now we can see them getting back into the game. अभी भी Thomas को he has to show up, क्योंकि opponent की तरफ से हर एक खिलाड़ी is just performing. Spinks थोड़ा पीछे जरूर हट रहे हैं, but those crucial picks, flanks का picks, ये सब जो उठाना चाहिए वो सब उठाते हुए नजर आ रहा है. अभी के लिए boost करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं Ralden, looking forward to if any kind of B push comes through, उसको stop करने के लिए right at its tracks. Back again slow and default खेला जा रहा है, coming in from Team Vitality, जो उनके पास back to back rounds आ रहा है. They do not want to give it away as of now because they know this is their map, and अगर वो जो momentum वापस ले रहा है, अगर वो वापस दे देते हैं into the breach को, it can be tough for them. जब वो side बदलेगा, side switch होगा, they have to make themselves work a lot. सायू एक और बार ये ओपनिंग पिक निकालते हुए, बहुत क्रूशल होता है ये पिक. एंड Magisk पेशेंस देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, आराम से टैप करते जा रहे थे, बिल्कुल भी उन्होंने अपने आप को हड़बड़ी में गोली चलाने का मौका नहीं दिया. एंड एक और किल निकाला, मैन एडवांटेज मेंटेन करते हुए, लेकिन साइफर क्या अपनी दायरे पाएंगे. जी हाँ, एक और किल. ओह, इक्वलाइजिंग द सिचुएशन फॉर हिज टीम. अब थॉमस के ऊपर आ जाएगा पूरा का पूरा दारोमदार, बिकॉज स्पिंक्स ने रालन को टेक डाउन कर दिया. एंड धीरे धीरे थॉमस क्रीप अप तो जरूर कर दी, फुल प्लांट कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ज़ायो इसको एक्सपेक्ट करने वाले, सबसे खास सवाल होने वाला है. ज़ायो पीक जरूर करेंगे, लेकिन डबल पीक किया. एंड 5 राउंड्स एक साथ वाइटालिटी जीते हुए. ज़ायो गेट्स 2 इन द राउंड. अभी के लिए वाइटालिटी स्ट्रीक पे आ चुके हैं. टीम वाइटालिटी फीलिंग सुपर हैप्पी. और अनदर केस ओपनिंग. Vitality 2 राउंड का लीड. सायू क्या एक और बार पिक निकाल पाएंगे? डुप्री आप हमेशा कहते हैं उनके ऊपर नीज आते हैं, बट उनकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि इंपॉर्टेंट जगह होती है, वहां पे खुद को पाते हैं. बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन होती है. रालन इन द मीन टाइम, कितना ज्यादा डैमेज दिया वहां पे एपेक्स को. सायू ने थोड़ा डैमेज जरूर दिया, डिफॉल्ट कर रहे हैं. एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, वाइटालिटी डिफॉल्ट पे बहुत ज्यादा राउंड्स निकाल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो फर्स्ट पिक निकाल पा रहे हैं. और कन्वर्जन रेशियो पिंप ने बताया था जब मैच शुरू हुई थी, जब 45 राउंड होता है, 96% विन रेट है वाइटालिटी का टेरिस साइड पे, अगर फर्स्ट पिक मिलता है उनको तो. And it's working out, back to back करके दिखा रहा है. It is still a 5v5 face off, and look at it again. First pick मिल चुका है. Cypher is down, especially the most crucial fragger जो अभी टॉप फ्रैग करते हुए नजर आ रहा है अपनी टीम के. He's down. Rallen somehow trades it off. Mid के तरफ अभी भी contention नजर आ रही है. Dupree trying to break this down, and 4 लोग mid के तरफ ही रहने वाला है, so he can go for a spray down showdown. एक उठा लेंगे Magisk, दूसरे के ऊपर भी convert करेंगे spray transfer, and he gets the second. दोनों headshot यहाँ पे convert होते हुए, and right now it is going to be make it a 4v1 situation as Spinks puts the last one down. 8th on the board. Vitality on a big streak of rounds. अब उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला, लेकिन इनटू द ब्रीच 5 राउंड्स निकाल चुके सीटी साइड पे. ये मत भूलिएगा बहुत ज्यादा टी साइड मैप है ये. वाइटालिटी भले डिफॉल्ट पर राउंड्स निकाल दिए, बट इनटू द ब्रीच कोई कम नहीं है. तो सेकंड हाफ में जरूर देखना होगा कि इनटू द ब्रीच कोई गोल खिला पाती है कि नहीं.
Into the breach with a timeout. अभी पता चल चुका है. देखिए पहले जो शुरुआत हुआ था, that had a different scenario. जैसे into the breach खेल रही थी, उसके बाद जैसे Vitality को पता चला, Vitality started making their own default moves. जहाँ पे उन्होंने इंतजार किया, into the breach को पसंद आ रहा था, aggressive positions लेने के लिए, they were waiting. टाइम वेस्ट करके हर वक्त वो टाइमिंग पे पकड़ रहे थे. साइफर को देखिए हम, जैसे मिड पे जाइवू ने पकड़ा, लाइक ही वाज जस्ट बैकिंग ऑफ एंड वहां पे उनको पकड़ा. उसके बाद दूसरी ओर जब बी के तरफ जा रहे थे, सॉरी ए के तरफ जा रहे थे, जब डोर्स के तरफ लोगों को पकड़ा गया. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. वाइटैलिटी जो वेट करके एग्जीक्यूट कर रही है, इट्स वर्किंग आउट. लास्ट सेकेंड राउंड यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल रहा है. इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. इस बार क्रूशियल के हाथों में AWP नजर आ रहा है और स्प्रे डाउन थ्रू द स्मोक. पुश आता है, स्पिंक्स इसको शट डाउन करेंगे. रादन इज आउट. इट्स इक्वल ट्रेड ऑफ. साइफर इस बार शातिर थे, इंतजार कर रहे थे. जाइवू इज आउट. Zayu doesn't miss those. बिल्कुल मिस नहीं करते वो शॉट्स. डुप्री की अगर मैं बात करूं, वो इंतजार कर रहे हैं एंगल होल्ड करके. स्मोक जरूर डाला गया लेकिन थॉमस क्या वो पिक निकाल पाएंगे? जी नहीं. डुप्री doesn't miss this either. वोल्ट और थॉमस दोनों को इकलौते खड़े होकर वो एज अ रॉक टेक डाउन करेंगे. ट्रेड नहीं निकाल पाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम. अगर आप ट्रेड नहीं निकाल पाते फिर तो राउंड जीतने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते आप. लेकिन वाइटैलिटी मैन एडवांटेज को कन्वर्ट करना बखूबी जानती है. डुप्री भले 2 HP पे सर्वाइव करे लेकिन मैन एडवांटेज इज मैन एडवांटेज. और साइफर उनको मॉल ही कर दिया जाएगा. 7 सेकंड के लिए उनको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे मॉलटॉव के पीछे. एंड डू बिलीव उन्होंने डिसाइड कर लिया यहाँ पे सेव करने का. हम बात कर रहे थे क्रूशियल के AWP बहुत क्रूशियल रहने वाला है, बट नो कंटेस्ट इटसेल्फ उनकी तरफ आया. दूसरी ओर जो पुश आया था रैलन का, इट वाज इमीडिएटली नलिफाइड फ्रॉम स्पिंक्स. आई थिंक ये बहुत ही बेहतर रीड. अभी भी देखिए स्पिंक्स, ही इज जस्ट वेटिंग आउट. अगर कोई पिक्स मिल जाता है जो बी के तरफ सेव करने के लिए आया है, ही इज स्लोली पुशिंग अप. मैजर्स आई थिंक इस AWP के सामने आने वाले हैं एंड तभी जाके क्रूशियल भाग जाएंगे. बट देयर कैन स्टिल बी अ कंटेस्ट कमिंग थ्रू. वाइट स्विंग आएगा बट स्टिल क्रूशियल पुट्स जस्ट डाउन. AWP और इसके साथ एक और वेपन जरूर बचा लेंगे into the breach, but they're losing their control. Zinedine Zayu. Apeks Potter. Oh boy. French fans, Vitality fans काफी ज्यादा पैशनेट है इस लाइनअप के लिए और इस प्लेयर के लिए खास तौर पे. A lot of love. देख सकते हैं प्रेशर, देख सकते हैं इंटू द ब्रीच के प्लेयर्स के चेहरे पे. थॉमस खास तौर पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे शुरुआत में, लेकिन अब धीरे धीरे प्रेशर महसूस कर रहे हैं. बिकॉज जिस तरीके से राउंड जीती जा रही है वाइटैलिटी. साइफर नीड्स टू स्टॉप गेटिंग पिक्ड ऑफ मिड पे. स्मोक के पीछे हर बार वो पिक ऑफ हो रहे हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. अब तो खैर आखिरी राउंड है. वो एक और बार एक और पिक. एंट्री फ्लैगर सुप्रीम बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्रूशियल चलते चलते 1 सेकंड के लिए उन्होंने काउंटर स्ट्रेफ किया, जायू को टेक डाउन किया एंड अभी भी राउंड निकाल सकते हैं. ऑफ है उनके हाथों में, बहुत डेडली वेपन नहीं है. प्लेयर्स वहीं पे है, फिर भी प्लांट हुआ जा रहा है. बट दूसरी ओर में जस्ट देखिए, ही इज लुकिंग फॉर इफ देयर इज एनी फ्लैंक. बहुत जल्दी अपने टीममेट्स के साथ रीग्रुप करना पड़ेगा. यहाँ पे अगर कहीं भी 1-2 खिलाड़ी गिर जाता है एंड देयर इज नो ट्रेड कमिंग थ्रू, आई थिंक जस्ट इज गोइंग टू बी सुपर क्रूशियल एट दैट पॉइंट. अभी के लिए रीटेक के लिए बहुत नजदीक आ चुके हैं. पिलर के अनाउंस खेल रहे हैं. वॉल्ट फाइंड्स द फर्स्ट, थॉमस गोज इनटू द सेकंड. यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए स्पिंक्स नजर आ रहे हैं, बट नॉट फॉर टू लॉन्ग. इट ऑल फॉल्स डाउन टू एपेक्स. tries his best, but Walt becomes the last player surviving. 4v3 situation को अपने तरफ convert करते हुए into the breach. These 3 players make it happen. जी हाँ, 9-6 वाइटैलिटी के फेवर में. टी साइड पे शुरुआत करी थी उन्होंने अनूबस के ऊपर. अब सीटी साइड मुश्किल होने वाला है अनलेस ऑफ कोर्स वो फर्स्ट पिक्स निकाल के लेके आए. लेकिन जो फर्स्ट राउंड निकाला था वाइटैलिटी ने, उसी तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी. उसके बाद into the breach 5 राउंड जीती. उसके बाद from what I know Vitality won 8 rounds in a row if I'm not mistaken. Yep. And finally जाके into the breach ने 1 राउंड जीता है. even though first pick बहुत जल्दी दे रहे थे, लेकिन मेजर्स ने ये जो राउंड निकाला था शानदार था. Yeah, insane. Look at that sweet shot coming through. ये देखिए. Wow. I think इसलिए बोलते हैं Lions are the best. Lions are the absolute best. और Vitality fans माहौल बनाते हुए, सेट करते हुए, अपनी टीम को चीयर करते हुए, एंड जायू देख रहे सामने अपने फैंस को.
जब आप बी हाइव को देखते हैं वैसी फीलिंग आ रही है उनको देख के. The scoreline which right now we see, it was the same scoreline, but vice versa. Into the breach के पास lead था, and it was lagging behind Team Vitality. तब उन्होंने वापसी करके दिखाया. Now it is into the breach in the spotlight. But I think Zaiwu being contested, उस contention के ऊपर खड़े उतरना, it was just brilliant coming in from his end. Walt भी, he was getting little opportunities here and there एक दो round में, and उस opportunity के ऊपर he was capitalizing, double down. आखिरी round भी कहीं ना कहीं उनके वजह से निकला है. If he didn't find those frags, I think वो round भी जा सकता था. But just जैसे हमने बोला, I felt like just अगर थोड़ी जल्दी आ जाता है अपने teammates के लिए, it could have worked out. But look at this, Zaiwu surviving those grenades. He's just brilliant. Oh, Cypher. उन्होंने अपना जो कर सकते थे ना अपने हाफ में, जिस पोजीशन पे होल्ड आउट कर सकते थे साइफर, he justified all those positions, did his best, still was not enough. Well, बहुत सारे दिन हो गए जहाँ पे आपको बेस्ट काफी नहीं होगा और उसको आपको अपने बेस्ट के अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ेगा. उसकी आज जरूरत पड़ने वाली है साइफर की तरफ से खास तौर पे. जिस तरीके से एंट्री फ्रैग किया था उन्होंने वर्टिगो के ऊपर, वो वापस दिखाना पड़ेगा. एंड वही मास्टर क्लास के साथ वाइटैलिटी को पीछे धकेलना होगा. लेकिन वाइटैलिटी, दे आर फीलिंग इट. होम क्राउड का सपोर्ट है उनके पास. फ्रेंच टीम, ऑफ कोर्स 2 प्लेयर्स फ्रेंच है, फिर भी फ्रांस के अंदर इट्स एज गुड एज अ फ्रेंच टीम. Exactly. Into the breach. Can they take down Team Vitality in their home ground? Contest जरूर कर रही है. They've made a mark in the majors. But can they put them down in their own stronghold of a map? ये जरूर एक बड़ा सवाल रहेगा. Team Vitality are putting a show. I mean, जैसे पहले की मैप में हमें देखने के लिए मौका मिल रहा था कि Vitality are running out of stats, especially in their first half, जब वो सिटी साइड पे खेल रहे थे. इस बार एटलीस्ट इन द सेकेंड हाफ, आई मीन इन द फर्स्ट हाफ, जैसे अनुविस पे हम देख पा रहे हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैड स्ट्रेटजाइज्ड एंड प्लान्ड फॉर, एंड इट ऑल वर्कड आउट. बट अभी के लिए इट इज द साइड स्विच. हम अभी बात कर रहे थे, दिस साइड स्विच इज गोइंग टू बी क्रूशियल. हाउ विल टीम वाइटैलिटी फंक्शन? लीड तो जरूर है, बट इनटू द ब्रीच अगर टी साइड में ही वाइटैलिटी को मुश्किल खड़ी कर चुके हैं, खुद अपने टी साइड पे कमाल कर सकती है इनटू द ब्रीच. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. 96 वाइटैलिटी अब सीडी साइड पे देखेंगे क्या गुल खिलाती है. लेकिन इनटू द ब्रीच की बात करें, बहुत क्रूशियल पहला राउंड होने वाला इनके लिए. और सीधा कनाल में ड्रॉप करके उल्टा घूम के यहाँ पे बी की तरफ एग्जीक्यूट करते हुए स्पिंग्स डुप्री दोनों इनके लिए इंतजार कर रहे हैं. क्रूशियल सीधा चांटा मार दो डुप्री को. स्पिंग्स को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा. It'll all come down to Majors and Zaiwu, but now Zaiwu all alone, 1 versus 4 duelies के साथ. मास्टर क्लास दिखाना होगा यहाँ पे Zaiwu को. Pistol round, he can make it happen, but he's also worried. सारे खिलाड़ी आए, प्लान जरूर हुआ, but because they have number advantage, अगर extend करेंगे, he can be flanked. But अभी के लिए तो बहुत टाइम बीत चुका है. He'll just try to see if there's anything that opens up. उनके पास कोई किट भी नहीं है, so defusal is going to be impossible. He's just going to wait it out, and अभी के लिए ये राउंड बहुत आसानी से into the breach के हाथों में जा चुका है. Quick execution coming in. हर एक एंगल को चेक किया, हर एक जगह पे जो भी खिलाड़ी थे, जैसे आपने बोला, चांटा मार के ही उनको हर एक खिलाड़ी को गिरा दिया गया. That is going to be a really good round. देखिए इसी शॉट के बारे में बात कर रहा था. क्रूशियल जिस तरीके से फ्लिक किया था, उससे अगर आप चाटा नहीं गए तो क्या कहेंगे? देखिए डुप्री का रिएक्शन देखिए. इवन ही वाजंट श्योर किस तरीके से वहां पे उनको शॉट लगा था. एंड स्पेशली जब साइफर को मार गया था. दैट वाज हिम बीइंग द फर्स्ट पिक. चाटा तो था इन द ब्रीच विद अ फिनोमिनल स्टार्ट. यहाँ पे 2 AK-47 है उनके पास, 2 गलील और 1 मैक 10. वेपन भी काफी ज्यादा शानदार है उनके पास, लेकिन मुझे लगता है कि स्मोक जो स्पैम करते रहेंगे, शायद एक अनफॉर्चुनेट गोली, एक स्ट्रे बुलेट भी सिर पे लग जाती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी टेररिस्ट के लिए. वाइटैलिटी ऑन द अदर हैंड,
दुप्री स्काउट पे हैं. Farmers also invested. वापस into the breach भी slow and steady default. Mid की तरफ यहाँ पे hold out कर रहे हैं. Double doors push. Doesn't get anything. On the other end, दो लोगों को खो बैठेंगे into the breach. I'm sorry, team vitality. Into the breach looking super good. Swing करेंगे. Apeks just good for one. गलील यहाँ पे जवाब देते हुए साइफर की तरफ से is up to swings. रैलन को जरूर डाउन किया, वेपन को रिकवर जरूर कर लेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग की एक खिलाड़ी अगर यहाँ पे थे एंड वी हैव एक्चुअली क्लियर्ड अप मिड, तुरंत ए की तरफ भाग जाएंगे एंड दे विल गेट द कंफर्टेबल प्लान डाउन. बट अभी के लिए जो बड़ी चीज रहने वाली है, वेपन्स रिकवर करने के लिए मौका मिल जाएगा वाइटैलिटी को एंड दे कैन एक्चुअली मेक दिस राउंड हैपन. पर लग रहा है दे आर एक्चुअली गोइंग इन फॉर अ सेव. जी हाँ, यहाँ पे वाइटैलिटी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी. वापस एक और बार सेव करना पड़ेगा उनको. गलील एक सेव कर रहे हैं, एक स्काउट सेव कर रहे हैं. At the same time, into the breach, making the most of whatever advantage they have in terms of weaponry. जितना भी पैसा था लगाया उन्होंने, अच्छी गन्स खरीदी और भरपूर फायदा उठाया. तो अगला राउंड जो होने वाला है सिटीज की तरफ से वो ऑब्वियसली इको होगा. Into the breach आराम से इक्वलाइज कर सकते हैं सिचुएशन को यहाँ पे. They get their 8th on the board. एक ही राउंड सिर्फ दूर है, जैसे आपने बोला. It is going to be a save coming through. I'm loving the crowd right now at Paris. Nine to 8 into the breach. Weapons advantage होने वाला है उनके पास. स्काउट, गलील, एक डीगल जायू के पास. डीगल के साथ काफी अच्छा खेलता है जायू वैसे. If you've not noticed, काफी अच्छे शॉट्स हिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली वो शॉट्स हिट करने पड़ेंगे उनको. अदरवाइज ये राउंड भी उनके हाथ से फिसल सकता है. देखना जरूर बनता है क्या यहाँ पे उस डीगल को लेके वो कुछ डैमेज दे पाएंगे सामने वाली टीम को. बट इन द मीन टाइम अब देखें तो फिर इनटू द ब्रीच की तरफ से पीछे ढकेला जा रहा था. रालन को पीछे आने की जरूरत पड़ रही थी. C4 गिरा हुआ है, डिफॉल्ट कर रही है पूरी की पूरी टीम. एजेस पुश कर रहे थे स्मोक के नजदीक एंड रालन को पीछे हटना पड़ा था. तो काफी ज्यादा प्रेजेंस है बी साइड की तरफ. 4 लोगों ने स्टैक किया हुआ है. मुझे नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन है वैसे इनटू द ब्रीच के पास, बिकॉज इस तरीके से C4 लेके अभी भी वो बी साइड की तरफ भागे जा रहे हैं. बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इन द मीन टाइम क्या ये एक ही तरफ एक रोटेशन फोर्स करा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है. थॉमस मैकटेन के अंदर जा चुके, उनको किल निकालना पड़ेगा. ये किल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, लेकिन एपेक्स वो नहीं होने देंगे. धीरे धीरे करके एक ही तरफ रोटेशन आना चालू हो चुका है, लेकिन रालन क्या बैक स्टैप कर पाएंगे? वाइटैलिटी ब्रेकिंग, एक किल एक पिक मिलते ही it's just vitality, one after another falling shot. C4 will go and be planted all the way at A and कुछ कर नहीं पाएंगे. Ralen holding it out, यहाँ पे ढूंढ रहे थे अगर दूसरा पिक मिल जाता तो. बट अभी के लिए आखिरी 2 खिलाड़ी बचेंगे with 2 HP. It's going to be Spinks. इस बार वो स्काउट को सेव करते हुए नजर आएंगे. डुप्री के हाथ में गलील दे दिया जाएगा. And into the breach do make this equalizer. आराम से कर लेंगे इनटू द ब्रीच इसको इक्वलाइज, बिकॉज जो वेपन्स डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे हम, इनटू द ब्रीच के पास पैसा था, यूटिलिटी थी, अच्छी गन्स भी थी. अब असली मैच शुरू होता है और ये मैप ऊपर से टी साइडेड है, बहुत ज़्यादा टी साइडेड है. तो वाइटैलिटी के लिए दिक्कतें कम नहीं होने वाली, बट उनको वो पहला पिक निकालना पड़ेगा. फर्स्ट पिक निकालने के बाद उनका कन्वर्जन रेट एटलीस्ट टेरेस साइड पे तो काफ़ी अच्छा रहा है. वो सेम चीज़ उनको सीटी साइड पे रेप्लिकेट करनी पड़ेगी, बिकॉज चंद राउंड की वजह से वो अपने चांसेस को गवाना नहीं चाहेंगे. 9-6 से 3 राउंड बैक टू बैक यहाँ पे लेके आ चुकी है into the breach, and they're feeling super happy about that. Full buys coming in from both the ends. Majes के पास AWP जरूर नजर आएगा. गलील के साथ अभी भी खेलते हुए नजर आएंगे Spinks, बट मिड को ब्लॉक आउट करके फोर्स करके थॉमस फाइट लेने के लिए आए, बट Zayu was ready and steady as ever.
थॉमस को यहाँ पे निकालेंगे एंड तुरंत बी का हिट यहाँ पे देखने के लिए मौका मिल रहा है इनटू द ब्रीच की तरफ से डुप्री Apex 1 इवन दो वॉल्ट गॉट बट अभी भी इंतजार कर रहे हैं डुप्री इफ ही कैन फाइंड अ सेकंड जी हाँ ही टेक्स डाउन द C4 कैरियर एंगल है क्रूशियल इन द मीनटाइम ट्राई जरूर कर रहे हैं एज ही ट्राइंग टू रिकवर द C4 और अभी के लिए अकेले खिलाड़ी बचेंगे ही इज फोर्सिंग अप ऑल द फाइट्स 1v3 निकालना था एक जरूर निकाल चुके हैं बट इनके खिलाड़ी पीछे एक क्रॉस ओवर कर चुके हैं and I think Crucial will have a tough time working around it but he makes it happen 1v1 situation आ चुका है exact angle जहाँ से खिलाड़ी बाहर आने वाले उसको smoke off किया गया है C4 recover कर चुके हैं but बाहर ही जाने वाले थे and Zaivu says no Zaivu सिंगल हैंडली यहाँ पे अपनी टीम की जो होप्स एंड ड्रीम्स है उसको जिंदा रख रहे हैं वर्टिगो में उन्होंने वो किया था लेकिन मेजर्स ने जिस तरीके से एंट्री फ्लैग करना चालू किया था उसी चीज को यहाँ पे वापस रेप्लिकेट करने की कोशिश एंड Zaivu का परफेक्ट टाइमिंग क्रूशियल को पीछे अब पीठ पीछे गोली मारी उनको एलिमिनेट किया फाइनली वापस वाइटैलिटी के पास लीड है 10-9 इनटू द ब्रीच ऐसा होने वाला जरूर है उनके पास लेकिन मेजर्स ने ऑप उठा लिया इस बार पिछले राउंड में भी था उनके हाथ में and it actually did not work out. Let's hope this time he makes it work. But Zaivu अभी भी वो मिड का कंट्रोल रखते हुए क्या ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं पिछले राउंड क्लच करके दिखाया इस बार अभी भी उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं बट इस बार और भी ज्यादा यूटिल डंप आ रहा है इनटू द ब्रीच की तरफ से टू फोर्स Zaivu आउट और इज नॉट गिविंग देम मच स्पेस मैचेस दूसरी ओर मेन को गार्ड करते हुए नजर आया है यहाँ पे सिर्फ वोल्ट रहेंगे C4 का अगर बात करेंगे अभी भी चीप वॉल्ट की तरफ रहेगा there is nobody still going to pick it up but finally Thomas makes his way and main की तरफ वॉल्ट के साथ देने के लिए आ रहा है इतना अग्रेसिव जो पोजीशन मिल चुका है they are thinking about executing none other than at A Zaivu and उनके साथ ही Majisks तैयार है let's hope they find something जी उम्मीद तो यही रहेगी कि उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए लेकिन Majisks in the meantime उनको पहले पिक की बहुत डेस्परेटली जरूरत पड़ने वाले वोल्ट पीछे हटने की चूज करेंगे मेजर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे शायद पिक मिलेगा लेकिन अचानक से सामने वाले प्लेयर पीछे चले गए 30 सेकंड्स ऑन द क्लॉक वाइटैलिटी को डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे रोटेशन तो करा द फोर से एक साइड की तरफ लेकिन अब कांटेक्ट पे सीधा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जी हाँ आवाज कर चुके हैं रोटेशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा 25 सेकंड बाकी है डुप्री जितनी देर यहाँ पे जिंदा रह पाए उतना बोनस होने वाला पहला किल जरूर निकाला दूसरा नहीं निकाल पाएंगे एपेक्स इन द मीन टाइम साइड के ऊपर आ चुके हैं समय बाय किया था अपनी टीम के लिए समय बहुत जरूरी जितना डिले करा सकते उतना डिले कराया लेकिन क्रूशियल वो शॉट नहीं मिस करने वाले Zaivu on the other end flank करके यहाँ पे जरूर एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे recovers the AK now he's trying to push up towards main 3v3 situation doable coming in for none other than Vitality बहुत crucial round रहेगा अगर इसको भी convert करेंगे they'll finally get a good lead for themselves but जिस हिसाब से इनका decision नजर आ रहा है after recovering that one AK टीम का कॉल आ चुका है to go for a save they're letting into the breach have this round जरूरी है बिकॉज जिस तरीके का पैसा है यहाँ पे वो इतना कुछ खास है नहीं वाइटैलिटी के पास दे नीड टू सेव दिस इंजॉनी का चेहरा देखे he's like I've seen this so many times इतनी बार देख चुका हूं मैं एंड सिनेरियोस प्ले कर रहे हैं अपने हेड में अपने दिमाग में किस तरीके से सामने वाली टीम को काउंटर किया जाए लेकिन इनटू द ब्रीच काफी अच्छा ट्रेड निकाला था वोल्ट डुप्री के ऊपर I think understanding कि सिर्फ दो लोगों के पास किट था and if they force the fight जहाँ पे उनके पास कोई information नहीं था कि कौन कौन से एंगल पे रह सकता है and also they did not have proper crossfires to go for a retake I think good decision making and उसी के साथ जैसे आपने बोला कि they did not have enough money time out जरूर कॉल करेंगे उनके चेहरे पे जरूर हमें नजर आया चिंता एंड आई थिंक उसको कन्वे करने के लिए समझाने के लिए अपने प्लेयर्स को अगर ऐसे चलता रहा यू माइट एक्चुअली this map might actually go down the drain तो जरूर जॉनिक कॉल करके अपनी टीम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बता के he'll try to reset them as they go for this 21st round 10-10 into the breach कोशिश यही होगी उनकी कि कैपिटलाइज करे इसके ऊपर that flash was so good Mages दूसरा किल नहीं निकाल पाएंगे साइफर तुरंत ट्रेड निकालेंगे उनका बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको, लेकिन स्विंग्स स्मोक के पीछे होल्ड करके बैठे। क्या साइफर ओवर कमिट करने वाला है यहाँ पे? थोड़ी ही देर में पता जरूर चल जाएगा, लेकिन स्विंग्स वर्सेस साइफर कौन जीतेगा ये? आई थिंक स्विंग्स ने नाम पढ़ लिया था उनका स्मोक के थ्रू। ओ ज़ाइवू, नेवर माइंड। ज़ाइवू बैक स्टैब करके उनका किल निकालेंगे। एग्रेशन काफी ज्यादा शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है। रालन स्मोक लाइनअप करने की कोशिश, मुझे लगता है एक और पिक निकालेंगे पहले, फिर कमिट करेंगे साइड के ऊपर, बिकॉज उसके पहले कमिट करके कोई मतलब नहीं है। एक पिक की जरूरत है यहाँ पे इनटू द ब्रीच को, एंड वो पिक शायद उनको स्विंग्स के ऊपर मिल सकता है। राइट नाउ मिड से कहीं ना कहीं ए जाने का इरादा बना रहे हैं। द मॉलिंग ऑफ ए मेन, मेकिंग श्योर एक पुश ना आए। Zyvo has no intention. He does have an AWP. Crossover Thomas Apeks देख सकते हैं। Thomas forces him to run away, and यहाँ पे देखिए ये पिक मिलने की वजह से तुरंत B की तरफ भाग रहे हैं, but there are two players opening and greeting them. आए and सीधा एक एक करके शिकार बनते हुए नजर आए। टीम वाइटैलिटी ट्रैप बिछाते हुए नजर आ रहे हैं एक एक करके यहाँ पे इनटू द ब्रीच को। But Zyvo with this push, I mean, barely वहाँ पे pixel नजर आता है, and he gets a pixel perfect kill. Emotions देख सकते हैं आप। थॉमस देखिए कितने ज्यादा उदास है वहाँ पे। Zyvo and Apeks जितनी पैशन के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो आपको यूजुअली देखने नहीं मिलता है। लेकिन होम क्राउड के सामने जब आप फ्रांस में खेल रहे हैं, and you're French yourself, वो पैशन बाहर आने वाला है। जो एक प्रेम होता है आपका गेम के प्रति, वो दिखाई जरूर देने वाला है। Oh, Majesk! Sam, I don't even know what to say. अभी भी 3 खिलाड़ी रहने वाले हैं। Crucial trying to find, but Zyvo with a spray down. He might gun down more, and he gets a 4. सारे स्मोक के पीछे खड़े थे। All he had to do was rile up all those bullets. And जी हाँ, he went on a spree. Yes! जो पुरानी LDLC की टीम थी वो याद आ रही है मुझे अभी। टाइटन, LDLC, Kenny as well. शॉक्स नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, अपने जो होम बॉयज है उनको चीयर करते हुए। एपेक्स के साथ खेल चुके हैं बाय द वे, Kenny S, शॉक्स। Those are the days. हाँ? अच्छा, those were the days. Those were the days. My bad. मैं सोचा कि आपने कुछ फ्रेंच में बोल दिया जो मुझे समझ में नहीं आया। 23rd राउंड, वाइटैलिटी 2 राउंड की लीड पे नजर आ रही है। एंड आप देख सकते हो इनटू द ब्रीच को इतना ज्यादा परेशान कर चुके हैं। लाइक इनटू द ब्रीच आर फिगरिंग आउट कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, एंड इतना स्लो हो चुका है उनका पेस। जी हाँ, डिफॉल्ट खेल रहे, बट इट्स बीन इवन स्लोअर देन बिफोर। एंड Zyvo, कम ऑन, क्रॉसिंग पे गुड फ्लैश, ग्रेट फ्लैश बाय एपेक्स। ओह माय गुडनेस, दैट वाज सबलाइम। जिस तरीके से उन्होंने फ्लैश किया, जिस तरीके से पीछे हटते हटते उन्होंने मिडिल थ्रो का इस्तेमाल किया, शानदार, बेहतरीन। That was so good. जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ओह Zyvo, बिफोर दे कुड थिंक या एग्जीक्यूट करे, टीम वाइटैलिटी ने तो यहाँ पे इनटू द ब्रीच को अपने पोजीशन से जहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वहीं पे तोड़ के सेपरेट करके रख दिया है। एंड इट्स ऑल अप टू रैलन इन द लॉस्ट होप कि कहीं ना कहीं टीम वाइटैलिटी को एक और राउंड नहीं देना है। बट जिस हिसाब से वाइटैलिटी खेल रही है, एंड हाउ दे हैव द विजन ऑन द C4, उनको पता है मिड आना ही पड़ेगा, उस खिलाड़ी को रिकवर करना ही पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट के लिए जाना पड़ेगा। एंड ही हैज टू पुल ऑफ द अनबिलीवेबल 1v5। नो टाइम, दैट्स अनदर 13th ऑन बोर्ड। वाइटैलिटी सिर्फ और सिर्फ 3 राउंड दूर रहने वाली है इस मैप को क्लोज आउट करके, बिकमिंग अ सेकंड फाइनलिस्ट फॉर ब्लास्ट मेजर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेकंड सेमीफाइनल्स बन सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है गेम। अनलेस यू हैव 16 राउंड्स ऑन योर साइड, अनलेस यू हैव
2-1 और 2-0 जो बेस्ट ऑफ 3 होते उसमें 2 आपकी तरफ ना हो. It's not over until the fire lady sings. Into the breach अभी भी कमबैक कर सकते हैं. हमने 9:15 से कमबैक होते हुए देखे हैं. तो ये कौन सी बड़ी बात है. अनुबस पे हमने देखा है सीटी साइड पे खास तौर पे फेज ने किया था नावी के खिलाफ इसी टूर्नामेंट के अंदर. तो आई डू बिलीव इट इज पॉसिबल बट वी शैल सी व्हाट हैपेंस. 13-10 24th round on board. सेव करते हुए नजर आ रहे हैं into the breach. Okay, there is one AK जो इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं on Rallen. Again, Rallen जिस हिसाब से पहले मैप में खेले थे, it's not working out. And also surprisingly, Crucial भी इतना बेहतर नहीं नजर आ रहे हैं. And later down the line, second half में Cypher भी kind of nullify हो चुका है. It's only Walt who's trying to find something of value. And ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो kills है, वो first half में निकाला गया था. But दूसरी ओर अगर Vitality का बात करेंगे, everybody is in form. Zaiwu has gone like just how Cypher was in the previous map. 20 kills already था. यहाँ पे Zaiwu बोल चुके हैं ये हमारा map है. He's sitting at 22. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. Vitality 13-10 into the breach. पैसा नहीं है उनके पास. एक और राउंड की दिक्कत होने वाली है. कहते हैं T-sided मैप है, T-sided मैप, लेकिन into the breach उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है. तो बहुत बड़ी दिक्कत है. Rallen, oh boy. आगे पुश जरूर करेंगे. इकलौती गन थी जिन्होंने किल निकाला, लेकिन खुद तुरंत ट्रेड हो जाएंगे. एपेक्स और डुप्री वहां पे अच्छा खासा क्रॉसफायर बना के. थॉमस इन 1 versus 3. कैन ही पुल दिस ऑफ? दो आई डोंट थिंक सो. एपेक्स उनको शट डाउन करेंगे. ज़ोनिक अब मुंह पे इमोशन नजर आ रहे हैं उनके. यप पूरे स्टेडियम यहाँ पे खड़े हो चुके हैं ऐसे नजर आ रहा है. इट डजंट सीम टू बी दैट एनीबडी इज सिटिंग ऑन द चेयर्स. वाइटैलिटी जीतते हुए नजर आ रही है. 2 कदम दूर है अभी. एंड यू कैन सी sending them more energy. सारे वाइटैलिटी का चैन करते हुए नजर आ रहे हैं. Finally a proper buy coming through for into the breach. But दूसरी ओर sitting flush with cash. Team Vitality जो भी चाहिए सब कुछ मिल रहा है. Kills भी मिल रहा था. But वो डबल स्विंग Rallen की तरफ से एक डबल पिक भी होता हुआ नजर आता है. And now this makes a vulnerable situation. But look at what's happening. But just picks up one, but pays the price for it as Cypher sneakily pushes through the smoke. Oh, Crucial reading it right. Push आएगा, push को punish करते हुए नजर आएंगे. And now all of a sudden it's all up to Zaiwu in this 1v3 clutch. C4 का भी अगर बात करेंगे, they're still worried. Zaiwu कहाँ से आएंगे? That fear still seems to be running in the veins of Into the Breach. मुझे नहीं लगता इनके पास इतना वक्त होने वाला है कि वो हर एक एंगल क्लियर कर पाएंगे. लेकिन 50 सेकंड Zaiwu धीरे धीरे क्रीप अप करे. एक एक साइड को आइसोलेट करके कोशिश करे. लेकिन देखिए कितनी आसानी से, सॉरी कितने आराम से इनटू द ब्रीच इस राउंड को अप्रोच करिए. रिस्पेक्ट दे रही है Zaiwu को जो जरूरी है. 1 versus 3 को फिजूल में 1 versus 1 या 3 1 versus 1 बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अब सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है क्या Zaiwu अप्रोच करेंगे इस राउंड को. पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है. मेरे ख्याल से जाना चाहिए इनको रीटेक के लिए. पर अगर वो ऑफ दे के आते हैं तो और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ओह अब जरूर पक्का करेंगे इसको. अप्रोच जरूर करना चाहेंगे. उनके पास डिफ्यूज किट भी है. या फिर नेवर माइंड. आई डोंट थिंक सो ही वांट्स टू गो. जी नहीं. या नो दैट्स नॉट हैपनिंग. Into the breach, really making its mark everywhere right now. एक और राउंड अपने नाम जरूर लिखते हुए नजर आएंगे. The scoreline is going to be 11-13. Into the breach take this round in their name. तकलीफ जरूर लेके आ रही है. जिस हिसाब से इनके जो एक्सपेक्टेशंस पुशेस आ रहा है, आई थिंक थोड़ा यहाँ पे टीम वाइटैलिटी की तरफ से और एक्सटेंशंस होते हुए नजर आए. आई मीन Cypher finding one on site was not a problem, but उसके बाद जो मिड की तरफ से एक फोर्स आया था, those were some problems जिसको उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए था. The double swing just got one for them, so that's something that they had to think about. अभी के लिए वापस Zonic calls a timeout. I think अपनी टीममेट्स को समझा रहे हैं कि don't get too excited. बहुत नजदीक है आप, but ऐसे सिनारियो पे मत आ जाइए जहाँ पे हमें ओवर टाइम खेलना पड़े.
I don't think वहां तक जाने का मौका देना चाहेगी वाइटैलिटी ऑफ कोर्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी टीम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वाइटैलिटी जिस तरीके से डोमिनेट करी है, मुश्किल होने वाला इनटू द ब्रीच के लिए उस तरीके से राउंड्स निकालना. एग्रेशन हमें नजर आ रहा है, बार बार वाइटैलिटी उनको पनिश करने की कोशिश करी है. पैसा भी उनके पास है. इनटू द ब्रीच ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्रूशल के पास ऑफ भी है, तो देखना जरूर चाहूंगा क्या गुल खिलाते उस गन के साथ. ज़ाइवर का ऑफ बहुत कम चला है. सेम गोज फॉर क्रूशल. अपने सीटी साइड पे भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हमने देखा उस AWP का. लेट्स होप ही फाइंड समथिंग राइट एज ऑफ नाउ. डिफॉल्ट एंड स्लो खेला जा रहा है. ए मेन की तरफ थोड़ा कंट्रोल कहीं ना कहीं रखने का इरादा बना रहे थे वोल्ट. इज नॉट पुश्ड अप्स येट. दूसरी ओर into the breach is looking forward to if there's any push from B. Crucial होल्ड कर रहे एंगल अपने टीममेट के साथ बैकअप देते हुए. वापस बहुत धीरा डिफॉल्ट इनटू द ब्रीच की तरफ से. एक प्लेयर को भेजा ए की तरफ, 3 प्लेयर्स मिड की तरफ होल्ड कर रहे हैं एंड एक प्लेयर वैलन जो हमेशा बी की तरफ जाते हैं. डिफॉल्ट में फर्स्ट पिक निकालने की कोशिश जारी जरूर है इनकी, लेकिन निकाल नहीं पा रहे. बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे एंड बहुत ज्यादा नीड्स एक्सचेंज करी गई वहां पे. Jisk gets punished. वापस ये एक भी एग्जीक्यूट होने का चांसेस नजर आ रहे हैं. स्मोकिंग एंड मॉलिंग इट अप. साइफर ब्रिलियंट रीड कमिंग थ्रू. फ्लैश हो चुके थे. स्पिंग्स हैड नो चांस ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एपेक्स becomes a free frag. साइफर यहाँ पे 3 फ्रैग उठाते हुए इस राउंड में puts another round in favor of into the breach. ज़ाइवू समझ लेंगे कि हंट के लिए खिलाड़ी आएंगे. Before anything happens, he throws down that AWP. Does not want to give it to them. साइफर को जरूर निकाल देंगे. He's looking for another one, but Volt is quick to snap onto the head. AWP उनके हाथ बिल्कुल नहीं लगेगा. And अभी के लिए into the breach, even though they did not get the AWP, but already उनके हाथों में था. With Crucial, this is going to be a 12th round for them. 2 और राउंड सिर्फ दूरी पे है. साइफर जितनी तेजी वो फ्लैश अवॉइड कर रहे हैं. ये देखिए उनका हाथ गीला होते जा रहा था, वापस साफ करे चालू राउंड के बीच में. उनको आप हमेशा देखेंगे अपने टी शर्ट पकड़ते हुए जब भी उनको मौका मिलता है राउंड के बाद. जो हाथ में पसीना होता है उसको अवॉइड करने के लिए. जंप पीक्स पोजीशंस नोन. इस बार थोड़ा अर्ली कहीं ना कहीं बी की तरफ इशारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं इनटू द ब्रीच. वॉल के पीछे जरूर रहने वाले. दुप्री कैन ही फाइंड द स्विंग. जी हाँ, ही फाइंड्स द स्विंग अराउंड. नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीट्रेड एंड अभी के लिए आई थिंक इनटू द ब्रीच माइट चेंज द डायरेक्शन. रालन यहाँ पे टेक डाउन जरूर हुए. मैन एडवांटेज वाइटैलिटी के पास होने वाला, उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करे. मैप कंट्रोल वापस ले रहे सामने वाली टीम की तरफ से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल चीज़ है ये वाइटैलिटी जो कर रही है फिलहाल के लिए. रिस्की है जरूर, लेकिन ये रिस्क वो समझते कि लेना अच्छा साबित हो सकता है, बेहतर साबित हो सकता है उनके लिए. बिकॉज 2 राउंड की दूरी है उनकी अपना सेमीफाइनल स्लॉट गारंटी करने में. 2 राउंड और की जरूरत है उनको. एंड इनटू द ब्रीच ऑलरेडी बैकफुट पे और पीछे धकेलने की कोशिश. इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकाल चुके सामने वाली टीम की तरफ से. चाहे वो देखे यहाँ पे ऑफ जरूर है उनके हाथ में, लेकिन क्या वो किल निकाल पाएंगे? क्रूशियल कनेक्ट नहीं कर पाए वो शॉट. लेकिन जाए वो, ओह माय गुडनेस, एक और बार स्कोप जरूर खोला है. अब सवाल ही होने वाले क्या एक्सपेक्ट करेंगे स्मोक के अंदर किसी को. मेजर्स दुप्री, ओह नो, एपेक्स गेट्स टेकन डाउन. दुप्री, ओह मेजर्स गेट्स 2 बट क्रूशियल कम्स इन क्विक. ट्रेड कर दिया जाएगा उनको 3 वर्सेस 2 वाइटैलिटी के लिए. क्रूशियल को टेक डाउन कर देंगे. वो इकलौते प्लेयर बाकी थे वहां पे, लेकिन उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा.
Well. Vitality देखिए कितनी ज़्यादा खुश है फैंस, जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से चीयर कर रहे हैं. इतनी पैशन यूजुअली आपको देखने में मिलती क्राउड के अंदर, लेकिन वाइटैलिटी वन मोर राउंड अवे, एक और राउंड की जरूरत उनको मैप एंड मैच पॉइंट के लिए. अपना जो स्लॉट है वो गारंटी करने के लिए इनटू द ब्रीच. क्या इन्हें रोक पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. प्रेशर उनके ऊपर है. वाइटैलिटी ने काफी एग्रेशन दिखाया था, मैप कंट्रोल किया था एंड जो ओपनिंग पिक्स थी वो भी निकाली थी अपने आप के लिए. एपेक्स थोड़ा सा राइट साइड अगर एम करते तो शायद वो किल निकाल पाते, लेकिन नेट से भी ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए वो. लास्ट राउंड हो सकता है ये बहुत क्रूशियल, देख के खेलना पड़ेगा. इनटू द ब्रीच, दे आर द वंस who are right under the hammer. Mid push वापस नजर आ रहा है. दूसरी ओर रैलन जो है, he's carrying the C4 as of now. पर एक पुश आ सकता है उनके अगेंस्ट. एपेक्स फाइंड्स द फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट, बैक ऑफ करने का इरादा बना रहा है. उनके टीममेट भी है साथ देने के लिए एंड दे इमीडिएटली कंप्लीटली बैक ऑफ. अगर साइड पे आते हैं, साइड पे जाके ड्यूल हो सकता है, बट लुक एट दिस, स्पिंक्स का ओवर एक्सटेंशन को पनिश किया जाएगा. बट ज़ाइवो इज देयर फॉर द ट्रेड, स्पेशली C4 गिरा जाएगा. ज़ाइवो वाज गोइंग फॉर अनदर फॉलो अप, बट फाइनली मिड को ब्लॉक करने के लिए ही पुट्स डाउन अ मॉली. दूसरी ओर बाहर निकल रहे थे, रीलोड में पकड़ेंगे वोल्ट को एक एक करके इनटू द ब्रीच और लूजिंग देयर प्लेयर्स, मेकिंग मिस्टेक्स, होल्डिंग द एंगल अगेन. मैचेस फाइंड द सेकंड्स, लुकिंग फॉर द थर्ड. ओह, ही रन्स ऑफ द बुलेट्स. क्रूशियल वर्सेस Monte. आखिरी बुलेट एंड ही पुट्स राइट इट इन थ्रू हिज हेड एंड दैट इज टीम वाइटैलिटी securing the semi-finalists here in last major for themselves. होम क्राउड के सामने जब आप मैच जीतते हैं, सेमीफाइनल में जाते हैं मेजर के, एंड दैट वाज द लास्ट एवर मेजर फॉर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, तो सेलिब्रेशन का मौका जरूर होता है. लेकिन बात करें इनटू द ब्रीच के बारे में, इमोशनल इनके चेहरे, बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम खुश होना चाहिए उनको. द ओनली ब्रिटिश स्क्वाड एवर जो एक मेजर में इतना ज्यादा आगे आया है. किसी ने उनको मौका नहीं दिया था कि वो शायद क्वार्टर फाइनल्स तक भी पहुंचे, प्लेऑफ्स तक भी पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे. उन्होंने सबके सामने अपने आप को साबित किया एंड आई थिंक दे शुड बी हैप्पी. They should be very happy. I mean, they put up a competition against Team Vitality अपने मैप में, जहाँ पे उनके पास highest victories है, and also in front of big name teams. Into the Breach ने बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे करके दिखाया. They tried, gave their all, gave their best. अपने British fans को भी कहीं ना कहीं ध्यान पे रखते हुए they gave their A game. But on the other end, home crowd का जो support था, आप देख सकते हो, the entire place, they're all standing for Team Vitality. I think fan favorites रहने वाली है Team Vitality इस major को जीतने के लिए, and especially having it in Paris, there will be immense support coming through. मुझे नहीं लगता उसमें कोई डाउट होने वाला है, बिकॉज अगर आप फ्रांस में खेल रहे हो और फ्रेंच टीम खेल रही है तो उनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट होना है. बट चलिए सुनते हैं स्टेज पे क्या बात हो रही है. But I want to ask you this, but you've never had a French crowd cheering for you like this, I'm pretty sure. How does that feel? I'm not hearing you in the arena. It's too loud. Yeah. We can't hear it. All right, you talk in my mic here, Deputy. Hello. Yeah. There we go. That works. So yeah, obviously it's amazing. I mean, look at these guys over here. What amazing atmosphere they're doing. But you know, it's just amazing to play here and having to feel the whole crowd is just amazing. The crowd is certainly amazing, and we got ourselves a new microphone. That's most important. I didn't want to get too close to me. You know, we might set the wrong standard of idea of what's going on. But I want to touch on one thing. I saw your girlfriend, your baby, and I saw your family backstage. Little Dupree already watching and taking part in the action. Some extra motivation? To bring the family to these type of tournaments, you know, you want to show them what you're doing for a living, and it's only for a very small margin of tournaments you get the opportunity to bring them here. So bring them to majors and showing all the hard work and all the time we're spending in this game, showing what it's all actually about is great. So having them here and having the support is yeah, it means a lot to me. Now for you, there's this huge legacy when it comes to the majors. You would be breaking history, breaking records, becoming the only one with 5 majors. How much does that sit in your mind?
of course, I would like that very much. You know, that's what we're fighting for. But for first and foremost, we're fighting as a team to win it for vitality and for the team, and also just we want to prove that we can play really good Counter-Strike. I think that is what it's mostly about. And of course, if we end up having the trophy, I mean, that would be a huge bonus having a new personal record. But it's at the moment, I'm just trying to focus on winning with the team. And for you guys as a team, you seem to be peaking at the right time. We look at what happened in Rio. We're looking at your performances here. Why has it all come together at this time, the perfect timing, it seems? I think there's a lot of reasons to why we're playing this well right now. I mean, I think today we could definitely have played better. We played a little bit scared today in the beginning, and we had some situations that we probably misplayed a little bit. But overall, I'm still happy that we won 2-0. But overall, I think we've just worked very hard since January, like knowing when the major was going to be in Paris, having a French organization, 2 of the last French players around, and then obviously it's about making it count. And we know that in the beginning and also in 2022 we didn't perform, we didn't put up the results that we wanted to. So we've taken a little bit of a different approach, and we hopefully learn from our mistakes from last major in Rio. So I hope we're just going to end up having made up the mistakes and show that we can play really good here. Hard work is paying off. Dupree, welcome to the semi-finals, man. Everyone inside this arena, everyone watching at home, give it up for Dupree and Vitality! Cypher, you had the crowd against you, your first stage experience like this. For many players, they never even get to experience this. What did this feel like for you? How was it? It's just surreal, having a crowd everywhere, you know, on my side, on their side, just hearing everything. It's just an unbelievable experience. And when it comes to that experience, I want to ask you, right, you guys were still able to beat some of the best teams in the world. You were able to test Vitality in this game as well. Did you guys feel like you just came so close? And what was the differences of why you couldn't close it out? Because you think of Vertigo, it looked so great in the first half. I think they just played so well. They capitalized on our little mistakes, you know, and that's what best teams do. They just punish you on the little things, and we couldn't, we just made those little mistakes. And in terms of this, you make it to top 8 of the major. You look like a team that now we want to see more of. We want to see do some damage. What has this done to the overall team's confidence and mentality? I mean, it's incredible. Now we're going to integrate. Every game's just swinging, you know? It's all we can ask for, and the team's incredible. And how do you have that confidence to swing against some of the most notable names in Counter-Strike? That's all you got to do, you know? As an entry frag, you just got to hold W and swing. Well, yeah. It wasn't coming home this time, but next event? For sure. It's for sure. We love it. Guys, give it up for Cypher and Into the Breach. They put up one hell of a fight for you. Well done, mate. Brilliant. Vitality locked into the semi-finals, and the deepest we have ever seen the Chosen One making it in a major playoffs. It seems almost criminal that we've never seen them progress further than a quarterfinals, but even more poetic to do it in Paris. Vitality Maniac, they get the job done. They don't drop a single map in the series versus Into the Breach. The job is done indeed. For Vitality, I think what mattered today was to weather the storm of the jiggly moment. I think Dupree touched on it with James down on the stage, saying, you know, at the beginning, we were a little bit scared. There were a couple of situations we didn't play the right way, but they powered through this. And I think it was pretty clear to anybody that whenever they reached cruising altitude, it wasn't exactly a game. Vitality that was following the game plan were fine. The CT side on the Nuke is a great example. Sideways speaking left, right, and center. ITB is struggling to keep up with the pace. This was a team that outclassed their opponent, did the job nicely. I would 100% agree with that. From Vitality's perspective, this was the perfect warm-up leading into it. We have the man in screen right here, Dupree, talking a bit about it. Of course, surrounded by his loved rounds. Well. Yeah, with the baby as well. It's so cute, and it's so nice. It must be awesome for Dupree to finally feel that he's back on a team as well that contends for a major, right? We're talking about the fact he's been at every single major so far. He's won quite a lot of them, and now he's finally into another semi-final with a team that has a lot of potential. Can we just reflect on this moment we're seeing on screen? We talk about it time and time again, Dupree being the only player to attend all 90 majors. He began when he was practically a teenager. Now he's seeing out the end of Global Offensive, being a dad, having a
a family around him. This is why we love the history of this game so much. And it remains an extraordinary longevity, right? These are unique examples. There are only a few out there who have remained throughout the years. Apeks is a good example. dupreeh, of course, is one. And I think it's a testament to not only the perseverance they can show, but also their ability to adapt to new situations. We said dupreeh had rough periods in Vitality, rough times. Hell, he and Magisk for a while were just in the middle of a transfer of team, not exactly knowing what they were doing. They were sending out events, not even playing. Remember when they were in Royal Arena watching, That's my point. They were watching Astralis playing Royal Arena. We thought they might just be done. Then they joined Vitality. The beginning of the project is very rocky. We're thinking this was a mistake, and they just worked through that. Now in semi-final in Paris. For dupreeh, it's a combination of hard work with talent. I remember growing up with dupreeh playing Counter-Strike. Whenever we were playing Pucks, whenever we were playing B-Rush or whatever it's called back then, he was this annoying kid running around hitting headshots left, right, and center. He matured into becoming, I would argue, you know, one of the all-time greats in terms of rifling in this game. And yes, you get to this point. You get to play all 19 majors. It doesn't take only talent, it takes hard work as well. Remember, dupreeh has been fighting, he's been playing, he's not been sitting out for too long. We remember the one in Royal Arena, but other than that, he's been actively playing in all these different tournaments, and he remained competitive, he remained active, and he remained relevant. That to itself speaks to how talented and how hardworking he's been throughout all those years. And of course, we're talking about the poetry that is ZywOo finally making it to a semi-final in a major playoffs. It's been a feat that he hasn't achieved before. Obviously, it's been tough times with the pandemic, pausing majors for the time being, not able to battle back versus Na'Vi when they were the ones firmly lifting the trophy and, you know, back in Stockholm. For him, getting so aggressive in that final map, I love to see that. I love to see a confident form coming out of ZywOo. Yeah, this Anubis is an excellent showing for ZywOo, and I don't really matter the level of opposition. I just matter about how he played and how he behaved, right? When you think about ZywOo, you compare his major pedigree, and it feels like there is a disconnect. And although you could argue they were probably contextual reasons to that, would it be the lack of major? Would it be a team that wasn't necessarily here to support him to attend that level of success? I say we don't care about it. I say we only focus on ZywOo and what he can do as an individual level. That second map was a great example. Great walking into the playoffs, very assertive. I think he had 9 out of 11 opening duels in his favor. He was everywhere on the CT side, ridiculous 1.70 rating. That is the ZywOo that we need to see. Very commanding and also just feeling comfortable in that arena. I feel like whenever we see ZywOo play at the moment, we just get reinforced, we get sentimented that the fact that he is currently the best player in the world. There's no discussion, right? We try to keep it up. We try to say that Simple could fight back if he had a good major. Fact of the matter is the way ZywOo has been playing throughout this year has been some of the best Counter-Strike ever. Yeah, it's an absolutely incredible feat for Vitality to secure their semi-finals berth. So let's check in with this mic'd up moment in the winning moment for Vitality. One mid. In the middle. Go give. I'm rotating. Going to. Guys, careful Nico. I'm holding Nico. I have Nico. Then go fast. I block cave. Dead. One more cave. You stay player. I'm coming with you. Stay like that. One more was mid. One coming A. Okay, I'm rotating. Oh, nice. That's the video. Okay. I love that we get to check in with that exact moment. Smiles all around for Vitality and smiles for the fans and some tears as well in the arena. Yeah, it's fantastic to see. I really love this clip as well. I was just noticing the way Apeks was constantly looking right, looking left, constantly being aware of where his teammates are at. And we don't really discuss that a lot, you know, but when you're the in-game leader, you're sitting in the middle, you're Apeks, you're very animated as well. The fact that he's constantly keeping an eye on the mate screen right and left while still being alive himself, ready to shoot, ready to aim. He's a gifted in-game leader, isn't he? And we have to keep an eye on these mic'd up moments. How many times did Vitality players use the word communication in exit interviews? We hated it. I muted that word. we got angry about it. We got upset about it. But I think we have to keep track of how they're communicating. I would argue this was controlled chaos. There was a little bit of a peak of intensity, of course, as they were adjusting, making sure they had the right lines. But they eventually settled. They realized, okay, you have this, I have your back. We're good. We're just playing. And this is the Vitality that I want to see. Not just letting the horses go crazy and screaming around, because that's when they make mistakes. Now, they weren't exactly pushed to the point where you can lose control. Maybe someone can do that in semi-final. Well, we've got to give it up to Into the Breach. Nonetheless, right, it was a team that nobody expected to be here in the playoffs. The team, you know, making their first playoffs appearance here in Paris, had to battle against a home crowd, and they put up a valiant effort. We got to give it up to Cypher, obviously getting, you know, incredibly amped up, as we can see in the booths, but also delivering in the game as well. I think the story is twofolded in the sense that it's first and foremost amazing that a team that came together just 3 months ago played their way into a major playoff, the last ever CSGO major.
major for a fact. We spoke to Thomas. He said we haven't really practiced that much. All our practice happened in our official games, and they've been grinding and grinding and grinding these tier 2, tier 3 tournaments. Another aspect is what you said right here, Cypher. Some of these players, we didn't know them coming into the major that well. We have watched them a couple of times. We saw them doing the RMR play well, but it was almost for us a learning experience getting to know these players. How would they fare on the stage? How would they fare the Legend stage? We saw Cypher today play some fantastic Counter-Strike. Really? He put himself on the market right here. Obviously, I hope they stick together, but if you're a tier 1 organization, or if you're a team that wants to rebuild potentially, Entry Fragers is a very, very tough position to play right now, and the way Cypher conducted himself, not only on the stage, but also in the tournament, he put himself in the market right there. He's one of my discoveries for the event. Definitely. One of the players that I had none too low expectations, to put it this way, just blew him right out the gate. Very aggressive, and the amount of rounds where he almost single-handedly decided the fate of it. Just taking not 1, not 2, but like 3 duels, always looking for that next difference. That's definitely a great discovery. We've been blessed. I'm just looking at the stats for Vertigo and the head-to-heads between Cypher and ZywOo. Actually, even 6 out of 6. You know, you got to be happy if you're Cypher in that situation, right? I think that's fair. I think that's fair. For Cypher, he played a great tournament. It was good to see him, and as he said on the stage as well, he dared to play. He wasn't offended by the fact he was playing Vitality. He wasn't scared. He didn't hide. He didn't do what he normally didn't do. So great for Cypher to play good Counter-Strike, and as you said, one of the discoveries for the tournament. Well, let's check in with the results of the quarterfinals, as we had 2 going down today. Of course, Heroic prevailing above the likes of FaZe and Vitality. Hot to trot going through to the semi-finals for the first time in the organization's history. Of course, that first game, that could have been worthy of a grand final appearance, but Heroic match you, they are the Danes to be prevailing, and it makes sense, right? We talk about them as a team that have the potential always to be making it to grand finals in pretty convincing fashion. I thought the third map was an extreme statement from Heroic. That's what it was. There were so many different ways they could have crumbled after being pushed on the first map, and then FaZe handing them a little bit of a beating on Overpass, but you could just see the display of quality that this Danish roster currently have. Like the philosophy they have when they play Counter-Strike, they're so aggressive, so in your face, and they did it on the stage, not even batting an eye. So it's going to be real complicated to put Heroic aside. Heroic Vitality grand final, maybe I'll take it. I don't know. It's what the people were kind of murmuring around these ends. What I'm looking forward to look at, though, is our unicorn predictions. Time for me to vote. 2 out of 2, baby. I think we've reset. Yes, we have reset coming into the championship stage. Matthew, any words on the FaZe departure now? The way I see it, I'm only 1 point behind. So I would argue that's pretty commendable. True, but I have double the points that you do, so it depends on whether you're a glass half full or half empty kind of man. I'm more like a can empty. No, a full actually. I'm a glass full. I'm a glass full. I'm an optimist. Positive, yeah. I'm a positive kind of guy. Kids done now, or? Oh, sorry. Do we have an issue? Are we annoying you, Jacob? Yeah. Would you like to go to bed? Not gonna lie, you know. Well, the chance of redemption, Matthew, fear not, because we've got 3 more days of Counter-Strike going down here in the Accor Arena and 2 more quarterfinals coming your way tomorrow. Let's take a look at exactly what is going to be on the cards. And man, it's kind of the day of the underdogs tomorrow. We've got GamerLegion taking on Monte, then Apeks taking on Team Liquid. The first time we have seen Team Liquid making it to a major playoff since 2019. That's a crazy fact within itself. Tomorrow's going to be fun. It's the chance of a lifetime for a lot of these teams. Obviously, GamerLegion or Monte will book a spot inside the semi-final. I don't think anyone could have seen that coming into the major. Apeks have already beat Liquid in this tournament so far. Don't forget that the very first game we saw in the Legend stage between these 2 teams, Apeks won. So it could be very, very interesting tomorrow. Yeah, I'm very excited to get that underway. I'm also excited to be heading over to the Overtime show exclusively on Blast.tv with Jake Lucky as our host. We've got Moses and we've also got ZywOo in the hot seat. I'm going to put you in the hot seat right now. If you could ask a question to ZywOo, what would it be? So good. What do you eat for breakfast? No, I would ask him his resolution and sensitivity, please. Yeah. Asking for a friend. just want to get those hints. Just gonna copy everything immediately. Well, you guys can head on over to Blast TV to see all the action unfold over there. Make sure you're tuning in tomorrow for our 2 more quarterfinals. We'll see you then.